But no, you only have 2 days worth of gameplay. I'm going to say you can have 3 bad games. After that, if you get too many 0-point games, you are out of the top 2 race because it is going to be so competitive at the top, man. This is so unforgiving. What do you think about that, Neptura? 3 bad games? You think 3 games? I think 1. You get 1 bad game. One. But that's everyone's going to have bad lot. games. Everyone has like at least some bad games at the top. So I'm thinking 3 is like a good threshold. That's true. Yeah. Yeah, and by bad game means 5 points, right? Just want to clear. Yeah. Because it's going to be crazy, right? Because, I mean, it's only top 2, right? I mean, it was top 7, top 8. Maybe you could breathe a little bit more here, right? These are your participating teams that we're going to see from the different regions. But with top 2, you got to put something on the board, I think, every single game, Neptura. Yeah, you do. It's going to be really interesting to see because we've seen some big teams go really, really heavy in like the group stages, right, in one day. So like we had APG, for instance, one of the in Group Green that just popped off day 2, and after that we're untouchable. And that's going to really harm a lot of the other teams' chance because when you have a team that's farming points like that, it's going to be very, very difficult to bounce back from that. So I think a lot of the teams have to really look out for teams that have that potential to do that and just adjust their thing accordingly, adjust their strategy accordingly. I mean, look at this lineup, man. You got to say goodbye to 14 of these teams. I don't want to, but do we have a choice, Nipter? Unfortunately, we don't really have, and we're going to have to say goodbye to most of these squads. That's going to be heartbreaking. Yeah, for sure. So take a look. These are 2 teams we wanted to look at, Neptura, right? The Wolves versus Team Flash. This is the Team Flash's first time at PMGC. And Wolves, some players we've definitely seen here before, but this is their first time as a group. And they performed pretty darn good during the group stage. They really did. I was so impressed with Team Flash, honestly. To have a team that's not really known to me come out and then go so hard, so heavy, and be so close. Just that final game was the tipping point for them to not make it into the top 3 is really, really heartbreaking for me. So I'm really rooting for them unbiasedly, but I really do hope they do well here because I do think they really deserve to go to finals. It was great for them. Yeah, I wonder if they're going to try and qualify to the finals, and if they make it, just hot drop E-Arena because they ruined their chances early on to make it to the finals. That would be a funny storyline. But yeah, I would agree. Team Flash looking very impressive here. And looking at Wolves also, America's Hot Jukes NA. Yes! Be able to make it here. Oh, my sweet, sweet Wolves. Come on, you got to make something happen here. But it's going to be tough, right? I was really worried for them during the gauntlet, during the group stage, because I was like, man, last chance is going to be so difficult because you can't really afford a single misstep. You know, maybe 1 0-point game, maybe, but you got to be getting chicken dinners on top of that. But let's introduce these teams and take it on over to the Sub and WG to introduce the last chance squads.
And there are your teams here in the last chance, ready to pull out all the stops. Speaking about pulling out all the stops, of course, we got to give a big shout out to the Infinix GT30 series, the official gaming phone of PMGC 2025. Engineered for precision, performance, and victory, empowering every gamer to hashtag be the one and hashtag outplay the rest on the global stage. Well, guys, last chances here. We've been talking about it. We've been warning teams about it, right? Just really trying to push these squads to their absolute limit, because when it comes to last chance, it is so cutthroat here. I want to see any kind of like, oh, you know, all right, we're gonna land in this spot. All that's got to be gone here, Max Man, because this is it. Look, if you have a hot drop, except on Rondo, permission granted, you may hot drop in Rondo because it's actually good and useful. If I see it on any other map, Niptra, if I see on Erangel, if I see on Miramar, I'm fuming, okay? It should be sorted by now. Look, her eyes, she's angry. She's pissed. Just even thinking that a hot drop could be happening. So no, that should be sorted out, Niptra, if it happens. I think that some teams maybe have not done enough homework in their hotel room. Yes, especially, I mean, like when there's 3 days, then it's like, okay, maybe you get like one game where you can do that, right? 2 days, absolutely not. We don't have time for that. You don't have time to take the risk to have a 0-point game. That's just not a thing here. Not a thing at all, Jukes. Like 12 games is nothing when you really think about it, right? That's 2 Rondos. That's 4 Miramars. That's 6 Erangels. We don't have enough time to do hot drops. We don't. Stop it. Yeah. You know, I think Rondo is going to be so imperative here, guys. It really is, because, I mean, we saw what happened in Group Red, right? Day 1, E-Arena went so crazy, right? Sakura, it was like, what, almost a 30-point match in day number 1. And if something like that happens here, you know, and you segue off those points, Max, I mean, that could lock down your position early. It really could. Like, it could lock down your fate day 1. Right away. So you really got to be very careful how you're approaching a lobby like the last chance. But man, so much on board. And yeah, this Rondo in particular, Hot Jukes, these points you can get on board are so inflated because of the entire recall system. I mean, Niptura, we talked about it many times. Unless you're DRX and you get a 30-point Miramar, that kind of stands out as an outlier. But are we going to see maybe a 35-point, a 40-point bomb coming onto Rondo? I'm still waiting. I know it's going to happen one day. Could it be today? I mean, it is entirely possible. I mean, we saw Inner Circle in Group Green, day 1, get the win on Rondo with 18 points. I mean, that's a 28-point game, and the rest of the lobby isn't going to be getting those kinds of points if you're sweeping the lobby that much in the first game. So absolutely, Rondo could be huge, really, really imperative for your final result. And I think we saw that as well in Group Red, right, where it was like E-Arena getting that initial win, that massive chicken dinner with all those eliminations on Rondo day 1 actually helped them secure the top 3 finish as well. So the exact same story could happen here, definitely. You know what? I'm going to take control for a bit. Hodrix, I'm the host now. Okay? Okay. Top 2 predictions. Who's take making the it to reins. Grand Finals from last chance? Niptura, go first. What are you thinking? Inner Circle and Weibo. Ooh, okay. Yeah. I'm going with the side of Weibo and Wolves. What about you, Hodrix? Yes. That's exact. You read my mind, Max. I'm going with a double W. You know what I'm saying? I want to see the Wolves there. I am a huge fan of Weibo, Neptura, especially after seeing some of that Car 98 action. You know what I'm saying, from Order? Oh, yeah. So I want to see that bow in the grand finals as well. Yeah. I want to see that too. We've got to have Sook back. We've got to have Weibo back in the finals. It only makes sense, right? I do want to say shout out to Flash as well. I really feel like Flash could do something really cool here. Again, they really impressed me. So if they make it to top 2, I'm not going to be mad about it. But I do think that Inner Circle and Weibo, I think they do have the best chance of getting to finals. Yeah. I mean, I'm happy you bring up Inner Circle because I feel like we have seen, and I remember also Seven said something similar on his side of things, that we did see a lot of presence from Falak, not the rest of the team. I want to see PMWC Noki back on board. We remember how impactful Noki was on the second half of PMWC. We see him back at that level, Hot Jukes. Oh my goodness, Inner Circle could be on absolute fire for this weekend. Let's just see how on fire they're about to be, folks. The last chance has begun. Last chance for squads to make it and make their dreams happen in the grand finals. Will it? That is the question here, folks. You see these teams, you can see the pressure on their faces, Max, man, locked into their absolute maximum because, you know, especially when we were talking about it,
a little bit earlier. If you see these squads, if a team really pops off, or if two teams in particular, let's just say have a crazy like 2 chicken dinner day each, tomorrow is going to be that much more brutal, Max, because there's going to be some squads that we know for sure are not going to make it. How is that going to change the lobby in day 2, right? It's significantly, because you don't have that position in the middle of the leaderboards where you got a next stage. No, it's called last chance because, well, guess what? It is your last chance. If you fail here, if you're not in the top 2, your PMGC adventure ends right here, right now. So again, as Seven said earlier, there's no more room for mistakes. No more room for mistakes indeed, folks. Well, it's time to get this started. Let's go. Match number 1, Rondo. John Allen and Blank, take it away. Oh, some of these teams have been through it, Blank, but they have to go through a little bit more if they want one of those 2 tickets here in the last chance stage. We're gearing up for another Rondo, and we're ready to get stuck into the thick of it. Hot drops, recalls, hot drops, recalls, on repeat for the first 15 or so minutes of this match. Thing is, I think Rondo is an extremely important map for a lot of our teams here now, because with only 2 days, I think Rondo is going to be your springboard for the teams that are going to be coming in that top 2. I think if you're not able to do well in the top 2 in this game, it's going to be very difficult for you to maintain pace with the other teams. I genuinely think this is going to be such an important map for so many squads right now. If you're able to get those 28-point, 30-point games even potentially, that is a huge boost to you. Which is why Rondo's a little bit of a scary map to be starting on, because a lot of your game actually relies on this. It's a massive hot drop over towards Neox as well as Test Track. Oh my god. Oh my goodness me. This is so many teams already getting stuck all the way in here. You got Loops, you got Inner Circle, you got Influence Rage popping in, you got probably everybody else in the lobby right now popping off as well. There's shots firing across this test track, across Neos Factory. Redox is sticking the blade in, giving it a twist. Oh my the recall God. beacons around this area are real hot camping spots right now as well, Blank, but nobody seems to be going for them. Everybody's focused on the inside. Inner Circle busted down to 1. Influence Rage on 2 as well. The Falcons, they're not doing so hot on the inside, with Koa looking to crawl back towards Redox, who's trying to get the reload on. The UMP around the door frame. Federal super low. 7 rounds in the shotgun chamber. That's going to be pretty dastardly, but steps back, looks for the res, tries to keep it calm. There's so much popping off still, Blank, as the Wolves are also in this fight. It's so funny looking at even the leaderboard there, which was having an aneurysm trying to keep up with all of the elims coming through. Initial knock is good for 1, but not more than that, as Influence Rage will get back up to 4 there. I think Falcons are able to get a couple of elims. In the meantime, the Wolves are still going on the outside. They do have 2 players down, but Rezable now. What a massive hot drop. Again, this is what I'm talking about. Everyone knows they need big elim games. So where do you drop? You drop Neox. You try and get as much done as possible. You try and get as many elims as possible. There's no room for error anymore. I mean, a pie divided 8 ways, though, is really not that much. Unfortunately, every team getting just a sliver. Team Flash seemingly coming through, looking pretty good. They've got 3 elims, all 4 players alive. Currently, 3 teams sit with 3 elims on the count. No teams have gone down fully, which means those recalls will be starting to come on through. The question is where? As I said before, I'm surprised that nobody spotted all those parachutes and looked to start to camp the outside of things, look to try and grab those points on the route out as teams looked for those recalls. Could have been pretty profitable on this sort of 6-7 way drop that seems to have unfolded here on Neox Factory. Oh, I mean, everyone that might have held the outside inside at the moment. Yeah. Shots are going through here. M249 for Federal. As Influence Rage seem to be finding the majority of points here, up to 4 now. Arcred still holding on though, pretty strongly. Diego does get flushed out, and the M249 just not quite enough. There is an off angle there. Easy for Bad Boy, off in the distance. It's Arcred and Influence Rage who have profited the most. But yeah, everyone wants these points. Everyone wants the cash from this drop spot.
like you said, it has been divided so many ways that, there's only a few teams that really benefited massively in Wolves, the Flash, Influence Rage, and Arcred. And that's the question if Influence Rage can actually disengage from this. That is a big question as well for Arcred in the EMP zone. It's a little bit harder. I think that might just be off to the southwest side of that one. Well, there's a bit of a disjoint between what we're seeing. I don't think it's on top of them right now. Wolves are spotted though. Ooh, easy for Bad Boy. Spots Coops hopping on the hill on the top of the roof there. He will have cover behind the vents on the roof, which means they can go for the res. But Ramses is actually charging in and looking to control this flush, control this res. Coops, I don't think he's been got up just yet, but Batten is ever vigilant, and Ramses goes down very, very quickly. A nice little hold coming through from Batten, not going for the res, but instead deciding to protect his teammate. Yeah, Wolves much rather get Coops back up. Pretty important player, but Hardboy with a clean angle. Straight shot down the side. That is a double for him. Now looking towards Doran. Oh, that's a nade in hand. This guy went for the 1v7. So I felt pretty confident in him getting this elim. Nice little find there. And again, everybody going to be looking to get those recalls. You can see him already. The Wolves are on the recall. So it is now just Doran left here for the Wolves. Looks like easy for Bad Boy, the only representative as well for Arcred. Team Flash are a bit further to the north of this. Alliance are on the south. But no matter what happens here, Arcred will be looking for the recalls down on the southwest side. They've got Glory all the way down, Blank, all the way out. About 6 kilometers, I would say, away from this fight. What a pop-off at the start of the day as well. And you sort of expected it to happen here on Rondo, as teams know that this has to be their trampoline. It has to be their trampoline to get higher in the leaderboard early on, create that buffer. But everyone having very similar ideas, it is a bit of a problem. Now, 6 elims is a lot, right? For 6 minutes into the game. It just doesn't seem that way because there's so many other teams who are close to that marker. Oh. Flash tops will take down Doran. That's a very long shot off in those apartments over yonder. Yes, we but do again, have it's just still these extra points just being accrued over time, right? They should be resable. Everyone should be getting back up here. No one should be left high and dry completely at this stage. The points will just be pure gravy at the moment. And again, I think for these teams that did take the risk, they have profited, right? They have profited. Even if, Arcred is only 1 elim ahead of the Wolves, what they are absolutely is 6 elims ahead of Alliance, Gen G, Alter Ego, Inner Circle, all the way down to 16th, who all have 0 elims on the game. And this is going to set those squads apart from the rest now going forward, where you, like I said, you get this buffer. So no matter what happens in Neox Factory, as long as you're confident you can take those 3v3s, or at least a couple of them, and still get out for that res, and you've got those reses on lock, there was everything to be gained here for these squads. Absolutely. They've got a little bit more under their belt now. Arcred, the major profiteers, they may lose their last play, but they've got 6 elims already, Blank. They can get those reses all the way out on the southwest side. This is a really good start for them. But the question is transitioning into the middle and late game here. It's not infrequently that we see teams get up towards that 6, 7, 8 point margin here on Rondo, and then go down in 10th place, right, on the teams. It is a little bit sometimes not quite the full trampoline that you want, right? So it's about having a good start, yes, but it's also about converting that into a solid finish. I personally don't think it matters. I don't think it matters at this point. It's like if Arcred was going to have a bad game and go out in 10th place, they'd have 0 points if they didn't take that fight. I'd much rather they just had 6, right? No matter what happens, it's a benefit.
You're finding value from that no matter what you do. And Neox Factory is so close towards the center of the map. It's a really good position to start moving out from, even if you do cut away towards those recall beacons on the outside. So I genuinely don't think there's a downside as long as you're able to disengage, which all of these teams were. Well, we'll see if they can tuck those under the belt. But if you want top 2, Blank, I mean, that's a really tall order. You're talking about getting up over... I mean, if you get 120 points on 12 matches, it's pretty likely you're going to be in that top 2. But anything beneath that, it's a very variable part of the table. The top positions generally are very in flux. It's when you start to get down towards where 3rd place is going to be, down towards where 5th place is going to be, that sort of area of the table that is a bit more predictable. But the volatility at the top means that you need as many points as you can every single game. And sure, 6 points is good, but it's not 10, it's not 11. And that's what teams should be looking for here, to set their sights on those sorts of averages to get into a top 2 on a 12-match set. Absolutely. Yeah, I don't disagree with that. I'm just saying that no matter what happened in Neox Factory, it was value. Oh, yeah, it's a profit. It's definitely profit, for sure. For everyone, yeah. 6 points is fine. 6 points is fine. Like you said, it's not going to take you to the top. But for Arcred, that was a freebie. It's a freebie for them at 6 minutes. It's going to assist them. Compared to Alliance, they might finish out the game in 1st place, but only get 10 points. It's not going to cut the cake for them. Let's take a little bit of a zoom in over towards the map, at least, which does head over towards Neox. So you do have sort of the de facto winners, I would say, in the Flash. We're able to outlast pretty much everyone else in Neox Factory. They took a little bit more of a passive approach towards the end of that fight. Started third partying a little bit more. They actually have a strong position to move out from going forward. Gen G in a pretty frightening area of the map at the moment. A little bit difficult to play, but they have this small dish. They have vehicles too, which is good. Quick also, first time we see the pickaxe on the big screen. I mean, doing his best. Let's get through there, you know, creating those little divots. I mean, we have seen them be pretty impactful. Normally we see them being generated by the nades coming on through, but he's getting pretty far down there. There's only so far you can dig. I think he might have hit the limit there. But this is it's a decent bit of cover. It does eat grenades, though. If someone knows you're in there, they put a nade on, you're done and dusted. I feel bad for him. He's told to get digging, essentially. Wolves versus Arcred. So low right now. He just needs to get out and take the shots. Koos could even wait on the outside, but he's taking a little bit of a blasting. It's just a couple of shots needed, and they cannot find them onto Arcred. We're swinging past, but I don't think for long, as the Burmese Ghouls will be all that happy to pick up these points. They'll be thrilled with that one. Arcred try and crash out on that southwest side. That transition did not go successfully for them. Now with just the one player left standing, that point is taken away. 4 elims for the Burmese Ghouls. And Arcred, they stop on 6, Blank. So sure, 6 is good. But as I said before, it's not going to be enough for a 1st or 2nd place. Absolutely not. I mean, they get the 6 points. They don't go further than that. Burmese Ghouls grab 4 off them. So only 2 points behind that. Yeah, that transition was not great. Not great. I think you know that Wolves are likely going to be making a similar rotate to you as well from where they grabbed the recall beacon. I think they could have diverted a little bit sooner there. I think Burmese Ghouls being in this building is, I would say, fairly obvious as well, considering it's one of the few spots that are fairly safe on the outer edge of the circle. Weibo makes a great rotate in the early game. They grab high ground. They have that opportunity to get on through. They're fairly central, though Alter Ego kind of have quite a lot of it as well on that northern side of things. Team Flash coming up against Inner Circle. Of course, these two teams playing in different groups will not have faced each other before, and both very close to that bubble plan. Very, very close indeed. 5th place for Inner Circle. Team Flash just pipped to the post by 1 point by E-Arena. And both of them desperate to jump up towards the top spots. As you can see, they are taking that fight back and forth. Inner Circle look to be able to get this res as Team Flash now busted down to 2 on the north side.
If they're in a circle, I have big hopes for this team. On their first day, it looks really good, but I'm not sure what happened between then. But the performance seems to take a pretty big downward trend. Again, for Noki, I wanted to see some more of these fantastic off angles. He's a very good player when it comes to taking these 1v1s too. Not just Falak on the team. Now in a circle looking to hold out the rest of Flash. And Flash desperately looking for a knock on one of these nades, but not finding the angle just yet. These arcs aren't quite going through, and the circle going far down towards the southwest. Suddenly, it's a long journey ahead of them for the Flash and in a circle. They really do have quite a distance to travel. And they have to get a move on. I mean, Team Flash getting everyone back up, that's great. But now getting through this roadblock is tough stuff. It is hard going. A treacherous road ahead. Burmese Ghouls taking shots over towards Weibo, actually, who have been trying to find their way, and they moved Sook up to the middle. But now with 5 elims, Burmese Ghouls having a good time on that southwest side. Looks like they're liking Rondo today. Order goes down to the play zone, so a lot of Weibo not really being able to get in at all here. And actually, Kamikaze has been sat in the middle of this circle for a long, long time. Max brought something up in the chat. He thinks he's on top of that pillar in the middle, and the rest of his team now looking to regroup around him. Yeah, he's pulling the old Sakura strat. And the Sakura strat, without it, I don't think E-Arena would have made it into the grand finals. Nico, though, does find a good shove towards Sook, which will eliminate Weibo on their first game, despite a decent initial rotate as well. It's a little bit sad. Alter Ego playing pretty central position. So many great teams that could make it to the top 2 here in the last chance. It's actually so unfortunate we have to say goodbye to so many of them. Yeah, it is pretty nasty stuff, right? Only 2 of these teams, and I mean, picking 2 out of this lobby. I mean, I'm trying to pick at least 5 right now in my head, and it's a really tough decision. And I mean, in the end, it'll come down to who is better on the day, as it always does, right? But still, there are so many deserving rosters who have put in so much work from all across the world. We'll see if, I mean, maybe we'll have an American representative as well coming on through, a North American representative at that, in Wolves, because right now they're top of the pack. The question is, can they keep on to it? Because 6 points this early in the tournament, first match. First place means basically nothing. It's about getting through the rest of this game. Through the rest of the games you have left to play. Geek trying to take down Batten. They've already left Morin in the dust, but able to connect a really strong shot with that auto shotty, and now over to Nerzed. Attention, flung out wide, and he doesn't have the backup of his team to keep that angle under control. Now they'll marshal their position, though, and play a little bit more towards Geek. Yeah, Baton being down, it's a tough choice now for Wolves, and I think that for them, they are just going to back it off, try head over towards that north side, but they're barreling towards Papra Supermassive, as we've seen. Pretty treacherous in terms of the approach for a lot of squads. In a circle, dealing with the Falcons now, who crash upon towards the building. Initial shots are good, but Ralph does not find him inside the building. Oh, that is nasty. They can't make that run up, and Koa now trapped out in the cold. Only the one player on the inside for the Falcons. And you got to imagine Redox is going to bleed out. Not a good roll up for them. They had a terrible time on that northern side. They've got 4 points on the match blank. So still a little bit of a commiseration reward, but that's got to feel nasty. Yeah, for the Wolves also going down, Falcons is a tough approach. Tough approach over towards the southwest. Alter Ego that looks like they might be on for a winner right now, depending on how the south side of the circle ends up. Loops, Gen G, Alliance still trying to make it through. Alliance really struggling with their end games at the moment. Their early to mid game's great, honestly. 4v4 is not so much, and closing out matches just seems to be an impossibility for them. But the Burmese Ghouls, they're rising in the tables. 7 points right now, 4 players alive. It looks good. Yeah, they are on the outside of the circle here, Blank, on that southwest edge.
And you got to remember as well, this is the first combination that we're seeing of teams from both of the two groups that we had, Group Red and Group Green. And that slow style that we saw in Group Red, the faster pace, the more active decision-making from Group Green. They are coming into conflict now. And our teams will have to navigate as best they can. IC looking to hold out against the Boars this time. They're able to do it against the Falcons. It might be a repeat here. Noki may be on for a PMGC performance as Exo now, the last Boar to stand, does get the heal off, but inside the shack, he's still got more to do. Koa also has this outside angle. He'll take shots. Do his best. I mean, he wants a little bit of revenge, right? Good nade from Exo, but immediately falling to Little Boy at distance. Koa, though, spotted, which is a little bit scary now for him. I think Alter Ego could win this game. And it would be nice to see an Alter Ego finish. I think there's been a couple times where they get a little bit greedy on their peaks. So to see them close out a game strong will be very promising for their last chance, because I think they've had plenty of time to analyze what went wrong over in their group stage, which was a little bit of greed here and there. Ooh, Falcons are down in 9th place. A lot of this middle pack of the table in the middle single digits, right? And that's what you expect from Rondos, but even more so when you have so many teams hot dropping in Neox. It's a little bit disappointing for Weibo, for Boars, not able to extract value from one of the two Rondos, one of the two potential massive earning games for them. We'll see what the rest of the teams can do. 9ZG, not least of which, because they only have, well, they have 0 points blank, not a zip on their points tally right now. And up into 8th place, only the 1 placement point guaranteed. They do need to start to get stuck in here. Oh, so the Ghouls looking down towards them. There's smokes all around them, which does set up a bit of a mirage here for Burmese Ghouls to try and look through, but some of these shots are hitting. Yatka also too far away for these nades right now. That one gets a little bit closer, but a good shot from Godspeed. Starts things off stronger towards Melosa, who was the player trying to get closer to get those nades on board, but can't quite handle it. And the Burmese Ghouls continue to truck on. Against 9ZG, seems like they have things in hand, and 9ZG really struggling to move past the deployable cover. Not enough for them to stay safe from the Ghouls. Soraya spotted. There is an answering nade, and Ichi may be flushable there. He's quite far forwards on the position. Godspeed needs to move in to protect that. The nade bouncing between them, and Gatska goes down as well. Remix able to connect that shot, but again, they're able to reconsolidate. The nade to bounce around the edge, that could be dangerous, but not quite connecting. One from the back line from Collego. That might be a little bit closer. Ooh, nearly gets Ichi down, but not going to be quite the cigar as the Ghouls continue to strike back, leaving just one 9ZG player left standing. Godspeed, though, will get taken down, and 9ZG are giving it a bloody good go. Come on, Ichi. This is your moment to shine. Looking to take those shots down towards them. They're going for the full reset, but a nade over the top. There's a lot of nades in the hands of 9ZG. This one goes pretty far over the top. It's a nice air burst, but not close enough to the target. Nade over the top again against Unknown. Polygot surely doesn't survive this. Surely, with the Molotov at his heels, needs to try and come up big, but will fall down in the face of the Ghouls, who are up to 11 eliminations now, blank. They're over Papara Supermassive, who had Sakura Mountain under lock and key, but now they've had to descend. They are not so happy in the fight. They've lost Nico. They're down to 2 Kamikaze and lost both. Looking to try and keep things together. Alliance have loops rolling up on them on this southeast side. In the meantime, the Ghouls are looking to push on over from that western edge. A little repair work needed. Alliance fall. Loops crash successfully. 8 elims there, and we're on for some big games now. Oh my days. Absolutely we are. I mean, 12 elims of Papara Supermassive, which has come out of nowhere. Burmese Ghouls with the 11. Loops in 8. Influence Rage with 6, but only 2 players still left remaining. What a wild finish this is to Rondo. So many teams trying to push those point tables higher and higher. I mean, that's how you have to do it. Kamikaze with 6 elims. That's where we've seen a lot of farming take place from up on high. The res actually coming through is pretty big here for Papara Supermassive. They do need to push across, and having all 4 of your players there, 3 players rather for Papara Supermassive, is a massive benefit.
For Alter Ego, they're on 4 elims right now, Blank, but they have got the only center circle position. Alter Ego's just having a great time of it at the moment. Direct center. Rosemary looking to try and scout out what's happening around them. Good shot from Snape up towards Itchy. I think Burmese schools are kind of lacking on supplies now after that long engagement with 9ZG. Not too much time to get the loot on board either, it seems, because get ready for the push. Need to get that healing done. Maybe a little bit of infantry management. Godspeed on towards Rosemary. Kamikaze being torn apart, and Law able to shred through them. Papa Supermassive will fall. They're on 15 points though, Blank, so a good start for them. Capitalizing on that super duper high ground. Sakura Mountain is theirs for the taking. Loop's now trying to rock up on Influence Rage as well. Law will fall, and that will be the end of Influence Rage. So Loops with Nilzada knocked in the corner. Look at it go toe-to-toe with the Burmese ghouls, potentially, around the edge of this one, because Alter Ego still sit in the middle of everything, waiting for teams to step towards them. It's just so funny to me right now. This is basically like the guy sweating versus the guy singing and dancing off the distance for Alter Ego. They've not really had to do too much. They have just been at a recall, trying to call home. All of their change spent on Rosemary, getting to Thailand. It's been good. It's been good from them. Playing as 3, maybe there's an opening to be made here, but the fact that both Loops and Burmese ghouls have to make the rotate at the same time, well, pretty much the same time, could make things harder. But if Loops flex out, the Burmese ghouls don't have the angles, don't have the challenge over towards them. I mean, that's going to make Alter Ego's life a lot harder, but again, you need to push towards them. It's slap bang on top of them. Come on, ghouls. Now's your time to shine. I have worries though. I have concerns. Versus Loops. I think they're spotted now too. Smokes do go down, but it is a nade trap down there. Let's tag on towards Yakka. Godspeed gets out towards the tree, which is great news though. That little off angle is so important for them. These nades are terrible. That one's okay. The quick switch on the vehicle? Okay, okay. Happy feet from Unknown. He knows where the nades are, though. Underneath the car, unable to dodge through them. Still a little bit of damage from the Molotov, but they are in the zone, Blank. With all 3 of their players, they are just going through those passenger seats, diving in, finding their gap. And Loops can't tag on. With 4 players alive, they need to start to transition. They need to start to find something. Burmese ghouls have got no utility to speak of, and Loops have run their nade closet dry. Yeah, well, Alter Ego's only got 3 as well. I mean, Burmese ghouls have nothing, but they've got their guns and they've got hands. That's all you really need in PUBG Mobile at the end of the day. Krypton starts to move out. Has to look for something, but it's a high ground push towards them. Thing is that Loops will be silhouetted first, but it is this 3v4, which is sort of the difficulty for Loops. I mean, all those nades. I'm worried for Alter Ego here. All those nades that Loops put towards Burmese ghouls, I suppose it's kind of given them a load of divots to play with as well, which might help them against Alter Ego and make things harder. Loops want some of their own as Nilzada's digging in around the tree trunk. Really are in the mines right now, all over the place. Second time. I think that's the second time this tournament we've seen the pickaxe, and it's in 1 game. So teams using every advantage at their disposal. Yeah, this is reasonable. I don't think any team wants to be the first to face here. It's frustrating, I imagine, for the Loops that they don't get any of those nades off over towards Burmese ghouls, but that's a good setup on the smokes to deny angles. Unknown looks for the challenge on Ratto Boy. Steps out. Oh, what a shot coming on through from Unknown. He saw that peak. Ratto Boy stood bold as brass through the smoke corridor. And he has been clipped, but should be resable. In the pre-made divot with that pickaxe coming on through. It's always annoying that you can't see the smoke canisters in the smoke launcher on these utility bars at the top, Blank. We would have known that Loops had a little bit more to play with. Alter Ego, though, flexing out.
I mean, I like this, right? They have had the control for a while now, and they do need to pick up a lot of points from this fight. They want to continue to capitalize. Good shots again from Unknown off a distance. The Undead looking very much alive here in this endgame. As the Burmese ghouls continue to pop off, dropping loops down to just 2. 14 elims. It really is now time to arise for the ghouls. And they're on 3. 3v2, v3. Godspeed again, not taking a huge amount of damage from the nades, and the nades are all out from Alter Ego. Loops lose Ratto Boy. Krypton able to find the flush. Just Rafinha left standing. As soon as you get rid of Rafinha, all of a sudden the Burmese ghouls have a little bit more of a clear run here. They have a full frontal fight, and Krypton's low already. Maybe this is their time to strike. Maybe this is their time to arise. Godspeed on the high ground, position known, and no nades to speak of. It's getting to be mano a mano, hand-to-hand combat as Godspeed steps up. He's taken down by Krypton. Yeah, no chance there for him. Snape's off angle here is so important. I think the Burmese ghouls likely to go down in second. But this was desperately needed from Alter Ego. I think they held out for quite a while here. They weren't quite as proactive as we liked, but it still earns them big points. But I think it is the Burmese ghouls to take top pole position there with the amount of points they're able to score. Very chilled out game though for Alter Ego. That's what you want to see. Honestly, a very chilled out game is nice on Rondo and still getting some points off the back of it. You don't want to be the guys who are all inside of Neox Factory bare knuckle boxing. Oh dear, no, that was pretty nasty stuff. I mean, it was, who was it who was stuck in that hot drop and got towards the end there? I felt like nobody, Loops actually, were on that hot drop and did manage to get into that third place. So apart from that, seemingly, mostly our team's going down in the middle of the pack. But that point denial at the end as well, Blank, coming through from the Burmese ghouls, could come in clutch. On these short match sets, obviously those single point differences really do matter. And we'll have to wait and see if that will come into play later on, because there are only 2 spots left to claim in the grand finals. We'll have to wait and see who's going to be able to take them. But for now, Alter Ego, points. A couple more points for the Burmese ghouls. Let's arise to the desk. Forget everything you knew about tactical PUBG Mobile, because what we just witnessed in game 1 of Rondo was pure, unfiltered, violent euphoria. Maxman, Alter Ego, get the win in this one, but I think we were the winners, just being able to witness it. I want to replay this in the cinema in 4K 120 FPS because absolute cinema. I know I've been saying that the entire tournament, but the entirety of this PMGC has been unreal so far, and Alter Ego able to take themselves a solid win here in Iptura. Sure, maybe not as aggressive as some people would like them to be, but I think they were just passive enough to make sure that win was not going to escape their grasp. Yeah, they played this really, really well. Yeah, okay, it's more passive. We might have wanted to see them come in with the vehicles and just sweep the edge and get rid of all the rest of them very, very quickly. But I think they played it really well, especially considering they had the only building in the zone. And if you actually look at their vantage point, it's uphill, right? So they couldn't really see over the crest of that hill, and they couldn't know who was there and who was going to be waiting for them if they did get in those vehicles. So I think they played this really, really well, and how they should have played it. And you know what? They got the win, so obviously something worked, right? Definitely something did go in their favor, but I think some people were hoping for them to third party Loops and the side of Burmese ghouls, which I was also hoping for the same thing. But Loops, clearly, by how they were playing positionally speaking, they did not want to fight because they were scared of that potential Alter Ego third party. So Alter Ego were just not given that opening, and because they weren't given that opening, guess what? You just hold down the fort and you make it work out. But talking about a fight in a big fort, in the Neox fort here, Hot Jukes. How many teams were in here? Like, in this hot drop? What?
It was 5. It was crazy. I mean, the 3-1 split strat is the meta, 100%. I mean, it's so wild to see 5 teams drop in this area with 3 while sending 1 off to get res Neptura. And I mean, it worked out perfectly because so many teams were able to get a ton of eliminations to start this one off. Weren't they just? I mean, we saw teams coming out of here with 6, 7 eliminations just off the bat of this hot drop coming through here, and then they get that full reset, and it's just game as usual. It's a fantastic strat that I love that we're seeing come into Rondo. It was those rotations afterwards, though. You're seeing a lot of them here. This field in particular was really rough on a lot of teams. I think we saw like 3, 4 different teams fall very early. So it's the field of death, Maxman. It really was. I mean, it was so cool. So in Neox to see Flash coming in as a third party, they're like, the fight's over. Let's pick up the stragglers. The chances are there's not a full squad still alive. So I do really respect it. But though, I really like what John and Blank were talking about during this game. The pickaxe coming out and is now meta on Rondo, question mark, creating those dips without having to waste some C4s or grenades is actually very impactful. You're just getting a free little hold in these flat terrain finishes. And we saw it used, especially in the finishing moments, by Loops, if I'm not mistaken. So pickaxe meta is real. Better than the shotgun. Maybe not. Okay, calm down. Yeah, pickaxe strong, shotgun always stronger, right? It's so wild to see here though towards the end. I like the fact that we saw the Burmese Ghouls just kind of wait out Loops there towards the end because they had no choice. Blue was going to push them out. They did. But look at these points, Neptura. The Burmese Ghouls, 20 on the board for match number 1. Heck yeah, they are rising up those leaderboards. They are here to stay. We saw them be so quiet in Group Red, right? And then they started to be a little bit more active, a little bit louder. And now in Last Chance, they're coming in with a bang. They are shouting from the top of the leaderboard. 20 points overall. I mean, yeah, Alter Ego with 18, Loops with 16, Papara with 15 as well, right? It is close, but 20 points is a great start to their Last Chance. I mean, especially happy with Papara Supermassive Blaze. They had themselves kamikaze on that stone pillar for a majority of the early game, and the circle shifts down south towards the stone pillar, and the entire team just rotates, claims that position all around it, and even negate the rotation right, Niptura, of Weibo Gaming that, as we can see on these rankings, only get themselves 1 point. So actually, I really like the use of these stone pillars, really becoming such a strong position if it does end up to be in a mid to late game circle. Yeah, we've seen it before with Sakura and E-Arena, right? They had such a vantage point with those high ground areas with those rocks that they were able to control a lot of the lobby. And I think Papara were trying to do the same thing. The zone did move away from them, but then they actually used that to actually use their rocks as a information point. And so once the zone moved away, they were able to actually just go ahead and go around the south side and clear all those teams that they knew all the things about. So it still really helped, even though the zone moved away. You see MVP there was Krypton, and we move over to the top 4 players, and yeah, okay, it's got to be Kamikaze, right? He was the guy up on the mountain doing all the things. So not only information scouting, but some damage scouting as well. Yeah, just so you guys know, the MVP has to be on the winning team for each match, so that's why it was Krypton, but I was like, it's definitely not, stats-wise, it definitely wouldn't be Krypton normally. Unknown, by the way, Unknown this game, he had some shots where he was getting literally pre-fired by Loops, and he peaks, and he still gets the elimination. What a reaction time from Unknown, really standing out as one of the top-tier players from Myanmar in the Burmese Gold squad, and Rafina, and of course, Kamikaze, as you said. All the information in the world here, able to pop off on that stone pillar position. Yep. Neptura. You know what, Max? Definitely. Yes. You guys want to hear a crazy stat? Ooh, I just did the math. There was 122 eliminations in the last game. What? The lobby died twice. 122 eliminations. Because I was sitting quiet doing the math because I looked at the match rankings and saw 5th place with more than 10 points. I was like, how many eliminations were there out there? 122. That just shows how imperative Rondo is. Yeah. I'm really wondering what's going to happen tomorrow. You know what? We'll speculate that later, right? But we're getting into Erangel, Max, man. What are your big expectations going into Erangel?
Oh, Erangel? I mean, Inner Circle, right? I always love to see how Inner Circle play on the grassy pastures. I think they play extremely, extremely well. I wonder if they're going to have a little bit of a fight with Wolves on Western Bridge. Didn't happen before. I don't think it's going to happen here. So, but that's my expectation here is Inner Circle, Pakistan, on point. Let's go. Hey, are we going to see that comeback from Weibo here in Neptune? Yes or no? They've got to do it now. I sure hope they do. I mean, they're very quiet Rondo, so I think this next game they've got to make up for it. I feel like there's too much at stake here to really be lackadaisical here. Yep, don't wait, pull the trigger, make it happen. It's Aaron Gale. Will it be as aggressive as the last one? I don't think so, John and Blake. Hey, look, I hate to stat check you on the opener here, Hot Jukes, but I'm pretty sure it was 90 elims in that last match, which is still a lot, right? Don't get me wrong, that's like 10 elims over the odds for what we expect even from a Rondo, but 122, I think that might be the total points that were earned by the lobby. I'm not entirely sure. 90 in that first game. It got hot on the drop. Let's see if things repeat themselves, because hopefully not here on Erangel. A little bit of return to sanity as the south side plane path keeps us nice and tucked in towards Sosnovka, but still keeps a little bit of access to the mainland. Is it time for double Sosnovka finishes again? That is the real question on my mind. And I hope that the answer is no, because it is brutal, especially in last chance having double Sosnovkas. Just doesn't guarantee you points. It really doesn't. A lot of it is luck of the draw, where you're able to end up and how quickly you're able to get there, as well as just having drop spot advantage. But we'll see where the circle does go on this. Obviously for Erangel, you want to get as many points as possible. These are much higher averages over Erangel as opposed to Rondo or Miramar. Cuts in a little bit of Sosnovka, which isn't great, but we are heading down towards Milta, which is a great start for Papra Supermassive at least. Yeah, they'll have an option to take wherever they want to convert on their pretty big game in that last match as well. 15 elims found, 12 elims found, 3 placements, 15 points total. Looking to try and convert. 2 teams on Sosnovka, Inner Circle and Geeke as well. Looking to try and get across. We'll see who will be able to make that crossing, or indeed if they want to. Weibo on that north side, currently still in the car, maybe going all the way up to Severny. We'll have to wait and see. They'll have quite a road ahead of them, and they are all in one vehicle, so they still haven't reached wherever they're trying to get to. The Burmese Ghouls, they didn't win it, but they did manage to sit atop the pack on the points blank. 20 points found, a massive game for them. Yeah, a really huge game, and we do have an interview with Ichi coming up very shortly. In fact, right now, because he's been performing extremely good inside this lobby. Welcome to a quick report with the 7WG. I'm joined by none other than Ichi from BG, a team that's trying to mimic exactly what Yangon Galacticos did at PMWC. Go from last chance, get to the finals, and become the champions. Now, Ichi, I do want to pick your brain a little bit, because in that Ronda match, I think we had almost 8 teams fighting in Neox Factory. Your team decided not to do any hot drops. You decided to land on a 2-2 split in Hongshan. What was the reasoning behind that strategy? စာပိုင်း hot drop မှာမဆင်းပဲနဲ့နှစ်ယောက်home champ မှာဆင်းသွားတဲ့ပုံမှာ strategy ပုံမှာဘယ်လိုမျိုးဘာတွေပြောချင်တယ်လဲ ကျွန်တော်ရဲ့ target ကတော့အဲ့လို early game fight ဖို့မဟုတ်ကျွန်တော် late game မှာ4ယောက်စပိုင်းနဲ့ကျွန်တော် KD ကိုရသလောက်ယူမယ်ရတဲ့အမှတ်ကိုရတယ်လို့ယူမယ်ကျွန်တော် plan တော့အဲ့ဒါပါပဲ Our plan is not to take a hot drop, but to survive all 4 players until the late game to get as many points as possible. Well, it definitely worked out with the amount of eliminations you were able to put up. Now, with this amazing match that you have, what kind of momentum can you carry on into Erangel? How is the team feeling? The momentum ကို Erangel ကိုဘယ်လိုမျိုးယူရမလဲအတင်းအောင်အခုချိန်ခန်းစားချက်ဘယ်လိုရှိလဲကျွန်တော်ဒီ Erangel ကိုတော့အရင်ကအမားတွေကိုပဲကျွန်တော်ဒီကပြင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဆော့သွားမယ် momentum တော့ကျွန်တော်ဒီ momentum ကိုပဲထိန်းပြီးတော့ကျွန်တော် key point တွေယူမယ်အမှတ်တွေယူမယ်အဲ့ဒါပါပဲ We will keep this momentum and we will get as many points as possible in Erangel. Well, there you have it, Ichi from BG, wanting to be the champion slayers and continuing on to the grand finals. Back to y'all.
Absolutely. Brilliant stuff. Keep that momentum going. It's always tough, though, especially with such a packed lobby, such a stacked roster of teams on the menu. But if they can do it again, if they can keep things under control like they did in that last one, brilliant stuff. They were able to move around nades like I've never seen before, Blank. It seems like they just could not connect when they're thrown towards the Burmese ghouls. Could not. I mean, Burmese ghouls 20 points right now. I think that aiming for a late game finish, I think works quite well in the favor of the Burmese ghouls. I think that they're most comfortable in that 4-man endgame, personally. Oh, Rosemary going down this early is not great. That's actually very rough for Alter Ego. Currently in second place with 18 points. Like, this is the time to continue pushing further up the tables. That felt like not even a scout down towards that position. Especially on this circle as well, you'd imagine there would be a team playing either Milter Power or Mini Milter. In this case, it's Boars, who would probably want to take one of those buildings just in case, for basically contingency's sake. So for Rosemary just to rush that compound, it feels wrong in my head. Yeah, it is definitely not ideal losing your player early on that east side. Ooh. Yeah, nasty stuff. You know where the balls are. Bad news bears all around. Rosemary not going to be happy with that one. Genji on the south side rotate close to the walls. Actually, the Falcons are getting stuck in, trying to skewer that rotation from the sidelines. Alliance as well, just a little bit ahead of this. And Genji may be happy to play up towards the bridge. The area around this east bridge, Blank, is getting really full of teams, and they're all trying to roll it around and claim some of this land. Ralph goes down, knocked by a player from Wolves. Looks like Genji maybe pulling up short as well. Players are starting to fall. Actually, it's Falcons who lose Ralph fully. And in 3 teams rotating almost entirely exactly on top of each other. We'll see what more they can do. Narvalo goes 1-for-1 with Claws. I imagine they're both going to try and bunker down together. I think Falcons may be closer for the res, but the question is accessibility here. Yeah, I think for Genji, it's a little bit easier to sort this fight out. And I think for the Falcons, with just Koa here now and Redux off the distance, yeah, I think this is a bit of a wash right now for the Falcons. This game is going to have to be a case of just set it and forget it. Put it behind you. Likely not to get too many more points, just trying to live out, which is exactly what Redux is going to try to do going forward. He's probably sending towards the center of the zone at the moment, or trying to. I mean, even the center of the zone here, not super favorable. It's sort of in Milter around that roadblock right now. And the Burmese ghouls pretty much have control of it on their 2-2 split. Controlling that northwest side, forcing that fight to happen could be pretty good for them. Koa is under so much pressure here, and Quick was on the hunt. Even swaps to the passenger seat to get the spray down. Falcons down to 1 player. Blank, it's not looking like we're going to see them over in the finals. I think for the Falcons right now, it's hard as well. It's hard for me to say because I do really like the Falcons, but from how they've played in all of their aspects of this tournament, I have not been impressed, sadly. I think Narvalo's had some really... I think Narvalo is the one player that I have actually really enjoyed watching from that team, and I think he's given it his all and played his heart out here at PMGC. But even for him, this is a case of like, that's a long time coming for him as a player to really step up in a big way. But I've really enjoyed Narvalo's play. For the rest of the team, I'm kind of just curious of what's going on within the structure, because Koa is better than this. I think everyone at home knows he's better than this as well. So I don't know what's happening. It's not great from Falcons on the south side right now with 1 player left standing. Just Redox is there. We've seen so much from this roster in the past as well, climbing to last year at PMGC, for instance, pretty similar roster, getting all the way up to, what was it, 3rd place, right, in the London finals. But since then, it's just been moving from survival to survival, from not really having the greatest of times.
as this roster. So maybe it is time to sunset this roster. Maybe they need some new horizons. I mean, it's been together for a long time now. Unless they think they can pull it back together, which, to be fair, I would greatly respect if they tried to stick with it for another 2 seasons, for another year after this one. And we are kind of already counting them out here, but I think it's a reasonable thing to bring up. I mean, they're consistently in PMGC and they're consistently like making it to the top of the tables in their own region. So I don't think it's time to sunset the roster. I worry for them in terms of international success. You went straight to taking them around the back of the shed. I was like, whoa. Well, you know, you got to make sure that your players feel confident. And to be fair, often that decision may not come from the organizational standpoint, right? It might be the players themselves. And as you said before, it may be that they want more international success and therefore might leave the roster, try and pursue other avenues. Of course, this is pure speculation, and I don't want to give anyone the idea that I've got inside knowledge, but that definitely is a factor in decision-making, right? If you're a player that thinks, I'm better than this roster right now, I'm being held back, you are going to look at other opportunities, and that can really start to shape the foundation of the team. Potentially. Again, then we'll see. We'll see how it goes. Sometimes Falcons do start out really terribly and able to claw it back, but that's usually clawing it back towards the 3rd place, and 3rd place right now will not do the trick, sadly. Alter Ego, Burmese Schools, 2 teams that are up towards the top. Burmese Schools not the team I expected to be in 1st place after the first game of the day, but one I'm pleased to see there. I think they've improved a lot as the games have gone on. Alter Ego, though, I think that they're a little bit all over the place. I think they have massive potential, though. Massive potential. But there are games where I think they're the best team that makes silly mistakes. I'll put it that way. I think it might be up between them and Weibo, right? It feels like those 2 rosters have similar sorts of like, yeah, we got smart ideas, but then, oh, hang on a minute. Oh, Sook's gone down. Oh no, Order's out. Alva's fallen. Oh, Rosemary, what have you done? It's that sort of thing that seems to crop up for them, maybe more than some of our other rosters. The circle shift goes a little bit further up north, and Weibo actually going to waste no time rotating around towards Prison. Burmese Schools regroup off their 2-2 split that was across the road from the north exit of Milta. And they will need to... Actually, they may not need to move for a little bit longer, but up towards Shelter. That's where teams are going to be looking to turn their attention. And the Wolves and Gen G, they can't leave each other alone, Blank. Well, they are just hunting each other down frequently. And the Wolves are ahead, so they'll be able to get into the circle a little bit quicker than them. But the difference, in my opinion, between Weibo and Alter Ego is that Alter Ego is willful mistakes, whereas Weibo is just like, oh, we really sucked that fight. But no pun intended. No pun intended. But I think Weibo also has this weird consistency of weird tendency to be like, oh my god, they have just annihilated that team, and that was the most insanely well set up fight I've ever watched. To then go to looking like a 10th place team versus other squads who aren't even that great either. I think that's the one thing that's annoying for me about Weibo, is that one game they can look like the best team in the world, the next they can look like a middle of the pack team. It's not what you need either. When you need a top 2, they were in the contest for one of their 3 spots from their group, but not here anymore. Pause. Moving very close to Papa Supermassive, and Nico going to take a lot of fire, but his vehicle eats the majority of it. Lost in the hovercraft. Will bring up the rear there. Looks like they're going to get away with it scot-free and actually leave Boars around the edge of Prison, which is a tough place to be playing right now on this circle. In the meantime, we saw Gen G rock up on towards Arc Red. They've taken a knock towards Arc Red. It looks like it may be unresable. The Satan jumps on in towards Hardboy. Ramses as well, getting controlled by Claws. And there is a little bit of back and forth, to be fair. Gen G lose 1, but 2 is the price they'll pay. Hardboy being burnt out of the shack, but Quick is there with the backup. Coming through from Easy for Bad Boy. It is a trade. Once more, Arc Red
they will be burnt out and they will fall down. I think there may be one more of their players alive in the midst of it, or are they all gone and taken the knee? I think they're out. I think they're done. Arcred's done and dusted in this game. Cut out on the sidelines. Inner circle playing some high ground towards the center of the circle, around where shelter is. But mostly they are just playing around the shelter openings. Prison becoming a real hot spot. Hello! Okay, what a delivery. Fair enough. Take those. Sometimes the rest of Alliance want to roll on in. A little bit delayed, a little bit asynchronous from them, but they get 3 players up to the entrance. Redox, nade! Oh, it's huge! For Falcons and Alliance just... They're gone! They're done and dusted, and Redox is a solo. He's down in the shelter. Oh, such a good push from Alliance as well. They battering rammed it, they took out loops, and only to go down like that is really depressing. That was the time we're like, yes, loop, yes, Alliance, you're so good. This is what we've been waiting for. Only to get naded by Redox on a bounce. I mean, oh dear. Anyway, that's frustrating. I like that from Alliance as well. That felt like I hope that doesn't dissuade them, because I think they need more plays like that. More aggressive plays to take position in the lobby, and they would have done fine if they just backed off slightly from that angle where the nade comes out. They were taking shots from Burmese Ghouls, but again, like I said, I hope that really doesn't dissuade them from making those plays, because that was a good play in my opinion. All right, well, we'll see if that's going to cost them on the nerves front, because Team Flash are making it cost for Geeky to try to rotate through this open ground. Nerzed just about getting away with it. Kevin across the way, but they are going to slam straight into the balls, and Papa Supermassive and Weibo if they continue on this road. And they can't turn around, Blank. This should be done and dusted with Geeky. I don't think they're going to get... Yeah, no, they're going to struggle. They're definitely going to struggle. Prison is way more populated than I thought it was going to be at this point in time. Geeky doesn't really have too many options to move out. Like, they ever try and push through Papa Supermassive as well as balls, or they pass down to all the sidelines coming through from the Flash. So for Geeky, this is a matter of time. Good shots from Weibo, though. Actually stealing a lot of these from distance on the northwest side of it. No. Damn schools. Taking 2. Oh, it's unfortunate. Gen G have been circling around. They're up to 5 elims now, Blank. They've been scrapping it out, but Alter Ego going to chime in. They want the Burmese Ghouls in those final circles with them. They want a rematch. See if they can do it. The Boars sending the hovercraft down on the rocky face there and hopping in, hopping out. I mean, it seems to be going badly for everyone as Papa Supermassive are eliminated. But hang on a minute. No, the Boars actually stay alive as 4 players. And that might be resible. I don't think they're getting the hovercraft back, though. I think that was an invested, sunk cost. I don't think it needed to be invested, though. Kind of like tried to drop it on him like an anvil. Didn't do any damage. But it looked quite cool in the moment. Weibo, though, very happy that the hovercraft taken out of commission, I guess. Burmese Ghouls go down to the play zone. I don't know if that's points denial. I think it was. They were around the south side. They were getting cut out by the Flash. Which, at this stage of the game, I am okay with points denial. You know, it kind of feels troll in the other lobbies, but for here, with only top 2, you're currently in first place. You just deny those points. I mean, I think generally point denial is a pretty solid strat. I'll touch on more of that as we watch the Boars try and make their way past over towards Weibo. As Team Flash actually kind of now crunched in behind, right? They do have the option to go a little bit further west, but that would mean pushing over towards the shelter positions for Alter Ego, for Inner Circle as well. For Team Flash, it may be a question of just marching this fight forwards, forcing the Boars to drop themselves off the cliff towards Prison. But yeah, in general, I think that overall point denial, very, very valuable strat. We've seen, I think now there was a single point difference on 3rd and 4th in Group Red, a tiebreaker 3 ways on 11th place in Group Green. Very, very close bubbles being fought, even on these 3-day sets. And single points really, really do matter. So in general, I do think that denying points
in pretty much any lobby, unless you're playing out 6 or 7 days, is a good idea. Yeah, it's just annoying to me when I see a team that's in like an end game where it's a 2v4 and you deny the points there. Because there is possibility of winning that 2v4, right? And I think that even if you just get 2 elims, that's still good. That's where it annoys me. There's those situations where even like there's sometimes you get 3v4s and they deny points then. I'm like, no, just take the fight. You should just take the fight and try and win the game off that. Oh, Influence Rage, 9ZG. Influence Rage doing pretty well here on the northern side. 9ZG trying to crash in on the museum. Law gets spotted, but a big nade comes through from Lil Boy and a follow-up as well, and it takes them all down. Evaporated on the walls. 2 nades is all it takes, and 9ZG will fall. Good news for Influence Rage. They got 7 elims blank, and they're already guaranteed for that extra placement as well. As Alter Ego now with Gen G rocking up on them. Need to hold their nerve. Remember, they lost Rosemary earlier, but it's all up to Alva now. And Gen G gonna force it down into the bunker. The last player to stand, the res is on the outside possible. Claws, now he doesn't want to wait for it, because Team Flash bearing down upon them fast as you like, into the buggy, into the backseat. But Win goes down first. There's a trade. No, not going to be flushed away. Nearly goes their way, but it will now be more players that Alva was dealing with before on the outside. No time. Okay. Time for Inner Circle's moving across. This seems like a kind of a crazy and wild swing from them. They do get the initial shot through. It's going very well. Okay, just Falak the casualty here. Tops now left standing behind the vehicles, looking for more. Falak not going to be flushed out just yet. Bows on the high ground. Win gets the heal off, so now a 2v2 on this small engagement, on this skirmish. Noki wins the first. Win now the last to deal with. He's out in the smoke. He's got the pump action. On this south side, they're not in the zone and they need to keep moving. One flush found towards Inner Circle, and T24 will spot it, but he goes down to it. Win wants to challenge, and it's Noki to stand, goes for the spray, and it's Team Flash to fall. The rollout works out well for Inner Circle. Oh my God, what a swing from Inner Circle. Did not expect that. Weibo still going strong. They held out towards prison. They got 6 elims off the back of that. But for Inner Circle, that gave me a heart attack. Like, it's not, definitely not the most necessary of pushes. But if you want points, you hear fighting and you're confident to take it, just take that fight. It clears out so much space. Influence Rage, though, nice. Reach out from them. They send Law slightly down. They scout out what's going down on that south side. But yeah, for Inner Circle, I don't think it was necessary to do. But in terms of points and just securing the southern portion of the circle, fair enough. Do it. Taking a look at the state of the lobby. Blank, I mean, Influence Rage, they're converting off an already strong game. They got 13 points last match. They're looking to try and pick up a big one here as well. But the Burmese Ghouls down. They are going to be taking first place. Alva is just going to stand there. And he's now giving the game away. They know he's in there. Falak does take a little bit of shrapnel, but that will be healed up nice and quickly. And Inner Circle up to 9 elims here, Blank. On the southwest side, though, they're the most penned-in team. Weibo Gaming trying to find some open ground to play with. He may as well have wrapped himself in Christmas paper and then tied a little ribbon around his head. It was just an elimination present. Curious maneuver from Alva. Had a lot of time, I feel, to try and wrap out or crawl out into the field. Something, anything would have been great. Weibo now. Looking over towards Inner Circle, but a great shot from Noki. This guy on some of these off angles, so damn accurate. 600 damage on the grenade on the game already is lovely to see. Falak standing closer. He's flexing out for them for Inner Circle. They are just about on the edge of this one. With the res needing to come through from Weibo to keep themselves up as 4. I know that it's not going to get regrouped towards at the moment as well. They can move a little bit more freely on Falak's position. He's really going to take that opportunity. The nade's still rolling forwards, not quite connecting. Suk steps out into it. See, just about dodges back behind. There's another one under the vehicle. That doesn't touch on. Order gets the heal off. Damage is done, but Falak doesn't quite capitalize on a sliver of an opportunity. But when you don't know where they're playing with those 3 smokes out, you just can't be sure. Those are some of the rawest grenades I've ever seen.
not cooked at all. Spent no time. He let them look at the oven before he sent them out. Could have probably had a double elim there if he'd cooked them up a little bit more. Down a three-way at the moment with 3 players on inner circle and then 4 for 4 on both Influence Rage and Weibo. Weibo has the circle to play around with on this aggressive 2-2 split. Yeah, this shift has really helped them out pretty effectively. Sook does take a lot of damage from range, and I mean, inner circle are just beaten down on this Weibo position. Sook and Order have been through it. Falak, I mean, as you said before, if those nades had been able to connect, this is a very, very different game as well. With the opening of that south flank, Influence Rage, looking to get ready to leave. Up towards that ridgeline, you expect them to be moving out, and they are going to head over towards this north point of Weibo. With the pressure that's felt on the south side, there may not be enough backup here. Yeah, it's a lot for Weibo to handle. And like, gonna get harder and harder. Luckily, Weibo holds some pretty damn strong areas. They've got a small outpost here. I think for Weibo, it's kind of game over right now. I don't know what the plan is. Like, why sit here if you have no nades to defend with? It's okay, there we go. Order's getting one back out. I think they were just on chain healing each other right there. And the nades now from T24's pocket going to start to chime on in. Probably starting to run a little bit dry. An immediate 1-2 punch. Noki and Falak very, very quickly going down. Influence Rage going to mount their offensive now onto Hero and 33Z. Attention may need to be drawn away, which might give IC some time to get the reses. Diego sprayed 1 for 1. Order is down in the process as well as Influence Rage taking the north side. 33Z trying to charge on in. Back up to the rest of the roster. Goes for it. The double rundown stopped by the buggy, and he falls to the spray. Malak can now get back to his feet. Order, you need to be putting attention over towards that south flank as Influence Rage are moving through. But no, they take the time. They take out Inner Circle, who have done a lot this game, but Influence Rage looking to run riot. Take that top spot of the tables. The passenger seat burnt out though, but it will not matter. A big sweep around, and it's Influence Rage to take the chicken dinner here, Blank. Weibo just could not stand the crunch. It's a messy game. It's a really messy game from Weibo. I get that they want to wait for Inner Circle to be a little bit closer, forced in by the blue before he starts sending nades, but they just were sitting ducks with Order and Sook there. I like the play from 33Z where he sends away, he leaves Hero behind, so Influence Rage looks to chase. I think Hero gets impatient though and takes the shots a little bit too early, at which point Influence Rage just instantly turn around and put him down, which was pretty damn good play from them though, to be fair. A lot of solid plays in that one. Some questionable. Alliance, you liked their roll up towards the bunker. You liked that Inner Circle roll up towards that same bunker as well, as they were able to clear out that side of the map, get a lot of points for their trouble. But Influence Rage converting off a 13-point game into a chicken dinner on our first Eren and Gel is brilliant. The rage is real as Influence Rage gets their first chicken dinner here in Last Chance. This one was wild. I gotta give it up though for Inner Circle. They made some very bold pushes. I think we're definitely seeing teams, Max, here adapt to the lobby, understanding that we only got 2 days. So we're seeing a lot more riskier gameplay for sure. Oh yeah, some teams are going to get very desperate to get every single point they can really gather in these matches, and one of those teams was going to be Inner Circle. Really big fight onto the side of Team Flash into Shelter itself. The nades though, not ideal. I have to say, Falak, as much as we love saying how good he is with the utility here, so much of it was wasted on Weibo. The fact that Weibo just lived against, what was that, maybe 10 plus nades thrown their way? Yeah. It's kind of wild. Yeah. Well, the problem is that he wasn't close enough to them to get those really close range nades. That's his specialty, and he just wasn't close enough, Max. He was too far away. He was like, I'm not Doc, what is this? I'm Falak.
and it's just not working. So I did like the idea that he went back to his team, regrouped, got more nades, and tried again later on. So again, it's that momentum, their mentality of we need to push and push and push and push, which is really nice. But Influence Rage, on the other hand, on the north side, just able to 2-2 split out of Museum, wait for everything to start erupting, and then make the pushes they did was really well played. Great timing from Influence Rage, really. The way they just rock up onto Weibo while they're split and while Inner Circle were also committing to their fight versus the two players of Weibo was perfectly executed. I do have to agree, though, with Blank, there was definitely one player there that shot a little bit too soon. I believe it was Hero for WBG that I think he waits maybe 5-10 more seconds and really puts Influence Rage in that sense of false safety. They maybe get 2 knocks and then it completely turned the tides of that fight versus Influence Rage. Luckily enough for Influence Rage, that did not end up being the case, and they do wrap up a Brazilian chicken dinner here in Last Chance, which is always a great thing to see happen. Max, Jukes. Yes. Do we see What's Little up? Boy right now? 6 eliminations, 27 damage taken. Hey, popping off. Museum does that for you. Yeah. I'm not too shocked. Actually, looking at 90 Globin's push, Niptra, we had a bit of a back and forth during this game. I'm fully against crashing Museum on the walls because it's so nadeable. And you know what? Influence Rage, they just chuck, what, 3-4 nades? Squad wipe. Like, it's 90 Globin. Yeah. Yep. If you want to crash Museum, that was definitely not the way to do it. I don't think we've seen a Museum wall crash work out so far here in the PMGC. It's just one of those positions that all these teams just know all too well how to defend against. This one was a really crazy start, though, off the rip, right? We saw some great fights ring out. One thing in particular, though, was this player right here, right? Loops versus Alliance. And you can sense the frustration because Redox down from below with that nade was just too clutch, Max. Yeah, I mean, I would be disappointed too. I was like, we didn't even know he was there. Maybe they saw him, they were like, we thought he was a teammate. We thought he was on our squad, but no, it was Redox from the Falcons that are just... I keep saying this, the issue with Falcons is losing players early game. It just keeps happening, and you don't have a recall tower on a wrangle. Not yet. Maybe in the future, if they add it, maybe you could do these strats. But as of right now, it is not viable. As now, the crash onto Alva, I was a bit scared, Niptura. I thought they were going to do the mistake and give up maybe 1 or 2 players to Alva for free, but no. They peek it correctly. They get the high ground. Good play from Inner Circle. Yeah, some really good stuff. There you go, Little Boy able to take out that really big danger player from Weibo and get that win in the end. It was a messy fight in the very end, but they did clutch it out in the meantime. We look over to our rotations, and it was a weird circle, Max. There was a lot of really, I feel like it's a compact area of the zone, so a lot of these teams are going to struggle for that position. But we see a lot of rotations coming through here, and it's a Weibo on the north side, Inner Circle on the south side, Max. There's a lot going on. I mean, I want us to all pay attention to Weibo in particular. So they play in Lumberyard Mountain, northeast of Mill to Power. Here, I was thinking maybe they'd go Prison High Ground, but they knew there were so many teams that were going to wide rotate east of them. So they just, okay, let's go a little bit deep in the circle, wait for the fight to happen between Boars. There was also the side of, there's another squad over there. I forgot the name who it was, but there were 2 squads fighting to the eastern edge. And the fact of moving ahead of them allows them to easily not only just third party them, but also get a really good anchor point in the circle itself. So playing that Harry Potter Tower west of Prison was a very smart play from Weibo. Sure, they don't win the game, but that play alone easily secures them a top 3 podium finish in this match. Yeah, it Big really points. does. And I also really liked the 2-2 split. I'm surprised they were able to hold on to that 2-2 split for so long, right? But it really helped them maintain some balance in the zone itself. So GG's over that way. Big points on the board. We can see right here, Influence Rage picking up 20, Weibo getting 15. They so desperately needed, especially after having a rough Rondo match. We got 2 more Aaron Gales left today, Max, man. And yeah, I mean, it's so crazy because the hype from that Rondo was just ridiculous, right? Just so much aggression. I think we're going to start seeing a little bit more of that, especially in this next Aaron Gale, because teams are going to start falling behind already. I mean, this is only 2 days. Right, you really can't afford a bad game. Yeah, really. Can't afford to have too many bad matches. I mean, some teams just had a bad game after a really good Rondo. I'm looking at Burmese Ghouls in particular, right? They had a great Rondo. This 1-point game kind of going to be negated by that initial first strong match. Same for Papara's Supermassive Blaze, right? Able to get himself such a banging first performance with double-digit elims. This 0-point game hurts them a little bit, but you know what? They should still be towards the top of the rankings as the MVP of the game is Little Boy, also known as 7 Worlds Gaming's alt account. And he's going to be popping off it. Good game.
No one? Yes, Hodges, boy. Hodges is not laughing. What a Hodges legend. did not like that. What a legend. Hey, listen, it's always good to see, you know, Influence Rage pull out a chicken dinner. I think they've been the most consistent team so far, at least for the first 2 matches. I'm really looking forward, Nipter, to finally getting a good look at the overalls, right? Because I think that's where it's going to really just show how crazy this is. And you can see it. Yeah, Influence Rage on top, 33 points. Alter Ego in second with 23rd. And remember, it's just 2 teams moving forward. Everyone else is gone. And look, as we look at the second half of the leaderboards, Niptura, right? Look how far behind squads are already from that top 2 position. Wow. Okay, I'm going to say something, though. I'm going to predict that it's really going to come down to that final game tomorrow because the points in the top 5 are so close. I mean, yes, Influence Rage are kind of running away a little bit with it, Max, but look at AE, 23, Burmese Ghouls, 21, Inner Circle, 21, Loops, 19. Like, it's very close right now. I do think we're going to see probably another group red situation where it's all coming down to that last match. Hey, even if you're 90 Globant, you pull a DRX Miramar win, you're in top 2. I'm just, hey, technically it is possible, right? It is in reach of making it up into the top 2 of last chance stage. Looking at the top 4 players though of this game, Sook is up there, 33Z actually. I really want to highlight 33Z. I know we harp on about order typically. We talk a lot, especially about Sook. But man, 33Z, those sprays onto the eastern side next to Shelter Prism was so pinpoint accurate. So I'm loving to see 33Z really just shining in this lobby for the side of Weibo. And same for Noki that, hey, you know what? A little bit of a repeat from PMWC. He stepped up to the plate, redeemed literally the entirety of this game for Inner Circle. It's so good to see these solos just getting these big pop-off moments right, Niptra, and just pretty much saving the day for their respective squads. I mean, Naki really was the glue that held the team together when they pushed Flash, right? Because he was down like 2 HP. He was able to get, I think, pretty much a full reset, at least back up to a 3-man, right? Off of the back of that push with Team Flash. So he was able to really just clutch it up for his team. We've seen him do it before. He did it again, and I look forward to the next game where he's going to do it one more time. Dan, by the way, 33Z, that drive towards the end, Max, man, I thought he had that double run over in the bag, but it was just the wheel from that buggy, the MVP, right? Just stiff arming him right there at the last second, and Inner Circle survive a little bit longer there. But you know, a great first couple of matches. We're going into match number 3. Okay. It's still too early, I think, to start calling like any kind of wild strategies. I think at this point you still kind of play your game. The thing is, though, like, let's just theorycraft here. If Influence Rage, let's say they win this next one, right? How bad do you think that's going to disrupt the rest of the lobby? Ooh, I don't think it's going to disrupt much. I think teams are still going to just play their own game until at least day 2. Day 1 is just kind of setting the pace and setting up the storylines for day 2. So I think that we're not going to see big changes today, I'm expecting, Niptura. What do you think? I think that if there's a team in particular, maybe in the Miramars, that feels like they have a chance to maybe mess up some rotations or something like that, they may try to do that a little early. So we may see something happen in the Miramars, I think, earlier or later today. But I think earlier than that, no, we're not going to see much other than just teams playing their own game and just doing their own thing. Yeah, I think you got to go for those chickens. Yeah, Ratto Boy, man. I wanted to see him make that play there. Unfortunately, it didn't happen. But you know what? I mean, it's so crazy to think about, right? Because it's just, this is it, guys. This is the last chance, right? 14 teams are going home. So I think if you start seeing a squad run away with it, if you happen to realize like, oh, I'm fighting this team, I think you really got to go after them and try to take them out and stop them at all costs. I mean, we are noticing a difference in strategy, I think, for sure, especially from the last group red. The aggression is really high. We saw Inner Circle making some pushes that even Blank was kind of like, I don't know about that push, but I just think it's because of this last chance. They're like, you know what? We got to get eliminations. We got to risk it here. Yeah. I mean, when you were talking about disrupting the lobby, I was talking more about like hot drops and stuff. But if you get a flush onto a player, you know it's from a team you want to target and get rid of in the top 2, then that could definitely have an impact on the lobby. So I would have to echo that could be a big issue moving forward. Yeah, I agree. It's got to be something drastic, though, to really knock them off of their momentum. I want to just shout out as well very quickly.
is a lot of we were talking about how different it is, particularly from Group Red, right? The sort of the mentality coming in here, it's much more aggressive, much more risk taking, which I love to see. And I think Inner Circle have really stepped up to the plate. They're coming in with a bang. I think Team Flash in particular, I know I keep going on about them, but their first time to PMGC and they're playing like this, like coming into Last Chance, you would expect that, you know, there'd be a lot of pressure, you know, they're not feeling so good because they nearly missed out, or they did miss out by just a couple of points, and they're like, oh, there's only 2 spots left. No, in this game, they were sweeping the south side. They were moving in. They weren't getting tunnel vision. They were third partying and then regrouping, and they seem very, very mobile as a team. So I would love to see all the teams behave like Flash is, because they are doing so well with their mentality in this stage. Yeah, it's so good to see a team like Team Flash again, like first time at PMGC, being able to actually get involved in these fights, in this conversation, trying to do something. They're desperate compared to teams. Hodgix do a play passive, but Team Flash, they're not like any other team out there. They're a team that is desperate to be in the top 2, and maybe they're going to try and reach it in this third match of the day. Let's see if they can. Here we go. A second match of Eric Gale. Let's get this started. Max and Blank, what do you think is going to happen in this match? Military Circle? I guess I'll let you take this one, Blank. Max's opinion matters. Yours matters. Yeah, I'm just left Max out in and the Blank. cold. John, no. you just don't matter here, man. I'm so sorry to say it. It's the darn truth. It's the darn truth. I apologize. Just the way things happen. We do have a horizontal playing path here. Very comfortable, actually, for most teams. So overall, so far, the circles and the playing paths, at least, have been fairly forgiving for most teams. I think Hotjuice is right, though, in terms of Inner Circle. Yeah, the pushes are like, they're questionable. Real questionable pushes, but I think if they want to push more points, then yeah, they have to do it. I'm just about recovered. Right, let's get stuck in. Playing path on that north side. Gen.G on board with them right now. See if they can keep going. They were pretty aggressive. They were pretty mobile in that last match. Didn't get a huge number of points, but a decent result nonetheless. Heading on down towards Quarry, down towards Primorsk on that western side. No other hot drops really popping out to me right now. Potential for 9ZG Papa Supermassive to potentially clash, but the circle up towards Stalber here. Yeah, it's a long shift away from many of the places we've been heading over towards on the map so far. I mean, up towards Stalber's very different change of pace for a lot of our squads. Around Yaz as well. So for the Flash, nice start for them. Little boy in the vehicle, hops it on out. Influence Rage now our tournament toppers by 10 points. We caught up with them on the stage to see how they're feeling about it. Welcome back to a quick report with the 7WG. I'm joined by Influence Rage, being able to clutch up that win. Little boy, I want to know, in the last day of Group Red, you made some tactical changes. Federal was able to sit out. Coming into today, you guys have 2 great performances. Federal is back in. What led to those changes, and what are you guys changing up today as well? Então, no último dia do Grupo Vermelho, vocês trocaram ali o Federal pelo Lohanzinho. E agora, para o Last Chance, vocês viram com o Federal de novo. O que vocês mudaram, assim, de estratégia, de gameplay? Bom, eu acredito que a gente é um coletivo muito forte. Então, o momento ali não estava sendo bem aproveitoso pelo Federal. E o Lohan entrou bem, entrou quente. E isso faz com que o Federal de fora vê o que está acontecendo e volte mais forte. E foi isso que aconteceu. So, yeah, we have a very strong team. With the 5th player as well. So this day we decided to make a little bit of a change. So Federal can try to watch a little bit of our game and how we are playing and the mistakes that we are making. So right now we come back with him. So he have a different vision of the game. He saw us play. So yeah, it's great. Okay, a bit of a reset there for the players, and it worked out today so far. I mean, you got in the top 4 and now a win. And in this last match, 6 eliminations with only 27 damage. Let's see if Influence Rage can continue on for Brazil. We'll see if they're able to join Alpha 7 over in those finals as well. Because right now,
in first place, they would get one of those 2 spots. But there is still plenty more distance on the track left to run. It's an interesting one. I think that's probably the best usage of a 5th player I've seen in quite a while, where it's not a case of, hey man, we just don't like you. It's more of a case of, right, you're probably not finding as much success right now. Let's go Lorazin in. Lorazin did quite well, and then you come to Last Chance, and it's a case of, well, you've got a new perspective on our game. It is very different to playing and then watching. Like, you have an outside perspective on what they've done, why they've done it. You know, like the internal team mechanics as well. So it's good to have Federal come back in and basically be like, maybe we shouldn't do that because what I saw wasn't so great. So yeah, getting a fresh set of eyes on it coming into Last Chances, it's a great use of a sub. Yeah, brilliant insight into some mechanics of the swaps coming on in. Good to see, good to see. On the east side, oh, getting a little replay of Boars taking out one of Papa Supermassive in the meantime. This was earlier on. But this circle pushing teams up towards Yasnaya, towards Stalba. See that west side of Yas Fields being fought over a little bit by Arc Red and Burmese Ghouls. In a circle, though, they're not worried about this circle. They're just like, well, we're just going to loot. We're just going to loot for a little bit longer, guys. I think we need to. I think we need some more time down on Millie Base. They'll have to get across at some point, though. Head up towards the north side loops, making their way across right now on our screen, just to the north of the river over Roshok. And we'll be passing through that west side of the circle, potentially coming into conflict with Weibo, depending on when they pull up, because this lake is kind of a big factor in this one. Those river crossings are going to be pretty tricky. So teams will have to figure out how to navigate this. Yeah, not only that, you have the pizza slice off towards the western side, just south of Saverny. Very open ground, unenjoyable to play in. So a lot of our teams that are rotating on the north side of the map got to figure out where they want to play on gas station or even the Wizard Tower before you make that crossing. But yeah, the circle's super undetermined of where it wants to go. We might get a Maxman circle that might head up towards Stalba. That'd be cool. I would enjoy a Stalba finish. I don't think we've seen a Stalba finish in a long time. They're kind of even rarer than Millie base finishes, to be honest. Like getting, but at the top of Stalba, so cool. So cool. Until it goes right to the edge and there's like no safe ground, right? There's a lot of open flatness up there that it can finally finish on. But yeah, certainly in this tournament, it's rarer to see Stalba than to see Sosnovka. We've had, I think, much more than our fair share of military island circles this tournament, which has been great fun to watch, but our teams maybe not as happy about it. Yeah, I would say so. I think it's a tough area to finish multiple times. I've said it before. It's some of it is drop spot based, some of it is luck based. It's, if you can get vehicles in time, if a team decides not to drop, there's so many variables on Sosnovka, which makes it hard. We have seen multiple teams effectively get strong points on Sosnovka multiple times, so it's not impossible to do. It's just you have to be good at the game. And I mean, Regnum Kaya was that one team that was able to do it multiple times, and even then, there was so many factors that went into their gameplay that made that possible. It's hard to count. Right now, though, most teams are just rotating in, trying to avoid those fields in general. So Yaz Fields on that south side. So again, this is what I'm talking about, where it's hard to get towards the center. Realistically, the only team that has a good, strong central position is the Flash, with a lot of options to them towards this mid game. Team Flash looking to keep those options alive. It seems like nobody joined them in Yasnaya just yet, and probably not going to see that until maybe the next stage, depending on where we end up shifting. A split for Alliance. They are still on their rotate, I think, all things considered, from that south side. So they're slowly pushing north and losing a player. That will take the wind out your sails, and maybe won't see those pushes that you wanted to see from them again, Blank, this time around. They are playing as 3, which is probably going to make them a little bit more timid to go for those pushes that could come up big with 4 players. We'll have to wait for that. Genji and Boars on this east side going to be moving up past Lipovka together. Oh my god. Okay, it actually might be a Stalba finish. Lovely. Wait, what? All right, what? so we might be heading over towards the ruins on the top side, which would be very fun.
super death matchy up there as well in terms of the cover that's available. But we'll wait and see. I mean, it is dead central right now. We just need a couple more central positions. I mean, it couldn't be more central than this. It looks like Alter Ego are up there first. Loops are trying to get the other corner of it. Nobody else quite quick enough. Maybe Weibo could poke their noses in. Falcons, who are very split right now. Narvalo is almost on top of Stalber, and Redox is just around, just north of Shelter, where we finished our last circle. That's a split of about 3 kilometers, blank. They are very, very far away from each other, and that regroup will be in dribs and drabs at best. The teams are clambering their way on up. We'll see just what they can find. And Alter Ego sent up first, like you say. Kameshki is open. So we can head up there. Wolves also are swinging round. So there is a lot of space on this eastern side to operate with. Sook taking shots over towards Loop. So Rataboy already down. But yeah, this is a mad dash up the hill. Ooh. Nade for Sook. Could find a second over towards Loops. They're already on the rescue mission. Into the back of the buggy you go. Ratto Boy getting collected. It's home time. School's out. Sook try and put a little bit more punishment down towards Loops, but he's getting backed off behind the tree and can't connect the full spray. But the bleed out might still be there. He might still have it. Are they going to get it? Oh, the rest just started in time, but they can't afford to let this one go, or Ratto Boy will fall. Not a health bar, pixel to be seen, and he's back into the fight. I mean, somehow managed to get him out of that, which is interesting. Kind of like Wolves approach this. You play on the northern compounds, and if it does keep heading north, then you have a huge advantage on this one. I think you're also realizing that you're coming in so late towards the circle that you have a lot of time to work with here to get towards that north side, but not a lot of space is available on the mountainside. So I think you just cut your losses. In a circle, though, still going for these pushes. Hard Jukes, and they're not great. Not quite as convincing as the last one there. Just rolling up, losing a player, thinking, oh, no, we're not committing to that. It's a full 4 Weibo, to be fair. Not too many teams in position to third party as well. So it wasn't like a third party roll up that they looked for in that last match. They do just lose a player. It's a shift down towards the southeast. So those north side compounds blank. Wolves, even if they did set themselves up a little bit for success, they are going to have to readjust now. But it's actually pretty kind to most of our teams, I think it's safe to say. A lot of approach was made from this south border. Yeah, and I think that's why you're seeing so many squads playing on this north side. It's because it's been more open. It might not be ideal for you, but it is more open. Now the circle moves down towards the southeast, suddenly you've got a bit of a problem on your hands, but you can ramp Kameshki anyway. There's a possibility here. There's also zip lines available if you wanted to get shot out. That's always good fun, you know. A little bit of getting shot at in PUBG Mobile. What's not to love? Kamikaze is going to deliver that experience over towards Ramses, who doesn't go down, but might be pretty bothered by that. We'll have to wait and see. Alter Ego up on the higher ground, up on the observatory, having a grand old time. They'll have to defend their patch, though. They were able to do it in Rondo. And in second place, now's the time. Influence Rage currently in first, and they're all the way out to that north, waiting, biding their time. Your Genji all sitting pretty down towards that east side. They've got Kameshki on log. They've got a player over towards the west as well. Quite like Flash's position. That compound's not too bad to play around with. But if you do have to head over towards that northwest, it's essentially the gamble circle, right? You're rolling dices on this one and hoping that you're not heading over towards the top side of the mountain. Because if you are, like, life gets very hard for quite a few of our teams.
Influence Rage hunting down GK. Federal first on the roll up, looking to come in with a fresh pair of eyes, fresh fingers on the trigger, but not connecting on the first challenge. Looks for more. He's doing a lot against Ragnarok, who has to go for a weapon swap and will find it. Knocked in response. Law now needs to hop into action. Kevin wants the flush, but he will be denied. Diego and Law charging forwards, putting the pressure on towards the backline to GK. There's a nade cooked, and it finds Diego. It finds Law. A double nade from Nerza to keep them alive, but there's a trade. Where are these shots coming from? It could be Inner Circle. It could be anyone. And Lil Boy now on a desperate rescue mission. Will Inner Circle allow it to go through their way, or will Influence Rage be drawn short? One flush already through. Yeah, Supermassive basically just siphoning a lot of points off the back of that one. And that's from the top of the hill. This top of Stalbus. So some really long shots coming through there from Supermassive. They were in, apparently, Influence Rage were in their good graces. They didn't get shot at all. Ooh. Okay, well, I don't think they're going to be too long in their good graces. The shift south is going to mean they will be direct competitors on that northern border. Papa Supermassive taking a knock from Alter Ego. Actually, now they're down to 2 players and maybe looking at third party out. No, they're just going to move on in and see what they can find. This is great. I mean, Weibo immediately move. Look at that, straight up and central. Falcons as well with a pretty decent spot. Yeah, the Falcons, they're in an okay position. They need a really big game here, though, and this is a good setup for it. But like I said, it has to be a ginormous game. They need to get like 20 points at least on this match to really catch up, I'd say. Because we're almost already 25% the way through the last chance. Like, it's going by quick. It's going by very, very fast. It's a very, very short form tournament with 12 matches to play as well. That variability really come in to bite you. So opportunities like this, they're pure gold dust, and if the Falcons can't convert here, I mean, we talked pretty harshly about them. Certainly, I think I probably talked more harshly about them than you did, but we were criticizing them quite a lot during the games earlier. And if they can't do it here, then I think we'll be definitely vindicated. If they can, then maybe we'll have to reconsider our approach to them. But it is, again, just the one game out of 12. They do need more to prove it. Influence Rage with a drive-by over towards Inner Circle. They're re-engaging the fight, and they're just slamming those vehicles. A complete side blinder there as he charges over the top with a vehicle. One goes low, one goes high. There's no chance. He sent a spin in. What I will say is it's very Brazilian gameplay. It's so aggressive, but they can pull it off, which is the main thing. And they keep pulling it off here because Hardboy finds the shot of the Lil Boy. And now, with 2 players left, Influence Rage, they've got 6 ceilings. They're almost up to 40 points blank. So, I don't know, no matter what, great start to their last chance stage. And they will be able to repair themselves and give it a good go. Moving in from the north side, though, will be fraught with danger. Plenty of teams in their way. Genji and Boars as well as Arcred, who have been giving them a tough time for the time being. Teams crunching in. No one really convincing just yet, but this southeast side might change that. Nine-side Globan actually have to deal now with the walls. Baton takes a big hit, and Coops is also really low. So it's 2 players up here. Well, Nine-side Globan, they really get Reyes back on his feet immediately. Knocked. Immediately. Coligo now. I wonder how many players are still left on Wolves' side. I can see quite a few roaming around. So there is that res possible too. Yeah, there is all 4 of them right now, but you're right. Baton actually might be getting Doran back up here. So they are playing as 4. Nine's a Globan with 2 on the inside. You've got Arc Red as well. On this east, they love these third parties. Are they going to get stuck in here? Because you've also got the Burmese schools on the south edge. The fight continues to pop off. Doran's immediately re-knocked. And Arc Red do start to lay down the ordnance onto the inside. The Wolves struggling to get rid of the remnants here of 9ZG. And under duress, Coops moves towards the back. And the Wolves still just looking for these reses. They're playing this really slow, and Arcred is slowly extracting pints of blood from it. Yeah, I kind of hope that Wolves would have just popped a nade in that small room at this point, or a molly, anything really. I don't think that's the hardest position to clear out. Wolves are making it
look very, very tough. I think they are out of util, which is the big issue. But to be honest with you, the rotation that Wolves made, I quite enjoyed it. The fact they're able to swing around Kameshki and then take this fight with 9ZG. Already the start of the fight went fairly well. Arcred dead to outside forces. Finally, there's the nade. Perfect. But yeah, for Wolves, pretty successful, honestly. Yeah, they maybe took a little bit longer about it than they could do, but they will find success in the end and move from there. Meanwhile, Team Flash, Loops, both having a tough time moving from that west side of Stalba. The transition has been shocking. It's been dangerous and no one really happy with it. Ratto Boy now with a challenge, a 1v1 to try and get a little bit deeper into this match. A little point scoring opportunity maybe. Steps out wide, but Ratto Boy has the bead and will be able to transition now further. But you got Weibo, you got Alter Ego, you got Godspeed from Burmese Ghouls on that south side who will be taking shots, and you got to think that they know where Ratto Boy is going to be. How the mighty have fallen. Paprazu massive bullying everyone on the high ground now suddenly as they descend downwards, get dropped down to 1 in Kamikaze. And he gets pilfered pretty quickly. That's how fast the balls were rifling through his pockets there. Did have a level 3 vest, so that's a nice bonus for someone. Falcons, they've been bumped down to 2. They did not hold this central position with enough fortitude there. Ralph has to push back behind the corridor, behind the building, because there is a third-party angle chiming in. That's probably coming through from Weibo or the Wolves if they have an angle on that. But the nade from Snake finds it. Now it's all up to Koa. Alter Ego descending successfully. The nade around does land onto Krypton. But Koa is not done just yet. A 2v1 on the inside. Rosemary looking for the angle through the window, but has to run down as well. Charging through. The Falcons will fall. They'll be able to pick Krypton back up. Yeah, spoke to side. And that is, again, a blot on the Falcons' record. But 7 elims right now for Alter Ego. It's a good game. They had that strong start over on Rondo. Now looking to continue that through here. Weibo have consistently been towards these end games, but still only in 7th place, right? Going down a little bit earlier than they might have liked. Alliance attempt to move forward, but Alter Ego's got some great angles on the lobby at the moment, playing on this northwest side. And they're taking advantage of it as well, which is nice to see. Yeah, there's one thing having them available. It is that little bit extra, of course, as you say, to take advantage, to start to utilize them. The circle goes up and keeps the roadside ridgeline in. The Boars maybe look at a transition. Wolves will compete for it as well if they head up north. And yeah, looks like the Wolves are going to be a little bit faster with the Boars on this approach. Meanwhile, Weibo suffering against the duo hold coming through for the Burmese Ghouls, who are in 3rd place right now with 4 elims and may be able to rack up a couple more if they can spot Wolves on the run out. And for the Wolves, that there is like this nice angle on the eastern edge where they can kind of play around and cut sightlines off from some of our teams over on the western side. It just depends how they want to clear. 'Cause I think if you're the Wolves, you'd love to get rid of the Boars, but that is a tough team to get rid of on that northern side. See how they do approach it. And I think they absolutely know the Wolves are down here on the south. Basically, Wolves need an opener. Need a knock over towards Boars, and then they can start to push through. Trying to get Igor up front, though, at the moment. Coops is distracting. And it is really competing for that cliffside right now that you saw before. The Boars and the Wolves both in the middle, but the Boars being in the circle already can just wait this one out, try and choke it to play that position. Alter Ego, they've been slowly making their way down the mountain, very successfully, has to be said, with 8 elims. This is much, much stronger of a showing than on their Rondo, where they were so quiet. Not that they needed to be loud. They were a little bit quiet until the very late game. They've definitely been more involved here, doing all right. Weibo looking for Godspeed. But the Burmese Ghouls, I mean, they love dodging these nades, and it feels like they don't actually know where Godspeed's playing. No, they're just sending stuff through. An order, unfortunately, feels the brunt of it. Will immediately be taken out, leaving just Sook left remaining for the squad.
a sad DBS in hand because no bow and arrow. Oh, I didn't even know DBSs could be sad, but there you go. A sad tale for Sook. Weibo Gaming, 2 elims, 6th place. That wouldn't be enough, would it? Not going to be happy. Burmese Schools dodging the spray from Rosemary. I mean, these guys really are ethereal sometimes. They are doing work, or starting to move up to that ridgeline, but maybe a little bit too bold with it. Igor actually moving in, and Boars now kind of backed up to it. Wolves slowly making their ways out. And I think for the Boars, they're taking their time here. I think the Boars could have maybe flexed out over on that north side, potentially over towards the Alliance, but the Boars have been so concerned with the Wolves for so long. I realistically not been able to get too much done there. Alliance, though, good shots over towards Rosemary. Again, it's these greedy angles towards the end game. And mostly from Rosemary. I mean, he's gone down first in every single one of their matches so far. I mean, all 2 of their matches so far. Maybe making it a 3-peat. We'll have to wait and see. The circle does give Alter Ego some time. Alliance also some time to play around with as the Wolves really now firmly control this road loop. But the Boars will have good angles on towards it. So smokes maybe need to expanded by the Wolves to keep this position under control. Force the Boars to move before they do. Okay. See how the Boars go about this. Snowix looking to try and move further down. They did get Havlik up over towards the position from the Wolves, who is closer to nade range now. And you can see Doran here pulled the pin on a grenade early. Just looking for this initial blast. That opener would be so huge, and this standoff on the east side has really stagnated things. Burmese Schools try and crawl in on the west. Now the Wolves, with the smokes fading on the ridgeline for the Boars, will have to go for this full face. Igor needs the protection of the vehicle. It's up in smoke, but will still stop the bullets. The Boars not peaking this. Sook will finally go down, and that is Burmese Schools to stay up and into a 5th place. But then challenge towards the top spots. This is great. Yatka actually spotting Alva before darting across is pretty huge stuff. Getting a lot of damage in, forcing Alva to go for that heal, allowing him to cross the open ground. Wolves find another boar as well. Now it's just down to 2. Exo will be looking to be put under pressure here. Doran knows the nades are going to either side of the tree trunk and force him out into the peak. Will tag on, and Doran's the nade to do it. Now with just Cause left standing, and we'll turn their attention that way. The flush comes on through, and that is the Boars. Done and dusted. 4 teams remain. There's a very different Wolves as well. I mean, this is when I feel like the Wolves do their best, which is when it's slow and steady. A lot of times when Wolves are doing badly, it's when they start making these wild approaches to the game, unnecessary maneuvers, etc. I think that for the Wolves, if they just slowly play out their match, they think about what they want to get done next, they are inevitable in that sense. It's when they start getting a little bit too careless, that's when they lose players. And I think that the Igor on this off angle, he's so important to the team, but the amount of times he goes down on that off angle without finding any value is really bad. But that kind of sums up the team in general. 4 players alive for Wolves, 4 players alive for Alter Ego. Alter Ego on 11 eliminations already, blank. They have been trucking from that high ground. They moved to the top of Stalba first, and they have been rolling down like an avalanche. Will anyone be able to withstand it? 2 players from Alliance have been surviving for a long, long time, but they have no elims right now. They got some decent shots. They did change the pace of a couple of these fights, but no points, 3rd place. I mean, it's fine, but you're not aiming for the middle of the tables at this stage. For Alliance, I think that this is a team that's probably going to come 3rd place in this match. Alter Ego, this is a huge opportunity to shoot out towards the top of the tables. Also an opportunity for Wolves to reset almost.
But for Alter Ego, it's way more important, and losing a knock there onto Wolves, getting it stolen by Snape is such a big deal. Coops goes down as well. The Wolves are starting to fail on their approach here. And Snape has the sideswipe completely. Rosemary even stepping in, looks to pick up the pieces. He knows they've done damage. He just questions how much. Looking for the next as well. Healing not happening from Iftar. The hop out with the DBS, and it's put down by Krypton. Now the Wolves only have their one player. It's Igor against all four of Alter Ego. And he has so much to do, denying the point here. Again, I think it's totally reasonable in these short form stages. Alter Ego with a big 15 elim chicken dinner though, Blank. That is going to be tasty. And a second chicken dinner today. Yeah, I mean, a bit of Indo pride, honestly, overall, and it's good to see. I think for Alter Ego, it looks like a fantastic game. Slow and steady, and they just waited for Wolves to make that mistake, which they absolutely did. They just could not make that push up against Alliance. I think they had to play that game a little bit slower or go on the offensive over towards Alter Ego, because I don't think Alliance would have taken too many shots if that was the case. For Alliance, though, 15 elims, a 25-point game. That is so good for them in terms of getting up towards that top 2. Absolutely. They are very happy with that one. A little bit of a questioner over towards their Rondo. They were able to convert that, but here they really showed their true nature, and they are furious, ready for the fight. The last hope for Indonesia here in the last chance. It's Alter Ego. They were in second place before this match, and then they get the chicken dinner with a ton of eliminations. This squad is looking so good here in the final shot to make it to the grand finals here, Max. You know what? We were robbed from a proper Stolber finish, but you know what? While Stolber was in circle Hiniptura, they made full use of it. Playing Observatory, there was Krypton on top of the roof, getting so many good angles to not only just get a few eliminations earlier, but also zone teams away and get some information. And you know what? That allowed them to claim control of that Alliance compound in an earlier crash, and then just keep taking full control of the entirety of those finishing circles. What a game from Indonesia, massive point-wise also. 15 elim chicken dinner after already a win on Rondo, Niptura. Indonesia looking good. You know what I love as well, Max, is how differently they played this win to the Rondo win, right? We were talking about it just before we came on. It's like the Rondo was very passive. They pushed teams away in the mid game and then just sat and waited for teams to come to them. This time, they came and took the win. Off of Stolberg, coming down that hillside, taking third parties left, right, and center. The timing was really good. They were proactive with the zone shifts. A really well-played game that I love to see the variety coming out of this team. Oh man, this is heating up big time. Look at these stats, guys. 5 eliminations from Krypton, 5 from Snape, 3 from Rosemary, and this is just ridiculous, especially at this stage. I mean, they're gonna look to almost break the 50-point mark here, Max, in just 3 games. At a certain point, like teams, if you see Alter Ego, you're gonna have to slow them down, I think, at this point, because you got no choice. If you want to make it the last chance. I mean, this is so crazy, especially for those teams at the bottom of the leaderboards. The main enemy is Alter Ego currently in these rankings, the number one enemy to take down, but we'll see how that goes. Of course, I mean, Alter Ego got to be careful. The more you are towards the top, maybe more teams will be willing to fight you if they see you someplace around the map. Though actually, I want to have a moment of respect for the men themselves of Burmese Ghouls. They were just chilling on the southern edge, Niptura, and then you have 2 full squads of Wolves and Alter Ego just beelining for your spot. They didn't even have a fighting chance. So Burmese Ghouls, all I can say, I'm sorry you had to go through that. That must not have been fun.
You know what? They really fought tooth and nail for that position, though. I think they came like, what, top 4 or 5 in the end? So another consistent performance from them in what was not an easy zone. It was not easy for anybody here. It's such a weird spot because it's all very open. There's lots of little sneaky dips everywhere. We don't play it very often. So some really, really difficult positions to play, and I think that a lot of these teams played very, very well. Oh, I'm loving these replays. So many little headshots. Dink, donk, dank. It's like, oh, Yeah. I love that sound. Doesn't happen to me that often. I never hit headshots. But anyways, I wish I would. But Boar also able to clear some pretty good real estate onto the eastern side. And Blank did mention it during the game. There was a very strong ridge to the east. And Wolves was so willing, you can see in these replays, so willing to wrestle that position away from Boars because they knew it was maybe not a game-winning position, but it was definitely a strong transition point to at least get access into the late game and have the fighting chance against Alter Ego. But unfortunately, Baton, Hoops both getting decimated by Alliance on that ridge line, and even the off angle of Rosemary Niptra, I believe. So I do think that Wolves got a little bit too willing to get involved in this conversation as you go over these rotations. And actually, I'm going to take this one also, Niptra, because I actually wanted to talk about team rotation, which is Alter Ego, phase 2, right on Stolber. And they send this 2-2 split, which is really good to just control more positions and facilitate your transition in phase 1 to phase 2 circles. And they actually go an observatory building, Niptra, to get, again, full zoning capabilities on that position. That spot, if it's in circle and center as it was, literally a 10 out of 10 position. It is perfect to play around. Yeah, it's really, really nice. I'm watching Wolves as well, right? Looking at them all the way up to the north side, sweeping around to the south. So some really big rotations coming in from them. They were able to hold out that compound against, I think it was 9Z. Then they move up and try and push Boars really, really quickly, like before zone shift. And that's so, so important because when you're talking about you know, making your decisions on that zone shift, it means that if you are proactive with it, you can actually interrupt the game plan of the other teams as well before they even make those decisions themselves. So we see there that kind of proactiveness gets them 11 points in this match, but AE just far and above everybody else here with 25 in game 3. Oh dear, oh dear. Are we looking at a top 2? Are we already set? Is one of the positions already set, Jukes? I don't. It might be. We're 3 games in. Whoa, Wes, calm down. But it's 2 wins. 2 wins in 3 games. You know what? Okay, top 2 may not be set, right, guys? But the bottom of the leaderboards are looking really bad, guys. I mean, because it's only top 2 that move on here, Max, man, right? So, like, honestly, we talk about having to adapt, having to make adjustments to make it into the grand finals. As we see Krypton here with 5 eliminations. Like at this point, I think the bottom half of the leaderboards already need to start doing that, Max, because it's like if you don't do a chicken dinner here and now, it could be just over. It could be. I said 3 bad games. If you're at the bottom of the rankings, guess what? You don't have really that much room for mistakes anymore unless you get a big game. Then you might be able to have another mistake, but at that point, you just want to try and get some consistent points on the board. So yeah, I think bottom of the rankings need to start to initiate that ascent right here, right now in this next final Wrangle game of day number 1 for Last Chance. As a Krypton, congrats on being the MVP of the game. 5 eliminations, putting up some really good numbers here, Niptura, and that's going to propulse the entire squad up in first place over Influence Rage with 48 points. What a banger for Indonesia. I'm just looking at the point difference. 48 at number 1, 3 at number 16. That is such a big hill to climb. Falcons with 8. Falcons, where are you? What are you doing? Oh my god, I'm crying at the minute. But there's a lot of point gaps coming on through here, Jukes. This final half of the day has really got to change some things in this leaderboard if they want a chance. Well, we'll talk about it in a little bit, guys. We'll be right back after this break. Don't go anywhere.
krizi geçirmiş olabilirim galiba. Alo. Anneciğim ne yapıyorsun? Anneciğim. İyiyim bebeğim. Sen ne yapıyorsun? İyi ben de çok iyiyim valla. Maçları izledin mi? Oo izlemeden olur mu? Kalp krizleri geçirdim ben burada. Bana 2'ye çıktınız, ikinci oldunuz. Geri 3'e düştünüz, geri 2'ye çıktınız. Ben kalp krizi geçiriyordum yani o sıra. Neyse mutluyum annem. O da diyorum ya, 3 gün formayla takıldım. Valla. 3 gün formayla gezdim. İş yerinde de görmüyor musun? Resim atıyorum ya iş formalı. İş yerinde de formayla yani şey yaptın değil mi? Formayla gittin. Evet, evet. İyi sen ne yapıyorsun? İyiyim anneciğim. Özledim seni, sadece seni özlüyorum. Ben de seni özledim valla. Aradım, akşam bakmadım hayırlı olsun demek için. Uyumuşum bir de uyuyakalmışım. Ben de dedim kutlamaya mı gittiler, ne yaptılar? Öyle işte. Tamam anneciğim. Tamam. Seni seviyorum, öpüyorum. Ben de seni seviyorum öptüm hadi. Hadi arkadaşlarına çok çok selam söyle. Aleykümselam. Yok annem, canın sağlığı. Bunları da tebrik ettiğimi söyle, ilet hepsine tek tek. Tamam aleykümselam. Onların da selam var sana. Tamam aleykümselam anneciğim, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz öptüm bay bay. Nine matches remain of last chance. We're starting to get a picture of what the leaderboard looks like, but nothing is guaranteed at PMGC. I'm here with Krypton from Alter Ego, putting up a great performance, but I want to go back to the group stage because your squad was able to put up 100 points in the first 2 days, and in the last day, a complete fell off. You were able only to get 5 points. What are you guys going to be looking to do here different in last chance to make sure you are continuing to be consistent and that drop-off doesn't happen? Oke, kalau kita lihat dari grup stage itu di 2 hari pertama kalian berhasil mendapatkan 100 poin, tetapi di hari ketiga kalian cuma mendapatkan 5 poin. Apakah yang bakal dilakukan oleh kalian supaya agar kalian bisa lebih konsisten di last chance ini? Paling kita belajar, kita evaluasi bareng kan ya sebelum mulai last chance ini. Terus kita evaluasi apa kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki sama yang udah fatal-fatalnya lah. Jadi kita perbaiki semua itulah. Yeah, of course. I mean, during the last chance, I mean, we had a couple day off. So yeah, we doing our homework and then we try to fix our mistake. I mean, the biggest mistake that we did in the group stage, so that it doesn't happen in the last chance. Okay, one of those mistakes that people were pointing out, especially all the analysts were saying that sometimes you were being too overly aggressive. Today, so far, positioning has been great. Everything, timing has been great. Is that something that the team was working on? Oke, kalau kita lihat kebanyakan analis di luar sana semua pada bilang mungkin salah satu mistake yang kalian lakuin itu adalah terlalu agresif, terlalu barbar. Apakah itu menjadi salah satu hal yang kalian sudah bebenah kemarin? Ya, jadi terlalu agresif itu gameplay kita yang kemarin-kemarin lah, nggak bisa bedain timing harus agresif sama pasif. Jadi kita evaluasi ya harus seimbangin dua-duanya lah di antara pasif sama agresifnya. Jadi biar balance, kalau misalkan pasif doang, ntar ngedok terus. Okay, I mean, yes, they are right, especially about like overly aggressive. And I think that's what we've been discussing about for the last few days. And I think sometimes we need to be balanced, sometimes we just need to be a bit passive, and then sometimes we need to be a little bit aggressive. So I think, yeah. Well, it's working out great today, as I mentioned. Currently in first place, those 48 points are looking good. You have a healthy lead to the third place with 18 points after 3 matches. Now, it is Krypton. It is your first time here at PMGC. How are you dealing with the pressure of representing Indonesia with such an amazing org as well? Oke, sebagai ini kan pertama kali buat PMGC, buat Krypton sendiri, gimana seorang Krypton itu menghandle situasi pressure menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia di pentas global? Cara handle pressure sih karena punya teman sama coaching staff juga sih yang bantu gimana cara handle pressure itulah. Gue teman kayak yang udah senior kan tiga semuanya. Terus saya juga baru junior di sini jadi belajar banyak lah sama mereka lah. Yeah, I think the one that helped me handle the pressure basically is coming from the coaching staff and my teammate as well. They are senior, they has been here multiple times. I think they're doing a lot of, they give me a lot of things or tips for me to handle the pressure. So thanks for them. Hey, well, it's currently working out. I'm hoping to see that performance continuing on. And for all the analysts out there, Junior, Max, are you happy with what you're seeing out of Alter Ego today in the first day of Last Chance?
I think all fans of Alter Ego are feeling really good right now. You know what else is good? It's the Infinix GT30 series, the official gaming phone of PMGC 2025. Engineered for precision, performance, and victory, empowering every gamer to hashtag be the one and hashtag outplay the rest on the global stage here, man. Krypton's first ever PMGC, and this guy is just crushing it, Neptura. He is, and he was MVP of the Rondo they won, MVP of this Erangel they won. So he's been MVP of his team in both their wins today and his first time in PMGC. I love the new blood that we're seeing here, the new storylines, these new players coming into PMGC and doing so well, Max. It's so hard to do too, because keep in mind, they have Rosemary on the team. Like, come on, he is just a storied player from Indonesia. And the fact that we're seeing Krypton doing so well for himself is very impressive. But I like it, yeah, it's brought up during the interview, right? He was definitely being a little bit too aggressive from time to time, but here, just to ride him out, he adapts to the situation. Does he need to be a little bit more passive? You know what? Hell yeah. And they play more passive in that Rondo, they get themselves the win. Do they have to be a little bit more aggro and looking for the angles going into that final game on a angle where they got the chicken dinner? Yes, and you know what? He does exactly that. Krypton, you know what? For his first time at PMGC, it doesn't feel that way in Iptro. It feels like that he's played PMGC every single season since Season 0. This guy is looking so comfortable in this global lobby. And I think that's a really good word as well, Max. It's comfortable. He is feeling really comfortable. He doesn't feel out of place in this lobby. He's not looking pressured. He's not making silly mistakes. He's taking those off angles really, really well. And that's what we would expect from, like you said, a Rosemary or somebody else who's very, very experienced at this level. So really nice to see that from Krypton for sure. It even feels like Rosemary's kind of the support setup player for Krypton sometimes. Not every time, but like this game, Rosemary had an angle, and he was just like, okay, Krypton, just push forward, man. And it works out perfectly because you have literally one of the best fraggers as your support off-angle player. I mean, Hodrix, you can't ask for anything better. Like, you know your back is safe. Oh, man, absolutely, man. Who cares, right? Who's in the front, who's in the back, as long as you're winning games. And that's exactly what Alter Ego has done. 3 matches so far. They've won 2 out of 3. And you love to hear from Krypton, talking about the support, right, from the coaches, the back-end staff. And we got to see a little glimpse of them, you know. Great sportsmanship here. But at the end of the day, you know, it's 2 teams that move forward. Alter Ego have won 2 of them, Max. If Alter Ego win another one today, that could lock their position in. I think it does, to be honest. I think it does. Yeah. So, yeah, I think it does as well. So, at this point, for all these other squads, if you want to get one of those 2 slots, or at least keep both of those slots open, you got to do everything you can to try and slow this team down. But it's looking pretty difficult to do, Neptura, because Alter Ego, they're on a roll. They are on a roll, and I think what's going to be difficult for a lot of the teams more in the mid-pack of the lobby, of the leaderboards, is really that there's several teams who continue to put up big performances. They're just not quite getting the win. Inner Circle, for instance, we've seen big moves from them. We've also seen big stuff from Influence Rage, Burmese Ghouls, Loops. All of those teams in the top 5, they're stepping up in a way that maybe it's not really translating to the amount of points that they want, the amount of points that Alter Ego are able to put up, but they're still doing enough to kind of put a foot on the rest of the lobby and go, hold on, no, you stay down there, you're not coming up here. And I think for the rest of the lobby, that's going to be a second hill to climb. First it's them, and then it's Alter Ego. Oh, definitely. But actually, I want to echo something you said, Hodrix, right? Which is very unforgiving because it's a two-day tournament. But it's a perfect setup if you have just one banger day like this, because literally 50% of your games are just good games. Which right now, Alter Ego, they're loving it. Though I do want to highlight one small thing before we go into the game. We're seeing so much use for the ASM Abacan. Like, we've actually seen a shift in the AR meta that used to be, like, purely M4s. ASM Abacan, mid-range with the rate of fire, is so strong, and I'm so happy to see Hot Jukes that teams are finally adapting here and starting to put it in their loadouts. Love to see teams mix things up here in the last chance. 3 more matches left to go. Last Erangel of day number 1. John Allen and Blake, it's up to you guys. Oh, oui, bonjour. Je suis Maxman. Et
J'aime le PUBG Mobile PMGC. We're going in for another game of Erangel, of course. Nah, I'm just kidding with you. I'm actually John. Don't worry. I know you guys were fooled at home. It is still actually John. I'm here with Blank. This play part, though, still loves Sosnovka, and we're still staying on the south side. At the horrendous playing path, actually, to start things off here, down towards the south. Really rough for a lot of our squads. I think this is particularly horrible because instead of it going from west to east, it's going east to west. And Ferry Pier, Primos, Quarry don't really want to be grouping up towards those areas. You get a couple of teams dropping down towards Sosnovka. Inner Circle, not really fussed about this one. Being able to get Millie base nice and early on this as well. Geek over towards the eastern side. Yeah, it's tough. Definitely tough. Vehicle hot drops potentially on the cards here. The west side looking pretty glutsome, but that east edge as well. On Mill to power the Boars. Dropping down. They got a couple of Papara Supermassive players right next to them, but there's some underneath them as well, and they are all going to have to touch down very, very close by. Blank. Oh, we've had more than our fair share, but it looks like we haven't had quite enough. Another dish, another serving coming on through of Military Island. Potential to finish, not guaranteed. Alter Ego, however, if you want to stop them early. That might be the way to do it. The Boars have already extracted first blood. My God, straight back down to Sosnovka again. At least it's only one. It's only one. But now I am convinced there is someone pulling the strings. This is so many Sosnovkas. I think this is probably the most... In fact, I'm convinced this is the most Sosnovkas we've ever had at PMGC ever over the 5 years I've been covering this game. So yeah, it's pretty ridiculous. Arcred, Easy Bad Boy losing 2 actually to the Flash with knives and an S12K. Sometimes all you need. But yeah, it's all down to this playing path. It's just so brutal. Really, you have to drop on such odd areas. Teams are going to hunt you down. Yeah, it's tough. It's very tough. And now heading back down towards Sosnovka as well. Overall, this has been a mess of a final Erangel. Alter Ego also lost 1 player earlier, like you were talking about, John, which is kind of a big deal for them, considering they'd love to have another strong finish over on Erangel. With 48 points, really far ahead of anyone else. They get a bit more of a buffer here. It does really assist them going into tomorrow if they can finish out their last at Miramar strong. I'm just looking at some goings on the map right now. Obviously, with a military circle, this heavily featured, teams are going to start to think about how the moves are going to go. Inner Circle very, very quickly, Blank, moved out from military base. Sure, they can touch down early, but they've moved out to look to guard the bridge. Gen G actually just about got through before they established their roadblock. But the Falcons, we've seen them profit quite nicely off military circles by moving very early, but they're now going to ram straight into a roadblock set by Inner Circle. Can they get through Ralph? No, he's pulled out. And this is a very fast rotate coming through from Inner Circle to establish this. It's a miracle that Gen G got through, to be honest. It is. And they do make it. For Falcons, though, they lose Ralph. Inner Circle, who are quick to the mark here. Sadly, they did leave Gen G to get across. There's this initial shot over towards Alter Ego. They were trying to leave. So I do respect it. And some pistol gameplay. John PUBG Mobile. I think you're talking about me. But yeah, I get it. I get it. Like John Wick. That makes more sense. There are some other people more important than you, John, sometimes, but you are quite important to me. Well, I don't know about that. I'd have to double check, you know. The only other notable John, really, the guy who wrote the Magna Carta, you know, very important. 1216. Or 1215, rather, sorry. Oh, okay. Yeah, King John. The only King John we've ever had. Anyway, I'll stop banging on about royal history and human rights conventions. Because we are getting on and involved with Gen G, who managed to get through very, very quickly on that south side, rotate, getting past the roadblock, and actually Inner Circle now think, you know what, we've already let a team through. We should probably try and consolidate in the middle. It's interesting that they choose to go directly back into military base and not take a position around it, though. Yeah, well, I think I don't mind Inner Circle's position on this.
I think a lot of teams play melee base and play it way too safe a lot of times. I'm glad that they flexed out a little bit, but they still had control over this area. It looks a little sad on the rankings for Inner Circles for how good of a team that they are at 23 points. But I'm hoping this game here on Erangel can push them a little bit further. I mean, they've had all the cards dealt to them. They had a really early drop. They had tons of times to loot. They also had opportunity to hold teams out and maintain position. T24 being this low is a little bit spooky. But yeah, I think genuine at this point, just loot. Get looted. Right, you've done enough already. You can start looking back over towards the Western Bridge in a little bit. Personally, I don't really rate melee base all that much on Sosnovka. I think it's a good starting point. I would rather teams like played over towards higher ground, over towards the western side, looking out towards the bridge. I just think melee base closes you off a lot. Yeah, sure, if the circle keeps centering up on melee base, you get yourself a win. But I think there's so many other things you can do in this circle to guarantee you a high placing, rather than just thinking to yourself, oh, we had melee base at the start, so maybe we just hold this position all game. Yeah, I don't think it's high value. May not be. Maybe something they can address or readdress in the future. In the meantime, though, Inner Circle have moved to the hills to the north, leaving, felt like a little bit of a backstop there. And Genji disengaged from that one. Teams are starting to move around the boards all the way on a very wide south rotate in the water. They'll be touching land fairly soon, you'd imagine. Papra Supermassive also across. Influence Rage currently on the west bridge blank. They are going to be close by to the Wolves. And of course, Influence Rage look at a chase down that first place spot back from Alter Ego. And for now, though, a lot of teams still left up on that northern side. So yet to make moves for probably, what is that, 6, 7 teams up there? Yeah, it's quite a few. I mean, for Loops, Weibo, got Wolves also trying to make their way down. Kind of interested to see how Alter Ego handles this. Because GK are holding on the other side. I mean, with that, I mean, they love just GK specifically love posting up on the observatory hill, on that mountain that sits to the south of the bridge. And as you say, they are blocking this. And with Alter Ego on 3, that's much harder. Yeah, I don't think DK is going to give this one up, but Alter Ego are making the cross. Alva getting through, but very low, and Ragnarok will pick him up. Yeah, that's pretty clean. Not much you can do about that. Except, I guess, not get shot by it in the first place. Rosemary under pressure as well. Next circle just about to pop in as our teams begin to move south, to migrate in for the warmer season. Oh my goodness. Blank. Okay. It happens. This is great for Alter Ego. It happens. Well, it would be if they hadn't lost a player. It happens finally. I've been waiting for a circle like this all my life. Honestly, finally get to talk about it. I think I mention it almost every time we have a split on this. But yeah, the reason most teams are on the south side on a circle like this is there's very limited space in Sosnovka. So much more space on the north side. So actually getting out from this circle is not that bad. It's actually fairly easy to rotate here and get into a strong position. Over on the north side, your difficulty comes in the fact that you won't have many vehicles. So you do get a big plus for Burmese schools, Wolves, Loops, even... Where is Weibo? That's a good point. Weibo's like off it northwest. Yeah, they're not going to make it to the circle for ages, I've decided. But yeah, Weibo's fine as well because they have vehicles and they will do. So everyone on the south side kind of struggles. But Geeke, because they were the first to hold on the eastern side, they're the first to cross as well. And they know Alter Ego is a weakened team, so they can effectively get those URs across. So they're one of the lucky few over towards Sosnovka. But this does change everything. Yeah, the pace at which you need to leave. I think it's worse for the teams on that northern coast, right? And we've been watching now this engagement for quite a little bit between Alliance and Inner Circle. They're probably the most trapped teams, right? A lot of other teams will have left their vehicles that they rotated with if they went over the water, to the sides, to the east, to the south, the west of the island. They can use those to get back, potentially, depending on their fuel capacity.
But in general, yeah, you're going to be crunched in. We saw Alliance having to go for a mad dash. Inner Circle tried to light up the hovercraft that Alliance were rotating with. Did do a lot of damage, but Alliance now almost entirely across the way. And Inner Circle yet to make the move. Blank, look, I hate to bring it up, but it still technically could finish towards military. You technically could. I think it's way more likely to shift back over towards that north side. And if we do end up with military, it'd probably be a bridge finish. Really digging deep into this. Weibo finally make their way onto our screen. Over on the northwest side. A little FAMAS in there. Seems to be pretty hidden to the Burmese ghouls at the moment. Looking forward to check it. Yeah, not wanting to pick that one up. Or not just yet. Maybe they will. We'll get it into the inventories lickety split, I'm sure. And on the north side, I mean, yeah, that position for Burmese Ghouls, pretty solid. Weibo have made an appearance on the map. If you guys want to track at home where your favorite teams are at all times, there is a map feed available that you can watch separately. If you've got two screens or if you've got a second device, if you've got two Infinix phones, then of course, great news for you. Okay, we're definitely not going back to Millie. So let's take a look at what sits inside this one. Wolves with a huge cut of this western side, and all of these teams on the north can do a lot of work to establish ground early with not too much conflict. Yeah, not that much at all, if I'm honest. I think for Weibo, them getting over towards this north side, this has been such a beneficial circle for Weibo. Currently in 7th place right now, so do need to get a little bit more on board. The Flash takes out another player from Alter Ego and will be a full flush. So now only one player remains from Alter Ego here looking for those placement points. I'm looking more towards Influence Rage this game now then, who are down towards the southwest side. They're currently looking to cross back. They were one of the last to leave from Sosnovka, but I think they were so concerned with having vehicles on this end game. Goodness me, in a circle. They were so concerned with having vehicles that they waited for everyone else to leave first. And then move to the western side, which I like as a principle. You know that there's going to be quite a few teams already down on the north. This fight is going back and forth. It's really not going well for anyone. I mean, this route out is very, very dangerous. It's got... I don't... Gördüm. Tebrik ederim İzliyor aşkım. muydunuz? İzlemez miyiz anne? Nasıl heyecanlı Ellerim titriyor, heyecanlı titriyor. mıydı? Nasıl titriyor? Nasıl
racing experience. Wow, racing maps await you. The new racing template is online. Create your racetrack gameplay. Navigate the forest racetrack. Unleash your racing passion. Surpass your opponents. Become the king of speed. Unlimited speed. Ignite your passion for speed. Play WoW now. Siapa yang paling pintar ngendop di tempat-tempat yang aneh? Siapa yang mati duluan terus suka nyalain orang lain? Nih kadang, nih dua nih. Siapa yang lootingnya lama, rotasinya juga telat? Banyak. Siapa yang paling disiplin ketika di-screen? Gak ada disiplin, gak ada. Siapa tukang nge-clutch di tim? Semua. Siapa yang ada aim jago tapi chemistry-nya jelek? Siapa ya? Siapa yang paling bawel di tim? Ya paling bacot sih dia sih. Paling bacot dia. Siapa yang paling lucu? Paling lucu. Aduh. Oh ini paling lucu nih. Siapa yang kayak abang-abangan? Semua abang-abangan. Semua. Siapa yang paling kayak aneh kecil gitu? Kayak orang yang harus menjaga terus. Nih, Kita sama Moana berdua nih, berdua. Siapa yang suka ketawain orang lain? Semua ini ketawa di semua. Siapa yang tukang komplain? Gua. Paling dia lah. Rosemary. Siapa yang paling susah bangun tidur? Rosemary. Siapa yang makan paling banyak? Rian kayaknya deh. Moana, Rian nih, berdua nih. Siapa yang paling bersih orangnya? Lupa paling bersih. Paling bersih. Sumpah paling bersih. Siapa yang paling gampang ke distract? Siapa ya? Kadang anak-anak ada sih semua rata-rata. Tapi semuanya ada. Semua. Siapa yang paling banyak fans? Masih Rian. Itulah kita permainan kita tadi yang kalian udah tonton. Terima kasih banyak dan see you kita.
So guys, whoever wants to join competitive, you need to keep grinding. You can't stop if you want. And also, yeah, we came here to win, so get ready. Gördüm. Tebrik ederim İzliyor aşkım. muydunuz? İzlemez miyiz anne? Nasıl heyecanlı, Ellerim titriyor, heyecanlı mıydı? titriyor. Nasıl titriyor? Nasıl titriyor? Tonight, every moment is a battle with fate. Every rotation is a question. Every decision is a risk. And every mistake, a dream fading away. It's not just 2 tickets to the grand finals. It's not just 8 dreams trying to stay alive. It is 64 of the best players in the world fighting to reach the grand finals of the PUBG Mobile Global Championship. Only 2 will rise. 14 will fall. No resets, no lifelines, no second chances on the final day of Last Chance. The stage is set, the tension is undeniable, and now the reality sinks in. This is the cruelest cut in the entire championship. We aren't fighting for points anymore.
we're fighting for survival. No lower bracket, no tomorrow, just 6 matches to make it to the grand finals. I'm Hot Jukes here with Maxman and Neptura. Guys, this is serious business. Right after today, 14 teams are going home. Max, how are you feeling going into the last day of Last Chance? I want to say I'm feeling excited, but I'm feeling scared because these teams, 14 of them, they're going home after today. It's going to be rough. And that intro was so epic from Seven. It already felt like we're already in the grand finals here in Neptura. It's going to be intense. And at the end, only 2 more squads will be making it to our finals here in Bangkok. Oh, I'm so nervous for all of these teams. We saw some great performances right out of the gate yesterday. We saw some not so good ones as well. So I'm just like, who is actually going to be able to do this? 6 games left until we have our complete lobby for the grand finals. Jukes, I'm just really nervous about today. Oh, I mean, all these teams have to be here because, I mean, they have sacrificed so much, an entire year's worth of work just to get to this point right here, right now. And it's 6 games to decide your fate. You got to come out the gate swinging, Max, man, especially because we're going into Rondo. I need you to break it down for everyone out there, just how important this first game is. I mean, this first game is going to be so important for literally every single squad, especially we did see during the interviews yesterday, everyone seems like they want to commit to the Rondo hot drop. And we're going to be seeing here, Test Track Neox Factory. You can see on the minimap, there's a big clump of teams over there. And it got so absolutely wild. And I'm not going to lie, Niptra, I think this is the biggest hot drop in PUBG Mobile Esports history. And that could only happen here on Rondo. It really could, and I don't disagree. I think this is the biggest one we've ever seen, and what a start to the Last Chance it was. I'm really hoping we see that again just for the pure entertainment value, but, you know, it's not just that value that we're looking for as well. It's all those points that it's possible to get at the beginning of the first game. I mean, that is going to be a massive, massive boost in morale for any of these teams. I mean, we were looking at, you know, Alter Ego winning that first game, and then, you know, they're still top of the leaderboard coming into day 2. So any one of these teams that might have fallen off a little bit yesterday, Inner Circle, Falcons, Burmese Ghouls, Wolves, any of them could have a really good game, really good hot drop in this first Rondo and be set for the rest of the day. Yeah, I mean, we had, what, 90 somewhat eliminations during that Rondo game, right? If we have an even bigger hot drop with even more teams involved here, maybe we could get and breach the 100 elimination game on Rondo, which would be magnificent. They're going on some of these later on clips on these replays. I know, Weibo, you want to talk about them a little bit later on here, Niptura, but that Miramar, the lack of scouting, the first one in particular, second one was good, but the first one, that did hinder their chances a little bit. I'm so confused by that. I thought we knew by now that that road is just you shall not pass road at any circumstance if the zone goes there. Yeah, because there's cliffs and all sorts, and no, don't do that. But anyway, we move on, right? We just hope that that doesn't happen again. We move on, and we look forward to the next day as we see some epic shots coming through here. Influence Rage, another team, Jukes, that we would like to see a tiny bit more from. They're 2 points away from the top 2. They had a great day yesterday, but I just want to see just a teeny bit more, just a little bit more of that consistency, because I feel like as well they had some pretty rough games as well yesterday. Yeah, I mean, you got to clutch it up here and now. I think these first few games are going to be the big deciding factor of who makes it and who doesn't, Max, especially when it comes to Rondo. To reiterate, right? We saw a crazy amount of hot drops on day 1. For me personally, looking at these leaderboards, Max, from 10th place on down, like, what do you have to lose at this point? Why wouldn't you send 3 players down to the center of the map and try your best to soak up some crazy points to make a crazy comeback happen, right? Yeah, I mean, fully agreed. I think that if you're currently at the bottom of the rankings, this Rondo is going to be setting the pace for the entirety of this second day of Last Chance. And you know what? You have so many possible eliminations in the Ox Factory. Maybe you want to try and get involved in that conversation, try and snatch it away. Or maybe you can do like Team Flash, right, Niptura, which actually didn't get involved in the fight early on. They third-partied Neox after the fight kind of cooled off and just picked up a few eliminations here and there. So actually, if Team Flash go for a similar approach here, you got to be very careful because your back is never going to be safe going into Neox Factory.
No, that's a really good point, especially when you've just come off of a hot drop. Yes, you might have a lot of loot, but at the same time, you're wounded. You're trying to bandage up. You need a little bit of time to reset. And if a team like Flash timed that really, really well, that could spell the end of any of the teams that survived the hot drop. So it is really nice to see some teams be opportunistic in that way, and I wonder if we'll see more of that going into this first map. But we got to keep in mind, Ultra Ego won the first rondo of yesterday. They're currently in the lead, healthy lead, 58 points currently. If they do it again, Hot Jukes, if we see another chicken dinner with maybe a few more eliminations this time on rondo, they're going to look so comfortable, so confident for the rest of today. So Ultra Ego, actually, this game, not really involved in that hot drop in Neox. And if they do get that chicken dinner, boy, oh boy, Ultra Ego are going to be looking so bloody good for these 6 matches. Well, it could be a wrap in game number 1. Like, I'm not even kidding. I mean, we've seen so many points get soaked up here in Rondo. I mean, it's possible. It's possible, right? With how crazy it's going to be. I'll tell you what, there's 2 teams in particular that I'm really keeping my eyes on here, right? It's Burmese Ghouls and Weibo Gaming. You know that come Aaron Gale time. Weibo definitely going to bring it back. I feel like we're trying to just steal Blank's vibe at this point. You know what? We're sitting the Burmese Ghouls too much with that deep voice. But no, Burmese Ghouls, you know what? I'm actually so impressed with this team because this is a team that I feel like some people had mild expectations with going into this PMGC season. And I feel like Niptra, they've just been getting so much more confident as every single game happens. And you can really see on Arango, as you already said right there, Hodrix, they're looking so powerful. So, hey, Burmese Ghouls, keeping the hopes of Myanmar alive once again and making it to the grand finals would be one hell of an achievement. It really would, and I feel like as well, this is one of the good things of actually going through every single stage, right? Because if they had gone straight to finals, I don't think they would have done as well as if they can go through last chance and go to finals that way, because the confidence we've seen out of them growing and just then getting far more comfortable has been really, really nice. You know, put that up as upside of Weibo. I feel like actually this is the flip side, is Weibo have struggled having to go through all of the stages. I feel like, honestly, like we were talking about it, right? It's like, what is going on with them? Because they're super inconsistent, but when they have a good game, they have a really good game. Yeah. And they show us how smart they can really be. And I really honestly feel like it's a second guessing of the IGL, because the players can rally as long as he makes those decisions really quickly. But you can see where the decisions come really, really late, and even though the execution of those decisions is good, it's either the wrong decision or they just come way too late. So I really hope that Weibo are able to actually just kind of rally a little bit and get on with it and get those decisions done. Go with your gut. I know what the issue is with Weibo, guys. I've cracked the code. Is the fact that they only get second place. The Sook curse is real. They only get second place. Weibo, no, if they can get a win, Hot Jukes, they're qualifying. They need to break. फिर सीधा ग्रैंड फाइनल्स 12 दिसंबर से 14 दिसंबर को होते दिखाई देंगे. क्या पाकिस्तान होगा? इंशाल्लाह. Well, let's wait and find out. आज के दिन के चंद मैचेस हैं और उसके बाद हमारे सामने सब कुछ आया हो जाएगा, ऑब्वियस हो जाएगा, सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा, दिखाई देगा. धुंधला कुछ नहीं रहेगा. धुंधला सिर्फ उन टीम्स का फ्यूचर हो सकता है जो कि यहाँ से आगे बढ़ती हुई दिखाई ना दें. लेकिन 14 टीमों ने घर जाना है और 14 टीमें ग्रैंड फाइनल्स में इंतज़ार कर रही हैं. फिलहाल जिस तरह की लॉबी है, ये 14 जो नंबर है, ये बहुत सारी टीमों के लिए मुश्किलात बना सकता है. बट चले नंबर से बाहर निकलते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द मैचेस. 6 मैचेस हैं, 12 इन टोटल हैं, 14 नहीं है. शुक्र करिए 7-7 मैचेस होते तो हम भी थक जाते हैं. 14 पहले भी सुना लग रहा है, कहीं पे सुना लग रहा है. अच्छा, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये सोच ही नहीं रहा था. मैं कुछ और सोच रहा था, लेकिन आपने भी रिमाइंड करा दिया. अच्छा, मैं कल कल ना मावी की वीडियो देख रहा था. वो कहते हैं कि मैं अपने दिमाग में ये दुआ कर रहा था, ये सोच रहा था कि कुछ भी हो जाए 13-14 मत आना, लेकिन दोनों ही टीम 14 पे आ जाती है. सो ये थोड़ा सा फन फैक्टर जो उनकी तरफ से ऐड किया गया. एंड हम काफ़ी टाइम से उनको देखते आ रहे हैं. आई मीन हमारे बहुत सारे नॉस्टैल्जिक जो PUBG मोबाइल्स के स्टार्टिंग के मोमेंट्स हैं वो उन्हीं से लिंक्ड हैं, वहाँ काफ़ी टीमों से लिंक्ड है. लेकिन अभी आई थिंक मैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट मैच. आज के दिन के बारे में बात करते हैं. हमने बहुत कल की बात कर ली, इधर उधर की सारी बातें हो गई. अब बात करते हैं मुद्दे के ऊपर आकर. जो असल मुद्दा है वो ये है कि 6 मैचेस हैं. पहला मैच रोंडो है. एक चिकन डिनर कोई 8वें नंबर वाली टीम भी निकालती है, सीधा फर्स्ट पे जंपर पर प्रेशर डाल सकते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन देम कि वो 15 एलिमिनेशन वाला चिकन निकालेंगे, 12 वाला निकालेंगे, सर्कल उनको फेवर देगा नहीं देगा. उसके अलावा आज जो लक फैक्टर है वो बहुत सारी टीमों की किस्मत बदल सकता है.
लेकिन वहीं पर एट द एंड ऑफ द डे क्वालिफाई तो सिर्फ 2 टीमों ने करना है. आई ट्रूली बिलीव कि एक स्लॉट कम से कम गाउंटलेट से उठाकर अगर अगले साल यही फॉर्मेट रिपीट होता है, ये तो जेम्स यांग आएंगे 12 तारीख को तो वो बताएंगे, अगर अगले साल यही फॉर्मेट रिपीट होता है तो एक स्लॉट एटलीस्ट वो उठाकर डाल दें लास्ट चांस में, और एक स्लॉट वो बल्कि 2 स्लॉट वो उठा के ग्रुप स्टेज में डाल दें. गाउंटलेट को 3 स्लॉट 4 स्लॉट देते हैं बहुत हैं, अभी इस बार तो 7 थे राइट. सो चलें, हमारी सजेशंस तो कोई सुन नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं सुन रहा. आई एम 100% श्योर कि उर्दू नशरियात तो बिल्कुल भी जेम्स यांग भाई देख नहीं रहे होंगे. शायद वो इंग्लिश देख लें, शायद वो चाइनीज़ देख लें, लेकिन उर्दू तो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे. बट आज के बारे में बात करते हैं. दी फर्स्ट मैच इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच. रोंडो है, रिकॉल्स हैं, एक बड़ा मैच लगाया जा सकता है बोर्ड के ऊपर 100%. अच्छा, मैं ये देख रहा था कि अगर आप इस रेस में पड़ जाएंगे कि 8 टीमें हैं, हर एक मैच के बाद अब ये होगा वो होगा, आपको देखना है कि यार इन टीमों को खेल, ऑब्वियसली वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमें भी ये सोचना है कि कट ऑफ नंबर कितना बनेगा सेकंड का, उसके हिसाब से आपको अपने आज के पूरे दिन को डिवाइड करना है. अच्छा, ये काफ़ी सिमिलर है लास्ट चांस, पिछले साल की लास्ट चांस से बहुत ज़्यादा सिमिलर. मैं आपको बताता हूँ सिमिलैरिटी क्या है. आप ये देखें, पिछले साल का लास्ट चांस पहले दिन पर फर्स्ट स्पॉट 59 पॉइंट्स, एक दिन के बाद अभी लास्ट चांस 58 पॉइंट्स. नाइस. सेकंड स्पॉट पिछले साल 58 पॉइंट्स पे था. इस साल का सेकंड स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है 54 पॉइंट्स के ऊपर. पिछले साल का थर्ड स्पॉट आपको 57 पॉइंट्स पर दिखाई दे रहा था. इस साल का थर्ड स्पॉट 52 पॉइंट्स पर दिखाई दे रहा है. वही कंपटीशन जो पिछले साल चल रहा था, वही कंपटीशन आपको इस साल भी चलता दिखाई दे रहा है. कट ऑफ पॉइंट्स बताएं. कट ऑफ पॉइंट्स क्या थे? असल सवाल, मुद्दे वाली बात यह है, 97 थे पिछले साल के कट ऑफ पॉइंट्स. 97. अभी सेकंड स्पॉट 54 पॉइंट्स के ऊपर है. तो आप कह सकते हैं कि 95 to 100 पॉइंट्स के दरमियान के अंदर इस साल का कट ऑफ बन सकता है. अच्छा खासा नंबर है. आज के दिन को वही एवरेज बरकरार रखना पड़ेगा. आप हिसाब लगा लीजिए. आईसी को 97 थे पिछली बार. 97 थे पिछली बार. अच्छा 97 कट ऑफ पॉइंट्स का मतलब ये है कि 50-60 से टीमों ने स्टार्ट किया था. सेकंड डे वो 40-45 मैक्सिमम पॉइंट्स निकाल पाए थे, से ज़्यादा नहीं निकाल पाए. अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ वाज़ह होती है, इफ़ यू गेट 40 to 45 पॉइंट्स, इसका मतलब है कि आपका एक मैच बुरा भी गया होगा, 2 मैच भी बुरे जा सकते हैं. 2 मैचों में आपने शायद 5 पॉइंट्स निकाले हों, या एक में 10 और एक में 0 पॉइंट्स निकाले हों. सो येस, देयर इज स्टिल रूम टू मेक सम एरर. छोटा सा एरर आप कर दें एक मैच में, अगर आप ब्लंडर कर देते हैं तो यू शुड बी, मतलब ये चीज़ टीमों को सोचनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब आप लास्ट डे की तरफ आते हैं, जब आप लास्ट मोमेंट्स की तरफ आते हैं और आपको लगता है कि हमने एक मैच बुरा खेल दिया, अब हम नहीं क्वालिफाई कर सकते. तो ये चीज़ें टीमों को रियलाइज़ होनी चाहिए कि इवन आफ्टर मेकिंग वन मिस्टेक, अगर आप कर देते हैं, अनइंटेंशनली हो जाती है, गलती से हो जाती है, तब भी यू हैव चांसेस कि आप कम बैक कर सकते हैं. बट 40 मोर सेकेंड्स टू गो और जाएंगे सीधा हमारे मैच की तरफ. जी हाँ, बिल्कुल ख़वातीन हज़रात, अपने दिलों को थाम लीजिए. एक मैच इंपॉर्टेंट ज़रूर है, क्योंकि मोमेंटम तोड़ सकता है आपका एक बुरा मैच. ऑल्टर ईगो के लिए आज का दिन बड़ा मायने रखने वाला है. टीम फ्लैश, जिन्होंने कल के दिन बहुत शानदार खेला, यंग टीम है, एक्सपीरियंस उतना नहीं है, लेकिन जोश और जज्बा, वलवला बहुत है. जीतने की उम्मीद, ग्रैंड फाइनल्स में अपना नाम, अपने झंडे को लेकर जाने की एक ख्वाहिश ज़रूर है उनमें. 54 पॉइंट्स के साथ अभी के लिए दूसरे स्पॉट पर मौजूद है. लेकिन खैर ख़वातीन और हज़रात, पहला मैच और आखिरी दिन, 14 टीमें यहाँ से घर चली जाएंगी. ग्लोबल चैम्पियनशिप इख्तिताम लेकर जा रहा है काफ़ी तेज़ी से, और फाइनल 16, प्लेइंग 16 आज के दिन के इख्तिताम के ऊपर आपको लॉक होता दिखाई देगा. पहला मैच शुरू हो चुका है. प्लेन पाथ देखते हैं कि क्या मल्टीपल फ्लाइट पाथ्स आएंगे आज के दिन. नहीं आए हैं, जो कि एक अपने ही आप में खुशखबरी ज़रूर होती है टीमों के लिए. जी, खुशखबरी इसी तरह से है कि वो जो डिसएडवांटेज आपको मिलता है अगर आपका फ्लाइट पाथ दूर बन जाए आपके ड्रॉप से, तो वो नहीं मिलेगा. लेकिन यहाँ जो ज़र गौर बात है वो ये है कि अब किस स्टार्ट के साथ खेला जाएगा टीम्स की जानिब से. कल के दिन हमने देखा कि 7 टीमें एक ड्रॉप के ऊपर उतरती हुई दिखाई दी, और इससे पहले कि हमारा फ्लाइट पाथ गायब होता, टीमें गायब हो गई थी. आईसी के 3 प्लेयर्स 11 हिट हो गए थे कल के दिन. आज के वही चीज़ रिपीट होगी.
or IC will come up with a different strat. Look at this, 1 2 3 4 4 टीमें यहाँ उतरी हैं एंड IC इज ऑल्सो हियर, वो भी यहाँ उतरना चाहते हैं। आर्कवेट की फाइट जहां पर एक साइड पर चलती हुई बोर्ड गेमिंग से दिखाई देगी, वहीं पर दूसरी साइड पर एक और फाइट चलती है एंड लेट्स वेट एंड सी कौन जीतेगा उन सारी फाइट्स को। आर्कवेट एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालेगी, गीके एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालेगी, बोर्ड बदला लेना चाहेंगे, लेकिन IC ऑन द बैक साइड वो पीछे ही मौजूद है। T24 को बहुत दूर छोड़ा गया लेकिन वहां ऑल्टर ईगो के प्लेयर्स मौजूद हैं। T24 के ऊपर मुश्किलात बन सकती हैं, लेकिन यहाँ स्नोइक्स आगे जाएंगे, लीप ऑफ फेथ लिया जाएगा, टेक्स डाउन हार्ड बॉय, टेक्स डाउन ड्राम्सर्स और दोनों का एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर दिया जाएगा। आर्कवेट अपने प्लेयर्स को वापस तो बुलाएगी, लेकिन IC उन्होंने जो एक प्लेयर अपनी टीम से दूर छोड़ा है उसका नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है, बिकॉज वहां शायद पोजीशन रिवील हो सकती है। लेकिन स्नोइक्स क्या खूबसूरत एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया गया उनके ऊपर, शानदार बाकमाल एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाता है। प्लेयर ऊपर से जंप कर रहे थे, उनको हवा में नॉक किया, हवा में ही उनको लॉबी की तरफ भेज दिया जाएगा। लेकिन IC उनका जो प्लान है वो यही है कि एजेस पर रहकर एलिमिनेशन पॉइंट स्क्रैप किए जाएं। नॉकी AKM का इस्तेमाल करते हैं, राफिना को नॉक कर दिया जाएगा, लेकिन एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म शायद ना कर पाए नॉकी, और नील ज़दा शायद आगे बढ़कर राफिना को रिवाइव दे सकते हैं। अभी वो ऐसा करना तो चाहते हैं, लेकिन राफिना कवर में जाते हुए दिखाई देंगे। फलक ऑन दी अदर साइड वो आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। फलक यहां पर कुछ एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करने के लिए अपने टीममेट की मदद करना चाहेंगे। दूसरी तरफ वो उनकी फाइट बनेगी के साथ, इनकी केविन सामने मौजूद हैं, ध्यान देना है। और इनको कि यहाँ दो प्लेयर सामने हैं, उनके एक साइड पर केविन है, एक साइड पर सैफ, और इंतजार किया जाएगा। रैंडम फायर्स, प्री फायर्स किए जाएंगे, काफी डैमेज तो पड़ता है लेकिन इट वाज नॉट इनफ। ऑन दी अदर साइड IC फलक नॉक हो जाते हैं और कॉज की जानिब से फलक को एलिमिनेट तो कर दिया जाएगा, लेकिन वहीं पर देखना यह है कि नॉकी कहां मौजूद हैं और नॉकी क्या वो कॉज को स्पॉट कर पाते हैं, फलक को क्या वापस से रिकॉल किया जाएगा। काफी सारे सवाल हैं, जवाब जानने के लिए इंतजार करना है। और आई थिंक रिकॉल का ऑप्शन तो अवेलेबल है, दो डिफरेंट जगह पे प्लेयर्स को छोड़ा गया है। नॉकी वो न्यूक्स फैक्ट्री के आसपास हैं, साथ उनके IQ भी हैं, लेकिन फलक और शायद T24 अब वो थोड़ा दूर उतरते हुए दिखाई देंगे। रिकॉल हो चुके हैं फलक। जी हाँ बिल्कुल। एंड नॉकी का अब जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है यहाँ पर जब तक हयात हैं कि एलिमिनेशन पॉइंट्स ज्यादा मैटर करने वाला है हर एक टीम के लिए, चाहे वो इनर सर्कल पाकिस्तान से अपनी बका की जंग ही क्यों ना लड़ रही हो, और वही जंग ये बाकी के 16 नाम भी आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हर ही कोई चाहता है फाइनल्स के अंदर अपनी जगह बनाए, लेकिन अगर आप यहां पर देखें आपको पूरी टीम किसी की भी दिखाई नहीं दे रही, सोलोज ही सिर्फ और सिर्फ बाकी रह चुके हैं, चाहे लूप्स के प्लेयर हों, चाहे गीके हों, IC हों, WBG के ऑर्डर हों, लेकिन ये एक एक एलिमिनेशन पॉइंट मैटर करता है बहुत ज्यादा। नॉकी को ये कंफर्म करना है, लेकिन संभल कर जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, बैकयार्ड्स के ऊपर से भी क्रॉसेस बनाए जा सकते हैं उनके ऊपर, लेकिन गीके प्लेयर को पकड़ा जाएगा बैकयार्ड से नहीं बल्कि सामने से ही नॉकआउट निकलता है। रागना रॉक की एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करेंगे। IQ इस जगह के ऊपर अब बाकी रह चुके हैं अकेले, एंड नॉकी को भी थोड़ी ही देर में आपको रिकॉल होते दिखाई देंगे, लेकिन वहीं पर टीम ऑल्टर ईगो एरिस वो अपने लिए कुछ पहला नॉकआउट शायद निकालते हैं इस सारे मैच से। एंड ऑल्टर ईगो एरिस के रोजमेरी टीम सुपर मैसिव के नाइको का एलिमिनेशन पॉइंट भी कंफर्म कर लेकर जाएंगे। अभी तक के लिए हाईएस्ट एलिमिनेशन पॉइंट्स आपको 10th स्पॉट के ऑनवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं निकलते हुए। बोर के पास 4 हैं और 4 ही एलिमिनेशन पॉइंट्स आपको गीके के पास दिखाई दे रहे हैं। यही तो मैं सोच रहा था कि हम चाह रहे थे कि टॉप से कोई टीम स्टेप अप करे। लूप्स इज ऑन द वर्ड्स ऑफ एलिमिनेशन और वो 3rd पे मौजूद है। अगर वो यहाँ एलिमिनेट हो गए, वो जो प्रेशर इन पर पड़ेगा वो पूरी तरह से उनको दबा सकता है। लेकिन यहाँ WBG की बात की जाए, फाइट में आए जरूर थे, कुछ डैमेजेस भी दिए गए, पीछे से IQ आएंगे, टेक्स डाउन केविन, सीधा लॉबी का रास्ता दिखाया, लेकिन पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी IQ की। ध्यान देना है, राइट साइड पर गीके के प्लेयर्स मौजूद हैं, लूप्स के भी कुछ प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। IQ लूट मैक्सिमाइज तो करना चाहते हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड IC के जो प्लेयर गिरे थे, जो कि एलिमिनेट हुए थे, उनको बुला लिया जाता है, एंड दैट्स अ गुड न्यूज़। लेकिन यहाँ फ्लैश की फाइट बन रही है एंड फ्लैश के प्लेयर्स गिरते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पर, लेकिन लॉ उनसे बदला लिया जाएगा, प्लेयर को वापस से उठाया जाएगा और अपने 4 men अप होती हुई दिखाई देगी टीम। लेकिन IQ फॉल बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पीछे WBG है,
लूप्स है, गीक है, 4 टीमें इस जगह पे अभी भी दिखाई दे रही हैं। जी हाँ बिल्कुल। एंड अब ज़्यादातर सोलोज ही यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं काफ़ी। आई वुड से कि जो भी एलिमिनेट हो रहा है इसके बाद यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन खैर IQ has to confirm these elimination points, at least 2 more 4 elimination points यहाँ से अगर IC के पास आ जाए तो I would say that would be sufficient। लेकिन कहीं और देखिए टीम सुपर मैसिव वो लड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऑल्टर ईगो आरएस अपने लिए 4 elimination points कंफर्म शायद उन्होंने कर लिए हैं और एक elimination point चारों के चारों खिलाड़ियों के पास मौजूद हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑर्डर उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा लूप्स के प्लेयर की साइड से। एंड चौथा elimination point लूप्स के पास भी कंफर्म हो चुका है। ये मैच हर ही कोई 4 का नंबर लेकर जा ही रहा है, लेकिन खैर फ्लैश उनकी कैसी रहेगी किस्मत ये देखना बाकी है। वहीं पर IQ को पकड़ लिया जाता है टीम गीके के प्लेयर्स की तरफ से एंड IQ गेट्स एलिमिनेटेड। वापस आएंगे रिकॉल होकर। गीके 5वां एलिमिनेशन पॉइंट अपने लिए कंफर्म कर चुकी है, लेकिन फ्लैश के प्लेयर्स उन पर बेशक उन्होंने भी कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाए हैं, लेकिन आखिरी प्लेयर यहाँ पर अब अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। ज्यादा बाहर नहीं निकलना था। जेनजी ये एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करेंगे, रिकॉल होकर वापस आना पड़ेगा फ्लैश के प्लेयर को। ओह माय गॉड, व्हाट इज गोइंग ऑन। WBG अपने एक प्लेयर पर आई थी, 2 प्लेयर्स पे, उनको भी रिकॉल कर लिया जाता है। फ्लैश के टॉप्स 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल कर गए हैं, उनको भी रिकॉल कर लिया गया है। IQ जो कि कुछ सेकंड्स पहले फिनिश हुए, उनको भी रिकॉल कर लिया गया है। सो कह सकते हैं कि यहाँ पूरा फोकस है क्विक डिलीवरी जी बिल्कुल। और यहाँ ये डिलीवरीज जो है वो सारी T24 करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाइस। T24 को अलग से मैं कहता हूँ कि थोड़ा प्राइस पूल का कट मिलना चाहिए इसके लिए, लेकिन खैर अभी के लिए फ्लैश के प्लेयर्स आहिस्ता से अपने लिए देखिए। रोंडो में आप जितने चाहें एलिमिनेशन पॉइंट्स उठा सकते हैं, इसीलिए टीमें विद कोई रिस्क, कोई इस तरह की कोई चीज़ सोच ही नहीं रही है। कोई भी पैसिव रोंडो के साथ कभी भी पैसिव नहीं लग सकता। ये इस तरह का मैप है रिकॉल की वजह से, और अब आई वुड से कि हर ही कोई चाहता है एलिमिनेशन नंबर ज़्यादा से ज़्यादा निकाले जाएं, क्योंकि ये मैच आपको 2 मैचेस जितने पॉइंट्स दिलाकर देकर जा सकता है। एंड गीके को आप देखें किस तरह से वो धूम मचा रहे हैं। 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स उनके पास हैं, 6ठा अभी नॉकआउट उन्होंने कंफर्म किया। लूप्स के ऊपर ये एलिमिनेशन पॉइंट भी आपको थोड़ी देर में कंफर्म करते दिखाई देंगे। लेकिन फ्लैश आप टॉप 3 में देखें, फ्लैश के पास 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स आ चुके हैं, सेकंड स्पॉट पर वो मौजूद हैं। ऑल्टर ईगो के पास 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स आ चुके हैं। वहीं पर टीम IC उनके पास अभी फिलहाल के लिए 2 ही मौजूद हैं। अलायंस उनके प्लेयर्स आपको अब थोड़ा रोटेट करते दिखाई दे रहे हैं बैम्बू एरिया से, एंड सर्कल जिस तरह से थोड़ा वेस्टर्न साइड के ऊपर एक शिफ्ट लेकर गया है, कुछ टीमों को फायदा पहुंचेगा, कुछ टीम इनफैक्ट रोंडो से सर्कल रोटेशंस के दौरान आपको ज्यादा दिक्कतें एटलीस्ट सेकंड फेज के अंदर नहीं आती। थर्ड फेज ऑनवर्ड्स आपको रोटेशंस के दौरान कुछ प्लेयर्स या बहुत सी टीमें भी एलिमिनेट होती दिखाई देती हैं। जी हाँ, लेकिन अभी रिकॉल का ऑप्शन अवेलेबल है। मैप कंट्रोल पूरी तरह से टीमों ने ले रखा है। अपने एक प्लेयर को रिकॉल साइड पर छोड़कर बाकी प्लेयर्स फाइट में आ रहे हैं, तो यस वो अपॉर्चुनिटी रिकॉल्स की जो है वो पूरी तरह से मौजूद है। लेकिन पपारा सुपरमैसिव उनके एक प्लेयर पीछे बचे हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको भी देखना है क्या वो रिकॉल कर पाएंगे। जनजी यहाँ कोशिश वो भी करेंगे सिचुएशन से भागने की। क्लॉज सामने आए थे फ्लैश के, ज़ीउस के सीट चेंज करके। आपने नीचे कैम देखा उनका, आपने कैम देखा ज़ीउस का कैम, आपने वो स्पेक्टेट कैम नहीं देखा, वो भी 360 डिग्रीज घुमा है। मुझे वहां से पता चला है कि उन्होंने जायरो पूरा घुमा लिया था, और वो जब वापस उन्होंने रीसेट किया है तो वो स्पेक्टेट कैम भी आपको वैसे ही रीसेट होता दिखाई दिया था। लेकिन खैर अभी फिलहाल के लिए ज़्यादा फायदा नहीं होगा। फ्लैश के प्लेयर अकेले फंस गए थे, एंड अब मेरे ख्याल से फ्लैश के पास रिकॉल का ऑप्शन भी नहीं रहेगा। सारे के सारे प्लेयर्स ने शायद इस्तेमाल कर लिया है, देखना बाकी है अभी के लिए। लेकिन फ्लैश के प्लेयर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर रहते, रिवाइवल देने के लिए बिल्कुल भी आगे बढ़ा नहीं जा पाएगा। बाउंस को भी गिरा लिया जाएगा। फ्लैश 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स लेकर अपने 2 खिलाड़ी गवा दिए जाएंगे। एक प्लेयर का एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर लिया जा चुका है जेनजी की साइड से, और जेनजी तीसरा एलिमिनेशन बल्कि चौथा एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर लेकर जाते हैं। जी हाँ, 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स जिंजी के पास भी आ जाते हैं। पपारा सुपरमैसिव की बात करें, लॉस्ट अपने टीममेट्स को रिकॉल, बल्कि लॉस्ट को रिकॉल मिला है, और बाकी सब टीममेट्स भी वापस आ चुके हैं। और
वंस अगेन 4 मैन अप ये टीम बन जाती है गीके, ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालकर ये टीम भी पूरी तरह से अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहती है, लेकिन 6, 7, 8 ये बेस पॉइंट्स होते हैं रोंडो के। लेट्स सी क्या वो 6 का नंबर है, 7 का नंबर है या 8 का नंबर है जो कि 6 से 8 टीमों के बीच में डिवाइड होता हुआ दिखाई देगा। डिवाइड नहीं कहेंगे बल्कि कह सकते हैं कि सभी टीमें निकालती हुई नजर आती हैं। कल के दिन भी हमने 8 टीमों के पास 6 से ज्यादा पॉइंट्स देखे थे। जी हाँ बिल्कुल, 8 टीमें, हाँ कल बल्कि आई वुड से कि 6 से ज़ायद पॉइंट्स तो थे, लेकिन हमें 10 से ज़ायद पॉइंट्स भी हमें तकरीबन 4-5 टीमों के पास दिखाई दे रहे थे कल के दिन रोंडो पर। हाईएस्ट पॉइंट्स कल के दिन 20 निकले थे, 20 पॉइंट्स वाला मैच निकाला गया था कल के दिन रोंडो के ऊपर, बट आज उससे बढ़कर भी निकाला जा सकता है। यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। काफ़ी तेज़ी से भी एलिमिनेशंस निकलते आ सकते हैं थोड़ी देर में जब सर्कल मज़ीद क्लोज इन करेगा, जिस तरह से अभी फ्लैश ने अपने कुछ प्लेयर्स गंवाए थे। लेकिन फ्लैश अभी फ़िलहाल के लिए रिकॉल था उनके पास, उन 2 खिलाड़ियों को वापस से बुला लिया जा चुका है। हालांकि मुझे लग रहा था कि शायद फ्लैश के प्लेयर्स ने रिकॉल का इस्तेमाल कर लिया है, बट खैर वो 2 खिलाड़ी नहीं थे जिनको अभी थोड़ी देर पहले जेंजी ने नॉकआउट किया था। खैर दे आर बैक वंस अगेन। 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स को मज़ीद बढ़ाकर अब शायद 12 एलिमिनेशन पॉइंट्स पर जाना चाहेगी फ्लैश। खैर हर एक की कोशिश है कि जितने ज़्यादा हों एलिमिनेशन पॉइंट्स इकट्ठे किए जाएं। सर्कल का एक शिफ्ट आया है, तीसरा फेज़ है। अब यहाँ से आगे आपको कुछ स्लैमिंग्स और कुछ रोटेशंस के दौरान टीमें और प्लेयर्स एलिमिनेट होते दिखाई देंगे। जी हाँ, अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पर रिकॉल करना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देगा। ऑल बिकॉज सर्कल क्लोज इन कर चुका है, रिकॉल एरियाज से, रिकॉल टावर्स है वो बहुत लिमिटेड रह जाते हैं जोन के अंदर। इसी वजह से फिर मजबूरी बन जाती है कि फाइट को अवॉइड किया जाए, प्लेयर्स को जिंदा रखा जाए। अभी जो जोन बना है उसमें सिर्फ 2 रिकॉल टावर्स हैं, एक स्टेडियम के अंदर है और एक जो दूसरी साइड पर है उस पर पूरी तरह से ऑल्टर ईगो ने कब्जा कर रखा है। और जैसे ही मैप हमारे सामने आएगा तो ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। लुक एट दिस, स्टेडियम के अंदर रिकॉल ऑप्शन अवेलेबल है और एक जो दूसरा रिकॉल है उस पर ऑल्टर ईगो कब्जा जमाए बैठी है, यानी कि ऑल्टर ईगो ओपन में जाके फाइट लेगी, प्लेयर्स को एलिमिनेट करेगी, जैसे ही अपना बंदा गिरेगा फौरन रिकॉल। क्या बात है यार, क्या बात है। मतलब रोंडो को अपने उसके बेस्ट पोटेंशियल पर खेला जा रहा है और बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जा रहा है। लेकिन अभी मैं देखना चाहता हूं कि रोटेशंस किस तरह से करती हैं वो टीमें जो कि जोन के बाहर हैं। लूप्स को हमने देखा, पूरा स्क्वाड जोन के बाहर है। INF ब्लू का डैमेज खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्लेयर्स अंदर आ चुके हैं, कुछ प्लेयर्स डैमेज खा रहे हैं। बिकॉज मैप फीड की तरफ देखें, अगर सामने मिनी मैप की तरफ देखें, नॉट मैप फीड, 2 प्लेयर्स को हमने देखा था कि वो जोन का डैमेज खा रहे थे। लेकिन बहुत जल्दी INF सर्कल में आ जाएगी। अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि सर्कल में जगह इनको मिल जाएगी, लेकिन बुरी खबर यहाँ बन सकती है पपारा सुपर मैसिव के लिए, बिकॉज वो जहाँ जा रहे हैं सामने उनके IC दिखाई दे रही थी। आई थिंक सो टीम सुपर मैसिव को पता है कि वहाँ पर आईसी है। ऑब्वियसली नाम से नहीं पता, लेकिन ये पता है कि वहाँ पर पूरी कोई टीम है जो उनका इंतज़ार कर रही है। एंड सुपर मैसिव वो जगह ढूंढ रहे हैं किसी और एज से, शायद सर्कल में एंट्री वो हासिल कर पाएँ किसी और इलाके से। लेकिन वहीं पर टीम गीके जो थोड़ी देर पहले धूम मचा रहे थे, अनफॉर्चुनेटली अब उनके ऊपर कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स टीम की साइड से कंफर्म किए गए हैं। फ्लैश यहाँ पर मौजूद है, आखिरी 2 खिलाड़ियों पर टीम गीके आ चुकी है। एंड लेट्स सी आखिरी 2 प्लेयर्स फ्लैश को क्या कोई नुकसान पहुँचा कर यहाँ से जा पाएंगे, क्योंकि फ्लैश वो सेकंड स्पॉट पर हैं। जितना अच्छा फ्लैश और ऑल्टर ईगो खेलेंगे उतनी ज़्यादा मुश्किलात बाकी टीमों के लिए बनती आपको दिखाई देंगी। जहाँ पर बाकी टीमों को तो अच्छा खेलना ही खेलना है, वहीं पर बाकी टीमों के लिए आसानियां तब बनेंगी अगर ये 2 नाम को कोई नुकसान पहुंचता है इस मैच में। लेकिन वहीं पर फ्लैश के प्लेयर आगे बढ़ेंगे। नॉकआउट निकालने के बाद एक खिलाड़ी फ्लैश के माइनस कर दिए जा चुके हैं, थर्ड पार्टी भी कुछ हुई है, लेकिन गीक अनफॉर्चुनेटली, या गीके आप कह लें, इस मैच से बाहर कर दिए जाते हैं। अच्छे एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले, 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स लेकर, 7 पॉइंट्स लेकर इस मैच से बाहर कर दिए जाएंगे। पहला नाम था इस मैच से 16 में से एक पूरा नाम जो बाहर हो चुका है। लेट्स सी क्या होता है। वहीं पर टॉप 4 में बात करें, INF अपने आखिरी प्लेयर पर खेल रही है। तो यहाँ INF अपने आखिरी प्लेयर पर आ चुकी है और अभी के लिए थोड़ा सा सुख का सांस ही उन टीमों को ज़रूर देगा जो कि उनके नीचे मौजूद हैं। WBC को भी सुख का सांस मिलेगा और सुख को भी सुख का सांस मिलेगा। लेकिन वहीं पर बात की जाए फाइट्स की, आर्करेड वर्सेस पपारा सुपरमैसिव की फाइट बनती हुई दिखाई देती है। आर्करेड अगर बड़े मैचेस खेले गए आज के दिन के स्टार्ट में, अगर कोई डोमिनेशन दिखाई तो उम्मीद जाग सकती है। लेकिन इतने पॉइंट्स निकाल पाना, 80 पॉइंट्स निकाल पाना, लॉबी इज़ नॉट गोना अलाउ ही इन वन डे। लेकिन फिलहाल
इजी फॉर बैड बॉय आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए, ट्रॉम्बी को नॉक कर दिया जाता है और उनको सीधा लॉबी की तरफ भेज दिया जाएगा। दूसरा प्लेयर भी देखते ही देखते गिर जाएगा हार्ड बॉय की जानिब से, तीसरा भी गिरा दिया जाएगा। लेकिन वेट अ सेकंड, सामने से थोड़ी सी रिटालिएशन आती है, कामिकाज़े अपने ग्रेनेड के साथ नॉकआउट करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ देखना है रैप अराउंड करने के लिए कामिकाज़े आगे बढ़ेंगे जरूर, 2 प्लेयर्स का सामना उन्हें करना है, पीछे से लूप्स आना चाहती है लेकिन SUP की पोजीशन पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज थी और इजी फॉर बैड बॉय जिस तरह से हाइट का एडवांटेज लेकर आते हुए दिखाई दिए और एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किए, ये चीज़ टीम आर्करेड के लिए बहुत शानदार तो साबित होती है। लेकिन सामने लूप्स आ जाती है, यूटिलिटीज से अगर रोका गया तो शायद 1-2 नॉकआउट्स निकल सकते हैं। पीछे से ग्रेनेड आएगा नील का और वो ग्लोरी को फिनिश कर देगा। रामजेस इज ऑन लो HP, जहां रामजेस को भी शायद गिरा दिया जाए। लेकिन लुक एट 9GG मलोसा फोर्थ पार्टी करने के लिए ये टीम पीछे से आएगी और इनकी जानिब से लूप्स के 2 प्लेयर्स को गिरा दिया जाएगा। लूप्स अब इस फाइट को हारने के दहाने पर आ चुकी है। लूप्स अनफॉर्चुनेटली शायद अब वो यहाँ से ना बच पाएंगे। आप मिनी मैप पर देखिए 3-4 टीमें यहाँ पर एक दूसरे को मिटाने के लिए आ चुकी हैं और लूप्स उसमें से एक है। राफिना कोशिश कर रहे हैं जैसे तैसे कर कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले जाएं, लेकिन राफिना को गिरा लिया जाएगा। 9G ग्लोबेंट अपने लिए एक अच्छा मैच ढूंढ रही है, लेकिन यहाँ पर रिवाइवल क्या मुकम्मल कर पाएंगे? लूप्स के प्लेयर एक और मजीद खिलाड़ी को गिराएंगे, लेकिन आर्करेड के रामजेस सेवियर बन जाएंगे, अपने आखिरी प्लेयर। इनफैक्ट अभी भी 3 खिलाड़ी आर्करेड के पास मौजूद रहेंगे रिवाइवल देने के बाद। लेकिन ऑल्ट्रिको एरिस विदाउट गेटिंग एनी प्लेसमेंट पॉइंट 8 पॉइंट्स इस मैच से लेकर वो बाहर कर दिए जाते हैं। फ्लैश धूम मचा रही है, 9वां एलिमिनेशन पॉइंट फ्लैश अपने पास रखे हुए हैं सर्कल के अंदर अभी तक के लिए। फ्लैश आपको एजेस पर नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर दिखाई दे रही है, सर्कल के अंदर आ भी जाएंगे, ज़्यादा कुछ दिक्कतें उनको नहीं पहुंचेंगी। हाँ, अलायंस के साथ शायद आपको एक फाइट फ्लैश की बनती दिखाई दे सकती है थोड़ी ही देर में, लेकिन खैर अभी फिलहाल के लिए टीम इनर सर्कल आपको आज वाकई ही दिखाई दे रहे एक अच्छी जगह के ऊपर, एक अच्छा जोन कंट्रोल उनके पास है। सर्कल अगर आगे भी चला जाता है तो ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा टीम IC को, लेकिन सर्कल के अंदर एक अच्छे पोजिशन पर है। IC के नॉकी को उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने टीममेट्स के साथ रियूनाइट करना है। एंड अगर आप आर्करेड को नोटिस करें तो शायद उनके किसी एक खिलाड़ी ने नॉकी को दूर दराज रहते स्पॉट भी किया है, लेकिन आई डोंट थिंक सो वहां तक उनके बुलेट्स जा पाएंगे अभी के लिए। एंड नॉकी को ज्यादा देर नहीं लगानी है, व्हीकल्स अगर उनके पास हैं या नहीं है उनको जल्द से जल्द रियूनाइट करना है अपने बाकी के प्लेयर्स के साथ। एक एलिमिनेशन पॉइंट बड़ा मैटर करता है, जहां पर आप हासिल भी करते हैं अगली टीम का। अपने प्लेयर्स को बचाए रखना, मैन एडवांटेज अपने पास रखना, यह आज के दिन के अंदर सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आपके पॉइंट स्कोरिंग में। लेकिन खैर वहीं पर टीम WBG वीवो गेमिंग इरादे अच्छे नहीं लग रहे हैं। 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स और चारों के चारों प्लेयर्स इनके भी सरवाइव कर रहे हैं इस मैच में, लेकिन डर असल फ्लैश से लग रहा है। जितना देर वो सरवाइव करेंगे, जितने मजीद वो एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाएंगे, उतनी ज्यादा दिक्कतें बनती दिखाई देंगी। वेल प्रॉब्लम्स तो बनाना चाहती है टीम फ्लैश। कोई भी टीम यहाँ पर जो आई है वो यही मकसद लेकर आई है कि उनको डोमिनेंस दिखानी है, उनको एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालने हैं। WBG वो भी ऐसा करना चाहेंगे। 3rd स्पॉट पर ये टीम दिखाई देगी, 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स इनके पास हैं। फ्लैश के पास 9 दिखाई देंगे। एलिमिनेशन नंबर बढ़कर हमें 9 पर जाता हुआ नजर तो आता है, लेकिन वहीं पर यूटिलिटीज डंप होती हुई अलायंस के ऊपर दिखाई देंगी। अलायंस वर्सेस WBG। अलायंस अगर आना चाहती है पॉइंट्स टेबल पर टॉप के ऊपर, डेफिनेटली उनको यहाँ पर WBG से तो फाइट जीतनी है, लेकिन एक बड़ा चिकन डिनर रिक्वायर्ड रहेगा। अलायंस छोटे मोटे चिकन डिनर, छोटे मोटे पॉइंट्स उनको बिल्कुल भी किसी अच्छी जगह पर लेकर नहीं आएंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ही कह रहा था कि 20 मिनट हो चुके हैं, 11 टीमें हैं, कोई भी एलिमिनेट हुआ कोई प्लेसमेंट पॉइंट आपको नहीं मिलने वाला। वेल जिस तरह की सूरत हाल दिखाई दे रही है, प्लेसमेंट पॉइंट्स कोई नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालने के लिए जिंजी आगे बढ़ेगी। वुल्व्स को गिरा दिया जाएगा। एंड वुल्व्स इस मैच से बाहर होने के करीब आ जाती है, लेकिन वापस से कुछ ट्रेड एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले जाएंगे, वापस से कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म किए जाते हैं सामने वाली टीम के ऊपर। लेकिन यहाँ फ्लैश स्लैमिंग देती हुई वुल्व्स के ऊपर दिखाई देगी यूटिलिटीज के साथ, किस खूबसूरती से इनकी तरफ से एंट्री ली जाती है। फ्लैश पे 3rd पार्टी हो जाएगी। ज़ियोस इज नॉक्ड आउट, बोर्ड गेमिंग
पीछे से आती है, दूसरे प्लेयर को लो एचपी किया जाएगा। मुश्किलात दोनों साइड से बढ़ती हुई दिखाई देंगी और देखते ही देखते फ्लैश इज डन एंड डस्टेड। फ्लैश को किस तरह से वाइप आउट किया गया है। बोर गेमिंग वुल्व्स मिलाकर ये पॉइंट्स तो निकालेंगे, लेकिन वुल्व्स के प्लेयर्स भी नुकसान का सामना करते हैं। फलक स्पॉट्स हिम आउट, लेकिन फलक का एलिमिनेशन पॉइंट स्टील कर लिया जाएगा। डॉरेन को नॉक किया गया था, लेकिन डॉरेन के ऊपर ये एलिमिनेशन पॉइंट WBG की साइड से भी एक निकलता है और साथ ही साथ बोर गेमिंग की जानिब से भी निकलता है। बोर के खाते में 8वां एलिमिनेशन पॉइंट दर्ज हो जाएगा। आदि जी हाँ बिल्कुल, एंड बोर वो भी अपने लिए कुछ सूरत हाल बेहतर बनाना चाहते हैं। क्या वो 40 पॉइंट्स के नज़दीक आ पाएंगे इस मैच के बाद? इतना कर लेंगे तो काफ़ी रहेगा, लेकिन सर्कल कहाँ पर जाएगा ख़वातीन व हज़रात? सर्कल आज सब कुछ तब्दील कर सकता है। जिस भी टीम को ये फेवर करेगा वो टीम आपको बहुत अच्छा खेलती दिखाई देगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए फलक सही टाइम के ऊपर अपना व्हीकल लेकर आगे बढ़े हैं। लेकिन अब वो मौका है जहाँ पर टीम इनर सर्कल को WBG को सबसे पहले एलिमिनेट करना है, क्योंकि टॉप 4 में WBG ही वो नाम है जो दिक्कतें बनाकर सेकंड स्पॉट पर जा सकता है। अगर WBG को एलिमिनेट कर दिया जाए तो टीम इनर सर्कल अपने लिए कुछ मजीद बेहतरी लेकर आ सकती है। लेकिन खैर अभी फिलहाल के लिए WBG उनके खिलाड़ियों ने स्पॉट डाउन किया। फलक का पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हुआ, थोड़ा बहुत लोन HP भी उनको किया गया था, लेकिन IC एक प्लेयर बचाए रखना है। एक भी खिलाड़ी अपना गंवाना बिल्कुल भी नहीं है टीम इनर सर्कल को इंशाल्लाह। लेकिन अभी फिलहाल के लिए टीम 9G ग्लोबेंट कल का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। 16वें स्पॉट के ऊपर ये मौजूद हैं। कल के 6 मैचेस में सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट्स इन्होंने निकाले थे और आज के पहले मैच में 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स इन्होंने निकाल रखे हैं। लेकिन मसला यह है कि आखिरी 2 प्लेयर्स ही रह चुके हैं। यहां से अगर एलिमिनेट हुए भी 8वें नंबर पर तो ज्यादा कुछ फायदा। ओके, 9G ग्लोबेंट के पास चारों के चारों खिलाड़ी हैं। टीम आर्क रेड की अगर बात करें, उनके पास 2 खिलाड़ी अपने आखिरी रह चुके हैं। लेकिन फलक स्पॉट डाउन करेंगे, हार्ड बॉय का एलिमिनेशन पॉइंट उठा लिया जाएगा, रामजेस का व्हीकल बर्स्ट होगा और ये एलिमिनेशन पॉइंट या WBG या इनर सर्कल के फलक ही होंगे। बिल्कुल भी कोई बख्शिश की गुंजाइश है नहीं है आज के दिन पर। चौथा एलिमिनेशन पॉइंट निकाल लिया जाएगा टीम इनर सर्कल की साइड से। लेकिन वहीं पर 9G ग्लोबेंट INF के फेडरल को इस मैच से बाहर करने वाला नाम बनेंगे और 7वें नंबर पर बगैर कोई एलिमिनेशन पॉइंट लिए INF को इस मैच से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन 16वां स्पॉट भी तैयार है इस मैच का चिकन डिनर करने के लिए, वो भी तैयार है। एटलीस्ट जाते जाते कोशिश करना चाहते हैं आखिरी दिन पर छाप छोड़ना चाहेंगे। बेशक यहां से आगे क्वालिफाई वो कर पाए या ना कर पाए, लेकिन इट्स ऑल अबाउट बोर वर्सेस वीबो गेमिंग वर्सेस टीम इनर सर्कल। इन्हीं तीनों के दरमियान में आपको इस मैच का चिकन डिनर शायद घूमता दिखाई दे सकता है। लेकिन WBG के बिल्कुल बैकयार्ड्स के ऊपर टीम 9G ग्लोबेंट आ चुकी है एंड 9G ग्लोबेंट का फाइट लेना WBG से IC को मौका देगा थर्ड पार्टी करने का टीम वीबो गेमिंग पर। 9G ग्लोबेंट के रीमिक्स बिल्कुल बैकयार्ड्स पर आ जाएंगे और WBG अब आपको पिंच्ड आउट होती दिखाई देगी। लेकिन इनर सर्कल उनको अपना स्प्लिट ऐसा रखना है कि वो एलिमिनेशन पॉइंट स्कोरिंग कर पाए इस फाइट में। और कल फलक भी यहाँ पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल देखा जाए WBG की तरफ से यूटिलिटी नाम की जाती है। फलक करीब आएंगे और आइस के बिल्कुल पास आ जाते हैं, यूटिलिटीज का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन आई की उनकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। वहीं पर WBG के ऑर्डर के ऊपर ग्रेनेड जाता है, कॉल गोट यहाँ नॉकआउट निकालेंगे, दूसरा प्लेयर भी गिर जाएगा। WBG ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशंस, पीछे से आएंगे नॉकी, टेक्स डाउन ऑर्डर, एलिमिनेशन पॉइंट आइस के ऊपर कंफर्म किया जाएगा। आईसी यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू गेट क्लोज, T24 को आगे आना है। IQ कवर फायर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन एलिमिनेशन पॉइंट एक उठाना जरूरी है। एक एलिमिनेशन पॉइंट दर्ज करना होगा अपने खाते में। सुक गेट नॉक्ड आउट और नॉकी की तरफ से नॉक निकाला जाता है। नॉकी वर्सेस सुक, इनका ये रोमांस फिर से चलेगा। कॉलगोट उनको स्टील कर दिया जाएगा, वो एलिमिनेशन पॉइंट आईसी को नहीं दिया जाता। Another grenade comes and Falak with those missiles आते हैं, आगे गिराएंगे, प्लेयर्स को बाहर किया जाएगा 9G को। लेकिन वहीं पर अगला फोकस WBG है। WBG से अब वो फाइट हारनी नहीं है। It's time for revenge and here comes the revenge. T24 comes in with a beautiful grenade, takes down 2 players. Falak आएंगे, दोनों elimination points confirm and here comes IC. IC gets this fight. WBG gets eliminated और IC की domination 10 elimination points पर चली जाएगी। Once again they have the circle, लेकिन मैन एडवांटेज छीनने की कोशिश की जा रही है। Alliance is getting closed in और फलक यहाँ नॉक हो जाते हैं।
जी हाँ, लेकिन अलायंस के प्लेयर्स उनको करीब नहीं आने देना है टीम आईसी को, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो करीब आएंगे भी, क्योंकि बैकयार्ड से बोर गेमिंग के प्लेयर्स वो उनके लिए दिक्कतें बनाने के लिए आ रहे हैं। खवातीनों हजरात, ये होता है कुदरत का निजाम। जहां पर अलायंस ने नॉकआउट निकाला आईसी पर, वो वहां पर जाना चाहते थे, लेकिन बैकयार्ड से बोर गेमिंग वो आगे बढ़कर अलायंस के प्लेयर्स को अब रोकने की कोशिश उन्होंने की है, लेकिन वहीं पर टीम इनर सर्कल, ये मौका है एलिमिनेशन पॉइंट्स बढ़ाकर इस मैच को 30 पॉइंट्स वाला मैच बनाया जा सकता है, कम से कम 27 पॉइंट्स, लेकिन इनर सर्कल उनको कैश आउट करना है। वहीं पर टीम बोर के प्लेयर्स आगे बढ़कर अलायंस के खिलाड़ियों पर नॉकआउट निकाला है। रेड जोन बनाने की कोशिश अलायंस के प्लेयर भी करते दिखाई देंगे। T24 स्टेप्स इन, अलायंस के जिमी को पकड़ लिया जाएगा उनकी साइड से। ओलियो की साइड से कोशिश की जा रही है कि यूटिलिटीज का इस्तेमाल करते साथ बोर गेमिंग के प्लेयर्स को नुकसान पहुंचाया जाए। अच्छा ग्रेनेड था, फटेगा, नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन बोर गेमिंग के प्लेयर यहां से अपना पोजीशन चेंज कर एक डिफरेंट एंगल से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फलक का यूटिलिटी है खवातीनो हज़रात, मैन विद द फ्रीकिंग गोल्डन हैंड। फलक की साइड से पूरी की पूरी टीम की कमर ही तोड़ दी गई है। थोड़ी देर पहले अलायंस ही थी जिसने फलक को नॉकआउट किया था, और फलक जब उठ खड़े हुए तो अलायंस का नामो निशान ही मिटा दिया जा चुका है। और वहीं पर फलक आखिरी प्लेयर 70वां एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाता है, और टीम इनर सर्कल खवातीनो हज़रात, आज के पहले मैच में ऐसी धूम मचाई गई है, 27 पॉइंट्स निकाल लिए जा चुके हैं इस एक गेम से। 27 पॉइंट्स निकाल लिए जा चुके हैं इस एक गेम से। क्वालिफिकेशन आपकी हो चुकी है, इसको अब सिर्फ आपने संभाले अपने पास रखना है आज के बाकी के 5 मैचेस में। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस अभी तक के लिए। कल के दिन के मैचेस को रिकॉल किया जाए, दिस इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एलिमिनेशन नंबर्स विद द चिकन डिनर। यस, हमने कल देखा था कि एक मैच में 16 एलिमिनेशन पॉइंट्स करते हुए फाल्कन्स दिखाई दी थी, लेकिन उनको तब चिकन नहीं मिला था। 17 एलिमिनेशन पॉइंट्स एंड चिकन डिनर। दीज आर द बॉयज फ्रॉम पाकिस्तान जो वहां गए हैं एक बड़ा ख्वाब लेकर, और वो ख्वाब हकीकत में तब्दील किया जा रहा है। वो डोमिनेंस दिखाई जा रही है, और क्या ही शानदार, क्या ही कमाल अंदाज था। Falak with those utilities, Noki with those cover fires, IQ with all the information, and T24 जिस तरह से वो मदद करते हुए दिखाई दिए अपनी टीम की। All in all, खवातीनो हज़रात, पेशे खिदमत है टीम आईसी। What a play, Adi. जी What a play. माशाल्लाह, माशाल्लाह। I would say कि we have to be humble। अभी के लिए 5 मैचेस पूरा दिन बाकी है, हमें ये नहीं भूलना है। Yes. अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, हर एक चीज इस मैच में, हर एक चीज ने हमारा साथ दिया है। कुदरत का निजाम होता है भाई, होता है। आपने देखा अलायंस के प्लेयर जब उन्होंने फलक को गिराया, वो गाड़ी लेकर आना चाहते थे इस तरफ, ठीक उसी लम्हे पे बोर दे जस्ट वेंट ऑन अलायंस। एंड लुक एट दीज फेसेस एंड देन लुक एट दीज नंबर्स। 1200 का सिंगल हैंडेड डैमेज। दिस इज फलक। Oh my God, 1200 डैमेज, 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म होते हैं 1200 डैमेज पे। क्रेजी 12 एलिमिनेशन पॉइंट्स का डैमेज है, और डैमेज टेकन देखिए आप, 512 डैमेज टेकन। Oh my God, कितनी फाइट में ये प्लेयर नॉकआउट तकरीबन, कितनी बार ये प्लेयर फाइट में आया, कितनी बार इसने अपना 100% दिया, और कितनी बार तो नॉकआउट ही नहीं हो सकते। हो जाता है, रिकॉल वाला भी है ना बीच में, रिकॉल्स भी, यस रिकॉल्स का भी है। और नॉकआउट के अलावा भी आपको डैमेज जब पड़ता है, आप लो एचपी होते हैं, जब फाइट में आते हैं, तो आप वापस ही लगा सकते हैं आदि। व्हाट डू यू मीन? हाँ, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। बट खैर ख़वातीन हज़रात, काफ़ी यकीन नहीं आ रहा मतलब है, लेकिन अभी आई वुड से इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि हम जब इस दिन का इख्तिताम हो तब भी हम इतना ही खुश हों, इससे ज़्यादा खुश हों इंशाल्लाह, इससे कहीं ज़्यादा इंशाल्लाह। बट अभी के लिए काफ़ी अच्छा मैच रहा है, नो डाउट।
ये 27 पॉइंट्स ये कम नहीं है ये बिल्कुल भी कम नहीं है। रोंडो आपको हमेशा 2 मैचेस के पॉइंट्स देकर जाता है। वहीं पर देखना ये है कि बाकी जो टीमें जो कंटेंडर्स रहे हैं कितने कितने पॉइंट्स उन्होंने निकाले हैं। हालांकि फ्लैश का ये बहुत बड़ा मैच हो सकता था। अच्छा, उस टाइम पर जब आईसी के पास तो हम भूल गए, एक चीज तो हम सेलिब्रेट करना भूल ही गए। विद दिस चिकन डिनर नाउ दे आर ऑन हैश We were so busy in celebrating. कि यार उन्होंने चिकन कर लिया, हम ये भूल ही गए। एक टाइम पर एक खुशी है, ये इतना हम हजम नहीं कर सकते, हम पाकिस्तानी हैं। After this chicken dinner, हम इसको प्रोसेस नहीं कर सकते। लेकिन ख़वातीनो हज़रात, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 27 पॉइंट्स फ्रॉम अ सिंगल गेम, और आप सेकंड स्पॉट के पॉइंट्स देखें, कहाँ 27, कहाँ 14। और मैं फ्लैश के बारे में ये जिक्र कर रहा था कि जब आईसी के पास 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स थे, फ्लैश के पास 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स थे। वहां से अगर फ्लैश सरवाइव कर जाती, फ्लैश कुड मेक अ हिस्ट्री। लेकिन फ्लैश भी उसी लम्हे एलिमिनेट हुई जब वो एलिमिनेट हुए, एक भी प्लेसमेंट पॉइंट ना उन्हें मिल पाया। अभी एक चीज मैं आपको बता दूं कि आईसी के एलिमिनेशन पॉइंट्स स्टील हुए इस मैच में। कई एलिमिनेशन पॉइंट्स आईसी के स्टील होते हुए दिखाई दिए हैं। करेक्ट। जहां बोर्ड गेमिंग ने 2 एलिमिनेशन पॉइंट स्टील किए थे, जो फलक ने 2 नॉकआउट्स निकाले थे, वो चीज एक तरफ डब्ल्यूबीजी स्टील करती हुई दिखाई दी। और इसके बावजूद 17 एलिमिनेशन पॉइंट्स इज अ ह्यूज नंबर, बट मूविंग ऑनवर्ड्स 7 पॉइंट्स के निकाल कर जाती है बीजी विद 5, लूस विद 5, जेंजी विद 4, वुल्व्स विद 3, Papara Supermassive with 2, Falcons with 2, Arnif with 1. But the moment of truth, the reality is here. Points table कुछ ही सेकंड्स में हमारे सामने आता हुआ, and there we have it. Okay, wait a second, it's the MVP and none other than Falak. तीसरी बार आते हैं, 5 एलिमिनेशंस निकालते हैं। अब तक पाकिस्तान साइड से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ MVPs की बात करें वो फलक ही बनते हुए दिखाई दिए, और इनकी तरफ से ये तीसरी बार MVP का टाइटल लिया गया है। 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले, 1197 का डैमेज, 1200 के आसपास ये टीम डैमेज होता है। ये बात मैंने जब ये ग्रेविटी में खेला, जब ये उसमें खेला करते थे, कोर्टी में खेला करते थे विद द नेम ऑफ ग्रेविटी, तो तब मैंने ये बात बोली थी कि जब फलक खेलते हैं तो फिर लॉबी को मौका नहीं मिलता कि वो खेल पाए, और इन्होंने इस बात को जस्टिफाई किया। नो डाउट पूरी टीम ने जस्टिफाई किया, बिकॉज T24 वाज राइट देयर विद 5 to 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स। लेकिन आगे बढ़कर अब ये देखना है कि ओवरऑल रैंकिंग्स में कितना डिफरेंस बना चुके हैं। एंड देयर वी गो, 73 पॉइंट्स, 52 एलिमिनेशंस, 1 चिकन डिनर, और ऑल्टर ईगो से आगे जा चुकी है ये टीम। 7 पॉइंट्स का फर्क दिखाई दे रहा है ऑल्टर ईगो और टीम आईसी के बीच में। क्वालिफिकेशन आपने एक मैच में अपनी कंफर्म कर ली है, अब सिर्फ आपने इसको संभाले रखना है। संभालना भी कैसे है, 6-7 पॉइंट्स पर मैच। कैन यू इमेजिन द डे इज सो इजी। क्या आज हमने जब दिन का आगाज किया था, इतनी आसानी क्या हमने सोची थी कि एक मैच के बाद हमारे लिए बन पाएगी। 7वें नंबर से उठकर एक टीम पहले नंबर पर जाती है, 15 पॉइंट्स नहीं 10 पॉइंट्स का फर्क था सिर्फ और सिर्फ दूसरे से। 27 पॉइंट्स हासिल किए गए, 27 पॉइंट्स, 27 पॉइंट्स ख़वातीन हज़रात, ये बहुत बड़ा नंबर है। बट खैर, अब सिर्फ 6-7 पॉइंट्स, मतलब 7 पॉइंट्स पर मैच, 6 पॉइंट्स पर मैच वुड डू। आप सेकंड पर नहीं, आप चैंपियन बन के लास्ट चांस के यहाँ से जाएंगे। ये लास्ट चांस, ये वो लास्ट चांस है जो अब तक PMGC का सबसे तगड़ा कंपटीशन, सबसे तगड़ा कॉम्पिटिटिव स्टेज रहा है। इसके चैंपियंस बनकर आप फाइनल्स में इंशाल्लाह जाएंगे। इंशाल्लाह सबने बोलना है। चार्ट में तकरीबन 20,000 लोग एक जगह पर देख रहे हैं, 10-15 दूसरे पर देख रहे हैं। टॉप 4 प्लेयर्स की फहरिस्त, फलक इज ऑन टॉप, 1200 का डैमेज, 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स। लॉबी हैरान रह चुकी है, वाकई मैं समझता हूं कि सब हैरान रह चुके होंगे। फ्लैश के टॉप जी शानदार खेला उन्होंने, 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स की डोमिनेशन। T24 के पास 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं, 746 का डैमेज, 797 का डैमेज सुख के पास है, और 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स वो भी कंफर्म कर लेकर जाते हैं। क्या ही मैच खेला है, क्या ही शानदार मैच खेला गया है। जितनी दाद दी जाए उतना कम।
और जिस तरह से स्टार्ट लिया गया, जिस तरह से फिनिश किया गया, ऑल्दो थोड़ा स्ट्रेल्थीनेस का मुजाहरा करते हुए एट टाइम दिखाई दी। यही तो बात मैं कह रहा था, सिचुएशन टू सिचुएशन यू हैव टू रियलाइज कि कब पैसिव खेलना है, कब एग्रेसिव खेलना है। एक टाइम पर आईसी के प्लेयर्स प्रोन डाउन थे, दे वर जस्ट वेटिंग फॉर द जोन। एक टाइम पर उन्होंने मैप कंट्रोल लिया, एक टाइम पर 2 प्लेयर्स को भेजा कि जाओ आगे जाकर फाइट में इनपुट क्रिएट करो। एक टाइम पर आईक्यू पीछे बैठे रहे, 3 प्लेयर्स आगे फाइट लेते रहे। आईक्यू ने पूरी साइड से बैक स्टैप से रोका, पूरे एक साइड आईक्यू कवर करते हुए दिखाई दी और बाकी 3 प्लेयर वहां फाइट्स बना रहे थे, थर्ड पार्टी कर रहे थे, यूटिलिटीज थ्रो कर रहे थे, 3-4 विद द कवर। जिस तरह से उन्होंने पीछे से सपोर्ट प्रोवाइड की है, बहुत ही काबिल तारीफ है। एक एक चीज पर जब घंटों बात हो सकती है, लेकिन अभी जो एक ऐसी चीज जहां पर हमने बात की आईसी के इस कमाल गेम प्ले की, वहीं पर हम बात करेंगे इस कमाल डिवाइस की जिसके ऊपर ये गेम प्ले किया गया। इन्फिनिक्स GT30 सीरीज का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफिशियल गेमिंग फोन है और जिसको पावर किया गया है स्पेसिफिकली PUBG मोबाइल के लिए। लेकिन खवातीन और हज़रात, वक्त हुआ चाहता है अगले मैच का। देयर इज नो ब्रेक, जाएंगे सीधा अगले मैच की तरफ। 38 सेकंड्स लेफ्ट। जी हाँ, बिल्कुल। और मैंने आपको इस मैच से पहले बताया था कि एक सर्कल आने दीजिए आईसी के ऊपर, क्योंकि ये वो एक लावा जो था ना, वो बिल्कुल अब आ चुका था फटने को। वो सिर्फ इंतजार कर रहे थे कल का दिन भी ये डोमिनेशन आनी थी, मौका नहीं मिल पाया। वो टाइम जो रोटेशंस में लगा, वो एनर्जी जो रोटेशंस में लगी जगह बनाने में सर्कल में, वो एनर्जी आज पूरी की पूरी आईसी ने इस लॉबी को तोड़ने में लगाई इस मैच में, जब सर्कल ने साथ दिया। और जैसे सर्कल ने साथ दिया उसके बाद आपने फिर इनका बॉडी लैंग्वेज देखा इस मैच में। बट खैर ख़वातीन और हज़रात, शुक्र अदा करेंगे और शुक्र अदा करने के साथ बिस्मिल्लाह पढ़कर इस अगले मैच में जाएंगे। सेकंड गेम ऑफ द डे, फाइनल्स से पहले फाइनल्स की झलकियां ख़वातीन और हज़रात। 14 नाम यहाँ से वापस लौट जाएंगे। उन 14 नामों में से बहुत से नाम ऐसे होंगे जो शायद 2-2, 3-3, 1-1 पॉइंट से फाइनल्स का वो टिकट हासिल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ बदकिस्मत टीमें ऐसी होंगी, अंडर परफॉर्मिंग टीमें कह सकते हैं आप। बदकिस्मती ठीक है, कहीं ना कहीं होती है, लेकिन साथ ही साथ आपकी परफॉर्मेंस भी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको पॉइंट्स टेबल पर अच्छी जगह पर नहीं रखती। आई मीन ज़्यादा परफॉर्मेंस है, आप लक को सिर्फ 3-4% ब्लेम कर सकते हैं या 5%, सम टाइम इट गेट्स, अगर बहुत ज़्यादा भी हो तो 10%, इससे ज़्यादा नहीं। बट 90% आपका गेम प्ले है, जो कि आपकी स्किल्स हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं। बट वेट अ सेकंड, ऑल्टर ईगो गोइंग इन अ ड्रॉप क्लैश, व्हाट इज गोइंग ऑन? रोज़मेरी 2 प्लेयर्स गिरा सकते हैं, एक गिराया जाएगा। पपारा सुपरमैसिव, व्हाट इज दिस डिसीजन मेकिंग? ये डिसीजन मेकिंग क्वेश्चनेबल तो है। जहां एक प्लेयर गिराया, उसको लॉबी का रास्ता दिखाया, लेकिन अब पपारा सुपरमैसिव क्या जाने से पहले कोई एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर पाएंगे? दूसरा प्लेयर भी एलिमिनेट हो जाता है। नाउ इट इज अ 2v4। ऑल्टर ईगो, वो गलती नहीं करनी, ओवर कमिटमेंट क्रिप्टोन की तरफ से देखा जा सकता है। जैसे आगे जाएंगे, नॉकआउट निकला था, इनफैक्ट 2 नॉकआउट्स निकाले जाते हैं नीको की जानिब से, लेकिन नीको गेट्स फिनिश्ड। और अब आखिरी प्लेयर पे जिम्मेदारी है, जो कि थोड़ा दूर दिखाई देंगे, हाथ में क्रॉसबो थामे। इनकी जानिब से कोशिश की जा रही है किसी तरह से कोई एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाए। स्नेप इनका इंतजार कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि शायद रिवाइवल दिया जा रहा है, लेकिन स्नेप इज वेटिंग फॉर यू। कॉम्पाउंड के अंदर आएंगे, वेट अ सेकंड, क्रॉसबो लगाई जाएगी और काफी डैमेज दिया जरूर जाता है स्नेप को, लेकिन क्या जाने से पहले एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाएगा? नो। ये अर्ली ऑन 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स ऑल्टर ईगो को मिल जाते हैं, एक भी प्लेयर कंफर्म नहीं कर पाए और इस मैच से बाहर हो जाएगी पपारा सुपरमैसिव। वो थर्ड पार्टी करने के लिए कह सकते हैं कि वो ड्रॉप फाइट लेने के लिए आए थे, टारगेट करने के लिए आए थे, और फिलहाल वो टारगेटिंग बिल्कुल भी अच्छी साबित नहीं होती एंड पपारा सुपरमैसिव बाहर हो जाते हैं। बट चलें, ऑल्टर ईगो, उनको बहुत फायदा हासिल होता है। जहां वो 7 पॉइंट्स पीछे थे, अब सिर्फ 3 पॉइंट्स पीछे रह जाएंगे। इसका फायदा आईसी को तो बिल्कुल भी नहीं होगा इस ड्रॉप क्लैश का। हाँ, अगर एक प्लेयर गवा दिया जाता, एक प्लेयर एलिमिनेट हो जाता, तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। बट सर्कल की बात करेंगे, सर्कल कह सकते हैं कि जब से आईसी ने डिसीजन मेकिंग की है कि उनको मिलिट्री जाना है, सर्कल ने फैसला किया कि मैं मिलिट्री नहीं आऊँगा। अब मैं मिलिट्री नहीं आता बिकॉज आईसी इज देयर। सर्कल इस बार माउंट एवरेस्ट को सेंट्रलाइज करता हुआ कहीं ना कहीं घाट का साइड के ऊपर बनता हुआ दिखाई देता है, और
Welcome to a quick report with the 7WG. I'm here joined by Falak from Inner Circle, putting up 1100 damage, and with that performance, pushing yourself up to first place. I want to know, you guys made an adjustment in Rondo in regards to the solo player with the 3-1 split. You made sure T24 went further away. What led to that decision? We just went to Nuke so we can take some kills, and even if we die, T24 will just recall us and we will loot and belly and just rotate. And then zone favored us, and it was a very good match for us. That's it. I mean, I wouldn't say zone just favored you. You guys, the timing was great, especially with WBG. As I mentioned earlier, you're in first place. What can you do to keep this momentum going and maintain yourself within the top two? We are very confident now. We will just try to play good and continue this momentum so we can qualify for grand finals. Inshallah, you'll be in grand finals. You got T24 performing. You're performing too. Everybody's performing. Let's see how Inner Circle can continue on the last day of Last Chance. Well, फलक को आपने सुना, उनकी तरफ से कहा गया कि हमने यही प्लान किया था and it worked out. And alhamdulillah for this. हम आज इन्हीं सब दुआओं के साथ आगाज़ ले रहे थे. काफ़ी लोगों को मैंने कमेंट्स में भी देखा. Everybody started the match with Bismillah, Nasrun min Allah wa Fathun Qareeb, and खैर let's see. अभी फ़िलहाल अल्लाह ताला की मदद हो तो जीत तो करीब होगी. उम्मीद की जा रही है कि इस मैच में भी कुछ ऐसे ही पॉइंट्स निकलेंगे. ऑल्दो सर्कल थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है, लेकिन फर्स्ट सेकंड जोन के अंदर रोटेट करना इतना मुश्किल नहीं होगा. जनजी उनको देखें आप, कुछ सेकंड्स में वो गाड़ियां लेकर आगे चले जाएंगे. और ये देखें आप, टीम परफॉर्मेंस, लास्ट चांस डे 1 7 पे फिनिश किया. लास्ट चांस डे 2 का फर्स्ट मैच उनको #1 पर ले आता. कल हम ये बातें चीख कर बोल रहे थे कि फर्स्ट मैच में चिकन कर लिया, रोंडो की फील आ रही है, अगर कर लिया तो फर्स्ट पर आ सकते हैं. और देखें कैसे उन्होंने वो ख्वाब सच कर दिखाया है. जहां सपने सच होते हैं वहां जो नाम है वो आईसी का ही आता है. दिस इज पाकिस्तान फॉर यू ख़वातीन हज़रात. और 4 साल हो चुके हैं. मैं ये चीज़ बार बार दोहराता हूँ क्योंकि हर साल हम स्टेज पर हम इसी एनर्जी से हम कास्ट करते रहे और आप लोग इसी उम्मीद से देखते रहे हैं कि ये साल हम जाएंगे, ये साल हम जाएं. हम पिछले सालों में ये सोचते थे यार फाइनल्स में जाएं ना जाएं, चलो अच्छा खेल लें, अच्छा अगले साल जाएंगे फाइनल्स में. Have you seen that picture जिसमें कायरो दुआ करवा रहे हैं? नहीं, मैंने नहीं देखी वो अभी तक. कायरो ने दुआ करवाई है भाई. कायरो को स्पेशली बुलाया गया है ताकि वो थोड़ी दुआएं कराएं. बेशक हमारा ईमान है इस चीज़ के ऊपर कि दुआओं से तकदीरें बदलती हैं, रास्ते बनते हैं, कोशिश अपनी होती है, मज़ीद आसानियाँ बनती हैं. और इट्स एट लीस्ट फॉर मी, फॉर अस, फॉर एवरी वन ऑफ अस, इट्स अ बिग मोमेंट फॉर. मुझे तो इसको हज़म करने के लिए मुझे लगता है पूरा 3-4 दिन चाहिए अभी. इंशाल्लाह आज के दिन के अख्ताम पर भी हम इतना ही खुश हों, इससे ज़्यादा खुश हों इंशाल्लाह. अभी आप कंपटीशन अगर देखें तो उसमें अच्छा खासा जो है ना अभी भी चीज़ें इधर उधर 70 पॉइंट्स के ऊपर आपको टीम ऑल्टर ईगो आती दिखा. हाँ, हो सकती हैं. एक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी. वो दूसरे थे तीसरे पर गए हैं. चलें फ्लैश करे ना करे, WBG 63 पर है, ज़्यादा दूर नहीं है, 10 पॉइंट्स के फ़र्क के साथ हैं वो. 55 के ऊपर लूप्स है, 53 के ऊपर फिर आपको 2 टीमें दिखाई दे रही हैं, 47 के ऊपर वुल्व्स हैं. माशाल्लाह, ये फायदा ज़बरदस्त. ये फायदा. थैंक यू, अल्लाह दिन का शुक्रिया अदा करेंगे ये दिखाने के लिए. बट आईसी हैज़ सम प्लान्स फॉर दिस गेम. देखें, आसान है यहाँ से, उतना मुश्किल नहीं है जितना ये मुश्किल दिन है. और अब आप ये देखें WBG के लिए, लूप्स के लिए, जो हमारे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर ही है ना ये. Genji's gatekeeping. Wait a second. जेनजी गेट कीप कर रही है. They know that IQ को पता है. IC को पता है, and they have time to rethink कि कहाँ से उनको जाना है, कैसे जाना है. Imagine अगर यहाँ 2 प्लेयर्स रहते हैं, बार बार इन्फो देते हैं कि हम इधर ही मौजूद हैं, और बाकी 2 प्लेयर्स घूम के आ जाते हैं दूसरे ब्रिज से, नवो साइड से, या एक प्लेयर छोड़कर बाकी 3 वहाँ आ जाते हैं. जेनजी के साथ जो होगा वो तो अखबार में आएगा.
लेकिन शायद ऐसे डिसीजन मेकिंग ना की जाए बिकॉज वो थोड़ा चैलेंजिंग भी हो सकता है और उसके लिए फिर टाइम भी काफ़ी वेस्ट हो जाएगा, टाइम लग जाएगा उसमें। एंड फिलहाल सर्कल अपना अगला शिफ्ट लेकर जाने वाला है, जंजी को फॉल बैक करना पड़ेगा। जंजी आई वुड से दैट इज अ गुड सर्कल बाय द वे। अब ये सर्कल अच्छा है, बट आईसी को एक तो फाइट लेकर जाना पड़ेगा। Why are they going उनको back? जाना पड़ेगा, वो जा सकते हैं, इनफैक्ट नोवो साइड ब्रिज से भी जा सकते हैं, लेकिन आईसी ये रिस्की है, लेकिन दिस रिस्क कैन रिवॉर्ड एज वेल। रिवॉर्ड इस सेंस में कि जिस तरह से सर्कल ने एक बैक फ्लिप खाया है, अगर आईसी एलिमिनेट कर देती है जेंजी को तो फिर तो बहुत बड़ा फायदा है, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है इस फाइट में, बहुत बड़ा रिस्क है ये फाइट। अब देखते हैं कि आईसी इसको नॉकी पकड़े जाते हैं और नॉकी को शायद भेजा गया आगे डेलिबरेटली चेक करने के लिए, लेकिन आईसी हैज टू रीथिंक नाउ। आईसी दे हैव टू रीथिंक नाउ। अब वो वापस जा रहे हैं। They could have done it earlier. वो पहले ही जा सकते थे, हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से a bit of overthinking once again वो इस तरह के स्टेज पर हो ही जाती है, सिर्फ इनकी तरफ से नहीं किसी भी टीम की तरफ से हो जाती है, क्योंकि हम इनको हाईलाइट कर रहे हैं इसलिए हमें नज़र इनकी आ रही है, अदरवाइज कोई भी टीम इसी तरह करेगी। लेकिन अब देखें आप, जंजी अब फॉल बैक कर रही है। नाउ लुक एट देम, नाउ दे आर फॉलिंग बैक। व्हाट इज गोइंग ऑन? जंजी वांटेड टू, वो बस चाहते थे कि वो किसी तरह आईसी को जो कि टॉप पे मौजूद है उनको किसी तरह नुकसान पहुंचाएं, कोलैटरल डैमेज कह सकते हैं, किसी भी तरह से उन्होंने एक प्लेयर एलिमिनेट कर दिया और अब वो सर्कल में रोटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आईसी अब उनकी ऊपर मुश्किलात बढ़ेंगी। इसके दूसरी तरफ जो चीज़ की जा सकती थी वो ये हो सकता था कि नॉकी को यहीं छोड़ा जाता, बाकी 3 पर जब तक शायद वो आ भी चुके होते दूसरी साइड से घूमकर, फार्म साइड से घूमकर। लेकिन चलें, लेट्स सी आईसी किस तरह से सर्कल में जगह बनाती है। अब देखें जो टाइम इतना वेस्ट हुआ है उसकी वजह से सर्कल में जगह मिलना भी मुश्किल हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट टाइम। यस, एग्जैक्टली, टाइम इज मनी, और टाइम इज एक्चुअली मनी, और टाइम ही तो सब कुछ है इस गेम में। अब आप देखें आईसी जब रोटेट कर आएगी, मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा सा संभल कर उन्हें रोटेट करना है, इसलिए कि ब्लू जोन से जब वो निकलेंगे बाहर सर्कल के अंदर, जैसे ही कदम रखेंगे, यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन देयर। तो आईसी दे हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल इंशाल्लाह। बस ये है कि देखें, एक आधा मैच बेशक उतना बेहतर ना जाए, उसकी वजह से आपको अपना मोमेंटम नहीं टूटने देना। एक जो माइंडसेट है या जो एक कॉन्फिडेंस है वो शैटर नहीं होना चाहिए। मुझे इस चीज़ से डर लगता है, मुझे एक बुरे मैच से डर नहीं लगता, मुझे इस चीज़ से डर लगता है कि टीमें इस स्टेज पर आकर जब इतना बड़ा कमबैक दिखाती हैं, अक्सर औकात ऐसे होता है कि एक आधा मैच अगर बुरा चला जाए तो वो थोड़ा सा जब अपने आप को रीसेट करते हैं उसमें गलतियां हो जाती हैं। अभी खैर आईसी सेफ, सर्कल थोड़ा दूर चला जाएगा वापस से, लेकिन एटलीस्ट दे आर आउट ऑफ द ब्लू। आईसी पोचिंकी की साइड से जहाँ से टीम फ्लैश रोटेट कर रही है पोटैटो हिल के अतराफ, वहाँ से ही आपको रोटेट करते दिखाई देंगे। एंड वहीं पर मज़ीद कुछ फाइट्स की बात करें, आपको आहिस्ता आहिस्ता से बनती दिखाई दे रही हैं, जन्म लेती दिखाई दे रही हैं। 9Z ग्लोबेंट रीमिक्स बहुत ज़्यादा लो ऑन HP किए गए एंड कंफर्म कर लिया जाएगा। ये एलिमिनेशन पॉइंट तो बासानी कंफर्म हो जाएगा। स्मोक काफ़ी टाइमली फेंका गया था, शायद रीमिक्स ने अपने लिए ही फेंका था वो, अनफॉर्चुनेटली उसी में नॉक होकर अब वर्चुअल कवर का इस्तेमाल वो करेंगे। लेट्स सी, रिवाइवल तो नामुमकिन है, ब्लू का डैमेज भी है। 9Z ग्लोबेंट आई वुड से कि यहाँ से फॉल बैक करना एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल एक बेहतर ऑप्शन साबित ज़रूर होगा फॉल बैक करना, लेकिन वहीं पर 9ZG शायद वो फॉल बैक करते हुए दिखाई भी देंगे। अराइज को देखें आप, गाड़ी लेकर अवॉइड करते हैं सारी फाइट को, जो कि एक अच्छी डिसीजन मेकिंग ज़रूर है। वहीं पर सर्कल के हिसाब से अगर आप रोटेशन देखें, जंजी बहुत अच्छी रोटेशन करके आ चुकी है, लेकिन इस बार वो फंस जाएंगे। यहाँ अब उनको फाइट लेना पड़ेगी, और साथ ही साथ अगर आप यहाँ IQ की रोटेशन देखें, क्या ही खूबसूरत अंदाज से वो अपने आप को एक अच्छी जगह पर लेकर आए हैं। लेकिन
सेटल होना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को हील करना, उसके बाद फिर प्लेयर्स के डिसएडवांटेज इस चीज़ को मलूज़े खातिर रखना है। लेकिन यहाँ आर्करेड की फाइट बनती हुई दिखाई देती है। आर्करेड के रामजेस गिर जाएंगे ओलियो की जानिब से। अलायंस यहाँ मौजूद है, पीछे दूर दराज कहीं ना कहीं आईसी के प्लेयर्स तो हैं, लेकिन उनके पास वो हार्ड कवर दिखाई नहीं दे रहा। ओपन टेरेन है जहाँ पर वो खेलते हुए नजर आएंगे, यानी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वो चंद शख्स और उसके अंदर प्लेयर्स और एक प्लेयर गाड़ी लगाकर बोल्डर के पीछे प्रोन डाउन। दूर दराज से जब टीमें क्रॉसर्स बनाएंगी तो मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन अलायंस अगर उस साइड पे जाना चाहेगी तो फिर वहाँ अलायंस को भी क्रॉसर्स में लाया जा सकता है। लेकिन अभी इस सारी फाइट में नॉकडाउन जो कि निकला था रामजेस के ऊपर, उनको रिवाइव दे दिया जाएगा। रामजेस वापस से हील करते हुए दिखाई देंगे और सिचुएशन 3v3 का फिर से बनता हुआ नजर आता है। आईसी इस जगह के ऊपर उस वक्त तक सेफ है जब तक उनके बिल्कुल बैकयार्ड्स पर जो कॉम्पाउंड्स हैं वहाँ पर कोई नहीं आता। एंड अगर ये सर्कल बैकफ्लिप खाता है, आईसी आई वुड से ये पूरा एरिया कंट्रोल कर पाएगी, कंसिडरिंग अगर उनके बिल्कुल बैकयार्ड्स में कोई नहीं आता तो ये मैच भी आईसी कुछ अच्छे पॉइंट्स निकाल कर इंशाल्लाह लेकर जा सकती है। बट खैर फ्लैश वो कोशिश कर रहे हैं, इनफैक्ट बोर गेमिंग आएंगे, सरप्राइज किया जाता है फ्लैश के कुछ खिलाड़ियों को, एंड फ्लैश को भी जगह नहीं मिल पा रही है। अगर आप नोटिस करें तो वो रुकना चाहते थे यहाँ पर, बट अब बोर यहाँ पर है। फ्लैश में भी शायद उनको रियलाइजेशन हो जाएगी कि अब हमें फाइट लेना पड़ेगी, लेकिन साथ कुछ कॉम्पाउंड्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सर्कल कहाँ पर जाएगा? 9G के प्लेयर को पकड़ा गया है WBG की साइड से, उनको स्पॉट डाउन किया गया, नॉकआउट भी किया जा चुका है उनके एक प्लेयर को। एंड 9G ग्लोबेंट थोड़ी देर पहले भी ये फाइट उनकी WBG के अतराफ ही चल रही थी, लेकिन आईसी दे हैव टू जस्ट वेट हेयर। अपना पोजीशन कॉम्प्रोमाइज़ उनको नहीं करना है इस तरह से। अभी भी कुछ टीमों ने सर्कल के बाहर से सर्कल के अंदर आना है, तब जाकर आईसी को शायद हो सकता है कि मुमकिनात में से है कि शायद स्लैम इन दिया जाए उनके ऊपर। लेकिन 9G ग्लोबेंट रईस बाल बाल बचते हैं और आउट इन दी ओपन आकर, और कोई ऑप्शन उनके पास था नहीं। व्हीकल उनका बस्ट होने वाला था, व्हीकल बस्ट के साथ ही अब वो उतर कर वहां पर लेट कर हील कर रहे हैं और उनको किसी ने स्पॉट ही नहीं किया। वहीं पर 9G के दूसरे खिलाड़ी, आखिरी 2 प्लेयर्स लीजिए, अब उन्होंने स्पॉट डाउन कर लिया है। गीक के खाते में ये नॉकआउट दर्ज हो चुका है एंड एलिमिनेशन पॉइंट भी बासानी कंफर्म हो जाएगा। 9G ग्लोबेंट अपने आखिरी प्लेयर पर आ चुकी है। मिलोसा जैसे तैसे कर कर अपनी जान बचाए यहाँ पर आ चुके हैं, एंड गीक आपको थोड़ी देर में उनका भी एलिमिनेशन पॉइंट उठाती शायद दिखाई देगी। वहीं पर लूप्स, बिखरी टीम, बिखरे प्लेयर्स और डिफरेंट टीमों को अपने एलिमिनेशन पॉइंट्स दे दिए हैं। आखिरी खिलाड़ी शायद लूप्स की साइड के ऊपर भी, जी हाँ, आखिरी प्लेयर जिंदा है। अब अगली बार से मैंने आपका माइक बंद कर देना आगे से, बिकॉज आप रुकने का नाम नहीं लेते। वंस यू गेट स्टार्टेड उसके बाद फिर आपको रुकना इम्पॉसिबल हो जाता है, जिस तरह से अभी गीकी को रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है लूप्स की जानिब से। लेकिन लूप्स को मैच से बाहर कर दिया जाएगा। एंड 2 बुरे मैचेस लूप्स को कहाँ से कहाँ ले आए आदि। टॉप 2 के अंदर, टॉप 3 के अंदर 2 ब्राजीलियन टीम से, लुक एट देम वेयर दे आर। लेकिन यहाँ आईसी वर्सेस बोर गेमिंग फाइट होती है, एंड आई वाज थिंकिंग कि अगर थोड़ा सा जेनजी इस फाइट में थर्ड पार्टी करने के लिए आई तो आईसी ने इनके ऊपर भी नॉकआउट्स निकालने हैं, और वो बदले की आड़ में आईसी अगर जेनजी को एलिमिनेट करती है तो जो खुशी दिल को पहुंचेगी, जो सुकून पहुंचेगा, वो कहीं और पहुंच नहीं सकता। लेकिन जेनजी जहां जाएंगे किसी ना किसी को पाएंगे। इस बार उनके सामने WBG मौजूद थी, पीछे से बोर्ड के प्लेयर्स थर्ड पार्टी करते हैं। टॉप वहां नॉक हो जाएंगे, टॉप्स की जानिब से बल्कि फलक नॉक हो जाते हैं। एंड फ्लैश वहां आईसी के ऊपर स्लैम इन देने वाली है। आईसी का सर्वाइवल इम्पॉसिबल दिखाई दे सकता है। 2 प्लेयर्स यहाँ मौजूद हैं और फ्लैश ने ये एलिमिनेशन पॉइंट भी कंफर्म कर लिए। लेकिन IQ एंड T24 राइट टाइम पे फॉल बैक करना चाहते थे। IQ की गाड़ी को फंसा लिया जाएगा। IQ इज नॉक्ड एंड फिनिश। फ्लैश, व्हाट अ ब्रिलियंट थर्ड पार्टी जोन के बाहर से आए और अब T24 अकेले बच जाते हैं। उनको चेज किया जा रहा है, जहां सामने से T24 के ऊपर ग्रेनेड्स दागे गए हैं, पीछे से फ्लैश यहां उनको एलिमिनेट करना चाहती है। टीम आईसी का यहां सिचुएशन में बचना इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा थी। जी हाँ, बिल्कुल। आईसी के T24 अब जैसे तैसे कर कर बस अब सर्वाइवल पॉइंट्स उनको इकट्ठा करने हैं। सर्कल के अंदर थोड़ा आगे मजीद गए हैं एंड फ्लैश की मजबूरी थी ये करना।
मजबूरी इन सेंस कि उनको रास्ता और कहीं से नहीं था मिल रहा। एंड फ्लैश के अलावा अब आप बर्मीज गोल्स को भी देखें, वो फ्लैश के पीछे पीछे आए हैं सर्कल में जगह हासिल करने के लिए, लेकिन बर्मीज के 2 खिलाड़ियों को गिरा लिया जा चुका है फ्लैश की साइड से। और फ्लैश का अच्छा खेलना, फ्लैश अच्छा खेलेगी इनफैक्ट, और कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है। बर्मीज के एक और प्लेयर को लो ऑन एचपी किया गया, लेकिन बच जाएंगे अभी फिलहाल के लिए बर्मीज गोल्स। आखिरी 2 खिलाड़ी उनके बाकी अब रह चुके हैं। लेट्स सी कि क्या फ्लैश को कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा या नहीं। आते साथ ही फ्लैश अपने नॉकड आउट खिलाड़ियों का एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करना चाहेंगे जल्द से जल्द, इससे पहले कि कोई रिवाइवल का इम्कान बने। एंड जल्दी इस फाइट को खत्म भी करना चाहती है फ्लैश, लेकिन सर्कल यहां से वापस आगे की तरफ चला जाएगा। नॉर्दर्न साइड या नॉर्थ ईस्टर्न साइड के ऊपर स्लाइड साइड शिफ्ट गया है, लेकिन फ्लैश बोर बर्मीज गोल्स के आखिरी प्लेयर रह चुके हैं, वो यहां से फॉल बैक करेंगे। लेकिन T24 ओपी वो अपना व्हीकल लेकर मजीद आगे जाना चाह रहे हैं सर्कल में, सर्वाइवल अपना यकीनी बनाने के लिए। एंड लेट्स सी कि क्या उनको कोई जायपना मिल पाएगी। आसपास में वुल्व्स है, आसपास में फाल्कन्स आ रहे हैं, वहीं पर T24 जा रहे हैं। एंड T24 जहां पर जा रहे हैं वहां पर आर्करेड है, आर्करेड के हाथों ये एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म हो जाएगा और टीम इनर सर्कल इस मैच से बाहर कर दी जाती है। एक एलिमिनेशन पॉइंट उठाया उन्होंने, लेकिन कोई भी प्लेसमेंट पॉइंट ना मिल पाएगा। बात आ चुकी है 12 टीमों पर, जहां पर टीम ऑल्टर ईगो आरएस, जिनसे खतरा बहुत ज्यादा है, 70 पॉइंट्स पर वो आ चुके हैं। दूसरे नंबर पर चारों के चारों प्लेयर्स उनके इंटैक्ट हैं, लेकिन असल डर WBG और फ्लैश जिस तरह से खेल रहे हैं उनसे बचकर रहना पड़ेगा। लेकिन फ्लैश उनके प्लेयर्स को काफी नुकसान पहुंचाया गया, काफी ज्यादा लो एचपी थे 3 खिलाड़ी। जी हाँ, एक को फिनिश कर दिया जाता है एंड बाकी जो प्लेयर्स लो एचपी थे अपना आपको हील लगाएंगे। यहाँ बोर्ड उनकी नाक में दम करना चाहेगी, सामने अलायंस उनका इंतजार कर रही है। फ्लैश को सर्कल में जाना है, बोर्ड गेमिंग नहीं जाने देगी। टॉप्स को भेजा गया, वहीं पर बोर्ड की जानिब से हैवलिक को भेजा गया, लेकिन बाकी जो प्लेयर्स हैं वो आपस में फाइट करेंगे। फ्लैश के पास में एडवांटेज नहीं है इस सारी सिचुएशन में, सामने WBG मौजूद है, लेकिन बोर्ड के 2 प्लेयर्स गिरा दिए जाएंगे। इनफैक्ट दोनों साइड्स पे एक नॉक निकलता है, बोर्ड की जानिब से एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाएगा। एंड वो 180 डिग्री शिफ्ट करके स्नोइक्स ने जो एंगल बनाया है और जो नॉकआउट निकाला है, दैट इज क्रेजी। और इससे रिकवर शायद नहीं कर पाएगी। फ्लैश इज डन एंड डस्टेड। आखिरी जो प्लेयर थे उनको ऑल्टर ईगो एलिमिनेट करती हुई नजर आती है। ऑल्टर ईगो वर्सेस INF भी होने वाला है आदि, दोनों टीमें आमने सामने मौजूद हैं। INF को सर्कल में आने के लिए ऑल्टर ईगो को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इमेजिन अगर ऑल्टर ईगो ने यहाँ 1 या 2 नॉकआउट्स दे दिए, INF बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं लेगी। लेकिन वहीं पर WBG वर्सेस अलायंस ये फाइट भी चलेगी, जहां आर्करेड भी मौजूद है थर्ड पार्टी करने के लिए। सो WBG का भी सिचुएशन में बचना इम्पॉसिबल दिखाई दे सकता है, लेकिन अभी तक वो 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल चुके हैं। 7 क्रेजी एलिमिनेशन पॉइंट्स वापस से आए INF वर्सेस ऑल्टर ईगो। हमारे सामने ऑल्टर ईगो का भी बचना मुश्किल लग रहा है। जी हाँ, ऑल्टर ईगो भी आपको पिंच्ड आउट दिखाई दे रही है। एक साइड के ऊपर रोजमैरी वो अकेले बोर्ड गेमिंग के प्लेयर से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। सामने से INF के डिएगो, ही गॉट नो चिल एट ऑल। वो गाड़ी लेकर 4 बंदों के मुंह में जा चुके हैं। नॉकआउट भी निकाल लिया है उन्होंने गाड़ी से। बाकी भी प्लेयर्स गाड़ियों पर बैठ कर आएंगे, लेकिन क्रिप्टॉन हाथ में फूल उनके भी नहीं है, बंदूक है। तीसरे को गिरा लिया जाएगा उनकी साइड से, लेकिन बैक स्टैब आएगा। ऑल्टर ईगो आरएस आखिरी प्लेयर पर आ चुकी है। वहीं पर टीम INF के प्लेयर्स वो भी जैसे तैसे कर कर अपने आखिरी प्लेयर पर आ चुके हैं, लेकिन यहां से एलिमिनेट कौन होने वाला है? असल सवाल ये है, ऑल्टर ईगो आरएस अगर एलिमिनेट हो जाते हैं तो पहले स्पॉट के लिए जो खेल रहे थे अनफॉर्चुनेटली ना खेल पाएंगे इस मैच में। वहीं पर INF अपने प्लेयर्स को तो रिवाइवल ना ही दिया जाएगा, गाड़ी में बैठकर हील कर रहे थे, लेकिन उसी लम्हे स्मोक्स के बादल हट जाएंगे और अब यहां से फॉल बैक करना पड़ जाएगा। टीम ऑल्टर ईगो आरएस अपने आखिरी 2 खिलाड़ियों पर है। एक यूटिलिटी आएगा, टीम गी के आ जाती है और ऑल्टर ईगो आरएस इस मैच से बाहर हो चुकी है खवातीनो हजरात। लेकिन वहीं पर टीम INF के लॉ यहां पर मौजूद अकेला खिलाड़ी, उनको भी स्पॉट डाउन किया गया। गी के अपने लिए मजीद एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म करना चाहते हैं। टीम फ्लैश इस मैच से बाहर हो चुकी है, टीम ऑल्टर ईगो आरएस इस मैच से बाहर हो चुकी है। अगला नाम, अगला खतरा जो WBG है, क्या उनको भी इस मैच से बाहर किया जाएगा? लेकिन ऑल्टर ईगो आरएस वो पहले स्पॉट के ऊपर वापस आ चुके हैं। जी हाँ, WBG वो भी पहले स्पॉट की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आर्करेड उनका ये ग्रेनेड जाएगा। ऑर्डर इज नॉक्ड आउट। क्या आर्करेड इसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगी? ऑल्दो सर्कल में ये टीम मौजूद है। मेरे ख्याल से तो अभी टीम आर्करेड अपने पोजीशन को छोड़कर ओवर कमिट नहीं करना चाहेंगे। दे विल प्ले बाय द बुक एंड द बुक सेज के
आराम से खेलो, समर के खेलो, यू हैव द जोन, आपको ओवर कमिट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यूटिलिटीज़ फेंकते रहो, अगर कोई एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म हुआ तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू डोंट नीड टू पुश। लेकिन वहीं पर फिर से ग्रेनेड दागा जाता है, फिर से यूटिलिटी डंप होती है, 2 प्लेयर्स फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद है, वहाँ किसी तरह से अगर ग्रेनेड चला जाता है, वैसे वहाँ ग्रेनेड फेंकने का एक ही तरीका है, उसके लिए प्लेयर को थोड़ा सा वेस्टर्न साइड पे लेफ्ट साइड पे एक्सटेंड करना पड़ेगा। लेकिन WBG उनके 3-3Z आउट इन दी ओपन आएंगे। डज ही हैव एनी आइडिया कि हार्ड बॉय बिल्कुल सामने मौजूद हैं, जहाँ पर वो फाइट चलती हुई दिखाई देगी। दूसरी साइड पर आएंगी के वर्सेस बोर्ड गेमिंग, ये फाइट बनेगी जहाँ पर दोनों टीमें बॉटम से उठकर आगे आना चाहती हैं। लेकिन बोर्ड गेमिंग इस मैच में दे हैव अ डिफरेंट प्लान। लेकिन वहीं पर पीछे से स्नोइक्स आएंगे, गाड़ी के नीचे दे दिया जाएगा स्नोइक्स को। इनफैक्ट स्नोइक्स नहीं, इट वाज रैग्नारोक जो कि गाड़ी के नीचे देते हैं। स्नोइक्स ग्रेनेड से नॉकआउट्स निकालते हैं, पीछे से रैग्नारोक आएंगे, स्नोइक्स टेक्स हिम डाउन एज़ वेल। साफ आएंगे आगे, उनको पकड़ना था, लेकिन गीके गेट्स एलिमिनेशन पॉइंट्स और वो फाइनल ब्लो दे दी जाती है। वहीं पर WBG गेट्स एलिमिनेटेड ऑन 74 पॉइंट्स। 3 टीमें, oh my god, what is going on here in the last chance? 3 टीमें 74 पॉइंट्स पर दिखाई दे रही आदि, 3 टीम्स ऑन 74 पॉइंट्स। जी हाँ, बिल्कुल क्लासिकल PUBG मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप ये लास्ट चांस में हो रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि फाइनल्स का कंपटीशन क्या ही कंपटीशन होगा इस PMGC का। 2 नाम यहाँ से आगे फाइनल्स में अपनी जगह बनाएंगे, 14 टीमें यहाँ से घर चली जाएंगी, लेकिन फाइनल्स, असल फाइनल्स का मज़ा आने वाला है ख़वातीन और हज़रात। बट खैर, आज के दिन को एंजॉय कीजिए, आज के दिन का लुत्फ़ उठाइए। अभी फ़िलहाल के लिए प्री फाइनल्स आप इसको कह सकते हैं, फाइनल से पहले फाइनल्स की झलकियाँ आपको आज का दिन भरपूर तरीके से दिखाएगा। लेकिन अभी के लिए टीम फाल्कन्स, वो अपने लिए उनका सिर्फ एक गोल है, चिकन डिनर कंफर्म उनको करना है। वुल्व्स के प्लेयर स्पॉट डाउन करने की बेजा कोशिश की, उन्होंने स्पॉट तो किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रॉसर उस तरह से सेटल नहीं हो पाया खिलाड़ी के ऊपर। हालांकि आउट इन दी ओपन ही थे टीम फाल्कन्स के खिलाड़ी, एंड वुल्व्स उनके तरफ 2 खिलाड़ियों को गिराया गया। एक प्लेयर अपना व्हीकल लेकर, ये गलती साबित हो सकती है, लेकिन ज्यादा आगे नहीं जाएंगे कोल। ये एक अच्छा फैसला था कि थोड़ा पहले ही रुका गया। यहां से यूटिलिटीज अब दागे जाएंगे, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, बजाय इसके कि आप सीधा शैक पर जाकर अपनी गाड़ियां स्लैम इन दे दें। लेकिन वुल्व्स, उनके 2 प्लेयर्स बिल्कुल शैक पर हैं, 2 खिलाड़ी बिल्कुल पिछले अतराफ रहेंगे। इन 2 प्लेयर्स, इनका तो एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म होता आपको दिखाई देगा। बैकयार्ड्स पर भी फाल्कन्स ने नॉकआउट निकाल लिया है, एंड फाल्कन्स अपने लिए पहला एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करेंगे। वहीं पर गीके असल डोमिनेशन पर जा चुके हैं। फाल्कन्स यहां से वुल्व्स का खात्मा करेंगे, 4 के 4 एलिमिनेशन पॉइंट अपने खाते में दर्ज किए जाते हैं फाल्कन्स की साइड से। लेकिन टीम गीके 10 एलिमिनेशन पॉइंट्स पर है, 1 प्लेयर कम, 1 प्लेयर नॉकड आउट। आखिरी 3 प्लेयर्स पर, इनफैक्ट 2 प्लेयर्स पर थे, लेकिन अब जाकर रिवाइवल मुकम्मल हो चुका है। एंड आर्करेड, उनके पास भी अच्छे खासे एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने WBG को इस मैच से बाहर किया। ये सारे एलिमिनेशन पॉइंट स्टील हो जाते हैं। फाल्कन को सिर्फ 2 ही मिले आदि, उन्होंने जितने नॉकआउट्स निकाले अनफॉर्चुनेटली कंफर्मेशन से पहले ही स्टील हो जाते हैं, और कुछ आर्करेड ले जाती है, कुछ कीके ले जाती है। लुक एट देम, दे ओनली हैव 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स। लेकिन यहाँ रैग्नारॉक को गिराने की कोशिश की गई है, कनेक्शन मिलेगा, हेडशॉट कनेक्ट करता है रैग्नारॉक, वापस से चले जाते हैं कवर के पीछे, और अभी के लिए बचते हुए दिखाई तो देंगे। लेकिन आर्करेड 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं आधी पॉइंट्स टेबल पर कोई रिस्पेक्टेबल आउटकम निकाली जाए। अभी तक तो कामयाब हो रहे हैं, लेकिन कुछ और मिनट्स मजीद रह चुके हैं। चिकन डिनर निकालने की बात की जाए, प्रोबेबिलिटी फाल्कन्स के पास है, ऑल बिकॉज दे हैव द मिनट वांटेज। लेकिन मैप कंट्रोल की बात करें, वो भी फाल्कन्स के पास ही आ सकता है। कुछ प्लेयर्स को जरा सा आगे भेजना है, एंड देन वो कंट्रोल तो आ जाएगा। लेकिन अभी गीके को देखें आप, उनकी पोजीशन काफ़ी बुरी आदि, यहाँ से वो आगे गए पूरी तरह से एक्सपोज हो सकते हैं। लेकिन रैग्नारॉक पहले ही आगे जाकर स्मोक डिप्लॉय कर चुके हैं, कुछ प्ले एरिया उन्होंने छोड़ा तो है, लेकिन जैसे ही ये गाड़ी चलाई जाएगी फाल्कन के 3-4 प्लेयर्स क्रॉसर्स बना सकते हैं अपने। लेकिन फाल्कन्स वो उसी टाइम पर गाड़ी में सवार होते हैं। व्हाट अ टाइमिंग बाय गीके, थोड़ी देर और रुका जाता फाल्कन्स के एलिमिनेशन पॉइंट से निकाल सकती थी, लेकिन अब शायद फाल्कन्स के ऊपर ही एलिमिनेशन पॉइंट निकाले जाएंगे। गीके, व्हाट अ स्लैम, ये क्या चल रहा है भाई। फाल्कन्स ने गीके को तो एलिमिनेट कर दिया, लेकिन फाल्कन्स ने फिर भी बहुत बड़ी गलती कर दी। हालांकि देखा भी फाल्कन्स ने कि गीके गाड़ी में बैठकर आने वाले हैं, आप स्प्रे डाउन कर सकते थे, आउट इन दी ओपन उन्होंने आना था। वहां पर कोई रिज नहीं है जिसका इस्तेमाल कर जिसके पीछे से होकर वो आते। फाल्कन्स, आई डोंट नो व्हाई दे जस्ट वेंट फॉर दिस स्लैम, कंसिडरिंग कि एक तीसरी टीम भी सर्वाइव कर रही है। एंड लीजिए चिकन डिनर, जो शायद जिसके लिए एटलीस्ट फाल्कन्स आपको लड़ती दिखाई दे सकती थी, वो लड़ भी ना पाई।
सिर्फ इसलिए कि वो एक आई डोंट नो वाई स्लैमिन दिया गया आईडी के स्लैमिन। लेकिन खैर अभी फ़िलहाल के लिए आर्क्रेड ख़वातीन और हज़रात आपको इस मैच का चिकन डिनर कंफर्म करती दिखाई देती है। वीवो गेमिंग को एलिमिनेट किया इन्होंने। आर्क्रेड ने अच्छे खासे कुछ आई वुड से क्लोज टू 10 एलिमिनेशन पॉइंट्स के साथ इस मैच का चिकन डिनर कंफर्म किया है। जी हाँ, क्लोज टू 10 एलिमिनेशन पॉइंट्स, इनफैक्ट 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स आप कह दें। हाँ जी, क्लोज टू 10 को साइड पर रखकर ओवरऑल स्टैंडिंग में मैं देखना चाहता हूँ आर्क रेड कितना बेहतर जंप मिला उनको। #12 पे मौजूद थे इस मैच का चक्कर निकालने के बाद। क्या वो #10 के या #7 के 5 के करीब आए हैं? कितने पॉइंट्स पर ये टीम आ चुकी है? यहाँ से इनका टॉप का सफ़र मुश्किल तो दिखाई दे रहा है, लेकिन एटलीस्ट वो जो हिम्मत है वो दिखानी है आपने कि आप यहाँ आए हैं, किस मकसद के तहत आए हैं। डे 1 आपका अच्छा नहीं किया, इट डज़ नॉट मैटर। आप में वो पोटेंशियल है जो चिकन डिनर आपको दिला सकता है और आप कई अच्छे मैचेस निकाल सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं, हिम्मत नहीं हारनी। ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर आप आखिरी मैच में भी अगर चिकन निकालते हैं और आपने पूरा टूर्नामेंट अच्छा नहीं खेला, यू गिव योर कंट्री समथिंग टू सेलिब्रेट। वेलकम बैक फाल्कन्स। लास्ट मोमेंट पे देखा हमने उनको, कुछ नॉकआउट ज़रूर दर्ज किए जाते हैं, लेकिन 3 प्लेयर्स गीके के जो हावी आए, जो क्योस देखने को मिला, जो कवर प्रोवाइड ना हो सका, उसकी वजह से 2 ही पॉइंट्स लेकर आई भी फाल्कन्स इस मैच से बाहर गई। वो कमबैक की जो उम्मीदें थी पूरी तरह से वो अभी भी टूटी हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि अगर आप आखिरी मैच में भी शिकन निकालते हैं तो यू कैन गिव योर कंट्री समथिंग टू सेलिब्रेट। ऐसा ही कुछ देखने को मिला। आर्क रेड ने अपने ऑडियंस को, अपने कंट्री की ऑडियंस को इस मैच में चिकन निकाल कर खुश होने का मौका दिया, खुशी का मौका दिया, सेलिब्रेट करने का मौका दिया। लेकिन अगर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते तो शायद मज़ीद एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले जा सकते थे। फाल्कन के 2 प्लेयर्स वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे थे, नॉक प्लेयर्स, क्या आप आएँ और आकर उनका एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करें। अभी भी बैड बॉय को देखें आप 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स लेकर जाते हुए। आखिरी दिन की कोशिश हमेशा याद ज़रूर रहती है और एक अच्छी बात है, कोशिश करनी भी चाहिए। बेशक अगर आप टॉप 2 ना भी आ पाए, लेकिन हिम्मत हारे यहाँ से गुरेज नहीं करता। और आई वुड से कि जिस तरह अपने रीजन्स के चैम्पियंस हैं, हिम्मत हार कर आपको जाना भी नहीं है। अपने हथियार डालकर एटलीस्ट आखिरी दिन पर अच्छा खेलने की कोशिश करनी चाहिए। आर्क्रेड ने वही किया, अच्छे पॉइंट्स निकाले। 8 एलिमिनेशन पॉइंट्स के साथ वो हार्ड बॉय वाला एक मैंने अभी देखा है। 334 का डैमेज हार्ड बॉय के पास है, 407 का रामजिस के पास है, 600 प्लस का दिया गया बाकी के प्लेयर्स की तरफ से। लेकिन खैर वहीं पर स्टार्टिंग फ्रॉम द गेम ऑल्टर ईगो थोड़ा एग्रेसिव जाने की कोशिश उन्होंने की, फाइट से बच भी जाते हैं। 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले गए उनकी तरफ से। काफ़ी पुरुम्मीद थे ऑल्टर ईगो के, इन 4 को बढ़ाकर हम मज़ीद आगे लेकर जाएंगे। लेकिन ऑल्टर ईगो को जो काम करना था वो उन्होंने कर दिखाया इस मैच में। फर्स्ट स्पॉट के ऊपर वापस आ चुके हैं। 74 पॉइंट्स पर हमें 3 नाम दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, 74 पॉइंट्स पर 3 नाम हमें दिखाई दिए। लेकिन यहाँ कुछ हाईलाइटेड मोमेंट्स हैं। नील, उनको हमने देखा ग्रेनेड की जद में आ जाते हैं यार जो इमोशंस प्लेयर्स लेकर आते हैं यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर, जिस तरह से वो दुख का इजहार करते हैं, ओह माय गॉड। आईक्यू को लगा कि इट्स अ ड्रिफ्टिंग कंपटीशन, नेवर माइंड। वो बगी का जो टायर है वो बर्स्ट हो जाता है और इस वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है गाड़ी। लेकिन क्या ही स्लिप लगती है। बट बढ़ेंगे आगे। INF को देखा हमने कुछ अच्छी फाइट में आते हुए। INF इज द मेन रीजन कि इस मैच से ऑल्टर ईगो बाहर हुई है। अदरवाइज ऑल्टर ईगो बड़ा स्टेबल खेला जा रहा है। एलिमिनेशन पॉइंट्स भी अच्छे थे। जी हाँ, डिएगो ने जैसे आगे बढ़कर वो गाड़ी से प्लेयर को नॉकआउट किया है, वहाँ उसके बाद फिर INF भी नहीं बच पाती और ऑल्टर ईगो को तो चले वो एलिमिनेट कर ही देते हैं। बट हाँ, आज का दिन थोड़ा परेशान कर रहा है टीमों को, काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि 2 टीमों ने यहाँ से आगे जाना है। खैर टॉप 4 टीम्स की रोटेशंस आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। आर्क्रेड की रोटेशन देखते हैं। WBG भी टॉप 4 में आ पाई,
एंड WBG लेट्स सी कि अब वो कौन से ओके 74 पॉइंट्स पर ही हैं, प्लेसमेंट पॉइंट्स काउंट कर कर वो 74 पॉइंट्स के ऊपर हैं, इससे ज़्यादा नहीं है अभी उनके पास। बट खैर आर्करेड आप उनको देखें अगर तो वो पुचिंकी आते हैं, उसके बाद सीधा सेंटर के लिए खेलते हैं और इसी जगह के ऊपर बाद में WBG भी जाती है। WBG को फिर एलिमिनेट किया जाता है आर्करेड की साइड से। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे WBG इस सर्कल में शायद वो सीधा स्लैमिन देते हैं बजाय इसके कि वो रिज पर रुकते। अच्छा फैसला था WBG की तरफ से, वहाँ पर फाइट अच्छी ली जा सकती थी जो अच्छी ना ली गई, अच्छी ली गई तो आर्करेड की तरफ से ली गई, एलिमिनेट किया उन्होंने और वहीं से फिर निकलता है इस मैच का चिकन डिनर। जी हाँ, लेकिन बढ़ेंगे आगे और मजीद पॉइंट्स टेबल पर नजर डाली जाएगी। आर्करेड इस मैच में 10 के करीब एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल कर 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल कर शिकल लेकर जाती है गीके विद 17 टोटल पॉइंट्स बिकॉज दे हैड 12 एलिमिनेशन पॉइंट्स। ओह माय गॉड। WBG विद 11 पॉइंट्स एट फैल्कन्स विद 10। फैल्कन्स ने भी काफ़ी बेहतर खेला। बोर गेमिंग विद 8। बोर गेमिंग ने नाक में दम किया सब टीमों के। ऑल्टर ईगो विद 8 एलिमिनेशन पॉइंट्स, 0 प्लेसमेंट पॉइंट्स लेकिन 8 एलिमिनेशन पॉइंट्स। WBG ने भी ऐसा ही कुछ किया लेकिन उनके पास चलो 3 प्लेसमेंट पॉइंट भी आ जाते हैं। दैट्स द रीज़न वाई वो कम्पीट करते हुए पूरी तरह से टॉप 3 के अंदर आ चुके हैं। बट ओह माय गॉड, यहाँ देखकर दिल दुख रहा है। INF दिखाई दे रही है, यहाँ पर लूप्स दिखाई दे रही है। ये दोनों टीमें कम्पीट कर रही थी टॉप 3 के अंदर। BG दिखाई दे रही है एंड BG इस मैच के बाद टॉप 5 से भी शायद बाहर हो जाए। ऑल द लूप्स तो हो चुकी है, INF भी हो चुकी है। ओवरऑल स्टैंडिंग्स में देखना चाहता हूँ। दिन का स्टार्ट INF ने 3rd पे किया था, लूप्स ने 4th पे किया था। लेट्स वेट एंड सी कि अब दोनों टीमें कहाँ हैं। कल के दिन के 5वें मैच तक INF 3rd पे थी और लूप्स 4th पे थी। अभी देखते हैं, बट उससे पहले MVP की बात करेंगे। बैड बॉय आते हैं विद 6 एलिमिनेशंस एंड 845 का डैमेज। जी हाँ, 2 नॉकआउट्स के बस 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म किए गए लेकिन डैमेज अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर रहा है इन सारे एलिमिनेशन पॉइंट्स को। आर्करेड भी जाते जाते दिन पर अपनी छाप छोड़ना चाह रहे हैं। एक अब जब ओवरऑल स्टैंडिंग्स आएगी तब देखते हैं कि कितना फ़ायदा पहुंचा आर्करेड को। आई वुड से अभी भी टॉप 5 में शायद नहीं आ पाएंगे क्योंकि कल का दिन इनका बहुत ज़्यादा बुरा रहा था। बट लेट्स सी विद दैट इज वेल वेयर इज आर्करेड। 9 स्पॉट पर अभी के लिए आए हैं। 7th में एक्सपेक्ट कर रहा था बट ज़्यादा दूर नहीं है 7 से। बट खैर आप पहले 3 को देखिए, 74, 74 और 74। WBG, IC, ऑल्टर ईगो RS। फिर 68 पॉइंट्स वाला नाम फ्लैश का, वो भी ज़्यादा पीछे नहीं है। बर्मीज गोल्स, हाँ यहाँ पर अब आकर फ़र्क पड़ता आपको दिखाई दे रहा है। जहाँ पर आज के दिन के आगाज़ पर 7 टीमें थीं 10-1 पॉइंट के फ़र्क के साथ सेकंड स्पॉट से, लेकिन अब आपको थोड़ा सा थोड़ा आपको डिवाइड होता ओवरऑल स्टैंडिंग्स दिखाई दे रहा है जहाँ पर टॉप 4 आपस में लड़ते आपको दिखाई देंगे। 55 पॉइंट्स भी ज़्यादा पीछे नहीं है लेकिन 20 पॉइंट्स का फ़र्क आप कह सकते हैं, तकरीबन 19 पॉइंट्स का फ़र्क आ रहा है BG का सेकंड स्पॉट से। बिल्कुल ठीक है आपने। BG काफ़ी दूर जाती हुई दिखाई दे रही है लेकिन दिन का स्टार्ट जिन टीमों ने 3rd और 4th से किया था अभी वो 6th और 7th पर जाती हुई दिखाई दे रही है। हम टॉकिंग अबाउट लूप्स एंड INF, दोनों ब्राज़ीलियन टीम्स हैं तो एक साथ 2 भाई दोनों तबाही, लेकिन फिलहाल दोनों ही जिस तरह से तबाह होते हुए दिखाई दे रहे हैं लॉबी के हाथों, ये चीज़ उन पर मुश्किलात तो बना रही है। बट बढ़ेंगे आगे खवातीनों के साथ, एक छोटा सा इन्फिनिक्स ब्रेक लेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस एंड फॉर ऑल दोज पीपल जो कि भाई जोन हो रहे हैं, दिस वीडियो इज़ फॉर यू, ज़रूर देखें। थैंक यू भाई। थैंक यू भाई। चलो भाई। जी भाई। थैंक यू भाई। थैंक यू भाई। थैंक यू भाई। हेलो भाई। Too cool to be in Pi Zone. Wow! Which one is this? It's Infinix Hot 6. मेरा असली वाला भाई। वेलकम बैक खवातीनों, फिर से खुश आमदीद करेंगे सभी लोगों को PUBG मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप के मैचेस के साथ। लास्ट चांस है, आखिरी एक मौका जहां कोई एक्सक्यूज आपका काउंट नहीं होता, कुछ भी नहीं। जाएंगे सीधा हमारे अगले मैच की तरफ। फिर कुछ ही सेकंड्स बाकी हैं आदि। WBG जो कि अभी टॉप 3 की जंग में हमें बराबर दिखाई दे रही है, उनका एक भी चिकन नहीं है अभी तक। जी, एक भी चिकन नहीं है टॉप 5 में।
वो पहला नाम है जिनके पास कोई भी चिकन डिनर अभी तक के लिए नहीं आया। इनफैक्ट आप ये देखें कि 8वें और 9वें नंबर के पास भी एक एक चिकन डिनर है, लेकिन WBG के पास अभी तक एक भी चिकन डिनर नहीं आ पाया। स्टिल दे आर बीइंग वेरी कंसिस्टेंट। अगर आप उनके एलिमिनेशन नंबर्स देखें वो भी अच्छे हैं, उन्होंने काफ़ी एक अच्छा बैलेंस बनाया हुआ है प्लेसमेंट पॉइंट्स के साथ भी। विदाउट स्कोरिंग चिकन डिनर स्टिल उनके प्लेसमेंट पॉइंट्स ठीक ठाक हैं। एंड WBG चांसेस हैं कि आज के दिन में किसी ना किसी एक मैच के अंदर वो चिकन डिनर निकाल। अच्छा, एक और चीज देखिए आपके, बेशक उनके पास चिकन नहीं है, उनके प्लेसमेंट पॉइंट्स अभी भी आईसी के प्लेसमेंट पॉइंट से ज्यादा है, 7-6 पॉइंट ज्यादा है। आईसी ने जब से स्टार्ट हुआ है लास्ट चांस, पिछले 8 मैचों में एक मैच में 10 प्लेसमेंट पॉइंट्स निकाले और बाकी 7 मैचों में 11 प्लेसमेंट पॉइंट्स निकाले हैं। इट क्लियरली शोज कि आईसी को सर्वाइवल पे काम करने की थोड़ी जरूरत है। और वो उसमें से ऑब्वियसली जो कल के सर्कल्स हैं वो आप देख लें, उसमें कल कितने एलिमिनेशंस निकाले हैं आईसी ने। लेट मी चेक। टोटल एलिमिनेशन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, कल के दिन आईसी ने 35 निकाले हैं टोटल एलिमिनेशन पॉइंट्स। 35 एलिमिनेशन पॉइंट्स, आई थिंक सो थर्ड हाईएस्ट या फोर्थ हाईएस्ट है। थर्ड हाईएस्ट 35 और सिर्फ 11 प्लेसमेंट पॉइंट्स निकाले हैं। चलें, मैं आपको प्लेयर्स के एलिमिनेशन डिवीजन भी बता देता हूं आदि, कि किस प्लेयर ने कितने कितने एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले कल के दिन। जी, अगर आप चाहें तो, अगर आप इजाजत दें। इजाजत है सर? जी। ओके। नहीं इजाजत? ओके ठीक है, छोड़ नहीं इजाजत है। जी बताएं। नहीं अब मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा। ओके, सो नॉकी ने कल निकाले थे 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स, 6 नॉकआउट्स। आईक्यू ने निकाले थे 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स, 6 नॉकआउट्स। T24 ने कल निकाले थे 8 एलिमिनेशन पॉइंट्स, 11 नॉकआउट। फलक ने कल निकाले थे 11 एलिमिनेशन पॉइंट्स, 12 नॉकआउट। और अभी आज के जब काउंट करेंगे आप, तो शायद ऐसा हो सकता है कि फलक आपको थोड़ा आगे जाते हुए दिखाई दे। इन टोटल 35 इनके कल एलिमिनेशंस थे और 35 इनके नॉकआउट्स थे। वहीं पर इनका सर्वाइवल टाइम अगर आप देखें, 0.29 मिनट्स इन टोटल सर्वाइव किया गया इनकी जानिब से। इनसे ज़्यादा सर्वाइवल INF का था, इनसे ज़्यादा सर्वाइवल WBG का था, इनसे कहीं ज़्यादा सर्वाइवल लूप्स का था, FL का था। इन सब टीमों का सर्वाइवल इनसे ज़्यादा था। इवन अलायंस का सर्वाइवल इनसे ज़्यादा था। कल के दिन अलायंस जिन्होंने 42 पॉइंट्स इन टोटल निकाले थे, वो सर्वाइवल IC से काफ़ी ज़्यादा कर चुके थे। INF वॉज ऑल्सो वे अहेड ऑफ देम, बट आईसी आज थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। डैमेज की बात करें, आईसी का कल सेकंड हाईएस्ट डैमेज था। फ्लैश का था 8165 और फ्लैश के बाद आईसी का 7700 डैमेज था इन टोटल। सेकंड हाईएस्ट डैमेज कल के दिन रहा उनका, हालांकि #7 पे फिनिश किया था उन्होंने। हाईएस्ट किसका रहा? आप अभी बता रहे थे फ्लैश का। एंड फ्लैश ने कितने एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले कल? 36। एक 36 ज्यादा था एलिमिनेशन उनका पॉइंट्स, आईसी से एक ज्यादा था। आई वुड से फ्लैश एंड फ्लैश का आई थिंक सो रैंगल काफ़ी अच्छा रहा है कल के दिन। ओवरऑल रैंगल्स के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है। ये कुछ एदाद मेरे पास भी हैं, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा काल करके इरांगल पर फ्लैश का एवरेज क्या चल रहा है। इरांगल के ऊपर फ्लैश का एवरेज 8.67 का चल रहा है, 8.67, जिसमें से एलिमिनेशंस ऑन एवरेज 6.33 हैं और प्लेसमेंट पॉइंट्स इरांगल के 3 मैचेस के 2.33 ऑन एवरेज। नाइस। कल हमने देखा था कि आईसी की जो एवरेज है वो मिरामार पर 9 थी और आई थिंक इरांगल पर 7 थी। सो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मिरामार जो थे वो रिलेटिवली बेहतर गए आईसी के। लेकिन चलें अभी बात करते हैं इस मैच की। फ़िलहाल सर्कल जो बना है वो फिर से मिलिट्री साइड नहीं गया, वो स्कूल मेंशन शेल्टर इस साइड पर चला जाता है। हमने देखा कि सर्कल के हिसाब से आईसी दे प्रेफर कि वो जाकर स्लैम एंड दे सेंटर में, उसके बाद फिर सर्कल के हिसाब से खेला जाए।
लेकिन यहाँ पर लूप्स वर्सेस अल्टर ईगो वेयर सेकंड विटिन पे पुश किया जाता है। राफिना पीछे मौजूद थे, रोजमेरी कवर प्रोवाइड करते हुए दिखाई देते थे। विटिनो ने रोजमेरी को नॉक किया, दूसरा प्लेयर गिरा दिया जाएगा। क्रिप्टोन वो सामने आएंगे एंड विटन कुछ सेकंड्स पहले अगर शॉटगन कनेक्ट की जाती रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। पीछे से आएंगे अल्वा, सामने क्रिप्टोन मौजूद है। लूप्स के प्लेयर्स भी यहाँ पर आते हुए 3v2 सिचुएशन है, कुछ कमाल करना है, कुछ ख्याल करना है। अल्टर ईगो अगर यहाँ अपने प्लेयर्स गवा दिए गए ये पूरा मैच खराब हो सकता है। लेकिन पीछे से थर्ड पार्टी करने के लिए गी क्या आ जाती है। उनकी साइड से लूप्स के प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया गया है थर्ड पार्टी कर एंड गी के अगर उन्होंने यहाँ पर भी क्रॉसेस खोले तो अल्टर ईगो को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अल्टर ईगो जैसे तैसे कर अपने प्लेयर्स को रीसेट कर लिया जा चुका है। जंप शॉट शानदार था क्रिप्टॉन की साइड से और अभी फिलहाल के लिए ये फाइट पाए तकमील को नहीं पहुंची है। गी के बहुत तेजी से आ रही है। रोजमेरी गेट्स पिक्ड ऑफ, अच्छा यूटिलिटी था लेकिन लूप्स इस फाइट को हार रही है। हालांकि इस फाइट के अंदर अब पहला जो एडवांटेज हासिल किया था 2 प्लेयर्स को नॉकआउट कर वो लूप्स के पास ही आया था। वहीं पर अब अल्टर ईगो इस नहज पर आ चुकी है कि इस फाइट को जल्द से जल्द उनको खत्म करना है। स्नेप फिर से गिर जाएंगे। स्नेप इनफैक्ट टीम अल्टर ईगो के क्रिप्टॉन गिरते हैं। गी के अब यहां पर आ जाएगी और अल्टर ईगो के लिए मुश्किलात दर मुश्किलात अब आपको बनती दिखाई देंगी एंड अल्टर ईगो इज आउट ऑफ द गेम। पहला नाम लूप से भी पहले बाहर उनको कर दिया गया। गी के आए और साथ निभाया उन्होंने लूप्स का किसी ना किसी हद तक, लेकिन लूप्स उनको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। 5वें नंबर पर हैं, वो भी खेल रहे हैं सेकंड स्पॉट के लिए या खेल सकते थे इस मैच में। 57 पॉइंट्स उनके पास हैं, 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स अल्टर ईगो पर उन्होंने कंफर्म किए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने 2 खिलाड़ी बहुत वाइटल प्लेयर्स अपने गवा दिए हैं टीम लूप्स ने। बहुत ही बदकिस्मत रहती है टीम लूप्स इस मैच के अंदर। अर्ली ऑन फाइट में आते हुए दिखाई दिए थे, लगा यही था कि शायद फाइट जीत जाए, लेकिन वो 1v1 जिस तरह से हारे, पीछे से थर्ड पार्टी जिस तरह से हुई, मैंने एडवांटेज गवा दिया कि हालांकि 3v2 में फाइट आ चुकी थी, 4v2 में कन्वर्ट कर सकते थे अगर पीछे से की थर्ड पार्टी ना करती। बट चलें, अभी सूरत हाल ख़राब दोनों टीमों के लिए हुई। अल्टर ईगो के लिए ज़्यादा होती है बिकॉज उनको सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा इस मैच से। अच्छा यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एनी टीम WBG IC all they need to do is बस 6-7 पॉइंट 7-8 पॉइंट की एवरेज। बस गलतियां होंगी, क्योटिक फाइट्स होंगी, अगर आप ओवर कमिट करते हैं ओनली देन यू कैन थ्रो योर चिकन डिनर, तो यू कैन थ्रो योर क्वालिफिकेशन। अगर आप बिल्कुल डिसेंट खेलते हैं, बहुत संभल कर खेलते हैं, ये अल्टर ईगो ने बहुत बड़ी गलती कर, आप आसानी क्वालिफाई कर सकते हैं। यस, इस स्टेज पे आकर यहाँ से स्पॉट पे। और आप आज के दिन के आगाज में यही तो बात हो रही थी कि अल्टर ईगो यही करती है। दिस इज द रीजन वाई, दिस इज द एग्जैक्ट रीजन वाई आई सेड कि अल्टर ईगो पहले 2 दिन बहुत अच्छा खेलेगी। ऑब्वियसली ये 2 दिन का फॉर्मेट है, 3 दिन के फॉर्मेट में भी ऐसे ही करती है अल्टर ईगो। पहले 2 दिन इतना सोच समझ कर खेलते हैं, डोमिनेट भी करते हैं। कल के दिन हमने देखा उनको डोमिनेट करते हुए, वो रैंगल का मैच जिसमें स्टॉलबर का सर्कल बना था, चिकन डिनर आया उसमें अच्छे खासे एलिमिनेशन, शायद मेरे ख्याल से 15 एलिमिनेशन पॉइंट्स के साथ चिकन डिनर किया था। आप पहले स्पॉट पर हैं, व्हाई आर यू गोइंग इनटू फाइट्स स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेज 1? आपको क्या ज़रूरत है ड्रॉप लोकेशंस पर जाकर स्लैम इन देने की जब आप पहले स्पॉट पर हैं? चीज़ें होती हैं ख़वातीन हज़रात, टीमें प्रेशर लेकर जाती हैं क्योंकि टीमों को इस चीज़ का नहीं पता होता कि बाकी टीमें कहीं ऐसा ना हो कि उनको डीथ्रोन कर दें, इसलिए वो कोशिश करती हैं कि एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाए जाएं। बट ये ओवर कमिटमेंट ये बहुत कॉस्ट करेगी। अब इस फाइट में इतना अर्ली एलिमिनेट होने के बाद अल्टर ईगो, यू नेवर नो इफ दे विल बी एबल टू स्टेप अप अगेन। होता है ऐसा। हमने वैम्पायर्स ईस्पोर्ट्स जो कि 2 बारी वर्ल्ड इन्विटेशनल के चैम्पियंस बन चुके हैं, PMWC वर्ल्ड कप से पहले हुआ करता था, 2 सीजन्स वर्ल्ड कप के हुए हैं। उससे पहले रियाद में ही PMWI उसी जगह के ऊपर होता था। वैम्पायर्स ईस्पोर्ट्स को हमने चैम्पियंस बनते देखा, लेकिन उसके बाद उन्होंने यही गलतियां वो करते रहे। निग्मा गैलेक्सी को हमने देखा फर्स्ट स्पॉट के ऊपर पिछले PMGC के ग्रुप स्टेजेस के अंदर आते हुए, और निग्मा गैलेक्सी भी इसी तरह की गलतियों की वजह से वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाते थे। फर्स्ट स्पॉट पर आते थे, डोमिनेट करते थे, आखिरी दिन आकर फर्स्ट स्पॉट का प्रेशर इतना होता था, पहले पायदान का प्रेशर ही इतना होता था कि वो खेल ही नहीं पाते थे।
बट खैर आगे बढ़ते हैं इन सारी चीज़ों से। सर्कल अभी फ़िलहाल के लिए आपको मिल्टा पावर वाली साइड के ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। एंड टीम WBG वंस अगेन आपको एक अच्छी जगह पर दिखाई दे रही है इस सर्कल के हिसाब से। बैक स्टैप से बिल्कुल क्लियर हैं। वहीं पर कुछ लंबे रोटेशंस 9G ग्लूबेंट वो काफ़ी दूर से आ रहे हैं टीम की के, चलें वो स्कूल के एरिया से आ रहे हैं, आ जाएंगे सर्कल में, बट अगले सर्कल्स में जाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। वहीं पर फाल्कन्स के नरवालो व्हीकल का टायर पंक्चर कर दिया जाएगा और रिवर्स में ही चला ही जा रहे हैं। लेकिन आर्क रेड के बैड बॉय आई थिंक उनको अंदाज़ा हो चुका है कि व्हीकल का एक टायर नहीं है। शायद वो आगे बढ़कर नरवालो का एलिमिनेशन पॉइंट भी कंफर्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नरवालो ही हैज़ टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। अभी भी यहाँ से फॉल बैक किया जा सकता है। प्लेयर उनके चाहें आकर रेस्क्यू कर लेकर जा सकते हैं। ज़्यादा मुश्किलात अभी के लिए नहीं है, लेकिन कोई कोशिश नहीं की जा रही अपने प्लेयर को वहाँ से रेस्क्यू करने की। कोल ऑब्वियसली यहाँ से अगर बग्गी में बैठेंगे, गाड़ी उनके पास है, व्हीकल है, लेकिन बैठ नहीं सकते। बोर के प्लेयर्स वो अपने क्रॉसेस जमाए बैठे हुए हैं, इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब प्लेयर आएंगे बाहर। जी सो लेट्स सी के नरवालो। मैंने सबसे पहले जो है वो आईसी को देखा कि बस जिंदा है, फिर मैंने प्लेयर्स देखी कितने बचे हुए हैं। मैंने कहा शुक्र है 4 बचे हुए। तो फर्स्ट थिंग दैट आई डिड व्हेन आई केम बैक वो यही थी। एंड जिनको नहीं पता, रफ़ाए हाजत के लिए मैं चला गया था। कितना प्यारा वर्ड है ना वैसे, आदि समझ नहीं आती बंदे को क्या कह रहे हैं। डू यू नो व्हाट इज रफ़ाए हाजत? जी मुझे पता है, नेचर्स कॉल। मैं समझ गया। हाँ जी, नेचर्स कॉल जी। बट एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं जो मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं नोटिस ज़रूर कर रहा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं नोटिस कर रहा और मैं बिल्कुल जिंक्स नहीं करना चाहता। बट वेट अ सेकंड, नॉकी इज पिंच्ड, ही कैन नॉट गो बैक। नॉकी यहाँ पीछे नहीं जा सकते। ऑल ही नीड टू डू इज, इनको सिर्फ प्रोन डाउन होना है। तो कह रहा था। ओह माय गॉड, इंजन जी से टर्न कर रहा था कि जेनजी नु की मसला है, जड़ा चबा गया। क्या है जेनजी का, है जेनजी का अपने साथ क्या चल रहा है। लेकिन खैर अभी फिलहाल के लिए आईसी के बाकी भी प्लेयर्स यहाँ पर आ चुके हैं, बट यहाँ से आगे रोटेट करना ये बहुत संभल कर रोटेट करना है। सर्कल ऊपर जा चुका है, फॉरेस्ट एरिया, ये काफ़ी वेकेंट एरिया होता है फॉरेस्ट का, उसको अबैंडन कर रहा है सर्कल आहिस्ता आहिस्ता से। एंड पूरा का पूरा सर्कल आपको प्रिजन साइड पर जाता दिखाई दे रहा है। एंड वी ऑल नो कि प्रिजन सर्कल्स कितना ही केओटिक होते हैं, कितना ही केओटिक होते हैं बेहद। प्रिजन के सर्कल्स, वो एक्सटेंसिव रिजेस, वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें बना देते हैं बेशतर टीमों के ऊपर। एंड प्रिजन का सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर आप प्रिजन, मेनलैंड प्रिजन में आ जाएं जहाँ पर ये कॉम्पाउंड्स बने हुए हैं, यहाँ से सर्कल अगर अबैंडन कर दे देन देयर इज नो वे आउट। आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। चारों साइड से ये इलाका पूरी तरह से कवर्ड है रिजेस से, और ऊपर रहती टीमें उनको एक एडवांटेज होता है कि वो फिर आपको निकलने नहीं देती। बट खैर आईसी सर्कल के अंदर आ चुकी है एंड जेनजी अभी भी आसपास ही मंडला रही है। क्लॉस जा रहे हैं, शायद क्लॉस वहाँ पर ही रुकना चाहते थे, यहाँ पर रुककर अब स्काउट करेंगे। एंड आईसी व्हीकल पीछे जा रहा है भाईजान। क्लॉस जब पीछे मुड़ के देखेंगे उनकी गाड़ी कहाँ से कहाँ पहुंची होगी। लेकिन खैर अभी फिलहाल के लिए टीम आईसी ने स्पॉट डाउन किया है। लग रहा है कि जेनजी इंटरेस्टेड है फाइट में। फिर आ गए जेनजी, फिर आ गए जेनजी। इज लाइक कुछ हो ना हो, हमने आईसी से फाइट लेनी है। अभी हमारा एक ही मकसद है, पाकिस्तान के बच्चों को फाड़ के रख दूंगा। That's what they wanna say. लेकिन अभी के लिए क्या ऐसा कर पाएंगे? That's a big question. ये बहुत बड़ा इफ है। आदि को अब समझ जाइए। मैं समझ गया। जी वो कहते हैं कि मेरा ना हंसूं, लेकिन वो कहते हैं मेरा मुकाबला जापान और चाइना से है। लेकिन खैर अभी जापान और चाइना तो थोड़ा दूर है इस सिचुएशन में, पाकिस्तान के बच्चे ही सामने हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के बच्चे जो है ना, ये बड़े खतरनाक हैं, बड़े नॉटी हैं ये। लेकिन वहीं पर जेनजी, उनको पता है कि सर्कल में जाना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। फाइट लेना तो चलें, देखेंगे बाद में, पहले सर्कल में जाते हैं। ये जो उनकी चाहत है ना, इसको फतेह करना पड़ेगा अभी टीम आईसी के प्लेयर्स को। लेकिन जेनजी फिर से रैप आउट करने के लिए आ चुकी है। जेनजी फील्डिंग सेट कर रही है अलादीन, कसम से। जेनजी सर्कल में नहीं जा रही, जेनजी फील्डिंग सेट कर रही है। वो हमें दिखा रहे हैं कि हम सर्कल में जा रहे हैं। वो देख, सेटन को देखे, उनको वो अलग ही जा रहे हैं, वो अलग ही करीब वो करीब चले गए आईसी के। इतना
एंड अभी के लिए मैं आईसी को देखना चाहता हूँ। मसला ये है कि जेंजी से एक टीम से तो आईसी फाइट ले सकती है, बट बैक आज से कोई ना आए प्लीज। लेकिन सर्कल भी आगे चला जाएगा, अब तो ये फाइट लेनी पड़ेगी अनलेस एंड अनटिल कि जेंजी यहाँ से फॉल बैक ना कर जाए। एंड जेंजी बज़ाहिरी तौर पर कुछ प्लेयर्स व्हीकल के अंदर बैठे हैं, लग रहा है कि फॉल बैक करना चाह रहे हैं, लेकिन 9G ग्लोबेंट जैसे आर्करेड ने कम बैक किया, कम बैक इन सेंस के कल का दिन बहुत बुरा रहा उनका भी, आज का दिन एक निकाला चिकन डिनर अच्छे एलिमिनेशन पॉइंट्स के साथ। 9G ग्लोबेंट भी कुछ इसी तरह से करना चाहेगी, लेकिन सर्कल फाइट लेने के लिए आए थे 9G ग्लोबेंट। अब यहाँ पर फाइट दोनों टीमें फॉल बैक करती हैं, अच्छा फैसला, कुछ मुकमुका किया गया है। फाइट ली जाती तो ऑब्वियसली ये डिले हो सकती थी, एलिमिनेशन तो फिर होना ही था किसी न किसी एक का, लेकिन अब खैर दोनों ही सर्कल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन बीजी उनको देखें आप 6 स्पॉट पर आ चुकी हैं ये टीम। अनफॉर्चुनेटली दिन का आगाज़ उन्होंने टॉप 3 के बिल्कुल आसपास से किया था। एक एक मैच जैसे गुजरता है, एक एक पायदान की टीम नीचे जाती हुई नजर आती है, लेकिन वहीं पर आर्करेड वर्सेस टीम लूप्स वर्सेस टीम गीके बन सकता है। एजिस पर अगर बात की जाए ये चीज़ चल रही है, लेकिन सॉरी सेंटर में ये चीज़ चल रही है, एजिस पर और टीमें लड़ती हुई नजर आएंगी। अलायंस वर्सेस फाल्कन्स वर्सेस आईसी। एजिस की तरफ आए तो यहाँ ये तीनों टीमें आमने सामने हैं। अभी आईसी D24 will score 1 player, लेकिन नॉकडाउन निकालने में कामयाबी है, एलिमिनेशन पॉइंट निकालने में अभी तक के लिए कामयाबी नहीं मिल पाएगी। फलक इज गेटिंग सो क्लोज, हाथ में तामे ग्रेनेड, पीछे से आएंगे ऑलियंस, दैट्स व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। अलायंस पीछे से थर्ड पार्टी करने के लिए आती है, T24 भी गिर जाते हैं, 2 प्लेयर्स गिरेंगे। जेंजी फिर से वापस आ गई है भाई, जेंजी इज बैक। जैसे उनको रियलाइज हुआ कि आईसी फाइट कर रही है, वो पीछे से आए, आकर एक नॉक निकाला और फिनिश कर दिया। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? Genji does not want to qualify. They cannot qualify from here, but वो आईसी को यहाँ टारगेट करने के लिए आ चुके हैं। जेंजी, मैंने तो सुना था कि पाकिस्तान और सऊदीया ने कोई ट्रीटी भी साइन की है यार, मतलब ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है यार? ये तो नहीं था उसमें, ये भी था, ये भी होना चाहिए था यार। PMGC वाला उसमें यार, मतलब क्या चल रहा है? लेकिन अब फिलहाल के लिए आईसी के आखिरी प्लेयर रह चुके हैं। PUBG ट्रीटी भी होनी चाहिए थी यार, PUBG मोबाइल की PMGC ट्रीटी भी होनी चाहिए थी, लेकिन खैर IQ बस अब क्या 15 टीमें हैं, उनको जगह नहीं मिल रही है, उनको समझ नहीं आ रही कहाँ पे जाएं। IQ को नहीं, प्लेयर्स कुछ कह रहे होंगे और IQ कुछ कह रहे होंगे, आई कैन इमेजिन, लेकिन IQ अब ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर आर्करेड के हत्थे ना चढ़ जाएं। बस IQ को यहाँ से चले जाना चाहिए, वो यहीं पर ही गाड़ी घुमाई जा रहे हैं और आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। जेंजी क्या यार, मतलब दिल टूट से यार, कसम से चकनाचूर हो गया। मुझे लगा पिछले मैच में चलो ठीक है एक बार हो जाता है, लेकिन 2 बारी नहीं चकनाचूर। IQ खैर आ गए हैं प्रिजन की साइड के ऊपर, अब यहाँ पर कोई जगह शायद मिल पाएगी उनको रुकने के लिए। इधर एक विजिट टावर होता है, IQ वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर, हाँ वहाँ पर जाकर बैठ सकते हैं। स्नाइपिंग टावर 2 होते हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन IQ जहाँ पर रुके हैं यहाँ पर बिल्कुल बैक रिज, वहाँ से स्पॉट डाउन किया जा सकता है, लेकिन व्हीकल बर्स्ट अगर है तो फिर ठीक है, थोड़ी देर के लिए रुका जा सकता है, बट 15 टीमें सरवाइव कर रही हैं। सर्वाइवल पॉइंट्स हासिल करने के लिए भी अभी 15 मिनट और, तकरीबन 12-13 मिनट और यहीं पर सरवाइव करना पड़ेगा IQ को। लेकिन व्हीकल बर्स्ट तो नहीं आती, यही तो मसला है कि व्हीकल बर्स्ट किसी ने मजाक में भी किया, एम किसी ने कहा चलो यार थोड़ी सा प्रैक्टिस करते हैं, एम प्रैक्टिस, तो IQ जो है वो पूरी तरह से आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाएंगे। लेकिन ये जो गीके ने किया है, सॉरी गीके नहीं, ये जो जेंजी ने किया है, इससे जेंजी कुछ फ़ायदा हासिल करती है। तो एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाए ऑन द अदर साइड, टीम फाल्कन को देखिए आप, ओ माय गॉड, उनकी तरफ से कम फ्लाई विथ मी लगाया जाता है। दूसरी तरफ WBG को जाकर एलिमिनेशन पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, फाल्कन्स को सर्कल पे जगह भी मिल गई है भाई। जी हाँ बिल्कुल, अच्छे कॉम्पाउंड्स भी मिल चुके हैं उनको, पीछे छोड़ते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अगर उन्होंने क्लियर करवा ली अपने लिए, तो आई वुड से कि फाल्कन्स का ये बड़ा बोल्ड मूव होगा। ये जो गाड़ी उड़ाकर वो लेकर आए हैं अंदर, उनको कोई भी गिरा नहीं पाया, लेकिन फाल्कन्स अनफॉर्चुनेटली 2 खिलाड़ी हैं कोल की साइड से। राग्नारॉक को फिलहाल के लिए गिरा लिया जा चुका है, गीके को भी वो आई थिंक 2 प्लेयर्स के ऊपर लेकर आ चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, एक खिलाड़ी नॉकड आउट है, एक प्लेयर एलिमिनेटेड है, लेकिन एक एक कर नहीं जाना था। यूटिलिटी आएगा, रऊफ को भी साथ आगे बढ़ जाना चाहिए था, आगे अभी भी जा सकते हैं एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करने के लिए, एंड आगे बढ़ा भी जाएगा रऊफ। जस्ट 1 मोर एलिमिनेशन पॉइंट। वहीं पर IQ, उनको स्पॉट डाउन नहीं किया गया। टीम बर्मीज गोल्स के खिलाड़ी काफी नजदीक से गुजर कर आए हैं, लेकिन रऊफ यहाँ पर अपना काम करेंगे। एक एलिमिनेशन पॉइंट ऑब्वियसली मैटर करता है फाल्कन्स के लिए भी।
एंड लेट्स सी रऊफ क्या कंफर्म कर पाते हैं या नहीं कर पाते। गी के कोशिश की है उन्होंने, एक प्लेयर को रिवाइवल दे दिया जा चुका है, रागनारॉक को एक खिलाड़ी अभी भी रहते हैं, लेकिन वहीं पर लूप्स के प्लेयर्स, आखिरी 2 प्लेयर्स INF के सामने आएंगे एंड पीछे रहते नील्स। उनका एंगल अच्छा था, एक खिलाड़ी को तो वो गिरा पाते हैं, लेकिन लूप्स के प्लेयर्स इस मैच से बाहर कर दिए जाएंगे। 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाए गए लूप्स की साइड से। यहाँ लूप इज डन एंड डस्टेड, लेकिन इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम के IQ को भी स्पॉट कर लिया जाएगा, उनको भी लॉबी का रास्ता दिखा दिया जाएगा, बिकॉज वो जिस तरह से आउट इन दी ओपन है, कोई कवर अच्छा होता, कोई ऐसे पत्थर होते जिनमें वो नज़र ना आते, तो फिर शायद कुछ हो सकता था, बिकॉज सर्कल इधर ही आ रहा है। लेकिन इन एनी अदर केस उनको बीजी ही शायद स्पॉट करती हुई दिखाई दे। हाँ, पीछे से अगर 9CZ आती है, वो बिजी कर देती है बीजी को, तो शायद कुछ अलग हो सकता है। अभी बीजी वो जिस तरह से मैप कंट्रोल ले चुके हैं, उनको फ़ायदा तो हासिल होगा। यहाँ बात की जाए फ्लैश वर्सेस वुल्व्स, ये फाइट बनती हुई नज़र आती है, और इस सारी सिचुएशन में भी कोई एक ही टीम बचती हुई दिखाई देगी। वुल्व्स जिस जगह पे मौजूद हैं, ऐसा लग रहा है कि वो शायद फ्लैश को एलिमिनेट कर दें, लेकिन दूसरी तरफ ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जाता है फ्लैश की जानिब से। सामने से भी हिकोर्स आएंगे, एक नहीं 2 प्लेयर्स गिरा दिए जाएंगे। फ्लैश के ऊपर मुश्किलात वापस से बढ़ती हैं, घेरा तंग किया जाता है। यहाँ जनजी वर्सेस WBC होता हुआ दिखाई देता है। इससे पहले 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स जो निकाले गए थे, वो इन्हीं के ऊपर निकाले गए थे WBC की जानिब से। ये बाकी 2 प्लेयर्स भी एलिमिनेट करने के बाद WBC इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर सबसे आगे जाती हुई नजर आती है, और किस खूबसूरत अंदाज से इनकी तरफ से खेला जा रहा है। और जनजी पूरी तरह से लकवा मार जाता है उनको। हमारे सामने बड़े ये धनतर बने होते हैं, लेकिन इधर यहाँ पर जनजी को जब पकड़ के फौरन बाहर भेज दिया गया। और हैट्स ऑफ टू WBC, बिकॉज बहुत अच्छी फाइट निकाली है उन्होंने। WBG आप देखें सर्कल के हिसाब से भी एक अच्छी जगह पर अभी फिलहाल के लिए हैं। अगले सर्कल में वो आते हैं नहीं आते अलग बात है, लेकिन अगर अगले सर्कल में ना आई WBG, इक्वली चैलेंजिंग। अब जो भी सर्कल से बाहर होगा उसको सर्कल के अंदर जाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इनफैक्ट अगर आप बर्मीज गोल्स को देखें, IC के IQ एक एज मिल जाता है, स्लाइड सा आप कह लें कि मतलब कि ब्लू जोन जब चलेगा तो IQ बिल्कुल मतलब उनकी टांगे ब्लू जोन में होंगी, तब तक नहीं बचना और उनका आधा जिस्म सर्कल के अंदर होगा। तो आई वुड से कि IQ लेट्स सी कितनी देर तक सर्वाइवल यकीनी बना पाते हैं। 1-2 भी प्लेसमेंट पॉइंट्स मिल जाएं तो मैं कहूँगा कि वो भी काफ़ी होगा। लेकिन खैर अभी फ़िलहाल के लिए टीम बोर वर्सेस कुछ फाइट हमें चलती बर्मीज गोल्स की चलती दिखाई दे रही है। दोनों आमने सामने हैं एंड IQ को कोई भी स्पॉट डाउन नहीं कर पाया अभी फ़िलहाल के लिए। वहीं पर 9Z ग्लूबेंट उनकी भी थर्ड पार्टी होती है, जिसकी वजह से खिलाड़ी कुछ एलिमिनेट किए जा रहे हैं। बोर के प्लेयर गिर जाते हैं, हार्ड बॉय एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करेंगे, लेकिन बर्मीज गोल्स बगैर कोई पॉइंट लिए इस मैच से बाहर जा चुके हैं। जी हाँ, लेकिन बोर्ड गेमिंग यहाँ आ जाती है। आउटफिट वर्सेस बोर्ड गेमिंग फाइट बनती हुई दिखाई देगी। शॉटगन का इस्तेमाल किया जाएगा एक्सो की जानिब से एंड एक्सो ये एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करेंगे। बोर्ड गेमिंग है, उनका पूरा फोकस इस वक्त के लिए आउटफिट के ऊपर हो चुका है। पीछे से 9Z ग्लोबेंट भी आना चाहते हैं, उनको भी यहाँ थोड़ा बहुत टैग करने की कोशिश की गई। एंड दूसरी तरफ WBG उनकी जो फाइट है वो रुकने का नाम नहीं लेगी। जहाँ जहाँ उन्हें प्लेयर नजर आते हैं वहाँ वहाँ वो एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करते हैं, अपने नाम किए जाते हैं उन पॉइंट्स को। और अभी WBG की डोमिनेंस वो जहाँ चल रही है, वहीं पर बोर्ड गेमिंग के ऊपर 9ZG पुश कर चुकी है। जहाँ पीछे IQ मौजूद है, मल्लोसा शायद स्पॉट कर लें रिमिक्स। कोई भी प्लेयर उस साइड पे गया तो IQ भी गए, लेकिन अभी 9ZG उनके पास मिनट एडवांटेज है, उनके पास 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स भी हैं। बोर्ड गेमिंग के सामने 3 प्लेयर्स हैं 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स के साथ, लेकिन एडवांटेज यहाँ बोर्ड के पास मौजूद नहीं रहेगा। मिन डिसएडवांटेज पे खेल रहे हैं वो। दूसरी तरफ अगर आए, अलायंस की फाइट बनती हुई दिखाई देगी एक डिफरेंट एज के ऊपर, जहाँ वुल्व्स उनके सामने है। वुल्व्स के 2 प्लेयर्स यहाँ पर पीछे मौजूद हैं, इनफैक्ट 3 प्लेयर्स मौजूद रहेंगे। डॉरन इज एलिमिनेटेड। अलायंस वापस से 4 मैन अप होना चाहती है, हो भी जाएंगे एंड उस फाइट को अपने नाम करती हुई अलायंस दिखाई देगी। लेकिन यहाँ फ्लैश के प्लेयर्स अभी भी जिंदा आती। फ्लैश के आखिरी प्लेयर इनफैक्ट जिंदा दिखाई दे रहे हैं एंड फ्लैश सिर्फ 2 पॉइंट्स के, इनफैक्ट 4 पॉइंट्स के फर्क के ऊपर अभी फिलहाल के लिए IC के साथ खेल रहे हैं। एंड फ्लैश IC आखिरी सोलो सर्वाइवल के ऊपर बात आ चुकी है, लेकिन 9Z ग्लूबेंट वो अपने लिए मजीद कुछ नॉकआउट्स निकाल पा रहे हैं। बोर का खात्मा करने की कोशिश की जा रही है, आखिरी प्लेयर रह जाएंगे एंड बोर इस मैच से बाहर कर दी जाएगी। ख़वातीन व हज़रात, 9Z ग्लूबेंट के खाते में चौथा एलिमिनेशन पॉइंट भी दर्ज हो जाएगा। वहीं पर टीम अलायंस अपनी जगह सर्कल में बनाती है एंड अलायंस अपने तीनों के तीनों खिलाड़ियों को बचाए रखते हुए 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स के ऊपर ये नाम भी अपने आप को लेकर जा चुका है। 47 पॉइंट्स पर आ चुके हैं एंड वहीं पर INF 56 पॉइंट्स के साथ अपने 3 खिलाड़ियों पर सर्वाइव कर रही है। अगर INF इस मैच में चिकन डिनर करती है 65-70 पॉइंट्स के नजदीक आ जाएंगे।
जी हाँ, लेकिन सर्कल का शिफ्ट कहाँ जाता है? मुझे लगता है कि ये वापस से नीचे की तरफ जाएगा जहाँ पर INF मौजूद है, उनको एडवांटेज मिलेगा। लास्ट में फिर वही 6 स्टोरी कॉम्पाउंड्स वहाँ तक आता हुआ, 6 स्टोरी बिल्डिंग तक आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन लुक एट WBG, क्या खूबसूरत खेल खेला जा रहा है उनकी जानिब से। जहाँ उनके क्रॉसर में कोई आता है वहाँ वो नॉकडाउन्स निकालते हैं। इस बार 9Z ग्लूबेंट को एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश है, स्पॉट किया जाएगा प्लेयर्स को, उनको एलिमिनेशन के घाट उतारा जा रहा है। और अब आखिरी 2 प्लेयर्स, शायद एक यूटिलिटी या एक स्प्रे की मार बच चुके हैं। यूटिलिटी आती है और ये पटाख ग्रेनेड, कोई डैमेज नहीं पड़ेगा। आई थिंक WBG ये दोनों एलिमिनेशन पॉइंट्स बासानी निकाल लेगी। देयर इज नो वे कि यहाँ से वो एलिमिनेट होते हुए दिखाई दें। WBG आई थिंक सो वो इस जगह पर फाइट लेने से थोड़ा सा गुरेज करेंगे इस एंड पर, क्योंकि थर्ड पार्टी आप जितना नीचे आएंगे इस रिच से उतने ज़्यादा आप विजिबल हो जाएंगे ऊपर रहती टीमों को। WBG अभी इस चीज़ से गुरेज करेगी। एंड WBG उनके पास ऑलरेडी एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं, 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं, 81 पॉइंट्स के ऊपर वो फर्स्ट नंबर पहले पायदान पर जा चुके हैं। पहला स्पॉट उनके पास है अभी के लिए। और उनको क्या चाहिए? ओवर एक्सटेंड उनको करना नहीं है, सिर्फ चिकन डिनर के लिए उनको खेलना है। लेकिन खैर WBG उनके प्लेयर्स, अब अलायंस को स्पॉट डाउन किया गया, लेकिन अलायंस ने भी पीछे मुड़कर देखा WBG के खिलाड़ियों को। लेकिन IQ 9वें नंबर तक अपनी जगह बना चुके हैं। फ्लैश इस मैच से बाहर हो जाएगी। तीसरे पर इनर सर्कल के एक अकेला सोलो प्लेयर जैसे तैसे कर चंद एक पॉइंट्स हासिल करना चाहता है। एंड 8वें पर आ चुके हैं। थोड़ी देर और, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर और सर्वाइव करना है IQ को। कम से कम 3 प्लेसमेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन जोन में अगर वो आगे किसी तरह तो शायद वो बच सकते हैं। लेकिन वहीं पर राउफ को पता लग गया है, राउफ सॉ समवन, उन्होंने किसी को देखा है। एंड इट हैज टू बी IQ, जो कि शायद कुछ सेकंड्स में स्पॉट हो जाए। ऊपर 9ZG हैं, राउफ अकेले यहाँ पर बचे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राउफ ने कुछ भी नहीं देखा। के IQ सर्कल में आ गए, सामने INF है, ऊपर 9Z है, ऊपर WBG है, पता नहीं कौन कौन है। लेकिन IQ फिर भी बचते बचाते आ गए हैं, दीवार के पीछे आ गए तो यस कवर मिल जाएगा। लेकिन इन द मीन टाइम अनदर टीम गेट्स एलिमिनेटेड। फैल्कन के वो प्लेयर भी गए, सर्वाइवल निकाला गया। टॉप 3 में अगर आ गए आदि, जो कि इम्पॉसिबल चीज है, इम्पॉसिबल ही था ये, यहां तक आना भी इम्पॉसिबल था। इन द नेक्स्ट सर्कल इज आल्सो देयर। ओह माय गॉड। लेकिन सामने WBG फाइट में आती हुई नजर आती है। 9ZG हावी आती हुई, नो वे के WBG 9ZG के हाथों एलिमिनेट होगी। बॉटम पे ये टीम मौजूद है। #1 वर्सेस #16। एक यूटिलिटी है इसका। #16 पूरी तरह से आगे आएंगे। ऑर्डर गेट्स नॉक्ड आउट। व्हाट इज गोइंग ऑन? 3 प्लेयर्स गिरा दिए जाएंगे। ये है PMGC, दैट इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। PMGC लास्ट चांस ऐसा है कि #1 और #16 की जब आपस में लड़ाई होती है, #16 #1 से जीत जाता है। What is going on? Oh my goodness, 9Z ग्लूबेंट वो अलग ही कुछ इरादे लेकर आए हुए हैं, अलग ही जज्बे के साथ वो खेल रहे हैं। उनके पास खोने को और है ही क्या, उनके पास पाने को पूरा समुंदर है और उनके पास खौफ तो कोई है ही नहीं उनके ऊपर। एंड अलायंस को भी आप देखें, वो भी बगैर डरे 8 एलिमिनेशन पॉइंट्स हासिल उन्होंने अपने खाते में कर लिए हैं। एंड अलायंस, उनके 3 खिलाड़ी अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। लीजिए 9वां नॉकआउट उन्होंने दर्ज किया। आर्करेट के ग्लोरी को गिराया जा चुका है। रामजेस मौजूद है, रामजेस शायद कुछ कर पाएंगे, लेकिन क्या ही कर पाएंगे, सामने 3 खिलाड़ी हैं। लेकिन अलायंस, उनको संभल कर खेलना है। अगर एक भी कदम और आगे रखा तो 9Z ग्लूबेंट उनका एलिमिनेशन पॉइंट उठाते आपको दिखाई देंगे। लेकिन IQ खास तौर के ऊपर अपनी जगह टॉप 7 के अंदर बना चुके हैं। 2 टीमें और अगर एलिमिनेट हो गई तो टॉप 5 में अपनी जगह बनाएंगे। उसके बाद 2 टीमें एलिमिनेट होंगी तो टॉप 3 में अपनी जगह बनाएंगे। सारे मार दें आप, ये तो वही बात है कि लेकिन खैर अभी फिलहाल के लिए अलायंस के खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं ओलियो कि रामजेस को गिराया जाए, लेकिन बैक स्टैब किया जा सकता है 9ZG की तरफ से, बिल्कुल सामने मौजूद हैं। एंड अलायंस को आई थिंक सो अब इस चीज का अंदाजा भी हो चुका है। अब थोड़ी सी दिक्कतें बन सकती हैं अलायंस के लिए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए स्मोक्स का बेशुमार इस्तेमाल करना पड़ेगा अलायंस के खिलाड़ियों को। सर्कल खत्म हो चुका है और अब आखिरी चंद सेकंड्स बाकी हैं और उसके बाद हमारे सामने अगला जोन स्टार्ट होता हुआ, बल्कि 2.5 मिनट का टाइम बाकी है और फिर
सूरत हाल हमारे सामने क्लियर हो जाएगी, पिक्चर क्लियर होती हुई दिखाई देती है। 9GG को आगे जाना है, उनको अग्रेसिव होना पड़ेगा, उनको पुश करना पड़ेगा। IQ जिंदा तो है, हाथ में ग्रेनेड तामे, लेकिन IQ को स्पॉट कर लिया जाता है, पैर उनके रिवील हो जाते हैं। अलायंस की तरफ से ये एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर लिया जाएगा और #7 पर आते हैं। कोई पॉइंट नहीं मिलता, 1 पॉइंट मिलता है सिर्फ। तीसरे नंबर पर हैं, 1 पॉइंट मिलेगा। वहीं पर ऑल्टर इको RS 75 पॉइंट्स के ऊपर। 9 पॉइंट बहुत मैटर करता है, डोमिनेशन पर है। WBG भी इस मैच से बाहर हो चुकी है। बिल्कुल 1 पॉइंट बहुत मैटर करता है। 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालकर WBG 85 पॉइंट्स हासिल किए इस मैच से। लेकिन 9G ग्लोबेंट असल तारीख वो रकम करने जा रहे हैं। 11वां एलिमिनेशन पॉइंट अपने लिए कंफर्म किया है उन्होंने अलायंस के प्लेयर के ऊपर। ये 14 एलिमिनेशन पॉइंट्स बन सकते हैं अगर अलायंस को वो एलिमिनेट कर दें। एक यूटिलिटी एंड खत्म। जिमी को नॉकआउट करेंगे। ओलियो वो प्ले जोन से नॉकआउट हो जाते हैं, लेकिन एलिमिनेशन पॉइंट्स आगे बढ़कर कंफर्म किए जाते हैं। 13 एलिमिनेशन पॉइंट्स 9G ग्लोबेंट कंफर्म करती है, लेकिन अलायंस को भी दाद देना पड़ेगी। 10 एलिमिनेशन पॉइंट्स कर वो एलिमिनेट हुए हैं। आखिरी 2 टीमें रह चुकी हैं ख्वातीन हज़रात, एंड गीक अनफॉर्चुनेटली वो तो नहीं कुछ कर पाएंगे। 9G ग्लोबेंट वो एलिमिनेशन पॉइंट यहाँ से भी निचोड़ रहे हैं, पूरी लॉबी से निचोड़े गए हैं। इसको कहते हैं एलिमिनेशंस निचोड़ना। 14 एलिमिनेशन पॉइंट्स, और लेट्स सी कि 15th क्या कंफर्म होगा या प्ले जोन की नजर होता दिखाई देगा। आई थिंक साफ के पास अब यहाँ पर एक ही चारा है कि बस वो बचते रहें किसी तरह से। ग्रेनेड से बच गए, यूटिलिटी से बच गए, 2 ग्रेनेड अभी भी मौजूद हैं। 9GG रिमिक्स नीचे जाएंगे, रिमिक्स इज गोना गो डाउन, लेकिन हवा में नॉक हो जाएंगे। आराइज आते हैं, व्हाट क्या हुआ? ओह माय गॉड, 9GG चिकन नहीं निकालती, गीके चिकन ले जाती है। What? मैं वो एग्जैक्ट लम्हा नहीं देख पाया, और ये हुआ क्या है? ये हुआ क्या? 9G ग्लोबेंट 9G ग्लोबेंट यार, ये क्या हुआ है? वो हंसना भी चाह रहे हैं, वो कह रहे कैमरा लेके आओ, वो कह रहे कैमरा लेके आओ। अच्छा, इसी टाइम पे बाल सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं मेलोसा। आई थिंक इट्स मेलोसा, ये वो बाल सेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरा मुंह ना आए बस। दैट इज मेलोसा। बिस्ती करा दी। ओह माय गॉड यार, ये क्या हो गया यार? ये तो बैठे बैठे चिकन डिनर दे जोन आपके पास, लेकिन 9G ग्लोबेंट एक एलिमिनेशन पॉइंट निकालने के चक्कर में उन्होंने देखें कितने पॉइंट गवा दिए हैं। 4। क्या किया यार ये? यार आया मतलब यार। एंड घी के मतलब उनको प्लेट में रखकर चिकन डिनर दिया गया, गरम गरम ताज़ा ताज़ा। बट खैर ख़वातीन हज़रात, 9G ग्लोबेंट धूम मचाई, घी के ने अपनी मोहर लगाई। मुर्दा गालिब। स्टॉप। आपको लास्ट मोमेंट्स दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखिएगा 3v1 है, 3v2 है, 3v1 हो क्या अभी देखिएगा। क्या जरूरत थी नीचे जाने की? वैसे 1 पॉइंट के पीछे 4 पॉइंट्स गवा दिए। अभी देखिएगा आप, अभी देखिएगा 2 पॉइंट, 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स भी निकाले हैं सामने उन्होंने। ये देखिएगा अभी वो सामने से 2 प्लेयर्स जंप करेंगे। साफ स्विच किया हम 4 पे, 30 बुलेट्स उनके पास, 31। अभी देखिएगा पहले रिमिक्स जंप करते हैं मेरे ख्याल से, फिर अराइज करते हैं। रिमिक्स किया, ओ शू शू। तीसरा तो वैसे जोन के बाहर गिर गया था। वो तो गिर के मर गया। What was that यार? लेकिन आगे के 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स एंड अ चिकन डिनर। 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स। अच्छा 3 टीमें, 9 ही इनफैक्ट 10 पॉइंट्स निकाले गए अलायंस की तरफ से। गीके ने 9 निकाले और 13 निकाले गए 9G ग्लोबेंट की तरफ से। काफ़ी शानदार खेला गया इन तीनों की तरफ से। आईसी अनफॉर्चुनेटली एक ही पॉइंट। अच्छा, आईसी को प्लेसमेंट पॉइंट कोई नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला। 7 स्पॉट पे मिलता है एक यार। आई थिंक नहीं मिला उनको एक एलिमिनेशन पॉइंट ही मिला। मेरे पास जो स्टैंडिंग्स आ रही है, मैच 9 नहीं, ओके गलत स्टैंडिंग्स खोल रखी है मैंने। पिछले मैच में उनको 1 पॉइंट मिला था, 2 मैचों में उन्होंने सिर्फ 2 पॉइंट निकाले। अब आप देख लें
आईसी क्या कह रही है? 27 पॉइंट्स तो निकाल लिए फर्स्ट मैच में, बट देन ऑनवर्ड्स 2 मैचों में सिर्फ 2 ही पॉइंट्स। मुश्किलात बन रही हैं आती, लेकिन क्या ही शेरो शायरी करते हैं आप। आपकी शेरो शायरी में आपको 10 में से 20 नंबर मिलेंगे। लेकिन यहाँ हाईलाइट्स की तरफ चलते हैं इस मैच की, जहाँ स्टार्ट में ही ऑल्टर ईगो उनको फुल स्टॉप लगाया गया। अच्छी खबर यह है कि ऑल्टर ईगो ने भी बहुत बड़ा ब्लंडर, अच्छा नहीं, उनको ये फाइट में जाना ही नहीं चाहिए था। मतलब इतना अर्ली आप एक स्लामिन किसी के ड्रॉप लोकेशन पे दे रहे हैं, ये तो ज़्यादती वाली बात है यार वैसे। लेकिन असल जो दुख है वो यहाँ पहुँचा मैच में 16वां मिनट, ये सबसे ख़तरनाक साबित हुआ हमारे लिए। आईसी के प्लेयर्स जेनजी हालांकि फॉल बैक उन्होंने कर लिया था जब सर्कल शिफ्ट हुआ, उसके बाद जैसे उन्होंने सुना भाई फाइट हो गई, जैसे उनको पता चला वो बंदूकों की आवाज़ उनको गई, वो साथ ही वापस आ गए। बट खैर बतीनो हज़रात, दिस वाज गी केस चिकन डिनर। एंड जब वो कहते हैं कि किस्मत जब आपको चिकन डिनर देना चाहे तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, ऐसा ही हुआ कुछ। हालांकि 9G ग्लोबल सवाल ही पैदा नहीं होता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली गी के इस मैच का चिकन डिनर कर लेकर जाती है। बट खैर जो धूम मचाएगी 9G ग्लोबल की तरफ से वो भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अलादीन के एक ऐसी टीम जिसने स्ट्रगल किया कल के 6 मैचेस में, शायद मेरे ख्याल से 15 पॉइंट्स निकाले थे कल के दिन इन्होंने 6 मैचेस में, इससे भी कम या इससे थोड़े ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर पॉइंट्स इस एक मैच से निकाल लिए गए हैं 9G ग्लोबल की साइड से। जी हाँ बिल्कुल, 9G ग्लोबल बहुत ही अच्छा खेलते हुए दिखाई थी हमें, लेकिन यहाँ कुछ हाईलाइट्स देखी हमने। बढ़ेंगे मैच क्या कहेंगे इसको, टॉप 4 टीम रोटेशन की तरफ, जहाँ पर बहुत ही अलग अलग कॉर्नर से रोटेट किया गया सबकी जानिब से। WBG को दाद देना पड़ेगी, जिस तरह से उन्होंने सर्कल लिया, जिस तरह से उन्होंने एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले, 9 एलिमिनेशन लेकर जाते हुए दिखाई दिए इस मैच में। 9 ही निकाले गए कीके की जानिब से, 14 एलिमिनेशन निकालती है 9G ग्लोबल 10 अलायंस विद 10 एलिमिनेशन पॉइंट्स। लेकिन पॉइंट्स टेबल ओवरऑल स्टैंडिंग में अलायंस की पोजीशन में देखना चाहता हूँ इस मैच के बाद। आई थिंक इतनी कोई खास जगह नहीं है, इससे पहले कि जो मैचेस हैं वो अच्छे नहीं खेल पाए थे अनफॉर्चुनेटली। अलायंस ने भी स्ट्रगल किया कल के दिन। इनफैक्ट गी के, अलायंस, 9G ग्लोबल के तीनों वही नाम हैं जो इतना कुछ अच्छी स्टैंडिंग पर मौजूद नहीं थे। एक अच्छी कोशिश की गई है इनकी साइड से। लेट्स सी ओवरऑल स्टैंडिंग्स जब हमारी स्क्रीन पर आएंगी ख़वातीन हज़रात, तब जायज़ा लेंगे कि कितना फ़र्क पड़ा है। 9G ग्लोबल ने 20 पॉइंट्स निकाले इस मैच से, 6 प्लेसमेंट पॉइंट्स और 14 एलिमिनेशन पॉइंट्स। हालांकि चिकन डिनर गीके ने कंफर्म किया 1 पॉइंट कम, 19 पॉइंट्स उनको मिलेंगे। अलायंस 15 पॉइंट्स, 11 पॉइंट्स WBG। उसके बाद आपको सारी टीमें आपको सिंगल डिजिट्स में दिखाई देती हैं। INF 7 पॉइंट्स, आर्क रेड 6 पॉइंट्स, जिनजी 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स, आपको पता है किसके ऊपर निकाले गए। वहीं पर फ्लैश 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स। जी हाँ, फ्लैश 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल कर जाती हुई नज़र आती है। आईसी को सिर्फ 1 ही प्लेसमेंट पॉइंट मिला, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कह सकते हैं कि थोड़ी देर और सर्वाइव निकल सकता था, बट उस सिचुएशन के अंदर आई मीन क्या कह सकते हैं, गीके वहाँ मौजूद थी। अगर गीके ना होती, या चलें इफ्स एंड बट्स साइड पे करते हैं, जो होना था वो हो गया। अगले मैचेस पे फोकस रखते हैं। 3 मैचेस अभी भी बाकी हैं। थोड़ा सा आगे ज़रूर गई है WBG इस मैच के बाद, लेकिन अभी भी इट इज़ डूएबल। सेकंड स्पॉट पर ही मौजूद है टीम आईसी, सेकंड और थर्ड पर होगी, बट बढ़ेंगे आगे। मैच MVP की बात करेंगे। सैफ यहाँ 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालते हैं, 4 नॉकआउट्स निकालते हैं, 493 का डैमेज दिया और चिकन डिनर कन्फर्म किया गया इनकी टीम की जानिब से। MVP का टाइटल गी स्पोर्ट्स के ही प्लेयर लेकर जाएंगे, बिकॉज द न्यू मेटा सेज कि जो न्यू मेटा खेलें या न्यू सिस्टम खेलें, वो कहता है कि जो जीतेगा चिकन, जो निकालेगा वही MVP बनकर जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। एंड वहीं पर ओवरऑल रैंकिंग्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं ख़वातीन हज़रात। 85 पॉइंट्स टीम वीवो गेमिंग फ्रॉम चाइना आपको पहले नंबर पर दिखाई दे रही है। ऑल्टर ईगो आपको 75 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर, चिकन आईसी 75 पॉइंट्स के साथ तीसरे पर, फ्लैश 70 पॉइंट्स के साथ आपको चौथे पर दिखाई दे रही है। फिर 61 पॉइंट्स INF, ज़्यादा दूर नहीं है। 15-14 पॉइंट्स का डिफरेंस आप कह लें कि उनका है, दूसरे स्पॉट से ज़्यादा नहीं है। एक मैच में कवर किया जा सकता है उनकी तरफ से अगर चाहें तो।
लूप्स 57 पॉइंट्स, यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। लूप्स इस मैच के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। इस मैच से पहले भी उनके इतने ही पॉइंट्स थे, शायद 54 थे, 57 अब हुए हैं, या 57 ही थे उनके, बट खैर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। 56 पर अलायंस आई है, अभी भी दूर है। एक अच्छा मैच, एक बड़ा मैच खेलना बाकी है। जिस तरह से अभी खेला उन्होंने वैसा ही बड़ा मैच। वहीं पर 9G ग्लूबेंट, कितना फ़ायदा उनको पहुंचा, बात करते हैं। मुझे लगा शायद ब्रेक पर हम जाने वाले हैं, लेकिन खैर ख़वातीन व हज़रात, 9G ग्लूबेंट में देखना चाहूँगा कहाँ पर थे। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले कि आप 9G ग्लोबेंट को देखें, मैं जाऊंगा ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं आदि, एंड विल टॉक अबाउट इट लेटर। बाय बाय जी। нэр хүүхдээ санаж байна. Миний хэдхэн авраг болоод хүрээдэг гэж заа юу?
3 matches remain until we find out the final 2 teams that are going to be joining the rest of the squads in grand finals of the 2025 PMGC. I'm joined by Diego from Inference Ridge. Your squad, with just 3 matches remaining, you're only 14 points away from top 2. Going into the next 3 matches, what can this team do to just make sure you do enough to get in the top 2? Então, indo para essas últimas 3 partidas, vocês estão ali com 14 pontos de diferença para o segundo lugar. E o que vocês vão adotar para essas últimas partidas? Questão de estratégia? Acho que não tem muito que mudar de estratégia, só ajeitar nossa teamfight, porque pecamos em 2 quedas sobre teamfight. Porém, é continuar fazendo nosso jogo com uma boa mentalidade e é isso. Foco em passar para a grande final. We're gonna maintain the same strategy, but we're gonna try to get more team fights, to be better in the team fights. I think that's what sliding us down a little bit is the team fights, but we're gonna be strong for the next 3 games. Eliminations and I guess timing is the major factor for it, and something to keep out that I want to let the audience know has to do those teams that got absolutely nothing to lose. You already got J&G gatekeeping teams on the bridge in Erangel, and the squad from Falcons was telling me we might see the biggest comeback ever because that team is playing like they got nothing to lose. Let's see what they can do in the final 3 matches. वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, फिर से खुश आमदीद करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लिया हमने, ब्रेक के बाद वापस आए और थोड़ी सी हमने बात अब करनी है उन टीमों के बारे में जो कि कंपटीशन में काफ़ी करीब आ चुकी हैं। ओवरऑल स्टैंडिंग्स ऑब्वियसली उसकी तरफ नज़र हमने दौड़ाई तो आईसी इज स्टिल ऑन द 3rd स्पॉट, ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हाँ उनके मुकाबले में नीचे से फ्लैश आ सकती है। 1 गुड मैच एंड फ्लैश कैन डीथ्रोन ऑल्टर ईगो एंड आईसी एंड आदि कॉम्पिटिशन जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मसला ये है कि अलादीन, द मेजर प्रॉब्लम इज कि मैचेस कम रह चुके हैं, पॉइंट्स में डिफरेंस कम है। फॉर एग्जांपल, एक मैच रह जाए, 3 टीमें हैं, कोई भी क्वालिफाई कर सकता है। ये असल अनॉमली ये चीज बना रही है, रैंडमनेस ये चीज बना रही है। रैंडमनेस पॉइंट्स डिफरेंस नहीं है, रैंडमनेस ये नहीं है कि हम तीसरे पर हैं, चौथे पर हैं। मसला ये है कि 4 नाम है एटलीस्ट जिनमें से सिर्फ 2 ने क्वालिफाई करना है, और वो चंद एक पॉइंट्स के फर्क के साथ हैं। जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ते जाएंगे, अगर यही सूरत हाल आखिरी मैच से पहले रही, ना जाने आखिरी मैच के अख्ताम के ऊपर फिर कौन क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, ये This is going to be the best PMGC last chance competition जो शायद आज से पहले हमने कभी देखा होगा। आखिरी मैच तक भी मुझे नहीं लगता कोई अपनी लीड बना पाएगा। एंड एक मैच रह चुका, जब एक मैच रह जाएगा वो आखिरी मैच असल कहानी लिखेगा। एंड जस्ट वेट एंड वॉच के होता क्या है उस आखिरी मैच में। बट खैर, अभी के लिए 3 मैचेस बाकी रह जाएंगे, एक इरांगल है, उसके बाद 2 मिरामाज हैं। जी हाँ बिल्कुल, एक इरांगल है, 2 मिरामाज बाकी हैं, अभी आधा दिन बाकी है, कुछ भी हो सकता है। इससे पिछले दोनों मैचेस में कह सकते हैं कि आईसी गॉट अनलकी, या कह सकते हैं कि वो ऐसी फाइट्स में उनको मजबूर किया गया जहाँ पर वो अपने प्लेयर्स नहीं बचा पाए, मैन एडवांटेज नहीं कैरी फॉरवर्ड कर सके और सफ़र करना पड़ा, अच्छे मैचेस नहीं निकले। बट आई थिंक अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। जिस तरह से 3 मैचेस की आपने बात की, तो एक ही मैच अगर अच्छा निकल आता है मज़ीद, तो रिजल्ट्स पूरी तरह से तब्दील हो सकते हैं, वापस से WBG को डिथ्रोन किया जा सकता है। ये तो अब हर मैच के अंदर चलता रहेगा, एंड मुझे नहीं लगता कि कंसिस्टेंट कोई भी खेल पा रहा है आज के दिन। WBG को भी आप देखें, एक मैच बहुत अच्छा जाता है, एक मैच फिर बुरा चला जाता है। अब ये रैंगल देखते हैं कि क्या लेकर आता है इन टीमों के लिए। WBG पहले पर आए हैं, चंद एक पॉइंट्स की लीड है उनके पास, आईसी से 10 पॉइंट्स का फ़र्क है पहले पायदान पर टीम वीवो गेमिंग का। बट खैर, टॉप 4 टीम्स, टॉप 4 प्लेयर्स इनफैक्ट आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। एंड 9G ग्लोबेंट ऑब्वियसली उनके खिलाड़ी ना आते तो ऐसा कैसे हो सकता था। अलायंस के प्लेयर आते हैं, गी के धूम मचाई गई, WBG अच्छे कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाए गए। पाकिस्तान से आए 4 शहजादे आईसी के उस प्लेयर बूथ में आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं, डेस्क पर तैयार हैं हमारे बॉयज़। PMGC ग्लोबल चैम्पियनशिप का ये सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। आखिरी 3 मैचेस हैं, 14 टीमों ने यहाँ से इन 3 मैचेस के बाद घर चले जाना है, लेकिन असल दुख पहुंचेगा उन नामों को
जो एक एक दो दो पॉइंट से शायद अपनी क्वालिफिकेशन किसी और के हवाले कर चुकी होंगी। क्या करें, ये एक ऐसा स्टेज है जहां पर अब आप प्लान नहीं कर सकते। अब आपको बस सिचुएशन के हिसाब से अच्छा खेलना है। जहां जहां से एक एक पॉइंट मिलता है वो एक एक पॉइंट भी आपको कंफर्म करना है। जैसे पिछले मैच के अंदर फ्लैश ने किए, वो बेशक ज़्यादा ओवरऑल पॉइंट्स नहीं लेकर जा पाए, लेकिन इरांगल के आई थिंक सो पिछला गेम नहीं था, उससे पिछला गेम था जिसके अंदर फ्लैश ने कुछ अच्छे पॉइंट्स निकाले थे। पिछले मैच में तो सिर्फ एक ही पॉइंट वो निकाल कर लेकर जा पाए थे। बट खैर, लुबे लुबाब ये है कि एक एक पॉइंट बड़ा मैटर करता है अपने ऊपर भी और हासिल करना भी पूरी लॉबी पर। जी हाँ, लेकिन विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट मैच और जाएंगे सीधा हमारे अगले मैच की तरफ। कोई डिले नहीं, कोई इंतजार नहीं, इरेंगल का ये आखिरी मैच, इसके बाद दो मेरा मार्स। अगर आपको वो दास्तान लिखनी है, वो कहानी सुनानी है जो कि याद रहे रहती दुनिया तक, अगर आपको वो छाप छोड़नी है, ये चंद मैचेस हैं, देखने में तो थोड़े से मैचेस हैं लेकिन जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करते हैं आदि, उस चीज़ को सामने रखा जाए। हर मैच की इम्पोर्टेंस अब इतनी बढ़ चुकी है, हर पॉइंट अब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। वो एक एक फाइट बहुत संभल कर, बहुत ध्यान से लेनी है। वो डिसीजन मेकिंग उसको बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि अगर ये मैच हाथ से चला गया, बीट फ्लैश, बीट आईसी, बीट ऑल्टर ईगो, कोई भी टीम हो, ये मैच अगर हाथ से चला गया, अच्छा ना खेला गया इस मैच के अंदर, फिर जो प्रेशर आपके ऊपर बनेगा वो शायद आपको फिर कोई और मजीद मैच अच्छा खेलने ही ना दे। लेकिन जाएंगे सीधा अगले मैच की तरफ। मिलिट्री सर्कल आने लगा आदि, क्या लगता है आपको? मुझे तो या मिलिट्री या सिवर्नी, दोनों में से एक सर्कल दिखाई दे रहा है। इंशाल्लाह मैं कहूँगा आपकी इस बात के ऊपर, अगर मिलिट्री बेस का आ जाए तो क्या ही बात है। एटलीस्ट उसके अंदर इतनी कंफर्मेशन होती है कि कम से कम 8 मिनिमम प्लेसमेंट पॉइंट्स कुछ निकल आएंगे, और यही थोड़े थोड़े पॉइंट्स ही तो चाहिए। बड़े पॉइंट्स निकल आए तो क्या ही बात है। लेकिन खैर, अभी फ़िलहाल के लिए एक्सटेंसिव ग्लाइड करते टीम आईसी के प्लेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ना मिलिट्री ना सिविरनी, बीच का सर्कल है ये, और ये कहीं पर भी जा सकता है। ये मिलिट्री बेस की तरफ भी ख़त्म हो सकता है, ये आपको मेन आइलैंड की तरफ भी ख़त्म होता दिखाई दे सकता है। लेकिन आईसी एक्सटेंसिव जो ग्लाइड कर रही है, बच जाएंगे भी फ़िलहाल के लिए उनके खिलाड़ी। लेकिन जेनजी अगर आ गए व्हीकल्स लेकर तो मुश्किलात बन सकती हैं, क्योंकि जेनजी और आईसी एक हेट रिलेशनशिप पिछले 2 मैचेस से उनका चलता दिखाई दे रहा है। बट खैर, गीक और सुपरमैसिव एक दूसरे के आमने सामने उतरे हैं। आप कह लें कि एक ड्रॉप फाइट होने वाली है उनकी। एंड गीक के निर्जेद हाथ में डीबीएस मौजूद है। डीबीएस को थोड़ा सा नर्फ भी किया गया था पिछले कुछ अपडेट्स के बाद। थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ा है गन को, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं पड़ा, अभी भी काफ़ी ख़तरनाक है। बट गीक आते साथ ही होवरक्राफ्ट का इंतज़ाम कर लिया गया उनकी तरफ से, और अब यहाँ से फॉल बैक करते आपको दिखाई देंगे। लेकिन जहाँ पर फॉल बैक करेंगे वहाँ पर अलायंस भी है। एंड गीक लग ऐसे रहा है कि मिलिट्री बेस की जानिब रवानगी इख्तियार करना चाहते हैं अपने ड्रॉप लोकेशन के साइड पर। आईसी वो भी व्हीकल्स लेकर मिलिट्री बेस जा पहुँचे हैं, कुछ 2 खिलाड़ी शायद, एंड 2 खिलाड़ी अभी भी व्हीकल की तलाश में ही हैं। मेरे ख्याल से गीगी की जानिब से नवो पिनोय की तरफ रुख बनाया जाएगा, और ये अच्छी स्ट्रैटेजी तो है, क्योंकि उनके पास एक ऐसी गाड़ी है जिसको वो रोड पर भी चला सकते हैं, फिर वो कवर भी प्रोवाइड करती है और पानी में भी चलती है। ये तो आराम से रोटेशन भी हो जाएगी। और लेटली इसका एडिशन कहीं ना कहीं एडवांटेजियस साबित होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि वो जो सेंटर ब्रिज था जिसकी बात की जा रही थी, रिंगल 3.0 और वटेवर, जिसमें वो आना है, अभी भी कुछ टाइम है, कुछ टाइम बाद वो आएगा। Welcome to a quick report with the 7WG. I heard that that's wondering what happened between Alter Ego and Loops. Wondering if Alter Ego was maybe hot dropping them, or if Loops was hot dropping them. It turned out to be just something with the rotations that they were doing. Those teams are going to be looking to make sure they don't end up with the same rotation once again. बिल्कुल, ऑल्टर ईगो ने ऐसा ही किया। वो इस बार लिपोवका गए आदि, बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी तरफ से चेंज ऑफ स्टार्ट देखने को मिला। लेकिन इस मैच में आईसी क्या करेगी? एक साइड पर गीके है, एक साइड पर जेनजी है। जेनजी वी ऑल नो ब्रिज कैंप करेंगे। देयर इज नो वे कि अब ब्रिज कैंप अबैंडन किया जाए। जेनजी के पास ब्रिज कैंप की जो जगह है वो सेंटर स्पॉट बन रहा है। मुझे जेनजी लग नहीं रही इस बार के वो ब्रिज कैंप करेंगे। पता नहीं, शायद आने वाले वक्तों में इरादा वो चेंज कर लें अभी, क्योंकि आईसी लूट कर रही है। बट आई डोंट थिंक सो कि जेनजी दोबारा अब ये चीज़, अगर इस बार उन्होंने ब्रिज कैंप किया फिर तो पक्का मैं समझूंगा कि
ये काम ख़राब है भाई, ये काम ख़राब है। अभी भी मैं मार्जिन दे रहा हूँ उनको कि चलो ठीक है, पिछले मैच में हो गया, 2 बार ही हो सकता है, लेकिन तीसरी बार नहीं, तीसरी बार इट इज़ ऑलवेज प्लान्ड। एंड ये अगर इस बार ब्रिज कैंप हुआ तो फिर ये वो चाह रहे हैं जान करके आईसी को गेट कीप किया जाए। बट खैर, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर ख़वातीनो हज़रात, एंड दिस इज़ सर्टनली नॉट लव, ये वॉर ही है। बट खैर, WBG 1300 मीटर दूर सर्कल से हैं कुछ प्लेयर्स आगे बढ़कर, सूक फॉर एग्जांपल आगे जाकर सर्कल के अंदर अपने लिए उन्होंने जगह बना ली है। पहला सर्कल है, आसान है, लेकिन डाउन शिफ्ट अगर आया साउथर्न साइड के ऊपर तो फिर WBG का रोटेशंस अच्छी कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ दिक्कतें इनको एट टाइम्स आ भी जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर अच्छी रोटेशंस ही करते हैं। वहीं पर फ्लैश बहुत इंपॉर्टेंट मैच ही उनके लिए साबित हो सकता है, सिर्फ 5 पॉइंट्स का फ़र्क उनका भी है। फ्लैश से कहीं ज़्यादा बढ़कर INF को स्टेप अप करना है, जिस तरह से इंटरव्यू भी हुआ इस मैच से पहले INF का, दे नीड टू स्टेप अप। लूप्स साथ ही साथ दोनों ब्राज़ीलियन। अच्छा, आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट गेम, चलें फर्स्ट गेम नहीं, लेकिन कल के दिन के मिड डे के बाद से ही INF और लूप्स एक दूसरे के साथ साथ ही हैं ओवरऑल स्टैंडिंग्स पे। जी हाँ, बिल्कुल। अभी के लिए ओवरऑल स्टैंडिंग्स की तरफ अगर आप देखें तो जो पिक्चर है वो क्लियर होती हुई दिखाई नहीं दे रही। WBG यस दे हैव 85 पॉइंट्स, अगर उन्होंने इस मैच में चिकन निकाल लिया तो कहा जा सकता है कि यस वो अपनी क्वालिफिकेशन कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि #16 से भी कोई ना की टीम उठकर परफॉर्म करती हुई नजर आती है, तो कह सकते हैं कि वो रिजल्ट्स अभी तक तो हमारे सामने फाइनलाइज होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन जेंजी विल बी द फर्स्ट टीम टू लूज देयर प्लेयर। उनके प्लेयर जो स्प्लिट में खेल रहे थे, 3 प्लेयर्स को ब्रिज कैंप के लिए भेजा गया, 1 प्लेयर को स्प्लिट में खेलते हुए आर्कवर्ड के सामना करना पड़ जाता है, और आर्कवर्ड ने वहाँ नॉकआउट निकाला, सीधा कंफर्मेशन की, कोई और कुछ और नहीं किया शौतन की जानिब से, नॉकआउट निकाला, कंफर्मेशन की, आउट, मतलब इधर उधर घूम भी नहीं रहे, देख भी नहीं रहे कि बाकी प्लेयर्स भी शायद हो सकते हैं यहाँ पर, शायद वो भी ये बात जानते हैं। जब आप टीम्स को रीड करते हैं तो आपको उनका प्ले स्टाइल पता लग जाता है, शायद ये बात वो भी जानते हैं कि जिंजी लाइक्स टू प्ले इन सच अ वे कि जहाँ पर वो अपने प्लेयर्स को स्प्लिट में छोड़ती है इन कॉम्पाउंड्स में। आर्कवर्ड ने बड़ा अच्छे से उसका फ़ायदा उठाया। ऑब्वियसली जब आप खेल कन्फर्म करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि किस टीम का प्लेयर था। आगे हैं ब्रिज पे। बट खैर, अभी के लिए IC उनको हमने देखना है किस तरह से वो रोटेट करते हैं। आई थिंक इस बार वो ब्रिज कैंप तोड़ने की कोशिश करेंगे, नो डाउट। अभी उनको इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई कि कौन सा प्लेयर एलिमिनेट हुआ है, किल फीड जब आप देखते हैं आपको पता नहीं चलता। लेकिन हाँ, एक चीज़ हो सकती है, आई थिंक ये हो सकता है कि जो आपके सामने आता है टीम 16 और प्लेयर 10, शायद वो चीज़ अगर आप अपने सामने लिख के रखें तो आपको पता लग सकेगा कि टीम 16 कौन है, बिकॉज ये स्लॉट्स चेंज नहीं होते, स्लॉट्स सेम ही रहते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से आपका जो सारा डेटा होता है वो सेट हुआ होता है, आपके फिक्स स्लॉट्स होते हैं, उससे आपको पता लग सकता है कि कौन सी टीम का प्लेयर है। और ये रिकॉल करना भी बहुत बड़ी बात है, ये डिपेंड करता है अर्जुल के ऊपर, टीम के ऊपर, उनकी मेमोरी के ऊपर कि वो कितना ज़्यादा फोकस करते हैं इन चीज़ों पर। लेकिन फ़िलहाल मैं सर्कल देखना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ अगर बात करें, सर्कल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रोटेशन टीमों का। रोटेशन में काफ़ी टीमें जूझ रही हैं। अभी फ्लैश वर्सेस अल्टर ईगो हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि जो अल्टर ईगो के प्लेयर्स हैं वो काफ़ी स्प्लिट में है, लेकिन फ्लैश शायद वो इन्फो लेते ही फॉल बैक कर जाएँ। लेकिन रोज़मेरी गाड़ी से आके आए, गाड़ी से उतरे, नॉक कर सकते हैं, नॉक किया जाएगा, सीधा लॉबी का रास्ता दिखाया फ्लैश के प्लेयर को। इस तरह से आप रोटेशन करते हुए ओवर कमिट करेंगे तो ऐसे ही पनिशमेंट मिलेगी। और जिस तरह के एडवांटेज मिला ऑल्टेगो के प्लेयर को, बिकॉज वो हिल टॉप पर थे, वहाँ से वो बासानी नॉक निकाल सकते थे, वो जो रिस्क फैक्टर जो कि इंक्लूडेड होता है इस तरह रुककर गाड़ी से उतर कर स्प्रे करने में, उसको पूरी तरह से इग्नोर किया गया। नॉकआउट निकाला, कंफर्मेशन की और फॉल बैक कर लिया। जी हाँ, वहीं पर कुछ और रोटेशंस, मिसाल के तौर पर बोर गेमिंग आपको मिल्टा के करीब जो ब्रिज है उसको गेट कीप करते, नोवो साइड ब्रिज मेन आइलैंड के एंट्री पॉइंट पर गेट कीप लगाया हुआ है उन्होंने टीम गीके के लिए। आईसी अभी भी थोड़ा संभल कर इंतज़ार कर रही है आईसी, एंड सर्कल बड़ा ही दूर चला जाता है। अब जेंजी क्या वापस आएंगे या आगे जाएंगे? बज़ाहिरी तो आगे ही जा रहे हैं, एंड आईसी को भी अंदाज़ा हो चुका है नहीं वापस नहीं आना। लेकिन गीके होवरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं, मल्टीपल होवर व्हीकल्स हैं उनके पास मौजूद,
एंड लेट्स सी कहाँ पर जाकर ये गाड़ियाँ रुकती हैं। चले तो जाएंगे मेन आइलैंड के ऊपर, बट सर्कल के अंदर जाना इसके बाद एक इम्तिहान ज़रूर है। वहीं पर आईसी वो भी सर्कल के अंदर रवानगी इख्तियार कर रहे हैं। मिलिट्री ब्रिज इज़ नाउ ऑफिशियली क्लियर। जेनजी आगे बढ़ चुकी है काफ़ी, बट खैर एक फाइट शुरू हो जाएगी। पहली फाइट क्लोज रेंज एंड ऑल्टर ईगो आरएस आकर के नॉकआउट निकाला है उन्होंने फाल्कन्स के प्लेयर के ऊपर। एंड फाल्कन्स की सबसे बड़ी गलती ये है कि एक प्लेयर उनके शायद है ही नहीं पोचिंकी में, लेकिन ऑल्टर ईगो उनको कहीं से बैकस्टैब किया गया। एंड अल्वा इज द लास्ट वन। अल्वा आखिरी प्लेयर है। और लीजिए स्लामिन भी दे दिया, शायद लगा के स्लामिन जा रहा है, लेकिन प्लेयर स्काउट कर आए हैं। आई थिंक सो बोर के प्लेयर हैं या बर्मीज गोल्स के प्लेयर थे। बर्मीज गोल्स के प्लेयर आए, स्काउट कर गए। अगर वहां पर रुक जाते तो ऑल्टर ईगो के 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स वो कंफर्म कर सकते थे वहां से, बट आर्करेड पुचिंकी में, सुपर मैसिव पुचिंकी में ऑल्टर ईगो आरएस क्या बाल बचे हैं। 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स और अब अपने बाकी के प्लेयर्स को रिवाइवल देते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, लेकिन यहाँ ट्रेंचेस की बात करें, ट्रेंचेस की तरफ ही रुख बनाया जाता है। अगर आप मिनी मैप की तरफ देखें, 4 टीमें आपको आसपास दिखाई दे रही हैं। नॉट जस्ट टीम पपारा सुपरमैसिव, बल्कि उनके साथ साथ आर्करेड भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऑल्टर ईगो के प्लेयर्स भी आसपास ही मौजूद हैं। और ये ट्रेंचेस जो हैं वो आपको ये पोचिंकी साइड की दिखाई दे रही है, नॉट घाट का ट्रेंचेस। कामिकाजे के ऊपर मल्टीपल ग्रेनेड्स आते हैं। एक और अगर यूटिलिटी फेंकी गई तो कनेक्शन मिल सकता है। वहीं पर पीछे से प्लेयर्स की तरफ से स्मोक डिप्लॉय करके विजन डिनाई किया गया ताकि कामिकाजे फॉल बैक कर लें, लेकिन कामिकाजे उनको ध्यान देना है, ओपन में नहीं जाना। एंड फॉल बैक तो कर लेंगे, बचते बचाते पीछे प्लेयर्स के पास आएंगे। वहीं पर उनके पास एक ऐसी जगह मौजूद है जिसको इस्तेमाल करके वो शायद नॉकआउट से निकाल पाए। गलती कर रहे हैं। आई थिंक यस, सर्कल पोचिंकी को अबैंडन कर सकता है। इट कैन गो टुवर्ड्स वाटर सिटी एज वेल, वाटर सिटी भी जा सकता है। लेकिन पोचिंकी हिल्स यहाँ पर जो ऐसी जगह हैं, अगर वहाँ सर्कल चला गया तो जो एलिमिनेशन पॉइंट यहाँ जेनजी उठाएगी, जो एलिमिनेशन पॉइंट यहाँ से आईसी उठा सकती है, वो काफ़ी काबिल तारीफ है। बट अभी पपारा सुपरमैसिव हमारे सामने, कामिकाजे नॉक हुए थे, रिवाइवल दे दिया जाता है। और मे बी ही वाज लो इन एचपी, बट फ्लैश लॉस्ट 1 प्लेयर। वापस से फाइट जाएगी। यहाँ पर देखें आप गीके वर्सेस बोर्ड गेमिंग दोनों आमने सामने आ जाते हैं। एंड बोर्ड गेमिंग 2 प्लेयर्स अपने नॉक कराए, गीके के ऊपर भी नॉकडाउन निकाला है। स्नोइक्स आगे बढ़ेंगे वंस अगेन। स्नोइक्स हमेशा की तरह वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करते हैं। गीके एक अच्छी रोटेशन जरूर की गई, लेकिन सर्कल के अंदर जाना पोटैटो हिल वाली साइड से क्वेश्चनेबल साबित होता है और अभी अपने प्लेयर्स गवाते हुए टीम दिखाई देगी। जी हाँ बिल्कुल। एंड सर्कल का एक साउदर्न शिफ्ट आता है, मुझे ऐसे लगता है कि ये जेनजी और आईसी के आसपास जाकर ही ये सर्कल ख़त्म होगा। बट खैर बोर गेमिंग और गी के अलग एक कहानी यहाँ पर चल रही है। एक यूटिलिटी अनिर्जित हाँ नॉकड आउट है। स्नोइक्स का अच्छा प्लान कर उन्होंने ये ग्रेनेड फेंका ज़रूर था, लेकिन यहाँ से भी अब कोशिश की जा रही है सैफ जी की तरफ से कि शायद कुछ हालात बेहतर कर पाएँ वो अपनी टीम के लिए। बट गी के पिछले मैच के अंदर अच्छा खेला, अच्छे एलिमिनेशन पॉइंट्स इन्होंने कंफर्म किए। वहीं पर 9G ग्लूबेंट के ऊपर भी नजरें रहेंगी। क्या बात है, अर्तुरुल गाजी, ख्वातीनो हजरात, रागनारॉक आ चुके हैं। एंड अभी फ़िलहाल के लिए टीम गी के एक प्लेयर उनके ऑलरेडी इस मैच से बाहर कर दिए जा चुके हैं। निर्जेत को रिवाइवल दे दिया जाएगा। सामने से एक और यूटिलिटी साफ को नॉकडाउन करने वाले थे, लेकिन अपने होवरक्राफ्ट को बचाना चाहते हैं। बच जाएंगे वापस से। निर्जेत को भी चाहिए यहाँ से फॉल बैक कर जाएं क्योंकि उनका पोजीशन कॉम्प्रोमाइज्ड ऑलरेडी है, लेकिन यूटिलिटीज की गेम है सारी। यहाँ पर साफ को लोन एचपी किया जाएगा, आगे बढ़कर नॉकआउट निकाला जाएगा। एंड स्नोएक्स बारहा आप देखेंगे कि स्नोएक्स ही वो खिलाड़ी होते हैं जो आगे बढ़कर एक ओपनिंग दिलाते हैं अपनी टीम के लिए। निर्जेद फायर बैक करेंगे एंड पकड़ लिया जाएगा। टीम बोर गेमिंग इस मैच से बाहर हो चुकी है। गीके ने गवाए अपने 2 खिलाड़ी, लेकिन 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने खाते में दर्ज कर पाए हैं। 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म किए गए, 2 प्लेयर्स गवाए गए। नॉट अ फेयर ट्रेड एट ऑल, क्योंकि ये दे नीड मोर देन दिस। अभी पॉइंट्स टेबल पर देखें, 6ठे पायदान पर ये टीम है। अगर सेकंड डिनर के करीब आ जाते इस मैच में तो जो ज़रब लगाई जाती इनकी तरफ से पॉइंट्स टेबल पर वो काफ़ी शानदार होती। और जिस तरह से गीके ने कमबैक मैच खेले हैं, मैचेस खेले हैं आज के दिन का स्टार्ट गीके ने, बल्कि फर्स्ट मैच के बाद भी गीके #16 पे थी। #16 से स्टार्ट किया गीके ने एंड लुक एट देम, वो 6 पर आ चुके हैं। और अगर इस मैच में वो चक्कर निकाल लेते, 15 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स इनकी पोजीशन में इनके पॉइंट्स में ऐड कर दिए जाए तो कहाँ जा सकते थे ये? #3 के बिल्कुल पास आ सकते थे। गीके ने बहुत ही शानदार खेला आज के मैचेस के अंदर। अभी तक 27 पॉइंट से स्टार्ट किया, 58 पॉइंट्स पर ये टीम आ चुकी है।
और चलें 9G ग्लोबेंट की बात करते हैं, जिन्होंने लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा खेला। 9G ग्लोबेंट वो भी बॉटम पे मौजूद थी, अभी कह सकते हैं कि वो #14 तक आ चुके हैं, विच इज़ नॉट रियली गुड, लेकिन हाँ एक चिकन डिनर निकाल कर वो भी बासानी ऊपर की तरफ आ सकते हैं। आईसी ऑन दी अदर साइड, उनका स्प्लिट यहाँ पर दिखाई देता है, बाउस फंस जाएंगे लेकिन बाउस को अलाउ किया जाता है कि वहाँ से निकल जाए। ज़ियूस ऑन दी अदर साइड, वो आईसी पर शायद सलामी देने की कोशिश करें, लेकिन ये जो स्प्लिट है ये क्वेश्चनेबल साबित हो सकता है। आईसी के पास रिवाइवल करने के लिए प्लेयर्स को जिस तरह से उनको सेटल रखना है वो चीज़ काफ़ी मुश्किल बनाएगी, लेकिन वहीं पर जाने दिया गया बाउस को। पीछे से आर्क रेड आती है, थोड़ी सी मदद करती है, उनकी जानिब से ये नॉकआउट निकाला गया। आईसी के पास सर्कल का कंट्रोल तो है, लेकिन अलाइन से बचना होगा। ओ सर्कल पूरा का पूरा वेस्टर्न हार्ड शिफ्ट अब लेकर जा चुका है। आईसी अब जल्द से जल्द उन 2 खिलाड़ियों को वहां से निकलना है। अलायंस वो भी रोटेट कर रहे हैं साइड बाय साइड, एंड आईसी अब यहां से अपने आप को रीसेट करती दिखाई देगी। लेकिन बर्बाद हो चुकी वो टीमें जो पोचिंकी के अंदर मौजूद थी, वो कैसे वहां से बाहर निकलेंगी भाई। 4-5 टीमें पोचिंकी में है, लेकिन अलायंस के प्लेयर वो फंस जाते हैं, उनको अंदाजा ही नहीं था कि 2 खिलाड़ी बिल्कुल उनके बैक यार्ड में मौजूद रहेंगे, लेकिन ओलियो बिल्कुल बैक यार्ड के ऊपर मौजूद हैं। एंड ओलियो अगर ऊपर से आए तो दिक्कतें बन सकती हैं, लेकिन आईसी को ज्यादा ओवर एक्सटेंड इस फाइट में नहीं करना, यहां पर रुके नहीं रहना है, सबसे बढ़कर ये बात है। एंड आई थिंक सो व्हीकल्स में बैठकर अब यहां से फॉल बैक भी किया जा रहा है। एंड अलायंस ज्यादा मजामत करती दिखाई भी नहीं दी है, वो बॉडी लैंग्वेज उनका शैटर हो चुका, उनको तो लाइक उनकी जान हलक में आ चुकी थी कि यार ये पीछे से बुलेट्स कहां से आ गए, उस एरिया को तो हम क्लियर कर आए। लेकिन खैर लेट्स सी आईसी यहां से कहां पर रोटेट कर जाते हैं। वहीं पर पोचिंकी में हालात कुछ मामलात सेटल अब हो चुके हैं। बर्मीज गूल्स यहाँ पर हैं, फाल्कन्स अनफॉर्चुनेटली उनको थोड़ा बहुत नुकसान इनफैक्ट पहुंचा ज़रूर है। एंड फाल्कन्स को आप देखें तो आखिरी ही प्लेयर अब उनके नरवालो बाकी रह चुके हैं, वो भी ढूंढ रहे हैं जगह कहीं पर जाने को। लेकिन ऑल्टर ईगो आरिस, ये असल फाइट है जो देखने वाली होगी। सुपर मैसिव की साइड पर दूसरा खिलाड़ी नॉकआउट कर दिया जाएगा, एंड ये एलिमिनेशन पॉइंट्स अनकरीब आपको कंफर्म भी होते दिखाई देंगे। तीसरा भी कंफर्म शायद हो सकता है यूटिलिटी से, लेकिन ब्लू जोन की नज़र शायद ये एलिमिनेशन पॉइंट होता आपको दिखाई दे सकता है। उठ खड़े होंगे प्लेयर, कोशिश की क्रिप्टॉन को गिराने की, लेकिन 5वां एलिमिनेशन पॉइंट डुओ डोमिनेशन रोजमैरी और क्रिप्टॉन की साइड से आती है, और टीम ऑल्टर ईगो आरिस अपने लिए 5वां एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करती है। बर्मीज गोल्स के प्लेयर को भी नॉकआउट कर दिया जाएगा, लेकिन यूटिलिटी आता जरूर है, क्रिप्टॉन को गिराया जाएगा। एक और खिलाड़ी अगर गवा दिया टीम ऑल्टर ईगो आरिस ने तो शायद वो मजीद पॉइंट्स ना हासिल कर पाए। बिल्कुल, लेकिन वहीं पर आईसी के ऊपर नॉकडाउन निकला है। आर्करेड वहां स्लैम इन दे सकती है, रैप अराउंड किया गया उस साइड पर आईसी को। यहां बात की जाए डब्ल्यूबीजी थर्ड पार्टी के लिए आएंगे, रोजमेरी सामने मौजूद है, रेड डॉट चलाई जाती है, लेकिन आईक्यू क्लोज रेंज में आएंगे। ग्लोरी क्लोज रेंज में आते ही वहां पर उस साइड पर नॉकआउट निकलता है। हार्ड बॉय आगे आए, टेक्स आईक्यू डाउन। आईसी के 2 प्लेयर्स उस सिचुएशन में बच जाते हैं। राइट साइड पर आपको वो सारी फाइट दिखाई देगी जहां पर ग्रेनेड जाता है। फलक कम्स इन विद अ ब्यूटीफुल ग्रेनेड, इनफैक्ट इट वाज आईक्यू जो कि 2 प्लेयर्स गिराएंगे, लेकिन पीछे से रामसेस आते हैं। नाउ इट्स अ 1v1, सारे नॉकआउट प्लेयर्स को एलिमिनेट किया जाता है, और जो आखिरी प्लेयर हैं उनको 1v1 तो लेना है, लेकिन इस साइड पे आईसी के आखिरी प्लेयर मौजूद हैं। ग्रेनेड फेंकने की कोशिश में फलक को पकड़ लिया जाएगा। रामसेस यहाँ चारों के चारों और प्रोबेबली 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालते हुए नजर आए। किस खूबसूरती के साथ उस फाइट में डोमिनेट करती हुई आर्करेड दिखाई देती है, और रामसेस अपने नाम वो एलिमिनेशन पॉइंट्स करते हैं, और आईसी इस मैच से बाहर हो जाती है। लेकिन ऑल्टर ईगो एंड डब्ल्यूबीजी आर स्टिल अलाइव। 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स ऑल्टर ईगो के पास हैं, डब्ल्यूबीजी के पास 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं, चारों प्लेयर्स इंटैक्ट हैं। यहाँ पहला नॉकआउट नहीं देना था। आर्करेड ने बहुत ही अच्छे अंदाज से इस फाइट में आकर टीम आईसी को एलिमिनेट किया, और फिलहाल आईसी इस मैच से बाहर हो जाती है। जी हाँ, लेकिन फ्लैश उनके भी कुछ 2 खिलाड़ी इस मैच से बाहर कर दिए जा चुके हैं। फ्लैश भी उस तरह से सेटल इन नहीं हो पा रही है आज के दिन, जैसे आईसी का माशाल्लाह से वो रोंडो उनको अभी तक के लिए बचाए रख रहा है। फ्लैश अनफॉर्चुनेटली वो अपने आप को सेटल इन नहीं कर पा रहे, लेकिन हाँ अब 2 प्लेयर्स जो सर्वाइव कर रहे हैं। सर्कल आया ज़रूर है। आर्करेड को अगर एलिमिनेट कर दिया जाता तो चीज़ें कुछ काफ़ी बेहतर हो सकती थी, बट खैर अभी भी पॉइंट्स में फ़र्क ज़्यादा नहीं है। ख़वातीन और हज़रात, दिल का मैंने आपको कल बताया था इख्तिताम पर कि दिल के मरीज़ हम बनेंगे, लेकिन ऑल्टर ईगो आरिस वो एक नई कहानी
लिखना चाहते हैं। आखिरी प्लेयर हैं, 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं रोजमेरी ऑल्टर ईगो के पास, एंड आर्करेट ये भी एलिमिनेशन पॉइंट बासानी आपको कंफर्म करती दिखाई दे सकती है। लेकिन रोजमेरी जाते जाते शायद एक भी एलिमिनेशन पॉइंट अगर यहाँ से कंफर्म कर जाए तो काफ़ी रहेगा। नहीं कर पाते, अपना क्रॉसर सेटल नहीं कर पाते, एंड 11वें नंबर पर 6 पॉइंट्स लेकर ही टीम ऑल्टर ईगो इस मैच से बाहर कर दी जाती है। 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स आर्क रेड इकट्ठे कर चुकी है। अगर चिकन डिनर आया आर्क रेड का तो आर्क रेड भी आपको अगले 2 मैचेस में दूसरे स्पॉट के लिए लड़ती दिखाई दे सकती है। जी हाँ, आर्करेड जिस तरह से खेल रही है, जिस तरह से उनकी तरफ से एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले गए हैं, चिकन डिनर निकालना मुश्किल तो साबित होगा। लेकिन अभी जिंजी के ऊपर क्रॉसर्स बनाए जाएंगे, जिंजी की जानिब से थोड़ा बहुत टैग किया जाता है, लेकिन क्विक फॉल बैक करेंगे। सेटन को शायद रिवाइव देना अब इम्पॉसिबल हो जाए, क्योंकि वो प्लेयर जोन से बाहर भी हैं और बिल्कुल करीब आ चुके हैं इस वक्त आर्करेड के। आर्करेड अपना 10वां एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करेगी, लेकिन आगे बड़े बैड बॉय क्लॉज को यहाँ पर फिनिश किया जाएगा। जिंजी उनके आखिरी प्लेयर बल्कि यहाँ पर मौजूद हैं, क्लॉज को नॉक किया जाता है। लास्ट मिनट स्टैंडिंग उनके ऊपर धावा बोला जाएगा। आर्करेड अपना 12वां एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करे कि दिस टीम इज डोमिनेटिंग द एंटायर लॉबी। जो भी सामने आ रहा है, 3v4 सिचुएशन हो या 4v4, ये टीम उनको छोड़ती हुई दिखाई नहीं देती। लेकिन यहाँ वुल्व्स की बात करें, वो भी फाइट में आ जाएंगे, जहाँ उनके पास ये स्क्वाड हाउस मौजूद था। बीजी पीछे से आएगी, गॉड स्पिरिट इज नॉक्ड आउट। आगे बढ़कर यादखा ग्रेनेड फेंकते हुए नजर आएंगे। हिगोर्स के पास ग्रेनेड आएगा और नॉक हो सकते हैं प्लेयर, लेकिन क्या उनको इस बात का पता है? ग्रेनेड आता है, उससे बचाएंगे। पीछे से WBG आएगी थर्ड पार्टी करने के लिए और आखिरी कंफर्मेशन की जाएगी सुख की जानिब से, लेकिन वापस से क्रॉसबो पे शिफ्ट किया जाता है। एंड वुल्व्स कुछ सेकंड्स में उनके प्लेयर शायद हाईलाइट बनते हुए दिखाई दें आज के दिन की। जी हाँ, लेकिन फ्लैश के प्लेयर्स उनको भी हमें भूलना नहीं है। काफ़ी देर से सोलो सर्वाइवल, इनफैक्ट डुओ सर्वाइवल निकालते दिखाई दे रहे हैं। सर्कल के क्लोज टू सेंटर आपको देखने को मिल रहे हैं ये दोनों प्लेयर्स, एंड आसपास कोई है नहीं। शायद आर्करेड थोड़ी देर में आपको उनके साथ फाइट लेती फिलहाल के लिए दिखाई दे सकती है, लेकिन WBG 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स, दूसरा खिलाड़ी नॉकआउट कर दिया जाएगा। राफिन्हा की साइड से कुछ टैप्स दिए जा रहे हैं, लेकिन बैकयार्ड्स पर वुल्व्स असल में दिक्कतें बनाते हैं। तीसरा खिलाड़ी भी नॉकड आउट है। WBG आउट इन दी ओपन जाते जाते अब शायद एक आखिरी कोशिश WBG करने की कोशिश कर रही है, एंड वो भी ना कर पाएंगे। WBG द गेम इज ओवर, एंड IC के लिए आप कह सकते हैं किसी ना किसी हद तक कुछ आसानी नहीं कहूंगा मैं, लेकिन चीजें उतनी ज्यादा बिगड़ी भी नहीं है इस मैच में। वहीं के वहीं ही पॉइंट्स हैं। ऑल्टर ईगो, हाँ, उन्होंने 6 पॉइंट्स का इजाफा किया, वो एक चीज़ ज़रूर है, लेकिन फ्लैश अब उनको देखना है कि वो कितने पॉइंट्स निकाल पाएंगे। आखिरी 2 प्लेयर्स हैं, 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स ऑलरेडी उनके पास हैं। जितना नज़दीक फ्लैश आएगी, जितना नज़दीक आर्करेड आएगी IC के, उतनी ज़्यादा आई वुड से उतना ज़्यादा कंपटीशन आपको बढ़ता दिखाई देगा आने वाले 2 मैचेस, क्योंकि इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 ही मैचेस बाकी हैं ख़वातीन और हज़रात बिना मार के। बट खैर, चिकन डिनर का सवाल है, INF दे ऑल्सो वांट टू कम्पीट। वहीं पर लूप्स एस्पोर्ट्स और अलायंस आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी करीब एक दूसरे के मौजूद हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़कर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अब जाकर के जिमी आगे बढ़ते हैं, यूटिलिटीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, एंड शानदार मोलोटॉफ था जिसकी जद में आएंगे नील्स, एंड टीम लूप्स अपना दूसरा भी प्लेयर नॉकआउट करवाएगी, एंड ये एलिमिनेशन पॉइंट्स बासानी अब आपको कंफर्म होते दिखाई देंगे अलायंस की साइड पर। ये पहले ही कुछ नॉकआउट्स हैं जो उन्होंने इस मैच में दिए हैं, लेकिन बैकयार्ड से स्लैम इन आएगा। वुल्व्स एस्पोर्ट्स के प्लेयर्स आएंगे, अलायंस को वापस से अब अपनी तैयारी पक्की करनी है। लेट्स सी कि क्या रोक पाएंगे अलायंस के प्लेयर्स। अभी फिलहाल के लिए नॉकआउट्स नहीं निकाले गए, बल्कि निकाल लिए जा चुके हैं। डॉरिन को गिरा लिया जाएगा। अलायंस आगे बढ़कर अब इस फाइट को भी खत्म करना है उनको। जिमी लो ऑन HP होंगे, बैकयार्ड से राफिन्हा भी बहुत ज्यादा दिक्कतें बना रहे हैं, लेकिन वुल्व्स एस्पोर्ट्स उनके पीछे एक और नाम भी मौजूद अभी फिलहाल के लिए हमें दिखाई दे सकता है, लेकिन वुल्व्स एस्पोर्ट्स इस मैच से बेशतर खिलाड़ी उनके भी बाहर कर दिए जा चुके हैं, एंड अलायंस इस एक कमरे में रहकर अच्छे तरीके से उन्होंने अपने सर्वाइवल को यकीनी बनाया है। वहीं पर लूप्स एस्पोर्ट्स, उनके 2 खिलाड़ी अभी भी काफी ज्यादा तंग कर रहे हैं अलायंस के प्लेयर्स को। जी हाँ, लेकिन जैसे आपने ये बात की, इस बात को खत्म होने से पहले लूप्स को इस मैच से बाहर कर दिया जाता है। वुल्व्स के हिगोर्स आगे बढ़े, एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करना चाहते थे। बगी जिस तरह से लगी हुई है, प्लेयर को अंदर आने दिया जा नहीं रहा। 2v1 सिचुएशन और प्रॉब्ली 2v2, लेकिन पीछे से फ्लैश थर्ड पार्टी कर रही, और फ्लैश का जिंदा रहना लॉबी के ऊपर कहर बरसा सकता है। IC को डिथ्रोन किया जा सकता है, ऑल्टर ईगो को नीचे भेजा जा सकता है, लेकिन हिगोर्स की तरफ से एक मोलोटॉफ फेंका गया जो कि
अभी किल प्लेयर को मजबूर करता है कि वो रिवाइवल छोड़ दें। हिगोर्स लो एचपी तो हैं, हील लगानी पड़ेगी, सामने ओलियो मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल इस 3v2 सिचुएशन को हम फिनिश होता हुआ नहीं देख पा रहे बिकॉज दोनों साइड्स के ऊपर एक स्टैंड ऑफ देखने को मिलता है। रियलाइजेशन होनी चाहिए वो उसको कि रिवाइवल चल रहे हैं सामने, लेकिन ओलियो जिस तरह से पीछे जा रहे हैं उनको सरप्राइज किया जा सकता है। काफ़ी ध्यान से खेलना होगा, अपने प्लेयर्स को 2v2 में छोड़ा गया, क्रेट लूट करने के लिए फॉल बैक करते हैं, रियलाइज करते हैं कि सर्कल में जगह मौजूद है, लेकिन वहीं पर ओलियो फंस चुके हैं, केलूक फंस चुके हैं, लेकिन केलूक जैसे ही पीछे जाते हैं 9G ग्लोबल दूर दराज से नॉकआउट निकालेंगे। 2 प्लेयर्स ने फॉल बैक तो किया, लेकिन बाकी जैसे ही प्लेयर फॉल बैक करने के लिए थर्ड प्लेयर आए उनको पकड़ लिया जाता है। मूविंग ऑनवर्ड्स, अब ये फाइट 2v2 में शिफ्ट हो जाएगी, पीछे आईएनएफ के प्लेयर्स मौजूद हैं, आर्कवर्ड इन द मीन टाइम वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन असल मसला यहाँ टीम फ्लैश का सर्वाइवल है। #4 पे वो मौजूद हैं और बिल्कुल 2 से 3 पॉइंट्स ही पीछे हैं टीम आईसी से। 2 से 3 पॉइंट्स मजीद निकाले गए तो आईसी को डिथ्रोन किया जा सकता है। ऑन द अदर साइड बात की जाए 9G ग्लोबल की, इस मैच में उनके फिर से 4 प्लेयर जिंदा हैं और उनकी तरफ से 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले जा चुके हैं। 9G ग्लोबल अब उनको सिर्फ और सिर्फ अपने मेन एडवांटेज को अपने पास रखना है। इस मैच का चिकन डिनर भी हासिल किया जा सकता है उनकी साइड से, भी नहीं बल्कि पिछले मैच का गवाया गया, लेकिन डोमिनेशन अच्छी थी पिछले मैच में। वहीं पर वुल्व्स ईस्पोर्ट्स और अलायंस वो आपस में लड़ रहे हैं। अलायंस भी अपने 2 खिलाड़ियों पर आ चुकी है, अननेसेसरीली एक प्लेयर का एलिमिनेशन कंफर्म किया गया, हालांकि काफ़ी दूर 9G ग्लोबल के खिलाड़ी थे, लेकिन वहाँ से उन्होंने प्लेयर को ट्रेस किया। एंड 9G ग्लोबल साथ ही साथ दिक्कतें बना रही है वुल्व्स के लिए भी। वुल्व्स के साथ भी वही होने वाला है जो अलायंस के प्लेयर के साथ थोड़ी देर पहले किया गया 9G ग्लोबल की साइड से। जैसे ही बाहर अपने कदम रखेंगे 9G ग्लोबल ये एलिमिनेशन पॉइंट्स बआसानी कंफर्म कर लेगी। वो करें ना करें अलायंस के प्लेयर ज़रूर कर लेंगे। एंड वुल्व्स उनको भी अंदाज़ा भी इस चीज़ का हो चुका है कि शायद वो इस कॉम्पाउंड को अबांडन कर आगे ना बढ़ पाएँ, बट लेट्स सी स्मोक्स का इस्तेमाल अच्छा किया हुआ है एंड वुल्व्स के प्लेयर आगे बढ़ेंगे। नॉकआउट किया जाएगा जिमी की साइड से, दूसरे प्लेयर जैसे तैसे कर बच जाते हैं। ओलियो अपने क्रॉसेस बनाना चाहेंगे लेकिन उनको गिरा लिया जाएगा। नाउ इट्स अ 1v1 सिचुएशन। कूप्स गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं, जिमी मौके का फायदा उठाते हैं और अलायंस अपने लिए 5वां एलिमिनेशन पॉइंट तो कंफर्म करती है, बट हाउ अनलकी दे आर। बाकी हाथ से स्लामिन आएगा, आईएनएफ एक तूफान की मानंद आती है और अलायंस इस मैच से बाहर कर दी जाती है। 3रा एलिमिनेशन पॉइंट आईएनएफ अपने खाते में दर्ज करती है एंड 9G ग्लोबल उनकी साइड के ऊपर 2 खिलाड़ियों को गिरा दिया जा चुका है। 9G ग्लोबल के पास यहाँ खेलने के लिए वो स्ट्रॉन्ग कवर मौजूद नहीं था, जिस वजह से आईएनएफ की नॉकआउट्स निकालेगी, एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म करेगी। क्विक यहाँ अकेले प्लेयर तो हैं लेकिन फिर भी वो नॉकआउट निकालने की कोशिश में मसरूफ दिखाई देंगे। मिलोसा इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, जो कि ज़्यादा देर खड़े नहीं रह पाएंगे, उनको भी इस मैच से बाहर कर दिया जाएगा। एंड फ्लैश के ज़ियोस वो किस खूबसूरती के साथ जाने से पहले एक एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करते हैं। आईएनएफ रियलाइजेस दैट द लास्ट मैन इज हियर और जेंजी के ये एक प्लेयर अपनी टीम को सेकंड पर ले आते हैं। चैंपियन ऑफ द मैच की बात करें, 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालकर आईएनएफ इस मैच में चिकन डिनर निकालती है एंड नाउ दे आर आल्सो सो क्लोज टू टीम आईसी। बल्कि शायद ऐसा हो कि इस मैच के बाद आईसी को फ्लैश भी आईएनएफ भी नीचे करती हुई नजर आए और आईसी #5 पर चली जाए। नहीं, इतना पॉइंट्स में डिफरेंस, मतलब इतना थोड़ा पॉइंट्स में डिफरेंस नहीं था आईसी से, बट खैर कुछ भी हो सकता है ख़वातीन और हज़रात। ये तो ओवरऑल स्टैंडिंग्स जब स्क्रीन पर आएंगी तब हम आपको बता पाएंगे कि आईसी क्या 5वें पर चली गई है। 77 पॉइंट्स हैं। हाँ, ओवरऑल स्टैंडिंग्स आ भी चुकी हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 77 पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स में डिफरेंस वही बात है, बहुत ज़्यादा कम है। 5वें पर आईसी है, 4थे पर आईएनएफ 77 पॉइंट्स, फिर 80 पॉइंट्स के ऊपर फ्लैश है एंड दूसरा स्पॉट 81 पॉइंट्स के ऊपर है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन ना एक वीडियो देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त। वाह भाई वाह, क्या बात है। स्किल्स देखिए आपने इनकी, स्केटबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए आप आदि स्किल्स देखें आप आईएनएफ के प्लेयर्स के। ब्राज़ील, और ब्राज़ील जब भी आप जिक्र करेंगे ब्राज़ील का तो आपको वहाँ पर जो एक फ्री स्टाइल स्केटबोर्डिंग है, फुटबॉल, स्केटबोर्डिंग, वन व्हीलिंग, वो भी दिखाई देगी। न्यूयॉर्क कल्चर न्यूयॉर्क में भी बहुत ज़्यादा है। अभी होके आया हूँ मैं कल परसों। अच्छा, एक गेम खेल रहा था मैं उसमें। ये पत्तोकी के पास वाला न्यूयॉर्क तो नहीं, लेकिन
वो न्यूयॉर्क मेडिकल स्टोर की बात कर रहा था, लेकिन खैर अभी फिलहाल के लिए देखिए इससे पहले कि अनप्रोफेशनल का टैग आपके साथ और मेरे साथ जुड़े, वो लगता रहेगा, देखें वो लगता रहेगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन बीच बीच में है मुझसे कि एंटरटेन भी करना चाहिए ऑडियंस को। बट खैर 2-2 और 2 एक टीम वर्क दिखाया गया आईएनएफ की साइड से, एंड आईएनएफ जहां पर इस मैच से पहले वो compete नहीं कर रहे थे उस तरह से सेकंड स्पॉट के लिए, अब वो भी आ चुके हैं। ख़वातीन हज़रात 5 नाम हैं, कुर्सियां 2 हैं, म्यूजिकल चेयर अब शुरू हो चुका है, मैचेस 2 हैं, और कौन बैठेगा इस क्वालिफिकेशन की कुर्सी पर, असल सवाल ये है। मैचेस 2 रह चुके हैं, मिरामार पर चलें, ये सही टाइम है कि हम इस चीज़ के ऊपर बात करें कि इन 5 नामों में से मिरामार पर एवरेज कल के दिन पर किसकी अच्छी रही। उससे पहले हाइलाइट्स मुलाहिजा फरमाइए। जी हाँ, हाइलाइट्स मुलाहिजा फरमाएं। और एक और चीज़ आपके सामने अगर रखी जाए, पिछले 3 मैचों में आईसी ने सिर्फ 4 पॉइंट्स निकाले, आदि सिर्फ 4 पॉइंट्स इन लास्ट 3 मैचेस। जी हाँ बिल्कुल। क्या हम साउथ अफ्रीका हैं वर्ल्ड कप के? क्या हम पीएमजीसी की साउथ अफ्रीका? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि वो रोंडो का मैच किसी वजह से निकला था। इंशाल्लाह आईसी जाएगी इंशाल्लाह। मैं बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हूँ। मिरामार पर अगर आप देखें माशाल्लाह एवरेज अच्छी है आईसी की। वुल्व्स ईस्पोर्ट्स चलें, फैल्कन्स की एवरेज बहुत अच्छी है मिरामार पर, फ्लैश की एवरेज बहुत अच्छी है, 11.5 की एवरेज है फ्लैश की, वुल्व्स की 11.5 की एवरेज है, आईसी की 9.5 की है। कितनी टीम्स हैं ये टॉप 5 में से? फ्लैश हो गई और आईसी हो गई। इसके अलावा ऑल्टर ईगो ने सिर्फ कल 5 पॉइंट्स पर मैच की एवरेज के साथ खेले थे मिरामार। वीवो गेमिंग ने 7 पॉइंट्स, उनका भी ठीक है, अच्छा है मिरामार। बट आईसी उनका बेहतर है इन एंगल से मिरामार, तो एक उम्मीद है कि इंशाल्लाह मिरामार के अंदर अच्छा खेला जाएगा आईसी की साइड से। जी हाँ, लेकिन खैर ओवरऑल स्टैंडिंग की तरफ जाएंगे जहाँ पर 16 पॉइंट्स आईएनएफ ने निकाले, 12 पॉइंट टारगेट निकालती है, 10 पॉइंट्स एफएल निकालती है, जेंजी विद 8, अलायंस विद 8, वर्ल्ड्स विद 8, 9ZG विद 7 एंड ऑल्टर ईगो विद 6। आईसी ने जो फर्स्ट मैच में किया, कहीं ना कहीं एवरीथिंग बैलेंसेस आउट एज द नेक्स्ट 3 मैचेस वर नॉट गुड इनफ, इनफैक्ट दे वर वेरी बैड। और हर मैच में कहीं ना कहीं अनलकी भी साबित हो रहे थे। लास्ट मैच में तो इट केम डाउन टू अ 1v1 जहाँ पर एक साइड पर रामजिस थे आउटवर्ड के, एक साइड पे फलक थे, फलक ग्रेनेड को कर रहे थे और रामजिस ने पुश कर दिया। और उस सिचुएशन में रामजिस ने पहले एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किए, फलक वाज अ लिटिल बिट फार अवे फ्रॉम हिज टीम और बाकी जो तीनों प्लेयर्स है वो नॉक हो गए थे। हाँ, आई मीन फाइट्स में आकर जब हारते हैं ना तो फिर बहुत दुख होता है, फिर बहुत
2 मैचेस में से दोनों ही मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं ख़वातीन हज़रात। और थाम लीजिए अपने दिलों को, 77 पॉइंट्स पर 2 टीमें, 80 पॉइंट्स पर फिर एक आती है। 81 के ऊपर आपको सेकंड स्पॉट दिखाई दे रहा है। फर्स्ट स्पॉट आपको कितने पर, 85 पे है कि कितने पे है? 88, 89 पे, 88 पे, 88 पे है, बल्कि 88 पे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मतलब WBG भी जो पहले पर है, वो भी अगर अगला मैच अच्छा ना खेले, एनीथिंग कैन हैपन विद देम। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से इन्फिनिक्स ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। Design. Love by design. Infinix Note 50. Performance by design. वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। एक छोटा सा ऐड आपने देखा इन्फिनिक्स का। बहुत बहुत शुक्रिया, जिनकी वजह से तमाम तरह ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स है उनको पॉसिबल किया जाता है। और ये पिछले कई सालों से चलता आ रहा है कि हर आने वाला इवेंट जो है वो इन्फिनिक्स की तरफ से पावर किया जाता है। लेकिन आखिरी 2 मैचेस और वो प्रेशर पूरी तरह से बढ़ चुका है। बट ऑल्टर ईगो कितना चिल दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी रिलैक्स्ड हैं, खुश है। क्रिप्टोन को देखें आप, बाकी प्लेयर्स को भी देखें, रोज़मेरी खुश दिखाई दे रहे हैं। आईसी के प्लेयर्स देखना चाहता हूं मैं, उनके चेहरे के क्या तासुरात हैं इस वक्त। जी हाँ, प्लेयर्स कुछ परेशान हैं क्योंकि आखिरी 2 मैचेस रह चुके हैं ख़वातीन और हज़रात। 1 मिनट में अगला मैच शुरू होने वाला है। आईसी के प्लेयर्स के चेहरों के तासुरात भी हम देखना चाहेंगे, प्लीज़ दिखा दीजिए। 40 सेकंड हैं अभी के लिए। बट खैर ख़वातीन और हज़रात, तासुरात जो भी हों, एक चीज़ हमें नहीं भूलनी है। एक तो उम्मीद कभी भी नहीं हारनी, आखिरी मैच तक, आखिरी लम्हे तक बिल्कुल भी नहीं हारनी। दूसरी चीज़, अपनी टीम को कभी भी आपने डिमोटिवेट नहीं करना। दे हैव गिवन देयर बेस्ट, दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स करंटली इन दिस PMGC, एटलीस्ट इन लास्ट चांस। और ये बेहतरीन टीमें हैं लास्ट चांस की। इस तरह का कंपटीशन आपने इस PMGC के किसी और स्टेज के अंदर नहीं देखा होगा। वहीं पर 8 सेकंड है, बिस्मिल्लाह पढ़कर इस मैच का आगाज़ करेंगे ख़वातीन और हज़रात। इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि वो रोंडो का मैच किसी मकसद से निकला है। वामोस के साथ मिरामार में जाएंगे, दुआ करेंगे अपने बॉयज़ के लिए, अपनी टीम के लिए। और आखिरी 2 मैचेस, 5 नाम हैं जिनमें से सिर्फ 2 आपको आगे बढ़ते दिखाई देंगे। वैसे तो 14-16 नाम हैं जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 टीमों ने यहाँ से आगे जाना है। बाकी सभी के सभी यहाँ से वापस अपने घर, और अगले साल वापस आपको पूरे 12 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। और उसके बाद भी यकीनी नहीं है कि आप इस स्टेज के ऊपर वापस अपनी जगह बना पाएंगे या नहीं। लेकिन मैप के टॉप परफॉर्मर्स में आईसी फलक माशाल्लाह से आपको आते दिखाई दे रहे हैं। 6 एलिमिनेशंस उन्होंने निकाले हैं मिरामार के ऊपर। फैल्कन्स के नरवालो 8 के साथ दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद वुल्व्स ई-स्पोर्ट्स के डॉरेन भी अपनी जगह बना पाते हैं। फैल्कन्स के रीडॉक्स 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स के साथ वो भी यहाँ पे आ पाते हैं। बट खैर, जिस तरह का प्लेन पाथ है, इट्स वेरी सिमेट्रिकल। ज़्यादा कुछ मुश्किलात नहीं आएंगी अगर आप कहीं पर भी जाना चाहते हैं। मुश्किलात सर्कल बना रहा है, वापस से सर्कल वही चीज़ें कर रहा है जिन पर हम कल बात कर रहे थे। बट खैर, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा, मेरा यकीन है इस चीज़ के ऊपर। घबराना आपने बिल्कुल भी नहीं है, यकीन रखिए अपनी टीम के ऊपर, उन्होंने जितनी मेहनत की है। बट खैर, सर्कल प्लेन पाथ के जब भी ऑपोजिट बनता है, या आप देखें कि ज़्यादातर टीमें आपको डाउन साउथ उतरती दिखाई दी हैं प्लेन पाथ से। इस तरह की सर्कल, जो कि पहला सर्कल इस तरह का बने जिसमें ज़्यादा टीम्स ना हो, वो एक अच्छा सर्कल समझा जाता है। क्यों? वैकेंसीज होती हैं जी। मतलब कोई भी टीम चाहे, अगर आपको इन्फॉर्मेशन है लॉबी के ऊपर उनके ड्रॉप लोकेशंस पर, तो आप इस सर्कल को देखते समझ जाएंगे कि सर्कल के अंदर अभी ज़्यादा टीमें नहीं हैं। उसका एडवांटेज ये होता है कि आप लूट करें जल्दी से,
आप कहीं पर भी एक अच्छी जगह ढूंढ कर जहाँ पर भी चाहें आप रुक सकते हैं जाकर। एंड लेट्स सी कि इस तरह से किया जाता है या नहीं, लेकिन कुछ आपको एदाद आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। टीम परफॉर्मेंस लास्ट चांस डे 1 लूप्स की अगर लास्ट चांस डे 2 से कंपेयर करें अभी तक के मैचेस की या ओवरऑल, तो कुछ कदरे बेहतर उतना आई वुड से नहीं उन्होंने किया है। आगाज़ आज के दिन का उन्होंने टॉप 5 टॉप 6 से किया था, अब 9th पर वो जा चुके हैं। लूप्स के प्लेयर्स 61 पॉइंट्स उनके पास हैं। बट खैर कुछ अर्ली रोटेशंस वुल्व्स ईस्पोर्ट्स के प्लेयर करते दिखाई दिए, फाल्कन्स के बिल्कुल नज़दीक से होकर गुजरे। जी हाँ, फाल्कन के बिल्कुल करीब से गुजरे हैं। फाल्कन जिनको हमने देखा कि डे 1 बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, कोई एक मैच में अच्छा खेल पाए, अभी भी हैश 14 पर ये टीम हमें स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। आफ्टर द प्रीवियस मैच आखिरी 2 मैचेस प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत बड़े बड़े मैचेस निकाले जाएँ तब भी सिर्फ अगर आप देखें आई रियली थिंक कि सिर्फ हैश 5 तक ही इन प्लेबल दिखाई दे रही हैं टीमें। 8 येस विद 1 गुड चिकन डिनर शायद वो आप आ पाएँ, अलायंस आ पाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नीचे से कोई भी टीम अब आ पाए के ऊपर। वो प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लुक्स क्लोज टू इम्पॉसिबल। फ्लैश वो 3rd पर दिखाई दे रही है, इससे पहले भी हमने उनको हैश 3 पर देखा था ग्रुप स्टेज के अंदर, लेकिन वहाँ से ये टीम बाहर होती हुई नजर आई हमें। सो आखिरी मैचेस में चोक किया गया है बड़ी टीमों की तरफ से प्रीवियस स्टेजेस में। आईसी उनके पास ये एडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू फ्लैश, एज़ कम्पेयर टू आर्करेड कि वो एक नया नाम नहीं है, पुराना नाम है और वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड है इस मामले में, प्रेशर हैंडलिंग में। नो डाउट फर्स्ट मैच में इट वाज अ क्रेजी मैच, 17 एलिमिनेशन पॉइंट्स, 27 टोटल पॉइंट्स, लेकिन उसके बाद हर मैच में जिस तरह से गिरते गए और फिर संभलते हुए दिखाई नहीं दिए। एक भी मैच में किसी एक मैच में 7-8 पॉइंट्स आ जाते तो रिजल्ट्स कुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। अब आप देखें सिर्फ 10 से 11 पॉइंट्स का ही वो फ़र्क है। जो दिन के आगाज़ में फ़र्क था वो वापस से बन चुका है। एक मैच बहुत अच्छा खेला बट बाकी, इसीलिए तो हम कहते हैं कि 1 मैच डोमिनेशन और 1 मैच परफॉर्मर्स होता है वो कभी भी लॉन्ग रन में उस तरह से नहीं खेल पाता। नो डाउट टीम आईसी वाज नेवर अ 1 मैच परफॉर्मर, लेकिन आज के दिन की बिलखुसूस बात की जाए तो अभी तक वो बनते हुए दिखाई दिए। बट एक्सपेक्टेशंस आर स्टिल देयर। इंशाल्लाह ये मैच बहुत अच्छा खेला जाएगा, वापस से हैश 2 की तरफ हैश 1 की तरफ रास्ता बनाया जाएगा अपना। बट नाउ वी आर अब जो रिलायंस है ना वो फिर से एक वाव मैच के ऊपर है। अब वो डिसेंट मैच शायद आपको टॉप 3 में ले आए, लेकिन टॉप 2 ने आगे जाना है तो एक वाव मैच की ज़रूरत है। अभी भी अगर आप देखें 100 पॉइंट्स तक जो टीम आएगी वो क्वालिफाई कर जाएगी। कल के दिन मैं सोच रहा था कि 105 के बीच में या 105 के बीच में जो है वो कट ऑफ होगा। आज ऐसा लग रहा है कि शायद 95 पॉइंट्स के बीच में कट ऑफ दिखाई दे। तो 95 के हिसाब से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं चाहिए टीम आईसी को, 22 पॉइंट्स चाहिए सिर्फ, बल्कि 22 भी नहीं, 18 पॉइंट्स चाहिए शायद। 18 पॉइंट्स चाहिए। 9 पॉइंट्स एक मैच में बनते हैं। हाँ, 10-10 पॉइंट्स ऑन द सेफर साइड आप लगा लें तो 20 पॉइंट्स निकालने हैं टीम आईसी को इन 2 मैचेस में। आईसी को बहुत संभल कर खेलना है। इंशाल्लाह ज़रूर सब कहें, दुआ करें। मैं वाकई ही कह रहा हूँ कि दुआएं काम करती हैं। ऑब्वियसली टीम को तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि यार वो दुआ से पता नहीं एकदम से तोड़ना शुरू कर देंगे, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं। बट खैर फाल्कन्स के प्लेयर, उनको शायद स्पॉट डाउन कर लिया गया है आईक्यू की साइड से, शायद नहीं किया गया। अभी भी वो हैं तो रिज के पीछे ही, बट यहां पर रुकना ठीक नहीं है ज्यादा देर। एंड फाल्कन्स के नरवालो ओके, अब शायद ये उन्होंने गलती कर दी है। ये जो उन्होंने बंदूक से जंग हटाया है ना, इस वजह से उन्होंने थोड़ी गलती इसलिए कर दी है कि आईसी को अब 100% यकीन हो गया होगा कि अब तो है कोई ना कोई वहां पर। खैर पहली टीम अभी तक एलिमिनेट नहीं हुई है ख़वातीन हज़रात, और अगर टॉप 6 या टॉप 7 में से कोई भी एलिमिनेट हुआ, आप समझ लीजिए कि अगर आप 6-7वां में से कोई एलिमिनेट होता है तो फिर तो इम्पॉसिबल है इनका खेलना क्वालिफिकेशन के लिए अगले एक मैच में। चलो जी, वाह जी वाह। ऐसी वीडियोस देखी हैं हमने सऊदी में, इसी तरह गाड़ियां चलाते हुए नजर आते हैं कुछ लोग, दो टायर्स पे साइड वाले, इफ़ यू नो यू नो। लेकिन खैर रेडॉक्स बिल्कुल भी उनका मकसद ये नहीं था, ऊपर से गिरे। अच्छी बात यह है कि व्हीकल बर्स्ट नहीं आया। ये जो ग्लिच है इसको ख़त्म कर दिया गया है। पहले इस तरह होता था कि गाड़ी अगर इस तरह गिरती थी तो
बर्स्ट होने के चांसेस होते थे, लेकिन ऑल्टर ईगो पुश किया जाएगा। जेंजी के दामी के पास कोई चांस नहीं है बचने का। किट शायद लगा पाए और वापस, बल्कि किट भी नहीं लगा पाते, पैनिक कर जाते हैं इस मोमेंट के अंदर। दामी एक भी बुलेट कनेक्ट नहीं कर पाए। पीछे से सेटन ने आकर थोड़ा सा कवर फायर तो दिया, लेकिन ये काफ़ी नहीं होगा। बाहर आएंगे अल्वा, फिनिश करेंगे प्लेयर को और वापस से कॉम्पाउंड में चले जाएंगे। जेंजी लॉस्ट देयर फर्स्ट प्लेयर, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये जो एलिमिनेशन पॉइंट मिला ये उस टीम को मिला जो कि टेबल टॉप पे मौजूद है। ऑल्टर ईगो अपने नाम करते हुए नजर आती है ये पॉइंट, और वापस उनकी तरफ से रोटेट किया जाएगा। लेकिन आईसी जहां गए थे, आईसी के प्लेयर आईक्यू, वहां वोल्स मौजूद है और एक फाइट लेना पड़ेगी आईक्यू को। गलती साबित हो सकती है, क्लोज रेंज में आ सकते हैं एक प्लेयर, लेकिन वेट अ सेकंड, कोलैटरल डैमेज देने की कोशिश है आईक्यू की। थोड़ा सा एम प्रैक्टिस किया और वापस से फॉल बैक करना शुरू करेंगे ये, लेकिन दिस कैन बी डेंजरस। फाइट नहीं लेनी भाई, प्लीज गो बैक। लॉरेन करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। आईसी के बाकी के प्लेयर्स मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या इनपुट दे रहे हैं उस फाइट के अंदर, वो बहुत ज़रूरी है देखना। लेकिन वहीं पर ऑल्टर ईगो एरिस अगला शिकार आईएनएफ का वो करना चाहते हैं। हो जाने वाला मैनहंट के ऊपर वापस से टीम ऑल्टर ईगो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन इस बार ऑल्टर ईगो फर्स्ट नॉक या आइस ब्रेकर नहीं दे पाएंगे, बल्कि खुद उन पर आइस ब्रेक की जाएगी आईएनएफ की साइड से। लेकिन सर्कल कहां से कहां चला जाता है पता ही नहीं लगता। WBG जोन मैग्नेट बनते हुए एंड एक पूरा सर्कल का एरिया खाली है नॉर्थ ईस्टर्न साइड। अगर आप सैन मार्टिन, हसियांदा, दलपत्रोन को आप देखें, पूरा का पूरा खाली इलाका है वो। और वहां पर अब ये लॉबी आहिस्ता आहिस्ता से अपने आप को रीसेटल करती दिखाई देगी उन्हीं इलाकों पर। टीम आईएनएफ और ऑल्टर ईगो जैसे आए वैसे फॉल बैक किया, लेकिन अपने एक खिलाड़ी कम के साथ अब यहां से वापस जा रहे हैं। जी हाँ, लेकिन आईसी के प्लेयर घुसेंगे सीधा। यादखा सामने मौजूद है, ग्रेनेड से 2 नॉकआउट्स निकल गए तो मुश्किलात बन सकती हैं, लेकिन यादखा की पोजीशन रिवील हो जाएगी। पीछे से निर्जेद आना चाहते हैं, गीके भी आसपास मौजूद है। इस प्लेयर से नॉक नहीं होना, यादखा को डैमेज पड़ेगा। नीचे मौजूद है फलक। दूसरी बार ऐसा हो सकता था कि फलक के हाथ में ग्रेनेड होता और कोई इनको नॉक कर देते, बल्कि दूसरी नहीं शायद तीसरी बार इस पूरे PMGC के अंदर। लेकिन यहाँ एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया कॉम्पाउंड चीने। पीछे बीजी के बाकी प्लेयर्स हैं, गीके भी यहाँ पर आना चाहती है। क्रेट लूट करने की कोशिश तो है, लेकिन ध्यान देना है सामने गीके के प्लेयर्स हैं। मुश्किलात यहाँ पर टीम आईसी पे बन सकती हैं, बट वेयर इज द फोर्थ प्लेयर? चौथा प्लेयर देखना है वो कहाँ पे मौजूद है। गीके उन पे पीछे से थर्ड पार्टी करने के लिए फ्लैश आ जाती है। यहीं पर आउटस्कर्ट्स में आईसी मौजूद है, यहीं पर कहीं ना कहीं जो है वो दिल बंद हो जाना आईसी बनना शुरू हो चुकी है। एक क्योस बर्पा होता हुआ दिखाई देता है, जहां लस्टर फॉर्म होगा, जहां पे पॉइंट ऑफ कंटेंशन बनेगा। ये यही साइड है पावर ग्रिड की, जहां गीके वर्सेस फ्लैश चल रहा है। केविन पे पुश किया जाएगा, जियोस को फिनिश करना जरूरी है। केविन जाने से पहले एक नॉक एंड फिनिश निकाला तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं। प्री फायर में पीक देंगे और मुश्किलात बन जाएंगी, लेकिन अब निर्जेद अकेले वो प्लेयर हैं जिनको स्पॉट करने की कोशिश की जाएगी। एंड फ्लैश ये 3 एलिमिनेशन पॉइंट निकाल कर इस वक्त ऑल्टर ईगो को भी पीछे कर देंगे। लेकिन ऑल्टर ईगो क्या वो इस फाइट को थ्रो करेंगे? सामने जेंजी के 2 प्लेयर्स मौजूद हैं। क्लॉस उनकी तरफ ग्रेनेड दागा जाता है, रोजमेरी नॉकआउट है। यहाँ ये सिचुएशन किस तरह से अनफोल्ड होगी? आल्वा के ऊपर ग्रेनेड जाएगा, आल्वा लो एचपी हो जाते हैं। रोजमेरी को रिवाइव दिया जाएगा। क्लॉस इज आल्सो नॉक्ड आउट, लेकिन आल्वा बाहर जाएंगे। एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाएगा और वापस से फाइट को 3v1 में स्विच किया जाएगा। गीके जहां एक तरफ एलिमिनेट होती हुई दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ जेंजी यहां पर लॉबी का रास्ता नापेगी। 2 प्लेयर्स पर आ चुकी है ये फाइट, लेकिन जेंजी के सेटन कहां मौजूद है उनको देखना है। ओके, ही इज ऑन द बैक साइड। रैप अराउंड कर लिया जाएगा ऑल्टर ईगो को। जी हाँ, लेकिन जेंजी अनफॉर्चुनेटली अपने आखिरी 2 प्लेयर्स पर है, लेकिन ज़्यादा मुश्किलात जेंजी के लिए नहीं है ख़वातीनो हज़रात। वो फाइनल्स के उन क्वालिफिकेशन स्लॉट्स पर बराजमान नहीं हैं जिन पर टीम ऑल्टर ईगो एरिस है। एक एक खिलाड़ी, एक प्लेयर बचाए रखना है टीम ऑल्टर ईगो को अपने पास। एंड अभी फिलहाल के लिए वो अपने 3 खिलाड़ियों पर खेलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर टीम सुपरमैसिव उनके बिल्कुल ठीक सामने टीम वुल्व्स के कुछ खिलाड़ी हमें आसपास दिखाई दे रहे थे आते हुए। बर्मीज गोल्स जिनके एक प्लेयर को कुछ टाइम पहले टीम आईसी ने एलिमिनेट किया था। टीम बर्मीज गोल्स उनके बिल्कुल सामने है, लेकिन सर्कल में अब रास्ता बनाने के लिए टीम इनर सर्कल को फाइट लेना पड़ेगी। बिल आखिर एक बाकायदगी के साथ फाइट लेना पड़ेगी बर्मीज गोल्स के खिलाड़ियों के अतराफ। और बर्मीज गोल्स जिस तरह से वो गेट कीप कर रहे हैं आईसी को, अब देखना है कि इनर सर्कल किस तरह से अपनी जगह बनाती है। लेकिन वहीं पर टीम वुल्व्स स्पोर्ट्स और सुपर मैसिव एक दूसरे का आमना सामना करेंगे। सामने रहते प्लेयर नाइको
हील स्टार्ट पुल ऑफ कर रहे हैं एंड हील स्टार्ट लग भी जाएगा। वुल्व्स ई-स्पोर्ट्स अभी फिलहाल के लिए अपने 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स और चारों के चारों प्लेस पर तो हैं, लेकिन 1300 मीटर का सफर तय कर उनको अपनी जगह सर्कल के अंदर बनानी है। एंड अभी तक एक भी टीम इस पूरे मैच से एलिमिनेट नहीं हुई है। शायद सुपर मैसिव का वो नाम हो सकता है, देखना बाकी है अभी के लिए। अच्छा यूटिलिटी था, नाइको को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया जाता है। कामिकाजे बिल्कुल बैक कैच पर मौजूद रहेंगे, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे इस फाइट में, लेकिन नाइको बार बार अपना पोजीशन रीसेट कर रहे हैं इस सारे जो पोर्शन है, अपर पोर्शन इस सारे कॉम्पाउंड का। लेकिन वहीं पर वुल्व्स ई-स्पोर्ट्स उनको मौका नहीं मिल पा रहा, अपने यूटिलिटीज सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जी हाँ, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे वुल्व्स के प्लेयर। दोनों टीमों को जोन ने 1200 मीटर जाना है, बहुत दूर मौजूद है जोन से ही। गोल्स आगे बढ़े, थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ लिया गया, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं मिलता। वापस से कोशिश की जाएगी, लेकिन सामने से नाइको एंगल बनाते हुए दिखाई देंगे और उनकी तरफ से नॉकआउट निकाला जाता है। पीछे कामिकाजे जो अपनी फाइट लड़ रहे थे उनको भी गिरा दिया जाएगा, लेकिन देयर इज नो वे कि यहाँ नाइको के क्रॉसर से बचाया जाए अपने प्लेयर को। लेकिन नाइको फॉल बैक करना चाहते हैं, डॉरन कोप्स को रिवाइव देंगे। बेटोनिक को रिवाइव देना इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से वो कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स तो निकालेंगे। लॉबी जाना पड़ेगा। दूसरी साइड पे बोर्ड गेमिंग वर्सेस आर्कवेड हार्ड बॉय सामने आते हैं। बैड बॉय इनफैक्ट इस बार बोर्ड गेमिंग के सामने आएंगे, काफी डैमेज दिया जाता है। आखिरी 2 प्लेस पर आर्कवेड आ जाती है। आर्कवेड के हार्ड बॉय इनफैक्ट बैड बॉय नॉकआउट होते हैं, उनको सीधा लॉबी भेजा जाएगा। आखिरी प्लेयर रामजेस हैं, उनको पकड़ना है, उनको लॉबी का रास्ता दिखाना है उस तरफ जहां ये फाइट चल रही है। यहाँ कामिका से ब्लीड आउट करेंगे और नेको इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, जिनको शायद एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जाने से पहले अगर वो डॉरिन को नॉक कर गए, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे अंदाज से फेवर कर सकते हैं, वुल्व्स के खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन वुल्व्स इनको इस मैच में से निकालना था हर सूरत में। अनफॉर्चुनेटली यहाँ से तो बचना भी उनका इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है। डॉरिन को 2 किट्स मिल जाएंगी, थोड़ी देर के लिए सुख का सांस आएगा, लेकिन 2 प्लेयर्स के साथ क्या ही करेंगे। सर्कल भी इतना दूर है, मजीद अगला शिफ्ट भी आने वाला है और उसके बाद शायद 1500 से 2000 मीटर तक का डिस्टेंस इनको तय करना पड़ेगा। किट्स इतनी मौजूद नहीं है, डॉरिन के पास सिर्फ एक ही किट है। आखिरी कुछ बुलेट्स लग जाते तो शायद वो किट भी लगानी पड़ जाती। पीछे फैल्कन्स वर्सेस बीजी की फाइट चलेगी, यहाँ पर वुल्व्स वर्सेस पपारा सुपरमैसिव। लेकिन यहाँ वापस लूप्स भी आना चाहती है इस फाइट में। रेडॉक्स यहाँ अकेले 1v3 करते हुए दिखाई देंगे। कितनी दफा ऐसा होगा कि फाल्कन के इकलौते प्लेयर के ऊपर कोई पूरी टीम पुश करेगी और सब लॉबी जाएंगे? कितनी बार ऐसा होगा? लेकिन अगर आप मैप की तरफ देखें, फाल्कन्स वर्सेस आईसी लोड होता हुआ दिखाई देगा, जहां आईसी के प्लेयर्स को फाल्कन्स को नॉक करना है, एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालने हैं, अदरवाइज आईसी को शायद सर्कल ना मिल पाए इस तरह से। आर्करेड वहीं पर रामजेस जितना इंतजार कर रहे थे और जिस तरह से बैठे हुए थे, लग रहा था कि बहुत बड़ी आने वाली है तबाही उनकी साइड से, लेकिन रामजेस गेट्स एलिमिनेटेड। एक अच्छा यूटिलिटी आता है बोर की साइड से और रामजेस इस मैच से बाहर कर दिए जाते हैं। चौथा एलिमिनेशन पॉइंट टीम बोर अपने लिए कंफर्म कर लेकर जाएंगे, लेकिन इनर सर्कल उनके ऊपर नजरें जम चुकी हैं। ओह माय गॉड, आई फील सैड। वाओ, दोनों गए, बोल्स भी गई, पपारा सुपरमैसिव भी गई। लेकिन सुपरमैसिव आई फील वेरी सैड फॉर देम, लेकिन खैर चलें। फ्लैश वर्सेस आईसी अभी फिलहाल के लिए फ्लैश की एक फाइट और आईसी की एक फाइट बनती हमें दिखाई दे सकती है, लेकिन आईसी आई थिंक सो दे कैन गेट इनसाइड द सर्कल। ये बड़ा एक्सटेंसिव रिज है, ये बिल्कुल सामने, बिल्कुल आईसी के ऊपर बहुत एक्सटेंसिव रिज है ये, और इसका कुछ कंट्रोल हासिल किया जा सकता है आईसी की तरफ से। एंड फ्लैश के साथ बिल्कुल एजेस पर रहकर फाइट में नहीं जाना है। इनफैक्ट फ्लैश को भी नहीं जाना चाहिए, बट यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। वहीं पर फाल्कन्स वो अच्छे रह गए, वो आगे चले गए सर्कल में। अब उनकी फाइट लूप्स के साथ बनती दिखाई दे रही है। तो यहाँ लेकिन जहाँ पर फाल्कन्स वर्सेस लूप बनेगा, वहीं पर WBG वर्सेस बोर्ड गेमिंग, एंड बोर्ड गेमिंग वी नो देम कि वो किसी भी टाइम किसी भी टीम के अगेंस्ट पलट सकते हैं फाइट का। यू हैव टू पुल दिस ऑफ। वेल, बोर्ड गेमिंग अभी के लिए इंतजार कर रहे हैं। 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स उनके पास पहले ही मौजूद हैं। इससे पिछली फाइट में हैवलिक कोई भी इनपुट नहीं निकाल पाए, लेकिन कॉज एंड स्ट्राइक्स वर इनफ कि वो डोमिनेट कर पाए सारी फाइट में। यहाँ पर WBG के ऊपर मौका मिला था 2 बार, सुख को काफ़ी लो HP किया था, एंगल्स काफ़ी अच्छे हैं, निकलना तो आगे है, जोन में भी जाना है बोर्ड गेमिंग के प्लेयर्स को। लेकिन वेयर सेकंड अलायंस पीछे से आएगी। अलायंस थर्ड पार्टी का दूसरा नाम है अलायंस। कहीं ना कहीं इनका प्लेयर कहीं ना कहीं मौजूद रहता ही रहता है। ओलियो इस बार डैमेज देने के लिए आएंगे, पीछे से जोन में जाना प्रेफर तो करेंगे, लेकिन वहीं पर अगर थोड़ी देर मजीद
रोस्टर्स बनाए जाते, रिजल्ट अलग हो सकता था। जियोस इन द मीन टाइम आगे आएंगे, आईसी दो साइड से प्लेयर्स पिंच हो जाएंगे, आईसी के पास बचने का कोई चारा नहीं है। दोनों डिफरेंट साइड्स के ऊपर फ्लैश के प्लेयर्स आ चुके हैं और आईसी को अब कुछ करना पड़ेगा, जियोस को नॉक करना पड़ेगा, वरना यहां से आईसी का डिमाइस देखने को मिल सकता है। इस सारी फाइट में जियोस की पोजीशन बहुत शानदार तो है, पुश किया जाएगा, जियोस के ऊपर फलक पुश करेंगे, लीप ऑफ फेथ लिया जाता है, बाहर आएंगे जियोस, व्हीकल बर्स्ट करना चाहते थे, गाड़ी में बैठेंगे, फलक को देखिए आप ही, सो लो एचपी, किट लगाई जाएगी लेकिन एक राइट टाइम पे मोलोटोव आता है, फलक नॉकआउट हो सकते हैं, फलक बचेंगे मोलोटोव से, लेकिन आग लग जाती है, प्री फायर दिया जाएगा फलक की जानिब से, रीलोड आ जाता है, पीछे नॉकी को डैमेज पड़ेगा आरआईएस की जानिब से, नॉकी काफी लो एचपी हो जाएंगे, फलक लो एचपी करते हुए ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे, फलक ओह माय गॉड, $1 मिलियन नॉकआउट, सर्वाइवल के लिए ये नहीं जरूरी था, निकाला जरूर जाता है, अभी भी खत्म नहीं हुई फाइट। नॉक इज फिनिश्ड। क्या पुश बैक कराया फ्लैश को, मैं कहता हूं क्या जगह छोड़ के गई है फ्लैश, क्या 3 प्लेयर्स वहां से फॉल बैक करके गए हैं जो आगे आ रहे थे। कमिंग फॉर अस्लाम वो एक प्लेयर का एलिमिनेट होना, ओह माय गॉड, वो अच्छा था, लेकिन टॉप जी अब वापस आ रहे हैं, लेकिन 9G ग्लोबेंट से उनका टाकरा बन सकता है। आईसी दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, 9G ग्लोबेंट नॉकआउट देंगे एंड ये एलिमिनेशन पॉइंट भी कंफर्म हो जाएगा। आईसी 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाए फ्लैश के ऊपर, अब फ्लैश वापस आ रही है, एक थर्ड पार्टी 9G ग्लोबेंट यहां पर करती है, फ्लैश को भी नुकसान पहुंचेगा एंड फ्लैश को जितना, फ्लैश के पास 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं यार, फ्लैश के पास, ये तो मैंने अब देखा है, 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं उनके पास एंड फ्लैश अब वो यहां से वापस जाएंगे ऑब्वियसली, इस यहां पर फाइट लेना अच्छा नहीं है किसी के लिए भी, बट 9G ग्लोबेंट से आईसी कैसे बचेगी, उन 2 प्लेयर्स को कुछ बहुत बड़ा कारनामा करना पड़ेगा एंड फ्लैश को आप देखें क्या शानदार गराज मिल चुका है सर्कल के अंदर जा करके, वहीं पर फाल्कन्स और लूप्स काफी देर से एक दूसरे के नजदीक थे एंड फाल्कन्स अब आप यूटिलिटीज देखें कितने शानदार दागे जा रहे हैं फाल्कन्स की साइड से, ओह नुकसान भी पहुंचाता है। जी हाँ, यूटिलिटीज तो काफ़ी अच्छे दागे जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर फ्लैश के जो सर्कल में जगह मिली है, एलिमिनेशन पॉइंट उनके पास 5 मौजूद हैं। इट सीम्स लाइक कि इस मैच में जो लीड उनको दरकार थी, जो चाहिए थी, जो ज़रूरत थी अच्छे मैच की, ताकि प्रेशर उतार दिया जाए अपने ऊपर से, वो कहीं ना कहीं उतारते हुए दिखाई देते हैं। 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स अभी भी हैं, सर्वाइवल पॉइंट्स भी आसानी मिल सकते हैं, ये नहीं भूलना, 9 से 10 पॉइंट्स पर मैच एटलीस्ट रिक्वायर्ड है। इसके लिए पहले तो 9G के 2 प्लेयर्स को एलिमिनेट करना है जो कि वहाँ उस सेट पे करीब मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर WBG की बात करें, बोर्ड के सामने आएंगे, सुख जैसे बाहर आते हैं काफ़ी डैमेज पड़ता है, बोर्ड गेमिंग ब्रीदिंग स्पेस नहीं प्रोवाइड करती है, एंड स्नोइस का अगर एक अच्छा ग्रेनेड गिर गया नॉकआउट निकल सकता है। ग्रेनेड जैसे ही आएगा सुख पीछे चले जाते हैं और रियलाइज करते हैं कि इट्स राइट टाइम, इट्स हाई टाइम के फॉल बैक किया जाए। वहाँ IQ नॉक, इनफैक्ट फलक नॉक हो जाते हैं, टॉप को नॉक करते हुए IQ दिखाई देते हैं, बट आई थिंक आईसी इज एलिमिनेटेड। और जी हाँ, आईसी इस मैच से बाहर हो जाती है। जी हाँ, 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स आईसी के खाते में दर्ज होंगे, 80 पॉइंट्स के करीब, 79 पॉइंट्स के ऊपर आए, उसके बाद उनको बाहर कर दिया जाएगा। मसला ये है कि ऊपर रहती तीनों टीमें सर्वाइव कर रही हैं, इनफैक्ट 5वें नंबर पर INF भी अपने चारों के चारों प्लेयर्स के साथ इंटैक्ट है, वहीं पर WBG अपने 2 प्लेयर्स उन्होंने नॉकआउट करवाए हैं। WBG फ्लैश भी एलिमिनेशन के दहाने पर है, ऑल्टर ईगो भी अगर एलिमिनेट होती है तो फिर भी बात वहीं आ जाएगी, एक मैच रह जाएगा, पॉइंट्स में डिफरेंस उतना ही है ख़वातीनो हज़रात, लेकिन खैर अभी फ़िलहाल के लिए 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स की डोमिनेशन के ऊपर टीम फाल्कन्स अपने आप को लेकर के जा चुकी है। वहीं पर बोर के एक्सो उनको गिरा लिया जाएगा एंड बोर के आखिरी प्लेयर बिल्कुल सामने रहेंगे। WBG आगे बढ़ेंगे, बैकयार्ड से शायद कोई थर्ड पार्टी की गई है उनके ऊपर, नहीं बल्कि WBG के प्लेयर, उनको रिवाइवल भी दे दिया जाएगा। वहीं पर WBG उनको बाहर कर दिया जाएगा, फाल्कन्स की साइड से नरवालो आएंगे और अभी तो सुख का सांस लिया ही था WBG ने, लेकिन नरवालो, जी हाँ, लेकिन नरवालों की जानिब से काफ़ी अच्छे अंदाज से खेला जाता है सिचुएशन में। फाल्कन्स को हमने देखा है एट टाइम्स जब उनके इंडिविजुअल प्लेयर्स पे बात आती है वो कभी भी वो कह सकते हैं कि डिसअपॉइंट नहीं करते अपनी टीम को, अपने फैंस को। अभी फाल्कन्स उम्मीद तो नहीं है उनके क्वालिफाई करने की किसी भी तरह से, लेकिन हाँ
जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि जाने से पहले अगर आप बड़े मैचेस निकालते हैं तो अपनी कंट्री को आप सेलिब्रेट करने के लिए कुछ मौके प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा कुछ फाल्कन ने किया, लेकिन INF सो क्लोज टू द क्वालिफिकेशन। जैसे आगे जाएंगे अलायंस के प्लेयर लॉ को गिराते हुए नजर आएंगे, लॉ का रिवाइव दिया जा सकता है, लेकिन आगे बढ़ेंगे प्लेयर गाड़ी लेकर पेट्रोलेस को काफी डैमेज मिल सकता है, बचते हुए दिखाई देंगे। एजी चलती है अलियंस की, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं। पीछे से लिल बॉय की पोजीशन काफी शानदार है, वहां से वो नॉकआउट्स निकालते हुए नजर आएंगे। एंड INF फिलहाल इस मैच में एक एलिमिनेशन पॉइंट निकाला है, दूसरा कंफर्म किया तो वापस से आईसी को डिथ्रोन कर सकते हैं। फर्क इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आईसी सर्वाइव नहीं कर रही और बाकी तीनों टीमें जो कि उनसे कम्पीट कर रही हैं, ऑल 3 टीम्स आर अलाइव सर्वाइविंग। लेकिन उनके मुकाबले में लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। फाल्कन ऑन द अदर साइड फ्लैश को इस मैच से बाहर किया। डाउन टू द लास्ट 2 टीम्स, INF और ऑल्टर ईगो अभी ये सर्वाइव कर रहे हैं। 87 पॉइंट्स के ऊपर अभी फिलहाल के लिए सेकंड स्पॉट आपको लॉक होता दिखाई दे रहा है। इट हैज़ ऑल कम डाउन टू टीम ऑल्टर ईगो के वो कितने पॉइंट्स इस मैच में निकाल कर लेकर जाएंगे। फ्लैश को वो डिथ्रोन कर सकते हैं, सिर्फ 5 पॉइंट्स का ही फ़र्क रह चुका है, 4 पॉइंट्स का इनफैक्ट अगर प्रिसाइजली बात करें तो फ़र्क रह चुका है। लेकिन अलायंस वो भी अपनी कुछ जगह बनाना चाहते हैं। एक एलिमिनेशन पॉइंट उन्होंने इकट्ठा किया अपने लिए। फाल्कन्स उनके पास 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन ऑल्टर ईगो आरएस वो आएंगे। ऑल्टर ईगो की साइड से अलायंस के ओलियो पर एक मजीद एलिमिनेशन पॉइंट किया जाता है कंफर्म। एंड ऑल्टर ईगो आरएस बेशक हाई ग्राउंड एडवांटेज उनके पास मौजूद नहीं है, लेकिन सामने रहते INF के प्लेयर्स अगर यहाँ पर स्कोप इन करें तो शायद ऑल्टर ईगो को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन INF सर्कल से बाहर है, ऑल्टर ईगो सर्कल में है। INF वो अपने प्लेयर्स एक एक कर गवा रहे हैं। लिल बॉय का एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाता है अलायंस की साइड पर। अलायंस आगे से कुछ सामना करना पड़ेगा मज़ाहमत का। फेडरल की साइड किया गया, शायद ऑल्टर ईगो ये एलिमिनेशन पॉइंट उठाती आपको दिखाई देगी। ऑल्टर ईगो का एक एक एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करना दिक्कतें बनाएगा नीचे रहते नामों के लिए, खास तौर के ऊपर टीम इनर सर्कल के लिए। लेकिन INF अभी फिलहाल के लिए अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। ब्लू जोन से जैसे तैसे कर 2 खिलाड़ी अपनी जगह सर्कल के नॉर्दर्न एज पर से बना चुके हैं, लेकिन टीम ऑल्टर ईगो आरएस उन पर मेरी नजरें हैं कि वो क्या कारनामा सर अंजाम देंगे इस मैच में, कितने ही पॉइंट्स निकाल करके वो लेकर जाने वाले हैं। लेकिन INF आप देखें एक मजीद एलिमिनेशन पॉइंट हासिल कर या प्लेसमेंट पॉइंट हासिल कर वो अब चौथे पर वापस आ चुके हैं। 5वें पर आईसी जहां से शुरू किया था इस मैच को वहीं पर वो जा पहुंचे, लेकिन लूप्स बैकआच पर रहते नुकसान पहुंचाया टीम ऑल्टर ईगो के प्लेयर को। अनफॉर्चुनेटली एलिमिनेशन पॉइंट अभी फिलहाल के लिए लूप्स के नील्स कंफर्म नहीं कर पाएंगे। जी मैंने सुना कि आपने क्या कहा, लेकिन बिल्कुल ठीक कहा आपने, नील्स कंफर्म नहीं कर पाते, लेकिन फाल्कन्स उनको देखना है, मुश्किलात उन पर बढ़ती हुई नजर आती हैं। 9G ग्लोबल भाई एक अलग ही अंदाज से खेल रहे हैं इस मैच में भी। ऐसा लग रहा है कि 9G शायद फाइनली चिकन डिनर करती हुई नजर आए, लेकिन अभी तक एलिमिनेशन पॉइंट उस तरह से निकाल नहीं पाए। सर्कल उनके पास आता है, 9G के पास सर्कल आएगा। यहीं पर IC वर्सेस 9G होता हुआ दिखाई दिया था, इनफैक्ट इससे थोड़ा सा पीछे, बट इसी हिल नेटवर्क के आसपास ही वो फाइट हुई थी। लेकिन चलें फाल्कन्स वर्सेस लूप्स ये फाइट चलती है। विटन लास्ट वन स्टैंडिंग, 2 साइड्स के ऊपर फाल्कन के प्लेयर, कुछ कमाल करना पड़ेगा। 2 प्लेयर्स को एलिमिनेट किया गया तो, लेकिन पीछे से ऑल्टर ईगो आ जाती है। ऑल्टर ईगो वो ये बात ईगो पर ले चुके हैं, आते साथ कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले गए। एल्वा गिराएंगे कोहल को, रेडॉक्स आगे बढ़े, एल्वा को नॉक किया गया, एल्वा को फिनिश किया जाता है। और अब रेडॉक्स वर्सेस रोजमेरी, रेडॉक्स को फिनिश किया जाएगा। क्या ही खूबसूरत प्री फायर्स देखने को मिलते हैं और ये एलिमिनेशन पॉइंट अपने नाम दर्ज करके 6 एलिमिनेशंस पर चली जाती है ऑल्टर ईगो। लेकिन वहीं पर जेनजी वर्सेस टीम 9G ग्लोबल रैंडम फायर्स दिए जाएंगे, लेकिन सामने मलोसा मौजूद हैं। मोलोटोव उनके हाथ में दिखाई देगा, डिफरेंट साइड से यूटिलिटी आएगी, इन सेटन को जला दिया जाता है, भस्म कर दिया जाएगा। दूसरी साइड पे अलायंस वर्सेस INF होता है, जहां डिएगो इज द लास्ट वन स्टैंडिंग, लेकिन जिमी को वो एलिमिनेट कर देंगे बहुत ही शानदार अंदाज में। जी हाँ, एंड 9G ग्लोबल एंड ऑल्टर ईगो वर्सेस टीम INF के आखिरी प्लेयर, रिवाइवल तो नामुमकिन है। एंड डिएगो भी अब यहाँ से फॉल बैक करते करते शायद एलिमिनेशन पॉइंट ऑल्टर ईगो को ही दे बैठेंगे जहाँ पर वो जा रहे हैं। लेकिन 9G ग्लोबल उनका तो चिकन डिनर है, लेकिन ऑल्टर ईगो का ये सेकंड स्पॉट पर भी आना ये मामला थोड़े ख़राब करेगा ख़वातीन और हज़रात। चिकन डिनर पर अब बात आ चुकी है आखिरी मैच में। जी हाँ, लेकिन कोलकोट क्या ही कनेक्शन देखने को मिलता है उस साइड पर। एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाएगा 9G वर्सेस ऑल्टर ईगो। इट इज क्लियर कि 9G का चिकन बासा नहीं हो सकता बिकॉज दे हैव द मैन एडवांटेज, बट ऑल्टर ईगो क्या कुछ मिरेकल पुल ऑफ किया जाएगा उनकी जानिब से। इट इज अ 4v2 सिचुएशन, मैन एडवांटेज पूरी तरह से 9G के पास है। क्रिप्टोन की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज है, 2 साइड से पिंच हैं।
मैप कंट्रोल नहीं है टीम ऑल्टर ईगो के पास। और मैप की तरफ देखें, मिनी मैप की तरफ देखें, हर साइड से प्लेयर्स आएंगे। क्रिप्टोन इज नॉक्ड आउट। द लास्ट वन स्टैंडिंग इज रोजमेरी, जो कि शायद जोन के बाहर जाना चाहे, नहीं जाने दिया जाएगा। इन अ क्रेजी चिकन डिनर कम्स इन फ्रॉम 9ZG साइड। 9Z ग्लूबेंट आज के दिन स्टार्ट किया था इस टीम ने 16 स्पॉट से। आई मीन आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं 9Z ग्लूबेंट हमें 16 स्पॉट पर जाती भी दिखाई दी थी। स्टार्ट अच्छा जरूर किया था, लेकिन वापस से जो कमबैक है वो इनको अब ला चुका है 63 पॉइंट्स पे। जी हाँ, बिल्कुल। ओवरऑल रैंकिंग्स में जब आपकी स्क्रीन पर आएंगी तभी हम उसके ऊपर बात करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, अभी फ़िलहाल के लिए ऑल्टर ईगो आरएस मेकिंग देयर वे, दे हैव इन फैक्ट मेड देयर वे। 93 पॉइंट्स के ऊपर वो जा चुके हैं। 9Z ग्लूबेंट को दाद देना पड़ेगी। 9Z ग्लूबेंट आज के दिन एटलीस्ट इतना बेहतर खेला कि वो जो एक 16th का कर्ज था उससे निकल कर 16-15 का उन पर जो था लगा हुआ कर्ज कल के दिन से, उससे बाहर निकल कर अब टॉप 10 में शायद अपनी जगह बना ली होगी 9Z ग्लूबेंट ने। जी हाँ, लेकिन लास्ट मोमेंट्स, फाइनल मोमेंट्स, मिनट एडवांटेज ना होना ऑल्टर ईगो को चिकन डिनर कॉस्ट कर जाता है। लेकिन इस मैच में जो एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले गए, 6 प्लेसन पॉइंट्स मिलते हैं, साथ ही साथ 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स से 12 पॉइंट्स निकाल कर ऑल्टर ईगो अपने आप को फर्स्ट स्पॉट पर पुश करती हुई दिखाई देगी। आई बिलीव WBG को डिथ्रोन किया जाएगा, लेकिन ये तो ओवरऑल स्टैंडिंग्स आने के बाद ही पता लगेगा। अभी फिलहाल फाइनल फ्लो की तरफ जाते हैं, जहाँ पर ज़्यादा कुछ फ्लैशी नहीं, मैंने एडवांटेज इंटैक्ट रखा, चारों प्लेयर्स को लेकर आगे बढ़े, उसी साइड से आगे बढ़े जहाँ पर आईसी मौजूद थी। बट आईसी गॉट अनलकी बिकॉज उनके साथ सींग फंसाते हुए ना सिर्फ वहाँ 9ZG दिखाई दे रही थी, बल्कि फ्लैश वहाँ मौजूद थी, और यही वजह बनी कि वो टीम एलिमिनेट हो जाती है। लेकिन 9Z क्या ही स्टेल्थीनेस का मुजाहरा किया गया, पूरी गेम फाइट को अवॉइड किया गया, और आखिर में आकर चिकन डिनर कंफर्म कर लिया जाता है 100%। और बाय द बुक्स खेला गया उनकी तरफ से, कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ज़्यादा कुछ एलिमिनेशंस निकालने की कोशिश उन्होंने नहीं की। आज के दिन को रिस्पेक्ट दी गई है 9Z ग्लोबेंट की साइड से। 7 एलिमिनेशन कुल मिलाकर नंबर्स निकाले गए उनकी तरफ से। 10 प्लेसमेंट पॉइंट्स जब ऐड होंगे तो कुल मिलाकर ये 7 नहीं बल्कि 17 पॉइंट्स बन जाएंगे। 9Z ग्लोबेंट टॉप 10 में अपनी जगह बनाती है। आखिरी मैच पर बात आ चुकी है ख़वातीन व हज़रात, जो भी चिकन डिनर करेगा टॉप 6 में से, अब वो आपको क्वालिफाई होता दिखाई देगा। फ्लैश, INF, इनर सर्कल, अलायंस, WBG, ऑल्टर ईगो तो है नहीं है। वही बात है, मैंने आपको बताया था कि 6 नाम होंगे, 5 नाम होंगे, और आखिरी मैच पर बात आएगी कि आखिरी मैच में जिसने भी चिकन डिनर कर लिया वो आपको क्वालिफाई होता दिखाई दे सकता है। 11 पॉइंट्स के फर्क पर आपको तकरीबन जब वो स्टैंडिंग्स आएगी तब आपको दिखाएंगे। मेरे ख्याल से 11 या 10 या 11 पॉइंट्स का फर्क है BBIC का, उतना ही है जितना इस मैच से पहले था। और वो 10 पॉइंट्स आपको पता है कि चिकन डिनर से निकल सकते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद नहीं हारनी, बस मैं ये ज़रूर कहूँगा। लेकिन हाँ, चीज़ें ज़रूर बेहतर हो सकती थी। आज के इरांगल के मैचेस में ख़ास तौर के ऊपर वहाँ पर अगर 5-7 पॉइंट्स भी निकाल लिए जाते 3 मैचेस में, आई वुड से मज़ीद निकाल लिए जाते टोटल, तो काफ़ी फ़ायदा पहुंचता।
बट खैर आज का दिन है कॉम्पिटिटिव। आज ये ग्रुप, ये टीमें, ये लॉबी है इस तरह की कि इजाज़त नहीं दे रही। सर्कल्स हैं इस तरह के PMGC के, एंड लॉबी उन सर्कल्स को मजीद चार चांद लगा रही है। मैं एक बात बताता हूँ, सर्कल से कहीं ज़्यादा आज फाइट्स में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। फाइट्स में मुश्किलात आ रही हैं जी। कल सर्कल्स में आ रही थी, आज फाइट्स में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी भी अनलकी रहे आई वुड से वहाँ पर। अगर फ्लैश अकेली होती और 9G ग्लोबल पीछे से ना आती, ऑब्वियसली वही बात है कि ये ना होता वो ना होता, बट आई वुड से थर्ड पार्टीज बहुत काम ख़राब करती हैं। और आज का दिन डे 3 इज़ केओस। डे 3 होता ही ऐसा है। लीडर बोर्ड के नीचे की टीमें वो कोशिश यही करती हैं कि जैसे तैसे कर थर्ड पार्टी कर 9G ग्लोबल जिस तरह से खेला उन्होंने, थर्ड पार्टी कर 1-2 हालांकि वहाँ से एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाए होंगे उन्होंने और वहाँ से आगे चल दिए। बस इतना ही करना होता है इनको। जैसे जेनजी ने आपको एट टाइम्स वो भी करते दिखाई दिए थे आगाज़ में। मसला ये है कि IC के साथ हो रहा है। ये तीसरी दफ़ा है आज के दिन पर जहाँ पर थर्ड पार्टी IC हुई है किसी फाइट में जाते साथ। इतना और किसी टीम के साथ शायद ऐसे नहीं हो रहा कि हम फाइट में अच्छे जा रहे होते हैं और फिर एकदम से कोई तीसरा नाम आकर 2 प्लेयर्स एवं ही एलिमिनेट कर देता है। बट खैर चलें, 17 पॉइंट्स निकाले गए 9G ग्लोबल की साइड से। ऑल्टर ईगो यार बहुत बहुत ज़बरदस्त। मुझे लगा था कि यार वो रैंगल के बाद, जो रैंगल में #15 पे एलिमिनेट हुए हैं, उसके बाद ये संभल नहीं पाएंगे, बट दे वर इम्प्रेसिव। इन्होंने मुझे क्या बहुत से लोगों को गलत साबित किया है, क्योंकि इनकी हिस्ट्री कुछ इस तरह की रही थी इससे पहले। अपने आप को गलत साबित किया है इन्होंने, जहाँ पर आखिरी दिन के प्रेशर की वजह से ये भी चोक कर जाते थे। आज वो पहले नंबर पर अब आ चुके हैं, बट क्वालिफाई अभी तक नहीं किया। ये चीज़ याद रहे ख़वातीनो हज़रात। अगला मैच वी आर नॉट रेडी फॉर द नेक्स्ट गेम। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मैच ये बहुत कुछ चीज़ें तब्दील कर सकता है। ऑल्टर ईगो WBG के लिए भी। जी हाँ, लेकिन इस मैच के में भी बनेंगे कॉल गोट, जिनकी तरफ से 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले गए, 368 का डैमेज दिया गया, 3 नॉकआउट्स। अभी तक IC के स्टार्ट्स को थोड़ा सा सामने रखा जाए। एक मैच में 27 पॉइंट्स, बाकी 4 मैचों में सिर्फ 6 पॉइंट्स। नॉट अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। बढ़ेंगे आगे, पॉइंट्स टेबल की तरफ जाएंगे। ऑल्टर ईगो नाइस डोमिनेट करते हुए नजर आए लास्ट मैच में, और इस मैच के अंदर जो परफॉर्मेंस थी उनकी वो इतनी शानदार रही कि पूरी तरह से डीथ्रोन करेंगे, फर्स्ट स्पॉट पर आ जाएंगे। सेकंड पर WBG है, एलिमिनेशन काउंटर 62 पर WBG का दिखाई देता है। वंस अगेन IC स्ट्रगल करती हुई दोनों ही एंड्स पर दिखाई दे रही है। नॉट जस्ट प्लेसमेंट पॉइंट्स बट सर्वाइवल पॉइंट्स भी अच्छे नहीं हैं अपनी लीग में। अगर आप देखें टॉप 7 के अंदर सबसे लोएस्ट प्लेसमेंट पॉइंट्स अभी भी टीम IC के पास ही मौजूद हैं। वो एक चिकन डिनर निकाल दें तो आज के दिन एक ही प्लेसमेंट पॉइंट निकाला है अभी तक। आज के दिन उस चिकन डिनर के अलावा प्लेसमेंट पॉइंट सिर्फ एक ही IC का, बाकी 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं। So one match heroic performance, one moment up, next moment down, और उससे अगला moment under the ground, उससे अगला moment under the water, which is not good at all. But चलें, अभी आखिरी मैच है, आखिरी उम्मीद है। Replication of the first match is required. पहला मैच जो खेला 27 पॉइंट्स निकाले, कहीं ना कहीं 27 पॉइंट्स अगर निकल आते हैं क्वालिफिकेशन कंफर्म हो सकती है। 95 पॉइंट्स क्वालिफिकेशन क्या से 100 फर्स्ट स्पॉट भी कंफर्म हो सकता है। फिर तो फर्स्ट स्पॉट भी कंफर्म हो सकता है। सवाल यहाँ की नादी की मुश्किलात बहुत हैं। बढ़ेंगे आगे। देखिए दिन के आगाज में ये था कि हाँ चले आगे बढ़ते हैं, मैच में जाकर बात करेंगे। टॉप 4 प्लेयर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। फैल्कन्स रीडॉक्स 8 एलिमिनेशंस, 850 सोलो डैमेज, शानदार 750 100 के फर्क के साथ बोर के स्नोइक्स आते हैं। स्नोइक्स वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स इन दिस लॉबी, एटलीस्ट अपनी टीम के लिए बहुत अच्छी ओपनिंग्स दिलाते हैं। हर फाइट में जहाँ पर भी बोर जाएगी आपको स्नोइक्स ही मिलते हैं जो क्रूशल नॉकआउट्स निकालते हैं। वहीं पर कोलगोट 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स एंड 368 डैमेज, 9G ग्लोबल बहुत शानदार। अगर कमबैक्स की बात करें आज के दिन की डे 3 पर तो 9GG का नाम सरे फहरिस्त आएगा। ऑल्टर ईगो एल्वा क्या कंट्रोल दिखाया है अपने नर्व्स के ऊपर इस टीम ने आज के दिन, खासतौर के ऊपर 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स और 548 का डैमेज दिया गया इस मैच में। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन खैर अभी के लिए ये रिजल्ट्स हमारे सामने बनते ज़रूर हैं। टॉप 4 प्लेयर्स के अंदर 8 एलिमिनेशन रिडॉक्स के पास निकलते हैं। 8 एलिमिनेशन
in one match, which is a crazy number. लेकिन now we are down to the last match. आखिरी मैच है, अपनी पूरी जान लगानी पड़ेगी. चीज़ें अच्छी हों जैसे पहले मैच में हुई थी, वही दोबारा यार. कम ऑन यार, वी आर सो क्लोज, वी हैव नेवर बीन दिस क्लोज. वी हैव बीन क्लोज. हम हमेशा पास से आके मरते हैं, यही तो मसला है. अगर तो शुरू में इतना करीब 10 पॉइंट्स के फर्क पे कभी भी नहीं आए हम अलादीन. 10 पॉइंट्स के फर्क पे नहीं आए कभी भी फाइनल से यार. एक कदम दूर यार. आप ये देखें, पिछले 4 मैचों से हम 10 पॉइंट्स के डिफरेंस पे हैं. पिछले 4 मैचों से वी हैव डन नथिंग. लास्ट 4 मैचेस. चले आप छोड़ें उस चीज को, छोड़ दें. लेट्स होप कि वो कवर अप करें इस मैच में, और कवर अप की जरूरत है. मतलब ये इससे नीचे सेटल नहीं कर सकते. एक साथ रहकर फाइट लें बस, और फाइट्स लें. इस मैच में अब और कुछ करने को नहीं है. 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स और तीसरे स्पॉट तक ही आइडियल केस है. 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स. सर्वाइवल करें. एलिमिनेशंस खुद आएंगे. ख्वातीन हज़रात, यहाँ से आगे जो भी होगा अपनी टीम को हेट मत दीजिएगा. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, वो आपका हक है, हमारा भी हक है. हम इस डेस्क के ऊपर ये जो माइक है हमारे पास, वो हमें इजाज़त देता है कि हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें. बट इस चीज़ को भूलना नहीं है, प्लेयर्स भी इंसान हैं, उनको हमसे कहीं ज़्यादा दुख होता है, उनके ऊपर हमसे कहीं ज़्यादा प्रेशर है. हमारे लिए बोलना शायद आसान होगा, उनको गालियाँ भी शायद सुननी पड़ती होंगी, उनको बहुत कुछ सुनना पड़ता होगा. प्रेशर भी है कि हम इतना करीब आए. उनके लिए भी एक ख्वाब है, उनकी भी फैमिलीज़ हैं, वो भी एक सर्टन उम्मीदें रखती हैं अपने प्लेयर से. सो कंस्ट्रक्टिवली आपने क्रिटिसाइज़ करना है, हेट का फैक्टर उसमें नहीं होना चाहिए. बस मेरी इतनी गुजारिश है आप लोगों से, और अब जो भी होगा वो अल्लाह ताला बस सब खैर करे इंशाल्लाह. चले आइए चलते हैं, आखिरी गेम है ख़वातीन और हज़रात. एक हायर नोट के ऊपर ख़त्म करेंगे. बिस्मिल्लाह से आगाज़ करेंगे इस मैच का. सर्कल बन चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर. सैंड ड्यून्स वाली साइड पर जा रहा है ग्लोबल चैंपियनशिप. लास्ट चांस, लास्ट मैच. लास्ट चांस, लास्ट मैच, लास्ट होप. बट यहाँ अर्ली फाइट आती हुई दिखाई देगी. वुल्व्स वर्सेस फैल्कन्स. या तो आप एक्सपेक्ट करते हैं आखिरी मैच में बदले की आड़ में बहुत लोग सामने आते हैं. मुक्का मारने की कोशिश की गई राउफ को, लेकिन राउफ उससे पहले गोलियों से नॉक कर देते हैं. Oops, और he goes are the last 2 players. And यहाँ कोल को पकड़ने की कोशिश थी, बट wait a second, कूप्स अभी भी जिंदा है और कूप्स 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म कर लेंगे. फाल्कन्स को अलाउ नहीं किया जा रहा. एंड शॉटगन का जिस तरह से वो इस्तेमाल कर रहे हैं, he can do a clutch. Now it's a 1v1 कॉल. अकेले प्लेयर मौजूद हैं जिनको मजबूर किया जाएगा कि वो पुश करें. लेकिन यहाँ क्या शॉटगन का अच्छा इस्तेमाल होगा? क्या कूप्स का 1v4 होगा? बाहर आएंगे. गन स्विच की गई, लेकिन वेट अ सेकंड, प्री फायर में मुंह दिया जाता है. एंड कोल इस मैच से बाहर करते हुए दिखाई देंगे. जी हाँ, एंड फाल्कन्स इस सारे फाइट के अंदर
इट वाज लाइक ऑल इन, दोनों टीमें जिस तरह से ड्रॉप क्लैश लिया गया उनकी तरफ से, और पहले 2 मिनट के अंदर अंदर, या आप कहने चलें 3 मिनट के अंदर अंदर पहला ही नाम हमें इस मैच से बाहर होता दिखाई दिया। 7वें नंबर पर वुल्व्स थे, उन्होंने कहा यार हुन बस जाओ मकाओ, या आर होगा या पार होगा। 68 पॉइंट्स थे उनके पास, 30 पॉइंट्स वाला मैच तो नहीं निकल सकता था, लेकिन खैर वुल्व्स का लास्ट चांस ख़त्म होता है, ऑफिशियली ख़त्म होता है। PMGC का सफ़र उनका ऑफिशियली ख़त्म हो जाता है। ऑल्टर ईगो एरिस, क्या खेला इन्होंने, क्या दिल जीते होंगे अपने फैंस के इन्होंने आज के दिन। बड़ा क्लिफ हैंगर पर थे ये भी, जब आगाज़ में मैचेस अच्छे नहीं गए उसके बाद नीचे आ रहे थे, बट जैसे जैसे काबू किया अपने पर वो बहुत शानदार रहा। लेकिन सेटन को बड़ा लोगों ने HP किया जाता है फाल्कन्स की साइड से। बाल बाल बचे हैं, एक आधी बुलेट और अपना कनेक्शन अगर ढूंढ लेती तो सेटन आपको गाड़ी से ही उतरते दिखाई देते, बट जेन जी जितनी तेज़ी से आए उतनी तेज़ी से इस इलाके से फॉल बैक भी कर अब अपनी जगह आगे सर्कल के अंदर बनाते दिखाई दे रहे हैं आपको। जी हाँ, सर्कल एक बार फिर से साउथ वेस्टर्न साइड पर जाता हुआ नजर आएगा। मतलब पहले नॉर्थ वेस्टर्न था, अब साउथ वेस्टर्न है। वेली डिलमार कहीं ना कहीं लिटरलिया के आसपास सर्कल का हमें शिफ्ट आता हुआ नजर आता है। लेकिन फ़िलहाल तमाम तरह टीमें लूट में मसरूफ़ हैं। वो टीमें जो कि बहुत दूर हैं, उन्होंने लूट का प्रोसेस ख़त्म करके 3rd मिनट के अंदर ही रोटेशन करना शुरू कर दी थी, और कह सकते हैं कि वो फ्लाइट पाथ के करीब जो टीमें थीं और उनकी तरफ से जल्द से जल्द लूट की गई थी। इवन IC भी रोटेशन करना शुरू कर चुकी है, WBG भी रोटेट करती हुई दिखाई दे रही है। गाड़ियों में हमें दिखाई दे रहे हैं काफ़ी प्लेयर्स। बट लेट्स सी, WBG अभी के लिए अगर अर्ली ऑन एग्जिट देखने को मिला तो फिर मुश्किलात बन सकती हैं। IC पर बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। 80 पॉइंट्स पर वो हैं और 91, 93 पर आपको 2 टीमें दिखाई दे रही हैं। यहाँ से क्वालिफाई करना इज क्लोज टू इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल हो चुका है, बहुत मुश्किल। IC को अच्छा खेलना है और WBG और ऑल्टर ईगो को बुरा खेलना है, इवन फ्लैश को बुरा खेलना है, तब जाकर क्वालिफिकेशन यकीनी बनेगी। हाँ, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा। जी हाँ, क्लोज टू इम्पॉसिबल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। वहीं पर INF वो भी रोटेट, हर ही कोई रोटेट कर रहा है। अर्ली ऑन रोटेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। आपको 9G ग्लोबेंट उनको भी फ़ायदा पहुंचेगा। वैले दिलमार वाली साइड से अभी वो मिनाज दिल सूर आइलैंड के ऊपर हैं, या पारतोना आइलैंड, आप उससे जो मर्जी, साउदर्न आइलैंड आप कहना चाहें वो भी आप कह सकते हैं, साउदर्न आइलैंड के ऊपर हैं। एंड वहाँ से अब वो वैले दिलमार वाली साइड से एंट्री हासिल करेंगे। एंड 9G ग्लोबेंट आप देखें टॉप 10 के अंदर अपनी जगह बना चुकी है। काफ़ी नीचे से आगाज़ किया था, आज 15 16 से आए थे उठकर, अब फाल्कन से भी ऊपर जा चुके हैं। लूप्स को इनफैक्ट चैलेंज करेंगे, और ये मैच भी अच्छा रहा तो कहीं ना कहीं टॉप 8 के अंदर भी अपनी जगह बासानी बनाती ये टीम आपको दिखाई दे सकती है। एंड 9G ग्लोबेंट ऑब्वियसली वो एक छाप छोड़ना चाहते हैं आज के दिन पर, अपने फैंस की लाज रखना चाहते हैं, और रखी भी गई है बहुत अच्छे तरीके से। बट हाँ, ऑल्टर ईगो एरिस उनकी एक काफ़ी एक्सटेंसिव रोटेशन, बिल्कुल आपको इम्पाला वाली साइड से रोटेट करते, एक्सट्रीम एजेस से, ईस्टर्न एंड से रोटेट करते दिखाई दे रहे हैं। आएंगे वैले दिलमार या चुमासेरा के नज़दीक से एंट्री हासिल करेंगे सर्कल में। एंड लीजिए, स्क्रीन पर आ चुका है। जी हाँ, अगर आप सर्कल के हिसाब से देखें, रोटेशन में ऑल्टर ईगो, आर्क्रेड, कीके, WBG, BG, Falcons, INF, Alliance के कुछ प्लेयर्स, कीके, everybody is trying to rotate, लेकिन IC एक स्प्लिट में दिखाई दे रही है, which can force them to get into a fight। लेकिन क्या ये फाइट्स पॉजिटिव साबित होंगी? क्या एलिमिनेशन पॉइंट्स निकलेंगे? नॉकी को देखें, काफ़ी दूर जा चुके हैं गीके के पास, लेकिन ना गीके उनकी तरफ देखा जाए। इनफैक्ट वो जेनजी थी, दैट वाज जेनजी। गीके तो अभी रोटेट करना चाह रही है। इन गीके कहाँ से रोटेट कर रही है, कौन सी साइड है? ओके, पावर ग्रिड वाली साइड से रोटेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं गीके प्लेयर्स, एंड वो कहीं ना कहीं बीजी के आसपास दिखाई देंगे। रोटेशनल फाइट तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मैं बिल्कुल भी। इस पॉइंट पे आकर रोटेशनल फाइट्स को तो बिल्कुल अवॉइड किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। टीमें मुझे लग रहा था थोड़ा सा रैंडम खेलेंगी। लीडर बोर्ड के नीचे जो टीमें हैं वो थोड़ी अर्ली फाइट्स में जाएंगी, लेकिन अर्ली कुछ रोटेशंस में एलिमिनेट होते टीम BG के खिलाड़ी हमें दिखाई देंगे। एंड बोर गेमिंग 4 से 3 प्लेयर्स पर आ चुके हैं, एंड गी के अपने लिए पहला एलिमिनेशन पॉइंट ढूंढते हैं इस मैच में।
एक पूरा नाम एलिमिनेट हुआ वुल्फ्स का, उसके बाद अब जाकर हमें कुछ एलिमिनेशंस निकलते दिखाई दे रहे हैं। फ्लैश इज ऑन अ रन, बोर के ऊपर पहला पॉइंट कंफर्म कर लिया जाता है एंड स्नोइक्स यहां से फॉल बैक करना चाहते हैं। जिस साइड पर फॉल बैक कर रहे हैं वहीं पर आईसी है, शायद आईसी चाहे तो ये एलिमिनेशन पॉइंट उठाया जा सकता है क्योंकि साइड से, एंड फ्लैश नजदीक है। फ्लैश क्या पीछा करेगी? अभी फिलहाल के लिए स्नोइक्स जैसे तैसे कर कर अपनी जान बचाकर वहां से निकल चुके हैं एंड इनके बाकी के खिलाड़ी कहां पर है, लेकिन अब पूरे के पूरे आईसी के जाल में फंस चुके हैं। पीछे बैक यार्ड्स पर आईसी के जेनजी भी है, सामने फ्लैश है। जी हाँ, लेकिन सर्कल बैकफ्लिप खाता हुआ दिखाई देता है। प्लेयर्स को स्प्लिट में रखने की वजह यही थी कि सर्कल कहीं भी जाए पोजीशन प्लेयर्स के पास मौजूद हो। नॉकी एंड आईक्यू जो कि दूर थे अपनी टीम से रिग्रुप किया जाएगा, लेकिन ध्यान देना है बीजी के प्लेयर्स आउटस्कर्ट्स में मौजूद हैं। ये हिली एरियाज़ हैं जहां पर आप पे दूर से क्रॉसर्स बन सकते हैं, लेकिन ऑल्टर ईगो एक एक्सटेंसिव रोटेशन। देखिए ओवर थिंकिंग की जहां बात कर रहे थे काफ़ी टीमें करती हैं, ऑल्टर ईगो ने भी शायद ऐसा ही किया, लेकिन फिलहाल ये ओवर थिंकिंग उनको फायदा पहुंचाएगी। जहां से विंटू लेना चाहते हैं वहां उनकी फाइट नहीं बनेगी, लेकिन बोर गेमिंग एंड फ्लैश आपस में आमने सामने आएंगे एंड फ्लैश इनकी उम्मीदें थी सेकंड स्पॉट पे आने की, उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है। बोर गेमिंग हमें पता है वो फाइट में आए तो वो बासानी आपको जाने नहीं देते। एंड बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन ऑल्टर ईगो एरिस उन्होंने जेन्युइनली ओवर रोटेट किया है। वो इतनी आसानी से लॉस लियोनेस वाली साइड से अगर आते तो वो काफ़ी पहले आ सकते थे सर्कल के अंदर, लेकिन खैर ऑल्टर ईगो एरिस ऑब्वियसली वो बेहतर तरीके से जानते हैं। रोजमारी कोशिश कर रहे हैं AUG का इस्तेमाल करते, कुछ क्रॉसर बनाने की कोशिश की, शायद व्हीकल को 4-5 बुलेट्स लगी होंगी बट खिलाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकल रही है, लेकिन क्या करें, कास्ट करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर वीबो गेमिंग 91 पॉइंट्स दे हैव, और हमेशा सर्कल में ऐसी जगह पर ये टीम होगी। कभी आपने हमारे मुंह से ये नहीं सुना होगा कि वीबो गेमिंग ने ओवर रोटेट किया, वीबो गेमिंग सर्कल में नहीं है, कैसे जाएंगे अगले सर्कल में। ये भी नहीं सुना होगा कि वीबो गेमिंग को इस टीम से अब फाइट लेकर अगले सर्कल में जाना पड़ेगा। इतनी ज़बरदस्त रोटेशंस और इतनी शानदार टाइमिंग होती है इनकी सर्कल में आने की। क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसी टीम से इसमें सुख मौजूद हो, ऑर्डर मौजूद हो, इसके अलावा और क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे आप? दो क्रेजी प्लेयर्स हैं जो कि किसी भी टाइम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात हो चाहे टीम वर्क की। लेकिन INF another competitor still alive, मोंटेनेग्रो के आसपास हैं, जगह इनके पास भी अच्छी है, लेकिन हाँ अगला सर्कल अगर दूर जाएगा जो कि शायद चला जाए, मुश्किलात आ सकती हैं। वहीं पर एक फाइट में आते हुए शायद दिखाई दें वापस से अगर नजर डाली जाए। आईसी स्प्लिट में खेलना चाह रही है जहां उनके बीच में गीके तो मौजूद है, लेकिन ये स्प्लिट उन्हें कॉस्ट कर सकता है बिकॉज सेंटर में शायद स्लामिन्स आते हुए दिखाई दें। मैं देखना चाहता हूं कि वो जिस रिज पर हैं वो रिज कितने हाइट पर है एंड किस तरह का लोकेलिटी है वो। जब मज़ीद जूम इन होगा प्लेयर्स के ऊपर तब हम इस चीज़ का जायज़ा ले पाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए सर्कल के ऊपर सारी की सारी नज़रें हैं ख़वातीन और हज़रात। दिल रुकेंगे और कुछ उम्मीद जो आएगी वो सर्कल की वजह से ही आएगी। सर्कल अच्छा बना है, हार्ड शिफ्ट नहीं कहूँगा मैं इसको कहीं पर भी, इतना कुछ ख़ास, थोड़ा सा हाँ ईस्टर्न साइड को अबांडन किया है सर्कल ने। दिक्कतें बनेंगी तो लूप्स के लिए बनेंगी, INF के लिए बनेंगी। एंड INF लूप्स तो उनको पता है कि वो शायद अब क्वालिफाई नहीं कर सकते, लेकिन INF कर सकती है। एंड लूप्स वो चाह रहे हैं कि INF को एलिमिनेट किया जाए जिस तरह से उन्होंने घात लगाई हुई है। एंड लीजिए राटा बॉय लिल बॉय का एलिमिनेशन पॉइंट करते हैं कंफर्म, एंड लूप्स के बाकी भी INF के बाकी भी प्लेयर्स को गिराया जाएगा। लॉ का एलिमिनेशन पॉइंट भी कंफर्म आपको थोड़ी देर में शायद होता दिखाई दे, लेकिन शानदार व्हीकल ट्रेस करने की कोशिश फेडरल की साइड से की जाती है। लूप्स के प्लेयर को नुकसान पहुंचाएंगे, वापस से नुकसान पहुंचाया जाता है। एंड लूप्स में देखना चाहता हूं वो अपने 3 खिलाड़ियों पर हैं, लेकिन INF अपने आखिरी 2 प्लेयर्स पर आ चुकी है जी। एंड फेडरल को भी गिरा दिया जाएगा राफिना की जानिब से। लूप्स उम्मीद छोड़ना नहीं चाहते, उम्मीद का दामन हाथ में थामे हुए हैं। जितना इंपॉर्टेंट ये ऊपर की टीमों के लिए है कि वो अच्छा परफॉर्म करें, नीचे जो टीमें मौजूद हैं वो भी इसको उतना ही इंपॉर्टेंट समझेंगी
बिकॉज ना सिर्फ प्राइस पूल दाव पर है बल्कि साथ ही साथ वो बका की जंग आपने आने वाले टूर्नामेंट के लिए, आने वाले मज़ीद टूर्नामेंट्स के लिए अपना एक मेंटल सेट करना है। टॉप 5 में अगर आप फिनिश करते हैं इट विल गिव यू एन एडवांटेज। लेकिन अभी फ्लैश के 3 प्लेयर्स इंटैक्ट हैं। वो एक प्लेयर गंवाने के बाद जिस तरह से फॉल बैक किया गया, अवॉइड किया गया फाइट्स को, वो चीज़ फ्लैश को अभी के लिए तो ज़िंदा रखे हुए है। लेकिन ना सर्कल का शिफ्ट उस पर जहाँ पर ध्यान है वहीं पर कुछ आने वाली फाइट्स की बात करें, WBG वर्सेस आर्करेड हो सकता है, ऑल्टर ईगो वर्सेस बॉय गेमिंग भी शायद होता हुआ दिखाई दे। लेकिन WBG वर्सेस आर्करेड की बात करें, यहाँ पर बैट बॉय थोड़ा करीब आए। अगर सर्कल चला गया WBG को बाहर आना पड़ेगा और शायद सर्कल चला ही जाएगा। आई डोंट थिंक कि सर्कल यहाँ पर आएगा। उसके बाद क्या आर्करेड गेट कीप करेगी, एलिमिनेशन पॉइंट निकालेगी WBG के ऊपर? अगर ऐसा हुआ तो फिर कुछ हो सकता है, रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं इस मैच के भी। अभी तो इंतज़ार है आगे बढ़ने का, मज़ीद फाइट्स के निकलने का। आर्करेड इंतज़ार कर रही है, सर्कल का सभी टीमें वेट कर रही हैं कि वो आगे बढ़े, टीमों को नुकसान पहुंचाए, और कोई भी गलती नहीं करना चाहता। 15 टीम्स स्टिल अलाइव। एक टीम लॉबी गई थी, वो चंद पहले मिनट्स में गई थी, उसके बाद अभी तक कोई स्क्वाड एलिमिनेट नहीं होता। INF के आखिरी प्लेयर यानी कि INF की क्वालिफिकेशन की उम्मीद खत्म। फ्लैश इज स्टिल इन द कॉम्पिटिशन, IC इज स्टिल इन द कॉम्पिटिशन, WBG दे आर डेफिनेटली इन द कॉम्पिटिशन। आर्करेड अगर उन्होंने एलिमिनेट किया WBG को तब शायद कुछ हो सकता है, तब कुछ रिजल्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन WBG उनके करीब आते हुए आर्करेड के प्लेयर्स दिखाई देंगे। सुख वो जोन के बाहर जाके रैप अराउंड करते हैं। आर्करेड ने WBG के पास इन्फॉर्मेशन है, सुख की पोजीशन बहुत शानदार हो सकती है। सुख ब्लू का डैमेज खा के जिस तरह से पीछे से आ रहे हैं, आर्करेड को गेट कीप किया जा सकता है। सर्कल शिफ्ट लेकर जाएगा, IC इज ऑन द एजेस। लूप्स वर्सेस IC, ये फाइट कुछ सेकंड्स में बनेगी। लेकिन वहीं पर WBG वर्सेस आर्करेड ये फाइट बनती हुई नजर आएगी, जहां पर हार्ड बॉय उनको भी सरप्राइज मिल सकता है, बैड बॉय को बिलखसूस सरप्राइज मिल सकता है पीछे से। WBG को शायद अंदाजा है कि यहाँ पर हिल पे मौजूद है, सुख उनको डैमेज पड़ेगा, पोजीशन कॉम्प्रोमाइज होगी। बैड बॉय इज गोना गेट सरप्राइज, ही इज गोना गेट सरप्राइज एंड सुख व्हाट अ ब्रिलियंट नॉकआउट, क्या शानदार नॉकआउट निकाला है। ना सिर्फ आर्करेड को मजबूर किया कि वो 3 मैन पे आए, बल्कि साथ ही साथ ये एलिमिनेशन पॉइंट्स भी WBG इकट्ठे करते हुए नजर आएगी। एंड व्हाट अ स्लैमन, ये है क्लासिकल एग्जांपल ऑफ क्रेजी प्ले। वेलकम टू PMGC। ऐसा ही कुछ आप एक्सपेक्ट करें, लेकिन वो इन सेकंड 2 प्लेयर आगे आएंगे, दोनों को लॉन्च करने की कोशिश थी, बट इट डज नॉट मैटर। WBG जोन के बाहर जाकर उनको फाइट लेना पड़े, वो लेते हुए नजर आएंगे। और आर्करेड को लास्ट 2 प्लेयर्स पर लाया जाता है। रैमजेस गाड़ी लेकर आगे तो आएंगे, यूटिलिटीज का इस्तेमाल पीछे से होता है, 3-3 गिर जाते हैं, हीरो के ऊपर ग्रेनेड आएगा। इमेजिन यहां से अगर हार्ड बॉय और रैमजेस मिल मिलाकर ये एलिमिनेशन पॉइंट इकट्ठे करते हुए नजर आए तो WBG क्वालिफिकेशन मुश्किल में आ सकता है। लेकिन बैड बॉय हार्ड बॉय उनको स्पॉट कर लिया जाएगा, ऑर्डर को शॉटगन चलाई जाती है, ग्रेनेड आएगा, ऑर्डर इज गोना गेट एलिमिनेटेड एंड WBG इज डन एंड डस्टेड। ओह माय गॉड, oh my god, WBG is eliminated on 93 points. The cutoff points is less than 95. 93 पर ये नंबर आ जाएगा। What a play by Alfred, a 2v4. क्या खेला है आर्करेड ने, oh my god। बात आती है कि फ्लैश कितने पॉइंट्स लेकर के जाएगी और टीम ऑल्टर ईगो इस मैच में कितने पॉइंट्स लेकर के जाएगी। लेकिन अब बहुत ही संभल कर खेलना है। 14 टीमें सरवाइव कर रही हैं, 16वां मिनट है ख़वातीन और हज़रात। बहुत मुझे लग रहा था कि टीमें थोड़ा तेज़ी से एलिमिनेट होंगी इस मैच में, कि बॉटम स्पॉट्स ज़्यादा फाइट्स में जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। वही सर्वाइवल स्टैट्स हैं जैसे पिछले मैच में हमें निकलते रहे थे, पिछले मैचेस में निकलते दिखाई दे रही। आराम कर टीमें खेल रही हैं। फाल्कन्स उनके प्लेयर्स की कहानी ख़त्म हो जाएगी। 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स इस मैच से कंफर्म किए गए और फाल्कन्स भी अपना ग्लोबल चैंपियनशिप का सफ़र ख़त्म करती है। ओह माय गॉड, इट्स जेनजी वर्सेस IC। नॉकी की साइड से पहला नॉकआउट दर्ज कर दिया जाएगा। IQ को बैकस्टैप शायद किया है किसी ने, लेकिन नहीं, जेनजी के ही खिलाड़ी हैं जो एक डिफरेंट एंगल से आए थे। दामी उनका एलिमिनेशन पॉइंट फलक कंफर्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सेटन वो दागते यूटिलिटी, फलक का ग्रेनेड आएगा, सेटन को घुटनों पर लेकर जाएगा। IQ एक फॉलोइंग ग्रेनेड से शायद ये एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर पाए। एंड जी हाँ, बिल्कुल वापस से नॉकआउट निकाला जाएगा। फलक स्टेप्स इन और आखिरी प्लेयर रह चुके हैं। जेनजी से बदला तो लिया जरूर है, लेकिन क्लॉस फॉल बैक करते करते क्या वो पकड़े जाएंगे? बच जाते हैं अभी फिलहाल के लिए।
लेकिन आईसी अभी फिलहाल के लिए जेंजी के आखिरी प्लेयर का भी एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म क्या करने के लिए आगे बढ़ा जाएगा, एक एक कर नहीं बल्कि साथ जाकर के स्लामिन देना है। फलक के ऊपर मिनी 14 का क्रॉस है, जमाया गया क्लॉस की साइड से, लेकिन क्लॉस का भी एलिमिनेशन पॉइंट शायद कंफर्म करने के लिए आईसी आगे बढ़ेगी, लेकिन ओवर एक्सटेंड उनको नहीं करना है। मिड रेंजेस पर रहकर यूटिलिटीज दागने हैं, एक भी खिलाड़ी गंवाना आईसी अफोर्ड नहीं करती है। सर्कल बहुत दूर है, सर्कल बहुत ज्यादा दूर जा चुका है। आईसी को एक एक एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करना है। एंड लीजिए बैकयार्ड पर से लूप्स आ रही है, रिज पर आ चुके हैं। आईसी ने शायद स्पॉट डाउन कर ही लिया होगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्लॉस का एलिमिनेशन पॉइंट जल्द से जल्द कंफर्म करना बाकी है। फलक आगे आएंगे अपना व्हीकल लेकर एंड द गेम इज ओवर। टीम जेंजी इस मैच से बाहर हो जाएगी। वहीं पर आईसी के T24 को स्पॉट डाउन किया जाता है, नॉकी को पकड़ा जाएगा। खवातीनो हजरात, ये डू और डाई सिचुएशन है, यहां से बाहर निकलना है टीम इनर सर्कल को। लूप सर्कल के बाहर से आए हैं, सर्कल के अंदर से आए हैं बाहर थर्ड पार्टी करने के लिए, लेकिन फलक को बचना है जैसे तैसे कर यूटिलिटी आता जरूर है, चैक के अंदर नहीं आ पाएगा। T24 का एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर लिया जाएगा, लेकिन डाउन टू 3 men स्टैंडिंग इट इज। पाकिस्तान से आए ये शहजादे, दे हैव टू स्टेप अप। इस जगह को या तो छोड़कर जाना है उनको। लूप्स जिस तरह से थर्ड पार्टी करने के लिए आई है, अभी फिलहाल के लिए टीम इनर सर्कल अपने 3 प्लेयर्स को यहां से बचाकर निकल जाएंगे, लेकिन फ्लैश पर स्लैम इन नहीं देना। यहां से आगे भी सर्कल में जगह है एंड बिल्कुल ठीक किया टीम इनर सर्कल, मजीद आगे बढ़ती आपको दिखाई देगी, लेकिन व्हीकल बस्ट हो जाता है नॉकी का। नॉकी डैमेज लेंगे, बच जाएंगे दूर दराज से। लूप्स अभी तक मुश्किलात बनाए रखे हुए हैं। आईसी के प्लेयर आउट इन दी ओपन आएंगे, नॉकी गेट्स पिक्ड ऑफ और इनर सर्कल इज नाउ डाउन टू देयर लास्ट 2 सर्वाइविंग प्लेयर्स। So close but yet so far. IQ को अपना व्हीकल बर्स्ट कर देना चाहिए बिकॉज लूप शायद इसी साइड पर आती हुई दिखाई देगी, लेकिन लूप्स उनको शायद फ्लैश रोके आगे बढ़ने से। वहीं पर INF के आखिरी प्लेयर डिएगो कोशिश करेंगे सर्कल में जाने की। इट इज़ गोना बी आइदर फ्लैश और आईसी। फ्लैश को सिर्फ चंद एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालने हैं, 5 पॉइंट्स मजीद निकाल लिए तो फ्लैश बासानी क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन INF के डिएगो सर्वाइवल पॉइंट्स निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ से INF की क्वालिफिकेशन तो इम्पॉसिबल नज़र आती है, लेकिन आईसी हाँ वो एक एलिमिनेशन पॉइंट निकालने की कोशिश, सर्कल को प्रेफर ना करना वो एक बुरा कॉल आउट साबित होता है। अगर उस प्लेयर को छोड़ दिया जाता, सर्कल में जगह बनाई जाती, रिजल्ट्स कुड हैव बीन डिफरेंट, लेकिन जोन आगे जाता गया और आईसी मुश्किलात का सामना करती गई और लूप्स की थर्ड पार्टी हर चीज़ बहुत ही बुरी तरह से आईसी को फंसाती है। लेकिन यहाँ गीके वर्सेस बीजी चलता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर बीजी के एची पूरी तरह से फंसे हैं। गोड स्पीड को रिवाइव देने के लिए वो जा रहे थे, गीके आगे बढ़ती हुई नजर आती है। गीके उनके जितने प्लेयर एलिमिनेट होंगे उतना ही फायदा हासिल होगा। पीछे से थर्ड पार्टी होती हुई नजर आती है, बल्कि एतपस याद खा जिन्होंने ये नॉकआउट निकाला है, क्योंकि बीजी आगे जाकर आईसी भी पुश करेगी। और अभी गीके वर्सेज बीजी ये फाइट बन रही है। आईसी थोड़ा सेटल होने के लिए टाइम तो मिला, लेकिन जोन अगर यहाँ ना आया तो फिर बचना इम्पॉसिबल है। व्हीकल बस्ट इसलिए नहीं किया कि अगले जोन में जाना पड़ सकता है, लेकिन सर्वाइवल पॉइंट्स निकालना भी ज़रूरी है। ऑन द अदर साइड ऑल्टर ईगो उनके प्लेयर्स गिरते हुए दिखाई देंगे। ऑल्टर ईगो इतने पॉइंट्स पहले ही निकाल चुके हैं कि अगर वो एलिमिनेट हो भी गए तब भी ऑल्टर ईगो वो क्वालिफाई कर रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑन 93 पॉइंट्स। 95 कोटा पॉइंट्स की हमने बात की थी, ऐसा ही कुछ देखने को मिला। अभी लूप्स वर्सेस ऑल्टर ईगो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ सर्कल का शिफ्ट कहाँ जाएगा? शुड बी अ नॉर्दर्न शिफ्ट, प्लीज गो देयर, प्लीज। नो, सर्कल डिड नॉट फेवर देम, लेकिन यहाँ ऑल्टर ईगो फाइट करते हुए नजर आती है, जहाँ पर सामने मौजूद है राफिना, आखिरी प्लेयर मौजूद यहाँ पर दिखाई दे क्रिप्टोन और राफिना अल्साद आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। एंड लूप्स इन द लास्ट मोमेंट्स बहुत ही डेडली होते हुए नजर आते हैं। व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज एंड एवरीथिंग टू गेन, उस वक्त जो आप खेल खेलते हैं वो काफ़ी क्योटिक हो सकता है। घीके एज आई सेड यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी। घीके वर्सेस आईसी होता है। फलक ने ग्रेनेड से निजरत को नॉक किया, लेकिन सामने 3 प्लेयर्स मौजूद हैं। आईसी IQ इज फिनिश्ड एंड सो इज फलक। आईसी कैन नॉट मूव फर्दर। इट इज गोइंग टू बी फ्लैश ही वो टीम बन सकती है जो कि आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। एंड व्हाट अ रन बाय फ्लैश, WBG, ऑल्टर ईगो। फ्लैश के प्लेयर्स को अब गीके से फाइट लेनी है जी। गीके के प्लेयर सामने मौजूद हैं। फ्लैश वर्सेस गीके होता हुआ दिखाई देगा।
फ्लैश के विन उनको स्पॉट कर लिया जाता है. 5 पॉइंट्स दूर है फ्लैश सिर्फ 5 पॉइंट्स दूर. फ्लैश आई वुड से ये 5 पॉइंट्स उनको हासिल करने हैं जैसे तैसे कर 2 पॉइंट्स उन्होंने एलिमिनेशंस की मद में हासिल किए हैं. व्हीकल्स बहुत बुरे तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, बट फ्लैश जहाँ पर रुकी है ये वैली अच्छी नहीं है, आसपास रिजेस ही रिजेस हैं एंड फ्लैश को नुकसान उठाना पड़ सकता है. जस्ट लुक एट INF, वो भी उसी नहज पर हैं जहाँ पर INF के आखिरी प्लेयर 1 पॉइंट अनफॉर्चुनेटली कंफर्म कर पाई INF इस मैच से अभी तक के लिए. अलायंस 75 पॉइंट्स पर है. 15 पॉइंट्स तकरीबन और चाहिए. 15 पॉइंट्स एंड अलायंस. लेकिन फ्लैश क्या कर रही है यार? इट्स नॉट फ्लैश, इट्स गीके. गीके क्या कर रही है? जहां कोई सामने आता है गीके उनके ऊपर नॉकआउट्स निकालती है. रैग्नारॉक को देखें, आउट इन द ओपन है, सामने अलायंस के 3 प्लेयर्स हैं, बट तीनों प्लेयर्स इतना बिजी हैं अपने कामों में, उनको पता ही नहीं चल रहा कि रैग्नारॉक कैन बी टेकन डाउन. और अभी रैग्नारॉक आगे बढ़े, फ्लैश के बाउस को गिराया गया, बाउस इज नॉक्ड एंड फिनिश्ड. और गीके जगह ही अच्छी नहीं थी. गीके सबसे उनकी क्वालिफिकेशन छीनती हुई नजर आ रही है. फ्लैश के आखिरी प्लेयर, और अब ऐसा लग रहा है कि फ्लैश भी क्वालिफाई नहीं करेगी. इट्स गोना बी WBG एंड अल्टर ईगो. Both the teams are gonna qualify. WBG 83 points पर है, 93 points, 89 by Flash. दो elimination points निकाले थे इस मैच में. अभी भी 5 points पीछे. मजीद कुछ survive किया गया. Placement points तो तब भी नहीं मिलने यार. I think Flash is also done and dusted. It is gonna be WBG and Flash is done. ये PUBG यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते. बहुत मुश्किल है यहाँ पर उनका इम्पॉसिबल है यहाँ पे सरवाइव करना उनका. जिस तरह की जगह है वो वैली ही इस तरह की थी. एतराफ में 2 बड़े रिजेस लग रहे हैं. एंड अब आप देखें गीक जब आगे आएगी तो फ्लैश का एलिमिनेशन पॉइंट वो कंफर्म कर लेंगे. बट INF और फ्लैश क्या तरस आ रहा है यार देखकर. PUBG जैसे हर जगह पर देख रहे हैं कि बस मैं एलिमिनेट ना हो जाऊं. वहीं पर INF चंद एक प्लेसमेंट पॉइंट्स की बात थी, चंद एक पॉइंट्स की बात थी, बट वो चंद एक पॉइंट्स निकालना है इस मैच में इतना मुश्किल ख़वातीन व हज़रात. दिस इज़ ग्लोबल चैम्पियनशिप. ये चैम्पियंस का अरीना है और चैम्पियंस कहा जाता है कि हार नहीं मानते, चाह रहे हों लेकिन हार नहीं मानते. वहीं पर फ्लैश के PUBG ड्रॉप के बिल्कुल कवर में है. हाईलाइट भी हो रहा है ड्रॉप, ऑब्वियसली वो जो फ्लेयर एक निकल रहा है उसमें से. बट PUBG जैसे तैसे कर अभी फ़िलहाल के लिए उन्हें स्पॉट नहीं किया गया. गी के जिस भी लम्हे आगे बढ़े उन्हें देख लिया जाएगा. एंड वहीं पर 9G ग्लोबेंट INF के प्लेयर को अभी तक नहीं कोई भी देख पाया. आर्क रेड के हार्ड बॉय उनको पकड़ा जाता है. एंड 9G ग्लोबेंट क्या आज के दिन का तीसरा चिकन डिनर कंफर्म कर पाएंगे? 4 खिलाड़ी हैं उनके पास अभी फ़िलहाल के लिए और किसी टीम के पास 4 प्लेयर्स नहीं हैं. लेकिन अलायंस ऑन द अदर साइड, उनकी बात की जाए लूप्स के ऊपर फाइनली वो क्योस बर्पा किया जाता है. अलायंस वर्सेस गीके फाइट बनेगी जहां पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे क्योंकि प्लेयर्स, लेकिन पीछे से 9G ग्लोबेंट आ जाती है. उनकी जानिब से थर्ड पार्टी की जाएगी. दोनों टीमों का सर्वाइव करना यहां इम्पॉसिबल दिखाई देगा. फ्लैश के वो प्लेयर अभी भी जिंदा समहाउ उस ड्रॉप के पीछे मौजूद हैं. 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स मजीद निकाले. वेट अ सेकंड, ओनली 2 पॉइंट्स अवे. PUBG पूरी कोशिश कर रहे हैं. 2 पॉइंट्स मजीद निकाल लिए गए और अगर वो अलायंस पे ही निकलते हैं तो क्या ही बात हो जाएगी. फ्लैश क्वालिफाई कर सकती है. वो एक इकलौता प्लेयर टीम को लेकर जा सकता है ग्रैंड फाइनल्स के अंदर. पहली बार ये टीम ग्लोबल चैंपियनशिप आती है और पहली बार ही ये टीम अगर फाइनल्स में क्वालिफाई कर जाए तो क्या ही कमाल हो जाएगा. अलायंस के प्लेयर जैसे ही आगे आएंगे उनको लॉबी का रास्ता दिखाया जाएगा. एक और टीम एलिमिनेट हुई. इनफैक्ट वेट अ सेकंड, फ्लैश इज qualified because वो एक placement point उनको मिलेगा. 2 placement points in fact and they have qualified. PUBG, oh my god, what a play. No, वो मरने के बाद ऐड होते हैं, वो मरने के बाद ऐड होते हैं. वाओ, क्या खेल रही है टीम फ्लैश, क्या खेल रहे हैं PUBG. अकेले प्लेयर अपनी टीम को यहां तक लेकर आए हैं.
इमेजिन अगर यहाँ से ये प्लेयर टॉप 2 में आ गया किसी तरह से, WBG के साथ जो होगा माय गॉड, वो तो दिल दहलाएगा उनका। लेकिन फ्लैश के टॉप जी आज तो पार्टी होगी। लेकिन एक बार फिर से रामसेस को स्पॉट किया। There you go. He has qualified. There you go. He has qualified. Wow. One man show. This is what we call one man show. One man show. लेकिन INF के डिएगो उनको भी he is gone और 9G Globant एक प्लेयर को गिराया उन्होंने। एंड INF so close yet so far बाहर हो चुके हैं। लेकिन फ्लैश इट इज, अगर एलिमिनेट हो भी जाएं अब इट डज नॉट मैटर। लेकिन फ्लैश के टॉप जी को खुद नहीं पता कि उन्होंने क्वालिफिकेशन अभी तक बना ली है अपनी, एक या नहीं बनाई, बिकॉज ही हैज़ नो आइडिया कि WBG या ऊपर रहती टीमें क्या कर गई हैं। वो अपनी कोशिश कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। उनको अभी तक नहीं पता कि उनको वो जा चुके हैं ग्रैंड फाइनल्स में। बट खैर, लूप्स ऑन द अदर हैंड 9G Globant तीसरा चिकन डिनर आज के दिन का कंफर्म करने वाली है, शायद अगर लूप्स के प्लेयर से बच जाएं तो। लेकिन 9G के कोल गोट गिरा लेंगे लूप्स के प्लेयर को। एंड आखिरी खिलाड़ी राफिन्हा बाकी रह चुके हैं, आउट इन द ओपन है, ज्यादा कुछ कवर नहीं है। एंड लीजिए लूप्स भी बाहर हो चुकी है एंड 9G Globant ऑफिशियली आपको चिकन डिनर उठाती दिखाई देगी। ड्रॉप के पीछे सबकी नजरों के सामने एक खिलाड़ी था, आसपास टीमें ही टीमें थीं। ये क्या ही कहानी लिखी गई है टॉप जी की तरफ से। कोई देख ही ना पाया, कोई एलिमिनेट कर ही ना पाया। क्या स्टोरी लाइन है PMGC की। एलिमिनेट होंगे लेकिन सीना तान कर एलिमिनेट होंगे। अपनी टीम को फाइनल्स में लेकर जा चुके हैं एंड दिस इज टीम फ्लैश। लेकिन 9G Globant तीसरा चिकन डिनर, ग्लोबल चैंपियनशिप, 14 टीमें, 14 टीमों का सफर खत्म होता है ख़वातीन हज़रात इस एक मैच के बाद। हिस्टोरिक प्ले बाय टॉप जी, क्या ज़बरदस्त खेला गया, क्या शानदार खेला गया। इंटेंट जब आपका इतना क्लियर हो, इतना ऑब्वियस हो, तो फिर क्वालिफिकेशन आपसे दूर नहीं हो सकती। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है उस हार्ड वर्क की, उस ट्रिगर डिसिप्लिन की, उस परफॉर्मेंस की, जो कि पूरी टीम तो दिखा रही थी। लेकिन एक टाइम पर जब एक प्लेयर पर रिलाई करना पड़ा तो उस एक प्लेयर ने अपनी रिलायंस को बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ा। 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स आई बिलीव इनके पास मौजूद थे अकेले प्लेयर के पास। एंड वो भी बोल रहे हैं कि आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। They're excited. They still don't know. खबर नहीं आई अभी तक। Yes. They still don't. खबर आ चुकी है कि you're qualified. You've qualified. And टॉप जी, ये वो प्लेयर हैं भाई, ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने अपनी टीम को सिंगल हैंडेडली लास्ट मैच में क्वालिफिकेशन का रास्ता दिखाया। ऑल्टर ईगो। WBG को देखना है मैंने। WBG, where are they? कल के दिन 39 पॉइंट्स पे फिनिश किया। इनफैक्ट वेट अ सेकंड, 46 पॉइंट्स पे फिनिश किया। आज के दिन स्टार्ट में 73 पॉइंट्स से पहुंचे। 46 को 2 टाइम्स अगर हम करते 92 बन जाता। सिंपल मैथ्स। और 92 पॉइंट्स पर WBG मौजूद थी इस मैच से पहले, तब भी क्वालिफिकेशन मुश्किल थी। और अभी इट्स चीयर फॉर 9G जिन्होंने जाने से पहले 2 चिकन्स निकाले, तीसरा थ्रो किया। किसने? 9G एक चिकन थ्रो करते हुए दिखाई दिए थे एंगल में। हाँ, ये तीसरा किया ना, 4 हो सकते थे। नो, 2 आप ये कह रहे हैं 3 हो सकते थे। 9G, हाँ, एक उन्होंने चिकन डिनर थ्रो किया था, हाँ, स्टार्टिंग में। यस, करेक्ट। वो जहाँ पर हवाई एलिमिनेशन, हवाई हमले, लेकिन लेकिन जी 9G Globant क्या शानदार खेला गया यार आज के दिन। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो टीमें जो आखिरी दिन पर 15-16 पर हों। उनके पास क्या ही मोटिवेशन होती होगी यार, मतलब क्या ही मोटिवेशन होती होगी। लेकिन स्टिल अगर आप इस तरह से खेलें, इट शोज़ कि हाउ कितना ज़र्फ है आपका कि आप हार नहीं मानना चाहते। हार रहे हैं लेकिन हार नहीं मानना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है।
बहुत बहुत हौसला चाहिए होता है इस तरह का खेल, इस तरह पूरे दिन को कंसिस्टेंट खेलने के लिए, जिस टीम के पास मोमेंटम ही ना हो। कोलगोट 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स, 995 का डैमेज, 268 के डैमेज के साथ। रईस हमें 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स करते दिखाई दिए। रीमेक्स हमें 176 और 1 एलिमिनेशन पॉइंट के साथ इस मैच में कंट्रीब्यूशन करते दिखाई दिए। जी हाँ, ये कुछ स्टार्ट्स हमारे सामने हैं 9GG के, जिन्होंने आज के दिन चिकन डिनर्स भी अच्छे निकाले, परफॉर्मेंस भी काफ़ी शानदार रही। फिनिश कौन से नंबर पे किया ये भी देखना है। और इस मैच की थोड़ी सी बात करें, नो डाउट वो जो फाइट्स थी, वो जो थर्ड पार्टीज़ थी, वो ले डूबी आज हमें पूरी तरह से। हर मैच में एक फ़ाइट फिनिश करने से पहले जो थर्ड पार्टी होती हुई दिखाई दी थी, वही चीज़ जो है वो कमर तोड़ती हुई नजर आई। तो यहाँ थर्ड पार्टीज़ ख़ास तौर के ऊपर जिस मैच में फ़ाइट लेने की कोशिश की, जब भी उस पहले मैच के अलावा जब भी आईसी ने फ़ाइट लेने की कोशिश की है, तो आईसी को थर्ड पार्टी किया गया है। चलें, आई मीन कोई नहीं, इट्स ऑल राइट। अब लेट्स मूव ऑन। अगले साल का दोबारा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जहाँ आईसी ने अच्छा खेला, आर्कवेड को दाद देना पड़ेगी। जिस तरह से आर्कवेड ने WPG को एलिमिनेट किया 2v4 सिचुएशन के अंदर, आर्कवेड की जानिब से भी कुछ ऐसी कमाल की फाइट्स दिखाई दी। पिछले ग्रुप स्टेज के अंदर इट वाज INF जिन्होंने 2v4 निकाला था WPG के ऊपर, और दिस टाइम अराउंड इट वाज आर्कवेड। 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि बिल्कुल एज पे आकर लटकती रह गई WPG। इस बार वो भी बाहर हो गए अनफॉर्चुनेटली। यार WPG के साथ बहुत बुरा हुआ है। दूसरी बात, WPG बहुत बुरा हुआ है यार उनके साथ। 1 पॉइंट से वो पिछले स्टेज में रह गए, ग्रुप रेड में क्वालिफाई करने से, ग्रैंड फाइनल से 1 पॉइंट से यहाँ पर रह गए। भाई हमारा दुख तो है, चलो ठीक है, WPG के जूतों में जाकर, शूज में रहकर देखो कि भाई उन पर क्या गुजर रही होगी। उनकी जगह पर अगर हम रहे हैं तो 1 पॉइंट से दूसरी दफा, पहला दुख तो उससे गुजर कर आए, फिर वही बस ये PMGC है ख़वातीन और हज़रात, जहाँ पर ये खुशियाँ भी देता है, वहाँ पर उससे कहीं ज़्यादा सेटबैक्स आते हैं। एंड यही इस स्टेज को इतना ख़ास बनाता है, क्योंकि ये है ही इतना कॉम्पिटिटिव। वर्ल्ड कप तो चलें 6 दिन का होता है, मैक्सिमम 7 दिन का होगा, 8 का हो जाएगा। असल गेम PMGC उठाता है। जी हाँ, लेकिन पॉइंट्स टेबल हमारे सामने, मैच रैंकिंग इनफैक्ट हमारे सामने आ चुकी है। इस मैच में आईसी ने सिर्फ 4 पॉइंट्स निकाले, 1 मैच 27 पॉइंट्स, एंड बाकी जो 5 मैचेस थे उसमें सिर्फ 10 पॉइंट्स निकाले गए। टोटल 37 पॉइंट्स निकाले गए आज के दिन। नॉट अ गुड नंबर, but it is what it is. Falcons with 4 total points, Board with 2, WBC with 2, Wolves with 2. कंसिस्टेंसी का रोना रो कर इसीलिए चीखा जाता है हर टीम की जानिब से, हर प्लेयर की जानिब से, कि वो एक मैच के 6-6, 7-7 पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं। आप ये देखें कि WBC अगर यहाँ से क्वालिफाई कर जाती, नो डाउट लास्ट मैच में उनके साथ मिसहैप हुआ, लेकिन अगर वो क्वालिफाई कर जाते, वो विदाउट अ चिकन डिनर क्वालिफाई करते, विदाउट अ चिकन डिनर, all because they were consistent. They were not getting those 10 points, but elimination numbers हर मैच में निकाल कर जाना, वो उनको अलग रख रहे थे। But moving onwards, let's talk about our world rankings, जहाँ पर Flash on 99 points ना सिर्फ क्वालिफाई किया, बल्कि फर्स्ट स्पॉट से क्वालिफाई किया। आदि फर्स्ट स्पॉट से क्वालिफाई किया, तीसरे से सीधा पहले पर गए। क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, क्वालिफाई भी किया, बल्कि पहले नंबर से क्वालिफाई किया फ्लैश ने। ऑल्टर ईगो एरिस बहुत ज़्यादा दाद देंगे, 93 पॉइंट्स पर ही क्वालिफिकेशन यकीनी बनाई। वो जो 2 चिकन डिनर्स हैं उनकी वजह से सेकंड स्पॉट पर आ पाए। WBG अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा अनलकी रहे हैं, 1 चिकन डिनर से, मतलब 1 पॉइंट से आपके लिए रह गए हैं। INF 91 पॉइंट्स पर, 83 पॉइंट्स के ऊपर शहजादे अपने। कोई नहीं, आई वुड से कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।
कोशिश की गई, मेहनत की गई, स्टिल दे आर वन ऑफ द टॉप टीम्स. इस चीज़ को नहीं भूलना ख़वातीन और हज़रात. बाकी चीज़ें बाद में डीप डाइव करेंगे. लेकिन 9Z Globant hash 15 to hash 6. No better storyline than this. hash 15 से शुरू कल के दिन 10 पॉइंट्स भी ज्यादा ले लेते तो आज ये जैसे क्वालिफाई करते, आई वुड से फाइनल्स के अंदर भी अच्छा खेल पाते. लेकिन सुख फ्रॉम टीम वीवो गेमिंग 1 पॉइंट से रह गए. इतना कंसिस्टेंट खेला थ्रू आउट दीज मैचेस. आज के पूरे दिन में ये पहले दूसरे पर ही रहे, नीचे आए ही नहीं. लेकिन नीचे आए तो आए, उस आखिरी मैच के बाद आ गए. आज के दिन के MVP बनेंगे सुख. 2.8 एवरेज नॉकआउट्स, 2.5 एवरेज एलिमिनेशंस, 439 का डैमेज दिया गया, 19 से ज्यादा मिनट का सर्वाइवल टाइम, 19 मिनट और 25 सेकंड्स का. वहीं पर लास्ट चांस के MVP भी बनते हैं सुखी. 2.0 का एवरेज एलिमिनेशंस, 346 एवरेज डैमेज और 20 से ज्यादा मिनट का सर्वाइवल टाइम. 2 के ही नॉकआउट्स हैं एंड उतने ही एवरेज एलिमिनेशंस हैं. इसका ये मतलब है कि जितने भी नॉकआउट्स हुए हैं वो सारे के सारे ज़्यादातर कंफर्म कन्वर्ट किए गए हैं एलिमिनेशन पॉइंट्स में. ये भी बहुत अपने आप में बड़ी बात रहती है. लेकिन दिस इज सुख फॉर यू. द गोट IGL भी इनको कहा जाता है. और रोटेशंस हम सब जानते हैं कि WBG से बेहतर और कोई कर नहीं पाया. कल के दिन IQ ने जिस तरह से रोटेशंस करवाई थी, शानदार. लेकिन ख़वातीनो हज़रात, 16 फाइनलिस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं. दी गॉन्टलेट से क्वालिफिकेशन यकीनी बनाने वाले R8 Esports सऊदी अरेबिया से, टीम TT, टीम कारा Esports की बात की जाए तुर्की से, मैड बुल्स, अल्फा 7 फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियंस भी रह चुके हैं. ULF DX Xaviers ग्रुप स्टेजेस से, अल्फा गेमिंग सेंट्रल साउथ एशिया से, D+ किया, गोट, DRX, रेगनम कार्या और E अरीना अपनी जगह बनाते हैं. लास्ट चांस से फ्लैश और ऑल्टर ईगो. वहीं पर होस्ट कंट्री इनवाइट के तौर के ऊपर टीम वैम्पायर्स Esports, फॉर्मर वर्ल्ड इन्विटेशनल 2 टाइम वर्ल्ड इन्विटेशनल चैंपियंस आपको जगह बनाते दिखाई देंगे होस्ट कंट्री इनवाइट के तौर पर. जी हाँ, बिल्कुल. ये कुछ हमारे सामने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हर चीज़ जो थी आदि ने सामने रख ली. कौन कौन सी टीम्स आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और बाकी सब टीमों को घर जाना पड़ेगा. सिर्फ 2 ही टीम्स हमें यहाँ से क्वालिफाई करती हुई दिखाई दी, फ्लैश एंड ऑल्टर ईगो. आज के दिन के डोमिनेटर्स की बात करें, एलिमिनेशन फीड में काफ़ी प्लेयर्स को हमने देखा था, लेकिन कोल्ड गोट वाज द प्लेयर जिन्होंने डोमिनेट किया. अभी जाएंगे सीधा इंटरव्यू की तरफ. विनर टीम्स का इंटरव्यू करता है. That is it. We have our grand final squads, the last 2 that are going to be joining the other squads. Alter Ego Aries from Indonesia and Team Flash from Vietnam. We're going to start with Rosemary because your squad ended up being tied with WBG, but thanks to your wins, that was the tiebreaker. Now, I'm going to switch it up because you were telling me something that I thought it was true, but you were able to confirm it for me. This is going to be your first PMGC Grand Finals. How does it feel to finally make it to the Grand Finals? Oke, ini adalah pertama kalinya kalian Alter Ego Ares lolos ke Grand Final PMGC. Bisa ceritain dikit nggak gimana perasaan kamu saat ini? Jujur kalau ditanya tentang perasaan kali ini sih jujur sangat senang banget karena di mana juga kita lolos dengan tiebreaker bisa dibilang kayak itu dikasih rezeki sama Tuhan yang sangat gila banget sih menurutku karena ya intinya dengan dedikasi kita yang sangat wow sih pasti hasilnya pasti bakal memuaskan lah buat kita lah gitu aja sih. So of course, if you ask me how I feel, I'm very, very happy. And even though like we qualified through a tiebreaker, but then I still think that the God give us such a blessing, like a blessing moment for us. And I think it's a fit for us to qualify to the grand final and performing at the grand final as well. I mean, and being able to overcome this stage, last chance, it's so tough, too, to be able to be in the top 2 out of all this amazing 16 squads. Now, knowing that you're going towards the grand finals, do you believe that your team has what it takes to lift that PMGC trophy? Oke, sekarang memandangkan kalian udah lolos ke grand final, apakah kalian ngerasa kalian itu punya semuanya untuk mengangkat trofi di grand final nanti?
Jujur kalau ditanya punya semuanya sih, gue yakin banget dengan tim gue yang ada, dengan player-player gue semua, gue yakin banget dengan mental kita yang sekarang udah teruji. Ya gue berharap kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan kita yakin banget kita bisa mendapatkan hasil yang inilah memuaskan lah buat kalian semua yang selalu support kita di belakang layar. Itu aja sih. Yeah, of course. I mean, I believe in my lineup. I believe in myself. Even though through all the hardship that we went through, I still believe that we have the opportunity to lift the trophy, and I will try to prove to everyone that keeps supporting us that we can lift the trophy at the grand final. And the improvements you guys have made has been impressive, and I'm hoping it's going to continue on towards the grand finals. Thank you so much, Rosemary. And now I'm standing here actually with Team Flash Tops. Tops, before I even ask you questions about the grand finals, I want to know what was going through your mind in those final moments, knowing that you needed to stay alive, knowing that you needed to clutch up for the squad. Chào Topsy, thì cái trận vừa rồi á, khi mà mình là người cuối cùng sống sót và mình biết là mình cần phải sinh tồn cũng như là cần phải có một sự bứt phá, thì không biết là lúc đó trong đầu của mình có những cái suy nghĩ như thế nào, cảm xúc như thế nào? Lúc đó trong đầu em cảm thấy rất là hồi hộp và lúc đó rất là áp lực và có phần hơi run, nhưng mà em lấy bình tĩnh bằng cách là em niệm Phật. Well, to be honest, at that moment I felt palpitated. I was very nervous and stressed, but I regained my composure by chanting. Oh, okay. Great composure, too. And the thing is that you have been in this moment before. During group stages, you were almost within the top 3. Did that help you experiencing that in group stages here, especially in Last Chance? Trong kể cả phòng bảng thì các bạn cũng đã từng trải qua những tình huống như vậy trước đây rồi, là mình cũng kiểu nằm trong top 3 sinh tồn cuối cùng như vậy. Thì không biết là những cái trải nghiệm đó có giúp ích cho bạn trong cái trận đấu vừa rồi hay không? Sau đợt vòng bảng thì team em cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn và để khắc phục lại trong vòng Last Chance này và để có kết quả như hôm nay. Yes, we got a lot of lessons and we learned from our experience in the group stage. Those all helped us in this Last Chance. Not bad for a team that's making their first appearance at PMGC and now heading to the grand finals. And last but not least, for everybody currently watching in Vietnam, is there anything you want to tell them as you do finish Last Chance in first place? Bây giờ thì các bạn đã kết thúc vòng Last Chance và cũng nằm trong top đầu. Thì không biết là mình có lời nào muốn gửi tới những người xem ở Việt Nam hay không? Em xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ team em và đón xem giải đấu. Và mong mọi người sắp tới sẽ ủng hộ tất cả các team ở trên đấu trường thế giới lần này. Well, I want to say thank you so much for supporting and watching us so far, and please continue doing so for all of the Vietnamese teams in the international stage in the near future. Well, there's definitely some surprises out there in grand finals. And before I let you go, Rosemary, it's been a while since we've seen an Indonesian team being able to fully perform and actually win a championship internationally, going back to Bigatron with the Twins in Macrobo, and the rest goes on and on. Anything you want to tell the hopeful viewers from Indonesia right now, hoping that Indonesia lifts the trophy once again? Ada nggak sedikit kata-kata buat fans-fans yang di Indonesia yang membuatkan kamu bakal bilang kayak kamu bakal mengangkat trofi ini? Buat semua orang yang support kita di Indonesia, ya intinya kita bakal ngelakuin yang terbaik buat kalian. Kita juga bakal belajar dengan masalah-masalah yang kita dapat di dalam in-game, dan intinya kita bakalan ngelakuin yang terbaik lah. Intinya bakalan mencoba untuk bawa pulang pialanya untuk kembali ke Indonesia lagi. Yeah, of course. I mean, to the all Indonesian fans, I think we definitely gonna give our very best, and yeah, we're gonna learn from our mistake through the group stage, even though in the Last Chance, in order for us to bring back the trophy in Indonesia. I like the confidence. I like that you guys are already thinking about what you need to end up adjusting to. And I can't wait to see one thing you actually missed too. Indo Pride, because I know that's a big thing out there too. For everybody currently watching at home, make sure you tune in on the grand finals. We have our last 2 teams joining. 4 teams will go home. I mean, it is over. This is it for Last Chance. Let's see what will happen in the grand finals of the 2025 PMGC. जी हाँ ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक नहीं करेंगे. इट्स टाइम टू साइन ऑफ फ्रॉम PMGC.
Last chance. Stop the squad. I mean, do you think you just play a regular match and hope for the best? Or if you happen to realize that this team's there, you go for them? What do you think?
I don't know. You know what? Genuinely, it's down to every team what they want to try and execute this game. Could you try and target the top teams? Yes, but I think they're just going to try and play their own game and try and just get a good finish here. Make it top 3 is going to be very important for these squads. So I'm looking at so many teams, just don't take early skirmishes. Avoid it like the plague. Keep the team alive until circle 5, 6, 7, and maybe you have a chance to make that redemption arc and go into the top 2. You're right. It's just too close. Too close at this point, guys. We're going into the desert here. Last 2 matches. Who could possibly get one of these last 2 spots? Casters, take it away. Oh, it's so close. It is just so close. Right down to the wire for all of these teams. Their feet stumbling over the rocks of Erangel, over, around the prison, into the chaotic fields to the west of Pachinki. And now we find ourselves in Miramar. We always knew it was going to be here, but the standings, they are certainly one for the ages. The top 2 spots at this point blank really could be anyone. Well, not anyone. There's top performers here, Narvalo and Redox from Falcons. Obviously, the Falcons having some of their best performances here on Miramar so far. Very controlling positions they've had. But yeah, very close. Very, very close towards the top of the table. I don't think we're going to have a clear winner at this round. Stop the squad. I mean, do you think you just play a regular match and hope for the best? Or if you happen to realize that this team's there, you go for them? What do you think? Need anything? Welcome. You can do it. Need anything? Thank you. 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 Thank you.
Waalaikumsalam, Rafiq bhai, udah tukang game di sini makin sabar tahu lagi di kita berhasil pakai insyaallah.